Question number 101, Sri Kalanidhi Veerasamy. माननीय मंत्री जी. Sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable member. Sir, the country has a problem where there is unemployment and huge amount of income disparities, sir. We talk about below poverty line families where the total income of a family is only around 30,000 rupees annually. And when we are talking about this, we are selling gas cylinders for 1,000 rupees, and even if you consider the 200 rupees subsidy which is being given, it's about 9,600 rupees, sir. For a family which is earning 30,000 rupees, we talk about the below poverty line families, you are claiming that we are giving gas for so many crores of people. I would like to know, like income tax. Income tax, you have slabs where you say that up to 7 lakhs, we are not going to charge you any income tax. Honorable member, on Sir, question. Sir, question is coming, sir. So I am asking, can you consider giving subsidy for LPG at a much better rate for these BPL families, where it can be given at probably 200 rupees per cylinder for the BPL families, and maybe at a higher rate for higher income Okay, groups. Mantri ji. Thank you. Honorable Speaker, sir, I want to, with your permission, draw the attention of the honorable member to the fact that it was precisely because the capacity to pay for families which are termed as BPL or below poverty line that the Ujjwala scheme was introduced. The Ujjwala scheme, sir, when it was introduced, initially it had 8 crore connections, and these 8 crore connections were provided a good 7 or 8 months before the time. We reissued another 1 crore 60 lakh cylinders under the Ujjwala scheme, where the lady member of the household is presented free of cost a cooking top and a cylinder. Now, during the course of the pandemic, sir, when economic activity had come to a grinding halt at one stage, and then it was slow, and the families who are in the below poverty line categorization were the most severely affected, the government gave 3 cylinders free of cost to those BPL families. Sir, insofar as prices are concerned, I should like to submit through you, sir, to the House, that we import 60% or thereabouts, perhaps even more sometimes, of our requirements. We have to import them. The import price, sir, is linked to what is called the Saudi CP, or the Saudi contract price. And the interesting thing is that the Saudi contract price during the last 2 years or so, if we have to use this as a reference period, sir, it has gone up from 250 per metric tons per $250 per metric ton to something like $900 per metric ton. Today also, I think it is around $751 per metric ton. Now, if your import bill is determined by the international price, then it is very interesting to analyze what the government did. Because the government is sensitive to the requirements, sir, of the consuming population, particularly, as the honorable member says, to the most vulnerable, we did not allow the cost of domestic LPG to increase. Saudi contract price, sir, went up 333%, and yet the price increase was very small for the domestic thing. In May 2022, precisely as the honorable member states, we introduced a 200... माननीय मंत्री जी, संक्षिप्त में. Sir, I would like to complete this. आपको इजाजत नहीं दी, आप इनका जवाब मत दिया करें. 200 एक बात सुन लें, प्लीज बैठें, प्लीज बैठे मंत्री. कोई भी माननीय मंत्रीगण नीचे बैठे कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो आप उसका जवाब मत दिया करें. ये लाइन आपको कहीं दे दिया, लेकिन आप उन पर बहस करना चाहते हैं. उनसे तो
सर बहस करना मैं कौन होता हूं, बहस से इतने विद्वान हैं, हाँ, लेकिन आप चर्चा मत अनुभवी करो। हैं, तो मैं कौन होता हूं? मैं जिनको अलाउ करूं उनका जवाब दो आप। Sir, I want to conclude this, that at the end of the day, sir, at a time when the Honorable Prime Minister was providing 3 free meals, dry rations, to a very large segment of our population, even at that stage, we did not allow the price of domestic LPG to go up. Now, at the end of the day, that 200 rupees subsidy, what is a subsidy? It is taxpayers' money. And as the Honorable Member says, the ones who are most vulnerable, we are always ready. Left to this House and the Honorable Prime Minister, it would be ideal if the international or the Saudi contract price could come down from 750 further down. It would enable domestic LPG to be sold at even more economical rates. So I wish to submit this in response to what the Honorable MP has said, and I always stand ready to be able to, I would also be able to provide further details to all this. Sir. Thank you, sir. Sir, I was only trying to reiterate that 33% of a family's income goes towards gas is probably not acceptable and how it can be alleviated. My next question is, what is the status of your investment in Mozambique, sir, where there is a huge project which is taken by Total and there are some unrests over there, and if that happens, probably gas can be made a lot more cheaper in India. So I would like to know what is the status of the project which is happening in Mozambique. Sir, I want to thank the Honorable Member. It is my understanding that at least the context that I have set out and the international situation. Sir, as part of the many initiatives which have been taken during the last several years, import of gas, acquisition of assets outside, increasing domestic production of gas. Sir, I'd like to inform the Honorable Member through you, sir, that last year our domestic production went up by 18%. This year also it's going up 18%. But for an economy which is thriving, where the rate of growth is 6.5% and 7%, where our growth rate, sir, is 3 times the global average. So we have a situation, the more demand for energy is arising on a daily basis. Insofar as the investment in Mozambique is concerned, sir, the Honorable Member has referred to unrest. Sir, there is an issue there. We are in partnership with an international group of companies. He mentioned one of them. And there are local conditions which are of, I would say, I would perhaps call it unrest is too mild a term, but there are issues of dealing with a form of insurgency there. We are in touch with these people, and the project is under what is called force majeure. And the $6 billion investment by Indian companies, we are very confident that due to the negotiations we are having both with government parties and the others, people taking on responsibility, we will find a way and to navigate through this problem so that gas not only from Mozambique but from several other sources where we are getting gas from. And at the end of the day, the international price is determined by a variety of factors. And, you know, one of the analysis I read, sir, was in a few years' time, this will be all a thing of the past because there will be so much gas available. But we have to navigate the next 2 or 3 years through the kind of global situation as it exists today and as it is evolving. Thank you, sir. Srimati Supriya Sule. Sir, I would just like to ask the Honourable Minister, I appreciate you saying that for Atmanirbhar Bharat in 9 years you've managed to increase, but you're still at 60%. So from where did you start to bring it to this 20%, which you said you increased it by 16 and 16? So the domestic, if you could clarify. And my second limit, it's a question is, in the international process, what you mentioned, we've had a slight conflict with our various relationships because of the amount of oil and gas that we're getting from Russia. So that was a big benefit, and that's what came in the media. So why is that benefit of the oil cost not given to the consumer? So if you had made that agreement with Russia, which has come in the newspapers, and we have strained our other relations worldwide, including with America. So how does this balance work, and why is the common man not getting the cylinder cheaper if you think you've done such a good intervention? Honorable Speaker, sir, I think I should start by saying
that precisely because the government wants to insulate our domestic consumer from the volatility which results on account of the international prices, we took a number of steps. First of all, if you look at the scale, in 2014, sir, we had 14 crore connections, gas connections. That has risen to 31 crore or more than that. Today, apart from the 31 crore connections, several other things have happened. Our gas pipeline, which was at something like 14,000 kilometers in 2014, we are taking it to 33,500 kilometers. That is a target. We are already at 23,500 kilometers. Our domestic production, I mentioned, has gone up 18% last year and 18% this year. But we still have to, after that increase in production, import 60%. Now the issue, sir, here is oil marketing companies have not increased the price. They took a massive loss, huge losses on account of the fact that they were not able to pass through onto the consumer the international price at which they were importing. So they had 28,000 crores lost, for which the government compensated them for 22,000 crores. Equally, insofar as petrol and diesel prices are concerned, sir, on two occasions, thank you for giving me this opportunity. In November 21 and again in May 22, मैंने गीता विश्वनाथन का अनाउंस कर दिया, आप बैठ जाइए. गीता विश्वनाथन जी. Thank you, sir. I convey my thanks to Honorable Minister for more and more connections given to under Ujjwala scheme, sir. Thank you. But I would like to know from the Honorable Minister, it is estimated that rural households with LPG connections are spending 6.7% of their income on fuel, which was 40% than the amount they were paying. Honorable member, short mein. Shifting to LPG, thereby forcing them to make unfair choices about their basic standards of life. I would like to know from the Honorable Minister. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, अपना क्वेश्चन शॉर्ट में पूछो, नहीं तो जितना लंबा क्वेश्चन पूछोगे माननीय मंत्री जी उतना डबल जवाब देंगे. I must seek, sir, I'm happy to provide a shorter answer, provided to know what the question is. Sir, insofar as rural household spending is concerned, sir, I again reiterate, the government has taken a number of steps and very effective to insulate the consumer by bringing the price of petrol and diesel. They have not gone up since 6th April last year. Throughout the world, the increases are astronomical. In India, petrol and diesel prices in the OMC pumps have not gone up since 6th April of 2022. I think this point, sir, needs to be appreciated. Equally for gas, we have not allowed the increase in the Saudi contract price to be reflected in the domestic price. Sir, it is so easy to get excited and talk about things. The ground situation is India stands out as a shining example where the consumer has not had to face the increase in the global volatility and price increases. As I said, on 6th April 2022, petrol and diesel prices have not gone up in India, whereas they have shot up. You only need to look at what is happening in our neighboring countries. In one country, after 8 o'clock, you can't switch on the electricity because there is no energy. In another country, equally for gas, if the international price comes down, we are still willing, and if we need to look at the issues, equally, let me say, those who are recipients of or beneficiaries of Ujjwala, their consumption has gone up. I occasionally hear statements saying people don't take benefits. Average under Ujjwala, sir, is 3.68 cylinders in a thing. So think it has gone up very fast. And even those who earlier were not taking refills are now taking more and more refills. क्वेश्चन नंबर 102 श्री मनोज तिवारी जी. धन्यवाद अध्यक्ष जी. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा
उत्पादित खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं। क्वेश्चन नंबर 102। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्पादित खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले 3 वर्षों में खाद्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, खादी विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जो खादी में सुधार किया गया है, हमारा अंडर खादी डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम के अंतर्गत खादी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 2013 में खादी मार्क की शुरुआत की गई थी। खादी मार्क न केवल खादी उत्पादों की वास्तविकता की गारंटी देता है, बल्कि खादी को ऐसे ब्रांड के रूप में बढ़ावा देता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संबंधी मूल्यों को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, खादी विकास योजना के विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक के अंतर्गत उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, कारीगरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने, मानव परिश्रम को कम करने, बाजार की मांग के अनुसार नए उत्पादों को विकसित करने तथा स्थानीय कच्चे माल का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए विभिन्न अनुसंधान विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है और मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मगर मेरा एक पूरा प्रश्न है, जैसे हमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच और विजन जो खादी के लिए है उस पर बहुत गर्व है अध्यक्ष जी, और हमें पता है कि इसी के कारण आज युवाओं में खादी फैशन ट्रेंड कर रहा है। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें डेटा में मिला है कि इस समय निफ्ट के समान ही खादी भी फैशन वर्ल्ड की पसंद बन रही है अध्यक्ष जी, और खादी क्षेत्र के कामगारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित रहते हैं, जैसे युवाओं में खादी ट्रेंड हो वैसे ही। और मुझे एक अच्छी बात और आई है कि खादी ग्रामोद्योग केंद्र के जो अध्यक्ष हैं वो गांव-गांव प्रवास भी कर रहे हैं। पर मेरा प्रश्न है कि मंत्री जी बताएंगे कि जैसा वर्षों से जो गरीब कामगार हैं जो इस खादी को बनाने में सूत काटते हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, क्या उनका वेजेस बढ़ाने का कोई प्रावधान है, कोई योजना है, उसमें जानकारी चाहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से निफ्ट की जो बात की है उसके लिए गांधीनगर, बेंगलोर, कोलकाता और तेलंगाना में हब बनाए गए हैं, जिससे उनके कामों को ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके और नई नई फैब्रिक का उत्पादन किया जा सके। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार उच्च स्तरीय फैब्रिक कपड़ों के गुणवत्ता मानकों का प्रसार किया जा सके। विशेष रूप से हमारे जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि हमारे जो कारीगर हैं उनकी गुणवत्ता के लिए, उनकी सुधार के लिए क्या कुछ पैसा बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से जब वो कत्तन करते हैं तो उन्हें 7.5 रुपये दिया जाता है एक कत्तन पर, लेकिन इसे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, इसमें कुछ न कुछ पैसा बढ़ाया जाएगा। निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय, अध्यक्ष जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण खादी आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर रहा है। मेरा बड़ा साधारण सा सवाल है सर कि जो केवीआईसी है उसके जो बड़े बड़े शोरूम हैं वो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल, गोवा, और खादी ये रूरल एरियाज में रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। और जो 298 क्लस्टर हैं खादी के, उसमें 250 क्लस्टर वैसे हैं जो कि इसी वेस्टर्न इंडिया में मौजूद है सर। ईस्टर्न इंडिया इससे अछूता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से साधारण सा प्रश्न है कि वर्कसेट प्रोग्राम, मिशन सोलर चरखा, स्फूर्ति, वर्किंग कैपिटल, हनी मिशन और जो कंपटीशन आ रहा है दुनिया में खादी को प्राइवेट सेक्टर से जो आ रहा है या हैंडलूम सेक्टर से अलग हटकर जो मशीन मेड कपड़े पर आ रहा है, उसके बारे में ईस्टर्न इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो समस्याएं हैं जहां खादी की प्रेजेंस कम है, उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय,
सम्मानीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। खादी का विस्तार के बारे में माननीय पंतप्रधान जी का इस विभाग पर अच्छे तरह से ध्यान है। खादी का विस्तार होने के लिए काफी तरह की योजना है, आज तक शुरू हो गई है, उसका संदर्भ अभी अभी राज्य मंत्री ने दिया है। क्लस्टर के बारे में जो राज्य में जिस इलाके में क्लस्टर अभी तक पहुंचे नहीं है वहां क्लस्टर देने के प्रयोजन सरकार कर रही है और रोजगार भी बढ़ाने का कोशिश है। खादी से रोजगार बढ़ाने की कोशिश करने के लिए ये प्रावधान किया जाता है और खादी में अलग अलग योजना, गुणवत्ता में सुधार, चरकों में जो सुधार, इसमें कौशल्य विकास के माध्यम से आधुनिक टेक्नोलॉजी के वजह से ये खादी में सुधारने का काम चालू है और ज्यादा रोजगार निर्माण करके उत्पादन खादी के कामगार को बढ़ाने की कोशिश चली है। श्रीमती कनिमोजी। Sir, we know that the khadi craftspeople and the weavers have been really affected during COVID. But in the minister's reply, I see that the financial assistance has been reduced drastically from 31.28 crores to 7.39 crores. Why is it you're supposed to be helping them and aiding them? You've been reducing that, and the Center of Excellence for Khadi has been set up in NIFs in Ahmedabad, Bangalore, Calcutta and Shillong. Why has Chennai been left out? Thank you. Very good question. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चेन्नई को छोड़ा नहीं गया है। जहां रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, वहां फंड वहां भेजा गया, उसकी नियुक्ति करते गई। 19-20 में 31 करोड़ दिए गए थे, 20-21 में 12 करोड़ दिए गए थे, 21-22 में 7 करोड़ दिए गए। एक जो अमाउंट कम होती गई है उसी समय बैंक के माध्यम से जो लोन मिले थे 150 करोड़, आज भी 145 करोड़ इस डिपार्टमेंट के बाद बैलेंस है। वो जहां भी आवश्यकता है खादी के लिए, खादी की टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए, खादी के चरखा चलाने वाले को वहां किसी चीज की आवश्यकता हो तो 145 करोड़ आज भी डिपार्टमेंट के पास है। श्री बी मेहताब जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. खादी एक इमोशनल कनेक्शन हमारे सबके साथ, सब परिवार के साथ है। हैंडस्पन खादी, यही उसकी खूबियत है और इसलिए मैं जानना चाहता हूं, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा मार्केटिंग। प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा जोर हम दे रहे हैं या मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं? आपका उत्तर आएगा, हम दोनों पर दे रहे हैं। पर अगर आप विस्तार से जाएं, प्रोडक्शन इस कई सालों में कहां बढ़ी है और किस चीजों पर बढ़ी है? खादी was supposed to be a poor men's dress और poor women's dress, पर हम इसको मिडिल क्लास और कंज्यूमर दुकान के जरिए इसको बिकने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है मार्केटिंग के हिसाब से और प्रोडक्शन के हिसाब से? जैसे निशिकांत जी ने कहा और कानीमोड़ी जी ने अभी कहा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट ना करें, पर रीजन वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही ढंग से हो तो ये ज्यादा महत्व रखेगा। इस सिलसिले में मैं सरकार की मनीषा जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, खादी तो आम आदमी या आम कामगार गरीबों के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए एक खादी के माध्यम से काम किया जाता है। खादी में सुधार हो
ज्यादा से ज्यादा कामगार को रोजगार मिले, अच्छा उत्पन्न मिले, इसमें कोशिश में सरकार काम कर रहा है। जहां आवश्यकता है इसमें काफी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हम सुधार कर रहे हैं। और जो बेस है खादी का, खादी शुरू किया जिस कारण से वो बेस शुरू रहे, क्वालिटी वाइज खादी अच्छा निर्माण हुए, और मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं कि उसे मार्केटिंग करेंगे। जो कामगार खादी बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, वो मार्केटिंग करने के बाद ही उनको पैसा आ जाएगा। तो हमारा ध्यान खादी में रोजगार देना है, कामगारों को पर कैपिटा इनकम में किस तरह से सुधार हो, यह हमारा सरकार का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 103 is मोहन भाई कुंडारिया। माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। आभार व्यक्त करता हूं। खास करके राजकोट स्मार्ट सिटी में 71 प्रोजेक्ट परियोजना में स्टार्ट किया था, उसमें से 33 परियोजना पूर्ण हुई है। 38 परियोजना का काम चालू है। सरकार की 2017 से 2023 तक 5 वर्ष की परियोजना था। वो जो प्रोजेक्ट 38 चालू से, उसमें समय मर्यादा बढ़ाने के लिए सरकार कोई सोच रहा है क्या? Honorable Speaker, sir, I want to thank the honorable member for raising this question on the स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन राजकोट। और जैसे माननीय सांसद ने कहा, यहाँ पे राजकोट में टोटल 71 प्रोजेक्ट हैं 2161 करोड़ के कॉस्ट के लिए। इसमें 33 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं 803 करोड़ के, और 38 प्रोजेक्ट जो हैं 1355 करीब करोड़ के, विच इज वर्क इन प्रोग्रेस। सर, अभी ये जो योजना है इसमें फंडिंग जो है जून 2023 तक की हमने प्रोविजनिंग की है। और जिस तरीके से राजकोट में काम हो रहा है, माय असेसमेंट सर इज के राजकोट इज वन ऑफ द मोर सक्सेसफुल अमंग्स द सक्सेसफुल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। और हमारा जो सिस्टम है, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, तो हम अगली सेगमेंट के लिए भी प्रोविजनिंग और जो हुई है उसमें पैसा रिलीज कर देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब से लेके जून तक जो भी हमारे पास समय है उसमें हम इनकरेज करेंगे राजकोट की स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल को। और जो भी ओवरसाइट हो रही है, हम स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें ओवरसाइट करती है। जो 6 उनकी स्मार्ट सिटीज हैं गुजरात में, हम केंद्र सरकार से भी करते हैं। और हमें विश्वास है कि काम समय से पूरा हो जाएगा, और इसके लिए हम उनको इनकरेज करते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में स्मार्ट सिटी में शेयर को चयन किया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में गुजरात में नया कितना शहर में वो प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा? देखिए सर, केंद्रीय सरकार की तरफ से जो फंडिंग है स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स के लिए, वो है टोटल हमारी तरफ से 500 करोड़, और 500 करोड़ उसमें से राज्य सरकार की तरफ से आना है। और बाकी जो पैसा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और बाकी सर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड्स रेडी टू कोऑपरेट इन फॉर ऑल द 100 स्मार्ट सिटीज। सब जगह इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन गए हैं। अगर कुछ और भी जरूरत हो, पर अभी तक जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है सर, वो अभी सिर्फ इन 100 के लिए है। और अभी अगर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से कुछ सिटीज को स्मार्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे कई सरकारों ने किया है, राज्य सरकारों ने, तो हम उसको इनकरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 भी क्लब किया जाता है। माननीय मंत्री जी 112 क्लब कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन है। श्री अर्जुन मीणा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 112 बोलो। क्वेश्चन नंबर 112। माननीय मंत्री जी। सर, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तृत से देश में स्मार्ट सिटी के बारे में विस्तृत से उत्तर दिया है। मैं राजस्थान के उदयपुर स्मार्ट सिटी के बारे में लगभग 127 परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है और 1371 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 9 परियोजना का कार्य चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या मंत्री जी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आने जाने वाले लोगों के लिए जाम लगता है बार बार, उसको निजात पाने के लिए उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से कोट चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने की मंशा रखते हैं क्या? धन्यवाद। कोई मंत्री जी के पास कोई नक्शा थोड़ी लगा, एक एक रोड का बता देंगे भाई। आप तो जनरल क्वेश्चन पूछो ना, इस रोड से ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं उदयपुर की जो स्मार्ट सिटी है मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। नेशनल रैंकिंग में आज वो 5वें स्थान पे है एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। पर मैं with due modesty, I also want to say, sir, that Udaipur is one of the most beautiful cities. Or even before the smart city project commenced in June 2015, Udaipur already had a very heavy footfall of tourists visiting the many beautiful locations there. And I am personally, I've greatly benefited from these visits. Sir, जो smart city projects में individual projects take up किए जाते हैं, वो स्टेट की तरफ से आते हैं। और इस समय मैं समझता हूं कि जो उदयपुर में आप देखिए तो 127 प्रोजेक्ट्स, वर्क हैज बीन कंप्लीटेड 1372 करोड़। वर्क ऑर्डर स्टेज पे 9 प्रोजेक्ट्स हैं 257 करोड़। सिंस ओनली अ फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट फॉर दी प्रोजेक्ट्स टू बी कंप्लीटेड, मैं समझता हूं इस समय कोई नया प्रोजेक्ट उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए स्कोप कम है। बट राज्य सरकार के एफर्ट से, केंद्रीय सरकार से एफर्ट से, अगर जो माननीय द ऑनरेबल मेंबर मेंशन ट्रैफिक कंजेस्शन एंड ही हैड आस्क्ड फॉर एन एलिवेटेड रोडवे, दीज आर ऑल प्रोजेक्ट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड बाय द कंसर्न्ड एजेंसी अंडर डिफरेंट प्रोविजंस व्हिच आर अवेलेबल। सर, राज्य सरकार आपसे सलाह नहीं लेती, वो तो खुद ही चेंज कर देती है। शशि थरूर जी। Mr. Speaker. Speaker, I was looking at the Minister's response and I must say I'm concerned about the very uneven pace of implementation of the Smart Cities mission, given that there are only about 4 months left for the ultimate deadline of June 2023 for the 100 cities, sir. If I take one example or one pair of cities that were both selected in September of 2016, you take Varanasi on the one hand and you take Atal Nagar in Chhattisgarh. Varanasi, pretty much every program has been done, 98 out of 104 according to your website, whereas Atal Nagar, in fact, only 3.8% of the projects, that is 2 out of 53 are completed. So my question to the Honourable Minister is, first, how do you explain these discrepancies and the unevenness in the implementation of the smart city projects? Prime Minister. Secondly, how do you account for the delays? If there are some cities where there are major delays, there must be some common factors that your ministry has studied to understand why these projects are not getting complete. And finally, sir, how does Thiruvananthapuram fare in this league table of uneven implementation? Thank you, Mr. Speaker. You should be the Prime Minister. Sir, आप वरिष्ठ सदस्य, एजुकेशन का काम तो राज्य सरकार करेगी ना, तो सुपरविजन करेंगे। Sir, I have a very simple question. The honourable member knows, and I know the rest of us know, that when you read facts and figures and statistics, you have to be a little careful. Sometimes the time for a project under construction to be completed is very little. But till the completion certificate comes, it will be shown as work under progress. Sir, almost all 100 cities are doing fairly well. Some, due to the COVID period, there was a slowdown, or there were local factors, जैसे आपने सर हिंट किया from the chair, कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनका भी इसमें रोल होता है। सो अभी जो केरला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूं इस पे हमें ऑनरेबल मेंबर एंड आई कैन हैव अ स्पेशल सेमिनार along with other members to discuss it, but I don't think that it would be appropriate for me to give
share my assessment on why some things don't happen in state governments. It may not be in the spirit of the discussion we are having. There are also other factors, common factors, where oversight is effective, where the advisory committee for the projects are meeting. अब एक प्रश्न उठा था सर राजकोट की स्मार्ट सिटी के बारे. मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताने में कि उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है जिसमें ऑनरेबल एमपी इज ऑल्सो अ मेंबर, उनकी 16 मीटिंग्स हो चुकी हैं. हर एक क्वार्टर में उनकी मीटिंग होती है. तो जहां पे दी लोकल एमपीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टेक दिस थिंग, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस. जहां तक ये अनइवन प्रोग्रेस है, आई वुड रिक्वेस्ट कि जब हमारी आप वेबसाइट भी देखें तो उसमें वेबसाइट में भी देखें तो वेबसाइट भी देखें, वाराणसी वॉज डिक्लेयर्ड ए स्मार्ट सिटी in September 2016. Atal Nagar came in round 3 much later. So to compare something which is in round 1 to something which is in round 3 also requires what I call, and if I may have your permission, it's what is called a statistical hop, step and jump, which I think educated members and analysts should try and avoid indulging in. Adhir Ranjan ji, मेरा सवाल दूसरे सवाल पे है. मुझे दूसरे सवाल पे पूछना है सर. पूछे ना आप. नहीं, वो मंत्री नहीं. तो आप उठे क्यों थे? आपको अगर प्रश्न नहीं पूछना था तो आप उठे क्यों थे? सर इसलिए उठा था कि शशि थारूर जी जो सवाल पूछा था सर, ये डिस्क्रिपेंसी के बारे में उनका सवाल स्पष्ट था कि बेनारस वो विद्वान है, लेकिन our concerned minister is a well loquacious minister in the house. He knows how to deflect, and how to. Question number. स्मार्ट सिटी तो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 100 को अलाउ कर दूंगा क्या? 100 सिटी 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्मार्ट सिटी तो 100 को अलाउ कर दूंगा क्या? नो. 104 श्री बीबी पाटिल. बीबी पाटिल सर जस्ट स्मॉल क्वेश्चन. जवाब पटल पर रखा है. श्री दयानिधि मारन. Thank you, Speaker, sir. Sir, our minister is a very dynamic minister, and he has all the data in his hand. I just find fingertips. I just want to ask you, sir, you're doing this pilot project about 2 parts. The first part is this: how you ensure that when you lay these fibers, you don't expand the roads again, so that these fibers don't get affected? And is this fibers which are laying for along with the national highways, will it be exclusively for the national highway program, or will it also be leased out to other private operators, like internet ISPs and other service providers? So part B, since Bengaluru has been mentioned, and we have been making a severe request for you. So recently I had an opportunity to travel to Ranipet from Chennai. The roads are pathetic. So all the land has been given by the state government. The expansion work is all land section. But your contractors have gone to the court. For the last 4 years, sir, the Chennai-Bengaluru highway is in a mess. It takes nearly to cross, 100 kilometers. It takes 4.5 hours. It's in a very pathetic state. So I know you will come and tell me that because all the contractors have got to court. Sir, what is this process? How do you overcome it? So why should a common man, or why should the people of Tamil Nadu suffer? Because your contractors or your people are not able to ensure that these contractors fall in line. So please ensure that these projects are completed on time. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, basically the problem related with the Chennai-Bangalore Express Highway, I just got opportunity to visit on the site. The problem is not with my department. Here I need your cooperation for that. Aggregate is not available. Sometimes the permission given for 3 months, after 3 months again to get new permission is a difficult task. Then there is no permission for mining. Also there is a big problem. Then how we can make the roads? The problem is land acquisition is a problem. Environment, forest clearance is not there. Still, Bangalore side express highway is really, the progress is very good. But still as Tamil Nadu, we don't have land, we don't have clearances, then how the contractor are going to work for that? That is to be a big problem. I am really thankful for you.
that I need your cooperation. Particularly, I want to work for Tamil Nadu. We have a lot of projects. Many times I explain it to the Honorable Member of Parliament. And many times I have given my representation to Honorable Chief Minister also, that as far as without land, without environment clearance, how it is possible for us to construct the roads. So exactly, I'm with you. We want to complete this Chennai-Bangalore Express Highway. And actually, my target is to complete this project up to end of this December this year. This will take from Chennai to Bangalore 2 hours. And actually, at time I visited Bangalore to Mysore. The work is completed. In next month, Prime Minister is, we are talking with the PMO, taking date for that. And it will be only 1 hour from Bangalore to Mysore. I understand the importance of the road, and 100% we will try our level best to clear it. But also your cooperation will be there. It will be a great thing for me to complete the project. Regarding this Delhi-Mumbai Express Highway, regarding this is a Greenfield Express Highway. Yes, I am telling you that. We are working on that. About our mandate is only to construction of road. But now in many times, petroleum minister, they need land acquisition for making of gas pipeline, making of petrol and diesel, other things they need. They are making a lot of big projects. Then there is some of the optic fiber, the other departments are doing a lot of work. The idea is, experimentally for a pilot project, we are doing 2 projects. One is Delhi-Mumbai Expressway, Greenfield Expressway, and the other is Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor, that is Brownfield Expressway. We have already appointed the agency Andhra Pradesh Urban Infrastructure Asset Management Limited, appointed by our NHLML, that is the organization in our NHI. And now the planning is that the cost is very high because it comes in crores, 6 to 7 crore rupees per kilometer. The idea is we can make a duct where we can make a petroleum pipeline, we can make IT fiber line. Also there will be pipe, PVC pipe or the LDP pipe or HDP pipe for using for optic fiber cable. Then we can use electric cable also. And that can be easy because we don't need any land for that because already acquisition is there. We can save the money on that. So Prime Minister program on Gati Shakti, we have to create cooperation, coordination and communication between the stakeholders. On the basis of that we are doing. But now I am thankful for Honorable Member to asking me this question. Now we are framing the policy, whether it is possible to work on BOT. If the private people can invest the money in duct, and then we can give these services to the concerning department, it can be 100% whether it is possible or not. But because of today, when I was taking the briefing, we have taken a decision to formulate the policy on PPP mode. If it is not economically viable on PPP mode, we can make it in hybrid annuity mode. We will finance some subsidy for that. But this is the need of the hour. Because as far as the target of our government is concerned regarding the popularity of internet and other things, it is very important. And I feel that this is the time that our target is to make the optic fiber cable up to 50 lakh kilometers. So we need to connect villages also. And because of 5G also, there is a great importance for that. We are working on the process, but basically my mandate is only for road construction. That is with the IT ministry and other ministries are there. But we have the land is ready. In Delhi-Mumbai Express Highway, we have a land available 120 meter. The one lane is only 3.5 meter. We are first stage making only 8 lane. We can go up to 16 lane. Still, we can give land for bullet train. Today, tomorrow, even if they want to start bullet train work from Delhi to Mumbai, land is available. We are also thinking on line of Hyperloop and something. And also the Delhi-Jaipur highway. The first time, the Prime Minister is going to inaugurate at 12, where we are planning for making of e-highway. From Delhi to Jaipur, the electric cable will be there. And the futuristic technologies are concerned. The idea is our truck and buses like the train, they're taking the advantage of that cable and going through Delhi to Jaipur. We are working on that, and that is also a first pilot project. I don't know whether how it can going to be a success, but it is a first trial for that. I'm very much thankful for you for asking me this question. And again, I'm humbly request you, all members of Tamil Nadu, in your constituency regarding NHI work, please cooperate us. We want to do it. Question number 105, Srimati Sajda Ahmad.
मंत्री माननीय मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर मत तो आई नहीं ना। सर मेंबर नहीं है सर। अच्छा सर, द इशू इज दैट द क्वेश्चन that has been raised under part 2, I mean B, whether the government has taken note that the huge virtual water trade of India is a great concern for water security, and if so, the details thereof. In your reply, in part B, you just check it out that this has not been spelled out in a elaborate manner. BC has been marked, but the core issue of virtual water trade has been conspicuously absent in your explanation in part B and C. We know that in the year 1993, the virtual water trade was conceived by Tony Allen. The name itself implies import and export of hidden water in various products. We don't have any idea of what is called virtual trade because people are not aware of it. I personally even not aware of it. Do you have any policy of virtual water trade in India? And what are the challenges and what are the benefits? Have you ever estimated on it? Because in the prevailing situation, I think this could be considered. But the question was raised, but the answer is seriously deficient. So that is why I thought it prudent to flag your attention. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने वर्चुअल वाटर ट्रेड के बारे में अपनी अनभिज्ञता और सदन की अनभिज्ञता के बारे में चर्चा की है। जिन सज्जन का नाम माननीय सदस्य ने लिया है, उन्होंने एक अध्ययन करके ऐसा बताया कि बहुत सारे क्योंकि जो भी कुछ उत्पादन होता है, चाहे भोजन का उत्पादन है, जो कपड़े हम पहनते हैं उसका उत्पादन है, जो हम सेवाएं जो हम उपयोग में लेते हैं, हर एक तरह की सेवा में कहीं न कहीं पानी की आवश्यकता होती है। जो कृषि के उत्पाद भारत एक्सपोर्ट करता है, उसको लेकर के माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की थी कि हम जो चावल निर्यात करते हैं, हम गेहूं निर्यात करते हैं, हम कपास निर्यात करते हैं, हम चीनी निर्यात करते हैं, ये सभी वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं और इनके निर्यात के चलते हम वर्चुअली पानी को निर्यात कर रहे हैं, जो कि भारत जैसे देश में जिसमें पानी की कमी है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो कृषि के क्षेत्र में पानी उपयोग होता है, इसके उपयोग को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने स्मार्ट इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रेशराइज्ड पाइप्स के माध्यम से इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिसके लिए सामान्यतः माना जाता है कि 20% पानी की बचत होती है, और मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूं मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, इन सरकारों ने इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम किया है। इसके अतिरिक्त जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप से आपको जानकारी होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें हर एक बूंद से अधिकतम उत्पादन हो सके, इस दिशा में काम करना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए भी सरकार काम करती है। इन सब के अतिरिक्त भी यदि मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, आप सबको इस विषय का संज्ञान है कि इस वर्ष को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर और अनुरोध पर मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से दुनिया में फूड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और उसके कारण से जो अवेयरनेस बढ़ रही है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर नेशन, क्योंकि हम दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट्स पैदा करने वाले देश हैं, सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ मिलेट्स पैदा करने वाले देश हैं। अगर इस समय में हम अपने किसानों को उसमें प्रोत्साहित करके अपने देश में और पूरे विश्व भर में उपभोग के लिए मिलेट्स पैदा करें तो हम वाटर फुटप्रिंट को नीचे ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी वाटर फुटप्रिंट को कम करने के लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये चावल के संदर्भ में कहा गया है, चावल के उत्पादन में आईसीआर ने इस तरह के सीड वेराइटीज को डेवलप किया है कि उन सीड वेराइटीज से पानी के उपयोग को 1/4 25% तक लाया जा सकता है। जहां 1.2 से 1.8 मीटर तक क्यूबिक मीटर तक स्टैंडिंग वाटर की आवश्यकता है, उसको 30 सेंटीमीटर तक रिड्यूस किया जा सकता है।
क्योंकि पानी और कृषि दोनों राज्य का विषय है। नीचे इस विषय को, इन टेक्नोलॉजीज को, वेराइटीज को प्रोपोगेट करने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्यों की है और बहुत सारे राज्यों ने इसमें बहुत अच्छा काम भी किया। मैं हरियाणा का यहां विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने चावल के उत्पादन के रकबे को घटाने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की और उसके कारण से लगभग 1 लाख हेक्टेयर रकबा उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वो डाइवर्सिफाई करने में सफलता प्राप्त की है। इसी तरह के प्रयास महाराष्ट्र ने भी किए कि जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि गन्ना और जो है कपास केवल ड्रिप इरिगेशन से ही उगाए जा सकते हैं। हमको निश्चित रूप से इस दिशा में संवेद स्वर से हम सबको भी बात करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हमको अपने क्षेत्र में, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि भी हैं और हम अपने क्षेत्र के लीडर्स भी हैं। हम अपने क्षेत्र में किसानों को अधिकतम उपयोग किस तरह से, पानी के न्यूनतम उपयोग में अधिकतम खेती किस तरह से कर सकते हैं, इस पर हम सबको निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। तब जाकर के हम इसको वर्चुअल ट्रेड बैलेंस को कम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 श्री दुष्यंत सिंह जी। तो चेयर सर। माननीय मंत्री जी। पटल पर रख दिया गया। धन्यवाद स्पीकर जी। आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं और उन्होंने उनके निर्देश में रीजनल कनेक्टिव स्कीम का काम शुरू किया गया है और जिसमें हब एंड स्पोक का काम शुरू किया गया है कि मतलब बड़े एयरपोर्ट से छोटे एयरपोर्ट बड़े एयरपोर्ट को लिंक करना था। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट किया गया है, अभी ट्रैवल अब बढ़ चुका है। मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि वर्तमान के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर्स हैं, एक कमेटी रिपोर्ट आई है, पेपर में भी लिखा गया है कि वर्तमान में जो वॉच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, इसकी जो रेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें लोगों को इसमें जो ये किया गया है कि डीजीसीए ने मांगा है कि रूल्स की वर्किंग कंडीशन को बदलने का, कि वर्तमान की जो एग्जेम्पशंस हैं उसको 5 टाइम्स अभी पुअर कंडीशंस हैं इनके जो हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। क्या सरकार जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सतुलन करेंगी और क्या नई पोस्ट जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की पोस्ट है वो करने के लिए प्लानिंग करेंगी और ये कब तक होगा जिससे हमारे पूरे देश में जो आरसीएस एयरपोर्ट्स हैं और बाकी के एयरपोर्ट्स हैं इसका पूरा लाभ ले पाएंगे? धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एटीसीओज का सवाल है, डीजीसीए इनकी पूरी जानकारी रखता है, इनके बारे में पूरी तहकीकात करता है और एक का नंबर रखता है कि इतने एटीसीओज होने चाहिए। उसके हिसाब से हम उतने एटीसीओज के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय ने 2021 से अब तक 792 लोगों की रिक्रूटमेंट की है और इस समय 456 एटीसीओज के लिए कार्य प्रगति पर है ताकि ये ट्रेन होकर अपनी अपनी जगह पर जा सके। जहां पर एटीसीओज की कमी होती है वहां पर वॉच आवर्स उसी हिसाब से कम कर दिए जाते हैं ताकि जो वहां पर एक्चुअल ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कार्य किया जा सके। हमारा सतत प्रयास है कि हम जो भी रिक्वायरमेंट हमको दी जाए उसको पूरा करें ताकि हमारे यहां किसी प्रकार की कमी ना आए। सेकंड सप्लीमेंट्री सर। सर, मैं राजस्थान के उस भाग से आता हूं जो एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है सर। सर, झालावाड़ और बारां में हमारे झालावाड़ का जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जहां हाड़ौती में, जैसे आपका क्षेत्र आता है, आपके क्षेत्र में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए, हमारे क्षेत्र में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए, हाड़ौती में के साथ साथ पूरे राजस्थान में एयरपोर्ट बनना चाहिए। क्या वर्तमान की सरकार राजस्थान के लिए जो आरसीएस रूट्स में हमारे एयरपोर्ट्स में नए रूट्स प्लान करेंगी और प्लान करने के साथ हमें अश्योरेंस चाहिए कि हमारे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या सरकार हमारे आरसीएस रूट करके देगी जिससे हमारे जो नए एयरपोर्ट बनेंगे, जिससे हमारे जो बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे क्षेत्र में, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनको आने जाने में
और अब जो हब एंड स्पोक का जो आपका स्कीम अब चल रहा है, क्या हमारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को भी आप प्रोत्साहन करेंगे और आरसीएस रूट से जोड़ेंगे, और क्या झालावाड़ को इस रूट से आप जोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, जहां तक का आरसीएस या उड़ान का सवाल है, सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसी स्कीम है जिससे कि उड़ान और हवाई जहाज से चलने का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। उड़ान एक मार्केट ड्रिवन स्कीम है जिसके अंदर एयरलाइंस समय समय पर जो बिड्स होती हैं उसके अंदर भाग लेती हैं और जिन रूट पर वो जाना चाहती हैं अपने व्यवसाय के एनालिसिस के बाद उसको वो लेती हैं। तो अगर कोई भी एयरलाइन झालावाड़ जाने के लिए तैयार होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम झालावाड़ को उसी हिसाब से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एयरलाइन के ऊपर निर्भर है और इस समय जबकि सब कुछ मार्केट ड्रिवन है, सरकार सिर्फ उनको बता सकती है कि आप इसके ऊपर कार्य करिए, लेकिन उनको फोर्स नहीं कर सकती। श्री रितेश पांडे। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर्स की संख्या और बढ़ाने के लिए लखनऊ के ऊपर जो ज्यादा ट्रैफिक है, अयोध्या वहां से मात्र 120 किलोमीटर दूर है, जहां पे एयरपोर्ट बनकर के लगभग तैयार हो गया है। वहां पे फ्लाइट्स आने से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की वहां एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी और अयोध्या और अंबेडकर नगर, आजमगढ़ जैसे जिलों के लिए एक उपलब्धि जो है वहां पे, बस्ती भी जो है वहां पे एक उपलब्धि बढ़ेगी। तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की नियुक्तियां बढ़ाने के लिए क्या अयोध्या एयरपोर्ट को आप जल्द से जल्द चलवा करके वहां पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को आप नियुक्त करेंगे और वहां पे जो लखनऊ का ज्यादा ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा, एयर ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा कि नहीं, और कब तक होगा? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया जाता, सिर्फ जब कोई इमरजेंसी आती है तभी डाइवर्ट होता है। एयर ट्रैफिक अपने रूट्स के ऊपर चलता है, जहां पर हवाई जहाज ठीक से जा रहा है, हवाई अड्डा ठीक है, मौसम ठीक है, हवाई जहाज वहां पर उतरेगा। लेकिन जहां तक इस नजदीकी का सवाल है, जब भी एयरपोर्ट तैयार होगा, जब भी उसके ऊपर हवाई जहाजों का चलन होगा, एटीसीओज की जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 107 श्री बालाशोरी बल्लभ नेनी। 107 माननीय मंत्री जी। Sir, the allocation for education empowerment of minorities has come down in 2022 to 24. It came down from rupees 2,515 crores in the budget estimate of 2022-23 to rupees 1,689 crores in 2023-24. It means you are spending less money for education empowerment of minorities in 2023-24. Is it true? What is the reason for behind to reduce this much of amount? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक के रूप क्रम विशेष अधिकारी प्राप्त वर्ग सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजना को लागू किया। अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। पिछले 5 वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित शिक्षण सशक्तिकरण योजना, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक उत्तरोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक संसाधन अतिरिक्त योजना, रोजगार का आर्थिक सशक्तिकरण योजना, प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना, जैसे हम लोग अल्पसंख्यक को ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
NFDFC को नियुक्ति करते हैं। विशेष योजना जियो फारसी भारत में फारसियों का आबादी में हो रही गिरावट को रोकने के हेतु योजना, कौमी वक्फ बोर्ड योजना। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य, अब जवाब तो 1 घंटा बोलते 1 घंटा चलाता है क्या? मान्य सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित क्रम संख्या 2 पर उपस्थित कागजात को मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, श्री VK सिंह जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं मेरे साथी श्री रामेश्वर तेली जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, जो आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित है, उनको आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 7, श्री कौशल किशोर जी। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, श्री भगवंत खुबा जी। धन्यवाद महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी श्री विश्वेश्वर टुडरी के नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेज जो क्रम संख्या 9 पर है, मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं आपकी अनुमति से मेरे सहयोगी साथी श्री शांतनु ठाकुर के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, जो क्रम संख्या 10 पर अंकित है, उनको सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11, श्री निहाल चंद जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अपने नाम के आगे सम्मुख एवं सूचीबद्ध प्राकलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 21 और 22 हिंदी और अंग्रेजी के संस्करण को मैं प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 12, श्री निहाल चंद जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की संशोधित सूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा संकेतित एस्टिमेट कमेटी की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण को की प्रति मैं पटल पर रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आइटम नंबर 13, श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। सभापति महोदय, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 9वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 14, श्री खगेन मुर्मू जी। Thank you, sir. With your kind permission, I beg to present the 79th, 80th, 81st and 82nd reports, Hindi and English versions of the Committee on Government Assurances as listed against my name at serial number 14 in today's order paper. Item number 15, Shri Pratap Rao Jadhav ji. Ji. Sir, I wish to present the 37, 38, 39, 40th, 41st and 42nd report
Hindi and English version of the Standing Committee of Communication Information Technology as listed by my name. श्री संजय सेठ जी ने किया। आइटम नंबर 16 श्री कौशल किशोर जी। सभापति महोदय जी, मैं श्री ब्रिजेंद्र सिंह संसद सदस्य द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत लक्ष्य के संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 5 के दिनांक 2/2/2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में अपना वक्तव्य अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले जिन माननीय सदस्यों के 377 के अधीन मामले स्वीकृत हुए हैं वो कृपया अपने विषय को सभा पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आइटम नंबर 18 केंद्रीय बजट पर चर्चा, श्री मर्गनी भरत जी। Sir, our party is given 30 minutes of time, sir. So kindly make sure of that time. आप बोलिए तो। वही तो, party is given 30 minutes of time. आप please start. Sir, at the outset, I am so grateful to place my views on the national budget 23-24, sir. Sir, despite of the precarious situation globally, aftermath of pandemic and the war between the Ukraine and Russia, the finance minister managed to bring down, even though all the things, the global economic turmoil has been happening, the finance minister managed to bring down the fiscal deficit from 10 to 5.9%, sir, and the growth rate is around hovering around 6 to 7%. But how far the vision and the dream of the Honorable Prime Minister's $5 trillion economy can be achieved, sir? Sir, of course, we do understand. माननीय सदस्यगण, कृपया बातचीत बंद करें। नो मर्मरिंग प्लीज, प्लीज। Sir, we do understand that Honorable Finance Minister made her budget very balancing, sir. Sir, the 10 lakh crores of capital expenditure, which is coming around 3.3% of GDP, and there is a feel-good factor among the middle class through direct taxes, sir. And at the same time, if the government of India would have slashed down the cylinder price, the gas cylinder LPG price, they would have managed to gain a lot of attraction from the women voters, sir. But perhaps they missed that electoral gamble, I guess. Sir, primarily I have my own reservation when it comes to my state of Andhra Pradesh, where my state was unscientifically bifurcated and the injustice is made to my state many more times. I have represented in this house itself, and I wanted to reiterate to this government, sir, the people of Andhra Pradesh, it is deeply bothering why this is the 9th consecutive year for the budget, sir. There is no prominent allocations made to my state, sir. And it is really heart-wrenching for the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, as I said, the Andhra Pradesh state was bifurcated by the same old Congress party without any rhyme or reason, sir. Sir, just only for the political foul play or the political benefits, they have splitted the Andhra Pradesh state, divided. It's just like a birthday cake, sir. There is no any scientific evidence. When the state is getting bifurcated, they should have to see the repercussions, what is going to happen. But as I said many more times, the Hyderabad capital city is given to the Telangana, sir. Never in the history of independent India, when the state got bifurcated, the capital city will be restored with the residual state, sir. But here it is completely turned around. Sir, here the people of Andhra Pradesh invested our sweat and blood for about 70 years, sir. Sir, in turn, what we have achieved, and the great Hyderabad city has went to the state of Telangana, sir. Sir, now, as I said, sir, 9 years of the budget, there is no prominent allocations for the state.
And also that the act is made in this floor of the House, and the Government of India should have to honor the act, sir, should have to implement the act, sir. But now the ruling party has left the people of Andhra Pradesh in lurch, sir. And I wanted to reiterate, sir, which is very loud and clear. And the Parliament should have the ears to hear my voice, sir. And all the country should have to understand, sir. Sir, these and the Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, has promised in the floor of the Parliament that in compensation for the bifurcation, Andhra Pradesh will be given the special category status, sir. So what all the benefits, what we get from this special category status, I would like to read out, sir. The preferential treatment in central assistance, the concession on excise duty to attract the industries, additional budgetary support from Government of India, 90% will be shared by the Government of India in centrally sponsored schemes, and 10% can be availed through loans. Sir, the tax concession to attract the industry, sir. All the above assurances approved by the Union Cabinet in March 2014. Sir, here Telangana is not the new state, sir. Andhra Pradesh is the new state. We have been facing the burdens, we have been facing the troubles since 9 years, and the Telangana agitation for 4 years. So we are really dying for the development, sir. So all these 13 years we have lost the time for the development, sir. Sir, secondly, I would like to convey to this House that Article 4, it says that the bifurcated state under Article 3, the supplemental, incidental, consequential measures has to be taken care by the government and the Parliament, sir. Where are all these? I've been asking, sir. Sir, for the better understanding, so many the ruling party, I would like to quote in Hindi also, sir. सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करना चाहता हूं. मुझे ऐसा लग रहा है, सर, मैं थोड़ा इतिहास को याद दिलाना चाहता हूं, सर. भगवान राम को 14 वर्ष वनवास को भेजा गया था. उसी प्रकार हमारे आंध्र की जनता के साथ 10 साल का अन्याय किया गया, सर. सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विनम्रता पूर्वक से अनुरोध करता हूं, सर, आप भगवान राम के भाई भरत जैसा आंध्र राज्य को अपने कंधों पे रखकर विकसित रूप से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, सर. मेरा विनती है, सर. He himself is Bharat. Thank you. He himself is Bharat. Sir, yes, carry on, please. Sir, and the AP Reorganization Act, sir, I would like to come to the AP Reorganization Act of 2014. The less I speak on this, the more the ruling party will be in the comfort zone, sir. Sir, we are not here to enjoy the luxuries. We are not here to enjoy the comforts. We are here to sweat it out and protect the rights of our country, and especially for the rights of my Andhra Pradesh state. We are here to make the legislation, sir. And here I request through you, sir, to the government to honor the act, to implement the act. Sir, where we have to go, sir. And this is after all a number game, sir. We are just 25 in number. That doesn't mean our voice is low. Our voice is loud and clear, sir. But the government should honor the act which is passed in this very house, sir. And I'd like to mention the few of the points which is included in the AP Reorganization Act, sir. Sir, the new railway zone. Sir, the railway zone has to be given to the state of Andhra Pradesh, sir, the South Coastal Zone, which is also included in the Act itself. But 9 years happened, nothing is being done, sir. And regarding the Polavaram project, the Honorable Minister rightly here in this house, sir, Gajendra ji, I'm just requesting you, sir, this is almost 9 years happened, and the revised estimation, which is around 55,000 crores, but that was estimated for 2019 and 20. And this year is 2023, sir. But how much the estimates will grow?
And this is all the public money. We are not giving from our pockets. But this escalation will grow on, grow on and grow on. And we are wasting the money of the public, I guess, sir. Because the project has to get completed. And the last government, sir, I'm clearly stating, the last government has taken the contract of Polavaram project. And what they have did for the Polavaram project, 9 years happened. There was then lapses in the technicality. That diaphragm wall was breached. And up till now, that particular thing is not being addressed. The investigation is going on and some technicalities is coming into the picture. But no, nothing has been happening since 1 year, sir. The project has been stalled since 1 year, sir. Kindly, I request the Honorable Minister to make the cognizance of this particular issue, sir. And regarding the major port, sir, I've been talking about the major port, about Dugirajupatnam port, sir, which is included in the Act. It is clearly stating that in the year 2018, the first phase of the port works has to be get completed. But nothing has been started up till now. Why is this stepmotherly treatment to Andhra Pradesh, sir? Sir, due to some technicalities that they have shifted to Ramayapatnam port, but still the works has to be get started, sir. And regarding the Kadapa steel plant, and our voice, sir, the Kadapa steel plant, always the Honorable Chief Minister comes to the Prime Minister and the Honorable Home Minister. We've been asking for the funds for the allocation of Kadapa steel plant also, sir. And we talk about the major rail projects, sir, especially the metro projects for Visakhapatnam and Vijayawada. So what happened to all these projects, sir? How can we compete with Bombay? How can we compete with Bangalore, Hyderabad and Chennai, sir? Sir, we are having the biggest cities is like Visakhapatnam and Vijayawada, sir. And of course, my constituency, Rajahmundry also. So I request through you to the Honorable Minister and the government to sanction the railway project, the metro railway projects to Andhra Pradesh, sir. Sir, coming to the Greenfield crude oil refinery and petrochemical complex, this is also mandated to establish in Andhra Pradesh, sir. Sir, as we all know, perhaps the country must be knowing about the KG Basin. The KG Basin is located in the area of East and West Godavari's and the Krishna district, sir. Sir, you are taking out the oil and diverting to the Gujarat or any other places. So why can't we have the petrochemical complexes in the state of Andhra Pradesh? And how much the cost effective is been happening to the country? But the government of India, for erecting these petrochemical complexes, the government of India is asking for the viability gap funding, which was not mandated in the Act, sir. Sir, I would like to reiterate to this House, why not the petrochemical factories, complexes are there at Daheja in Gujarat and Pardeep in Odisha. Did you ask for this viability gap fund in that particular area, sir? Perhaps I don't think you have asked for the viability gap funding. Therefore, I request the Honorable Finance Minister to allocate funds for this petrochemical complexes, sir. Sir, coming to the national picture as a whole, I appreciate the Honorable Finance Minister for delivering expansive budget amid the global economic turmoil, sir. It is good that she has opened the strings and pleased the taxpayers, especially in the view of the upcoming 9-state elections, sir. However, financing the fiscal deficit is challenging, sir. Sir, look at the receipts and the expenditure. So where the government of India could manage to get 17.5 lakh crores, sir. It is a fiscal deficit, sir. It is very challenging. Sir, the House would be very happy if the Finance Minister explains and elaborates the roadmap where these golden eggs are going to invest and how can these golden eggs hatch to become the golden goose, sir. Sir, my suggestions here to the government is, primarily, apparently, we need to understand our strengths, sir. Sir, our Honorable Prime Minister always says, buy local, Atmanirbhar Bharat. Sir, we all know that the government, how come the public
uses this nationalism. So we are talking about the Atmanirbhar Bharat, sir. But the government should show the sources to portray this nationalism, sir. Sir, in this context, I would like to give a suggestion. This is open the local marts for the groceries, for everything, sir. Open the local marts. Name it as a Bharat Mart or whatever it is. But this local marts has to open across the country in small villages also, from the length and breadth of the country, sir. And the only products which is available in that local mart should be made in India. And the local promotion should be happened, sir. In turn, the government should encourage with incentives. The government should encourage with the tax benefits, sir. So definitely, I think this model will completely achieve the dream of the Prime Minister, sir. And coming to the imports, sir, as we all know that imports, the crude oil is the maximum imports what we've been importing to our country, sir. So the alternative for this, the government is in this budget happened to allocate some 33,000 crores in the green energy and 17,000 crores in the renewable energy. Sir, in the state of Andhra Pradesh, we are encouraging the pump storage, which is the hybrid model which is trending now, sir. The Honorable Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy ji, has also inaugurated 5,000 megawatt of this pump storage model, sir. So perhaps the country should think on this grounds and to extend across the country, so that at least by this year, if we can curtail to 20% of the crude oil imports, that will be a very good move, sir. And the second, the biggest import, what we import is very lucrative gold, sir. So I wanted to be very clear. So whether I could speak this, whether I could announce this, but still I'm going forward, sir. Sir, increase of the export duty in the gold. However, apparently the number 2 gold, which comes from the borders or which comes from some other countries, and the currency which is lying, the 2,000 rupees notes, which is lying with the big tycoons, will come into the circulation, sir, and allow it. And after coming all these 2,000 notes into the circulation and curtail and seize the routes of smuggling, sir. This is a win-win situation, sir. Almost, I think after the demonetization, we hardly see the 2,000 rupees notes now, sir. Sir, it is laudable that Government of India has done outstanding works in terms of road networking, sir. I should appreciate Nitin Gadkari ji for this. He also visited my constituency. And from this past 9 years, the Government of India is doing a phenomenal job in terms of the road networking, sir. Sir, the industrial corridors, sir. So the government has to be very aggressive in promoting the industrial corridors from north to south and east to west, sir. Sir, here I would like to quote Swami Vivekananda ji. As rightly said, sir, youth is the foundation of the country. And they are the great asset to any nation, sir. They are full of energy, enthusiasm, and innovative ideas, sir. Sir, he called channelizing the energy into the right direction. They can drive the country on the path of progress. Sir, the youth in the country is the great asset for India, sir. Almost 50% of the population is youth, sir. Sir, likewise, in this house also, we are not less than 70 to 80 members of youth parliamentarians, sir. Sir, my request here is to create a parliamentarian groups and send them across the globe, sir, for the study tours along with the scientific researchers, sir. Sir, we are ready for the nation building, sir. Sir, I would like to mention Taiwan is very famous in manufacturing semiconductors. It almost produces 50% of the global demand. Why not India, sir? Why not India? And I'd like to quote the Singapore, sir. Singapore is famous in electronics, logistics, transportation, and even biomedicines. Why not India, sir? Sir, the floriculture, agriculture, and
the horticulture. So why can't the government will come up with the latest technology, sir? And when it comes to the floriculture, Amsterdam and Vietnam and Thailand is doing very well in terms of the agriculture and the horticulture, sir. The electronics in Japan. And why not all this in India? So we are not short of any competence, sir. We can move the world. But at the same time, constructing this industrial corridor, creating SEZs, creating MSMEs, creating small-scale industries, it will create, it will generate, it will accelerate the flow of money, sir. Sir, one thing everybody should remind, that our strength, we need to identify what are our strengths. We have a vast coastline. It is almost thousands of kilometers, sir. Sir, the marine products, the exports are really, really high, sir. So why can't the government concentrate? Of course, the government has allocated 6,000 and odd crores in PM Matsya Sampada, but still it is not enough. Sir, even Vietnam, even the Singapore and the nearby country, Bangladesh, is doing very well in terms of aquaculture, sir. We need to promote more, sir. In my state of Andhra Pradesh, under my leader, pragmatic leader, Y.S. Jagan Mohan Reddy ji, we are constructing 9 fishing harbors without the support of Government of India. So kindly consider this suggestion also, sir. Sir, finally, I wanted to reiterate to this government. Sir, if you look at the breakups in sector-wise, 46% of the population are under agriculture, sir. Sir, how much the contribution of GDP through agriculture is just 20%. Sir, just because of lack of technology, just because of the promotion from the government, the farmers has to understand. The government should push the farmers to inculcate the new technology, sir. Sir, see Vietnam, how best they are doing. Get the scientific scientists or trainers from the different places of the world and train our farmers. Definitely we could contribute more, sir. Sir, every youngster should feel that I can do agriculture when I become elder. But none of the youth in the country are ready to do the agriculture, sir. This is the fate of the country. And the second thing is 32% of population dependent on service sector, sir. And contributing phenomenal and extraordinary, the highest is 54% of our GDP, sir. And 21% of the people are dependent on industry, sir. Sir, contributing 26% of the GDP, sir. And it has to be also improved, sir. Sir, with these suggestions, with these points, I'd like to conclude. Before concluding, sir, with the folded hands, sir, from the people of Andhra Pradesh and on behalf of my Chief Minister, I request Government of India to grant a special category status, honor the act. Sir, we are like a small baby, sir. I request the Government of India to care us, nurture us with empathy, and with just a father figure is there in front of us, sir. But why the government is not honoring the act, sir? Why the government is not implementing the act, sir? Sir, with these words, I conclude. Definitely the God is there, sir. God is watching everything. Definitely the good days will come to the state of Andhra Pradesh. Thank you so much, श्री sir. शौकत राय जी। शौकत राय जी, अच्छा नहीं बोलना चाहते क्या? Sir, I rise to speak on the budget discussions. It is very unfortunate that yesterday also budget discussions took place. Today it is taking place. The finance minister has not been present on either occasion. The budget discussions belong to the Lok Sabha. Rajya Sabha has no power. I understand the finance minister is from the Rajya Sabha. Why isn't she there either of the day? What is he talking about? आज प्रधानमंत्री जी का डे है वहाँ क्वेश्चन का, प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, इसलिए जितने भी मेंबर जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो वहाँ प्रेजेंट हैं क्वेश्चन डे के कारण वो आ रहे हैं। वो दोनों आप ये बताओ, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, ये मत कहो जवाब। behalf of finance minister, I am sitting here. She is in Rajya Sabha. Honorable Prime Minister is there.
includes in शुरुआत the में भी minister. नहीं रहते हैं. दूसरी बात है सर, the other minister, railway minister, whose budget also comes up on this, he is also not there. These are all big people. They don't care. Otherwise, Lok Sabha has full power as far as budgets are concerned. दोनों नहीं है. ये मजाक है क्या? नहीं. Railway minister should be present to listen to our objections. Sir, I speak on the budget discussion. Before I go to my main demands, I want to mention 2 points regarding our state of West Bengal. The West Bengal has been deprived of its share of NREGS funds. 7,300 crores are spending from the center. Along with Sudhir Bandyopadhyay, we all went and met the rural development minister. Our local minister went and met him. He said everything is all right. Still money is not being released. He also belonged to a rural area. Just imagine the situation in the rural economy. If total NREGS funds are stopped, people will be starving. And this is... माननीय सदस्य, या तो आप गोली को रख दो जो हाथ में गोली फाड़ी है ना आपने. नहीं ये तो हाँ एलेक्स है. एलेक्स है. ठीक रखने. गला ठीक रखने. पानी देता हूँ आपको ना, गर्म पानी. प्रधानमंत्री जी के तरह वो तो पानी पीते हैं, मैं एलेक्स खाता हूँ. गर्म पानी. हाँ. ऐसे गैलेक्स खाना, गोली खाना सदन में अलाउ नहीं है. सर मैं this is for the health, sir. For health. Now, I demand that the money for NREGS for West Bengal should be released immediately. And the government should give up its cruel attitude. Number 2, I have to speak something about railways. The finance minister made a big hue and cry that he has given 11,000 crores to West Bengal for unfinished projects. But nothing is finishing. He will earn name as a railway minister who's very smart. He is starting Vande Bharat trains so that PM can go and inaugurate. These have no long-term benefits. And in West Calcutta metro system, he is inaugurating truncated lines. That is, there is a line from Behala to Bibadibag. He goes 1/3 and inaugurates up to Joka to Taratala. So I demand that whatever railway projects he is doing, let him complete them instead of inaugurating truncated lines. Sir, I wanted to speak on the budget. Nirmala Sitharaman herself called her budget beautifully balanced. I have never heard a finance minister praise her own budget. She is saying India said to be $5 trillion economy, budget beautifully balanced. I'll talk about the balance later. But it's unfortunate that the finance minister budget speech does not mention the words unemployment, poverty, inequality, inflation, or equity anywhere in the speech. So even if it is beautifully balanced, it is that of an accountant. This budget has no vision about the future, and it is not futuristic, but opportunistic. Anti-people and anti-poor. This is what Mamata Banerjee said about the budget. Sir, unfortunately, as soon as the finance minister presented his budget, the next day, an avalanche took place. Avalanche of what? Hindenburg research report. One short-selling firm from America, they released a report about a company in India. I will not name the name.
Sir, when we were small, after sunset, we could not use the word sap. My mother used to say, don't say sap, say lata, lata. So now, there is a new word. We cannot mention somebody's name. We have to a company, this company. But this company is everything. We can't mention the name. Just like my mother told me when I was young, living in a village. Snake we could not mention. You have become the new spokesman for the ruling party to prevent the opposition protest. You have become the new spokesman after being dropped from the ministry. You have started explaining everything. Go back to the ministry. अरे That is the new way. आप बात है ना माननीय सदस्य इधर करा करो, कोई नियम हो तो इधर बताओ, उनको क्यों नियम बता रहे हो भाई? Some professional hecklers have sprung up. Their job is to disturb the opposition whenever they speak. Right. I cannot take concern about them. Now, sir, I'll be very brief on this matter. I have other things to speak about. The Hindenburg research report said that a certain company did round-tripping of its finances. And they bought up assets in India after round-tripping them from abroad. After that, an avalanche. You know, in the snowy areas, the ice comes down. The ice came down on this company's shares. In 3 days, it lost 10 lakh crores of rupees. Now, if ये कौन सी कंपनी आप लोग बताओ? आप लोग बताओ, इसका नाम तो नहीं किया जाए, साफ है. तो अरे हमारा कोई डर नहीं है. अदानी बोलने से ये लोग बोलेगा काट दीजिए, उनका नाम नहीं करना चाहिए, ये साफ है. तो सर, I have a simple demand before the finance minister. She has got the SEBI under. If a company has done round tripping, it is the job of SEBI to look into it. I demand that she ask the SEBI to inquire into fallen shares of this certain company. Also, the Enforcement Directorate, ED, matter of fear for the opposition, is also under the finance minister. They are investigating each and every opposition politician. Why the ED is not investigating the affairs of this company? This is... He is not in opposition. Yes, very right. Lalanji is first-class leader from Bihar, president of the JDU. He is supporting me, and I thank him for the same. So now, I'll call this budget basically an anti-farmer, anti-poor, anti-rural areas budget. You know what they have done? They have reduced allocation for MG NREGA. क्या है? क्या? तुम्हारा डिवोर्स हो गया? आप माननीय सदस्य डिस्टर्ब. हाँ. अच्छा, ठीक है. Sir, there has been reduction in the allocation of MG NREGA and cut in food, fertilizer and petroleum subsidies. This is anti-poor. Sir, you will know that food subsidy has been cut from 2.87 lakh. Sir, what is it that I am saying that is objectionable? Please. This young man is shouting. Please. He is shouting. Please. You put him down, sir. Food subsidy has been cut from rupees 2.87 lakh crores to rupees 1.97 lakh crores. Fertilizer subsidy has been cut from rupees 2.25 lakh crores to 1.75 lakh crores. These cuts will expose Indian farmers to the vagaries of the global market
and render the economics of agriculture even more fragile. This is a very serious matter. This should be looked into. Sir, what were you expecting? I was actually originally thinking of praising the finance minister because she has called herself the budget is beautifully balanced. So I thought that yes, it's balanced, but his balance is that of an accountant. You know, in the finance ministry, there is a deputy secretary who tallies the budget and he ultimately balances both sides. The finance minister has done just that. This was the opportunity when inflation was under control, GDP was rising, current account balance was better, fiscal deficit was under control. This was the time to take a big step forward. What did Abhijit Vinayak Banerjee say at the time of pandemic? He said that give some cash dole in the hands of the poor. The budget does not mention anywhere the word migrant labor, who were the biggest Achilles heel of the Indian economy. People walking hundreds of miles to their destination when the pandemic broke. They have not been mentioned. The top economists of the world wanted them to be given some cash dole, some money. The finance minister did not. The other thing she could have done in a stable macroeconomic situation, she could have reduced the prices of petrol, diesel, and of LPG. Because if you have a little financial space, that is the time to give relief to the common man. She did not do this because she had to balance the budget beautifully. So this budget ultimately turned out to be what? Anti-poor. Anti-poor people. So that is the budget. So now you are talking about digital India. Now digital India is all right. But sir, you must be knowing that technology takes away jobs. Today, all the big tech companies like Microsoft, Meta, Amazon, they are all retrenching people. They are called pink slips in America because technology always relentlessly takes away jobs. So to talk about digital India, Industrial Revolution 4.0, artificial intelligence, 3 centers will not solve India's problem. India's basic problems are poverty, destitution, migrant labor, and of course unemployment. The employment has not been addressed at all. The finance minister will come and say, see, I have increased so much in capex. Capex is what? Capital expenditure. How much she has given? 10 lakh crores. Very big sum. But does the capex get translated into projects anywhere? No. You give the money today, the project will take another 1 year, 2 years to start. What happens in the meantime? And when you are building infrastructure projects, the main problem is that they take lot of time. Some people get employment during construction. But after construction is over, they lose the jobs. So you are taking India towards a jobless future. From a very favorable situation, you are taking India to a jobless future, Berojgar. I see Mr. Gajendra Singh Shekhawat doing namaskar to me. I like that. He is the favored child. Oh, he did namaskar to you. And Navneet must have been. That would be only more proper.
Sir, there are only two favored children. Who are favored children? One is this Jal Jeevan Mission. Jal Jeevan Mission. They have got 70,000 crores. And the other is PM Awas Yojana. They have got 79,000 crores. But NREGA has received a cut. So if you develop only two projects, that will be enough to alleviate India's problems. I do not think so. I think you are making a mistake. सुनिए ना आप जो किए हैं मेरे पास ये है आप क्या क्या किए हैं जो नहीं किया है वो बोलना मेरा काम है जो किया है वो बोलना आपका काम जो बोला है सुनो हाँ दादा आप इतने वरिष्ठ सदस्य आज सुप्रिया जी से गाइड हो रही हैं क्या? सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये समझते हैं बुढ़ा आदमी बोल रहा है इसको मदद किया जाए, ये सब लोग मदद कर रहे हैं। जो किया वो बोलना आपका काम है, जो नहीं किया वो मेरा काम। सर तुम पूरा पागल है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बीबी भाग गया, तुम पूरा पागल है। ये हटा दिया। माननीय स्पीकर साहब, दादा को नवनीत जी ने नमस्ते नहीं किया इसलिए उन्होंने सुप्रिया जी का सहारा ले लिया। Sir, the other thing is, do you remember? ये प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया फार्मर्स इनकम 2022 में दोगुना हो जाएगा। आपको कोटा में भी तो फार्मर है, उनका इनकम दोगुना हुआ नहीं हुआ। सर, they promised that by 2020 everybody will have a house. Everybody. कहाँ सब लोग का घर हुआ? आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्वरोजगार योजना, उसमें सब लोग का घर मिल जाएगा, घर नहीं मिला। सर, ये जुमला का सरकार है, एक साल एक सवाल उठाते हैं, एक साल। अच्छा डिवोर्स के बाद इसको दिमाग में गड़बड़ी हो गई। सर सर इसको तार कट गया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इसको तार कट गया। सर, लास्ट ईयर they made a promise asset monetization pipeline that they will get money out of the एक सेकंड माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, किसी भी माननीय सदस्य के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग मत करो। आपको वो करेंगे तो उनको भी इसी भाषा में कहूंगा। उनका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नहीं रोक नहीं, मैंने कह दिया उनको बैठ जाइए, आप बोलिए। सर, आपको नहीं अलाउ किया मैंने। लास्ट ईयर दे स्पोक ऑफ प्लीज दे स्पोक अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस साल है बजट में? नहीं, कुछ एसेट मोनेटाइज नहीं हुआ। दे यूज्ड टू स्पीक अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट। अगले साल भी 50,000 करोड़ था, इस साल भी 50,000 करोड़ बजट में। कभी कोई आपका एसेट लेने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। योर प्रोग्राम्स आर फेलिंग वन बाय वन। अनाउंस Nirmala Sitharaman has this advantage. She makes an announcement, forgets about it next year. But we keep last year's budget. We remember what all she said. And that's why, sir, this budget, done with good intentions, at a time when Indian economy was recovering from the downslide of the COVID, missed all the opportunities.
It turned out to be, I'll briefly complete my point, sir. बहुत डिस्टर्ब कर दिया. ये तार कट जाता है लोगों को और हमको डिस्टर्ब करता है. सर, अच्छा, कल अधीर चौधरी गलवान के बारे में बोला कि चाइना कितना पॉइंट गलवान में दखल किया, कितना पॉइंट अरुणाचल में दखल किया. क्या जरूरत था डिफेंस बजट बढ़ाने का? कहां बढ़ा? 1.5%. It has remained almost the same if you take in inflation. अभी तक छत्तीसगढ़ में माओवादी लोगों को मार रहा है. एक बीजेपी को आदमी को मार दिया परसों. कहा सीआरपीएफ का अलॉटमेंट? वो भी नहीं बढ़ा, 1.5%. ये लोग बोलता है हेल्थ और एजुकेशन में पैसा देगा. एजुकेशन में केवल 2.9% सारा बजट का अलॉटमेंट एजुकेशन के लिए. हेल्थ का इतना प्रॉब्लम है, वहां भी कोई अलॉटमेंट नहीं है. उनका तार कट गया सर. Sir, lastly, I want to say that giving allocation is not enough. In our country, you have to see that on the ground, projects are implemented. Government has spent 22,000 crore less of what it had allocated for capital expenditure this fiscal. Allocating money is not equal to spending money, nor is allocating money equal to creating jobs. They have mentioned all तार काटा हुआ प्रोग्राम ये दिया है. सर, आप सुनिए. सर, आप सुनिए, कुछ प्रोजेक्ट का मेंशन किया ये. कुछ प्रोजेक्ट का मेंशन किया. आप ये प्रोजेक्ट, इसमें एक पैसा भी नहीं दिया गया. सर, क्या भाई? क्या प्लीज मानिए. सर, ये क्या हो रहा है? ये एक तो प्रॉब्लम होगा. अभी भी हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी एंड एफडीआई, they constitute 40%. Since last year, FDI is escaping from the economy. You find out how much FDI money has gone out. Private investment is being squeezed out because the government is doing huge borrowings. So the private sector is not being able to mop up resources. So this point that I'm giving everything to capex, I'm creating a deficit financing, that creates a problem. ये देखिए अनाउंसमेंट किया कुछ प्रोजेक्ट का. एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, पीएम प्रणाम, गोबर धन, खेती, नेचुरल खेती, बायो इनपुट, मिष्टी, ये मैनग्रोव के लिए है, अच्छा है. अमृत धरोहर, इवन मिलेट्स. सर, एक पैसा भी अलॉट नहीं किया. केवल फिनांस मिनिस्टर ये बजट स्पीच में अनाउंसमेंट किया, बजट पेपर्स में इसका कोई मेंशन नहीं है. पीएम प्रणाम, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, गोवर्धन, नेचुरल खेती. और ये नेचुरल खेती क्या होता है सर? इसका कोई, आप गोवर्धन के पक्ष में है कि गोवर्धन, बिल्कुल, गोवर्धन योजना इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन और उसके लिए जो है 7,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन नहीं. यू शो मी द बजट पेपर. आई एम कैरिंग ऑल द बजट पेपर. आप दिखाओ कहाँ एलोकेशन. आई एम कैरिंग द बजट पेपर. शो दिस आर ऑल अनाउंसमेंट्स विदाउट एनी मीनिंग. सो दिस इज ऑल चीटिंग, फजलिंग, डिफंडिंग. हाँ, ये सब वैलेंटाइंस डे प्रेजेंट है. सर, लास्टली आई वांट टू से दैट आप देखिए, एक तो बजट पेपर में
एक तो अच्छा पिक्चर है। हमारा रुपया कहाँ से आता है? हमारा रुपया इनकम टैक्स 15%, एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉरपोरेशन टैक्स 15%, जीएसटी 17%। तो आप इनकम टैक्स आप छूट दिया कितना? 0.1%। 38,000 करोड़ रुपया हमारा इनकम टैक्स, टोटल हमारा कलेक्शन जो है 25 लाख करोड़, उसका 1% है। ये कोई छूट नहीं है। और आप क्यों बड़े लोगों को सरचार्ज पर छूट दिया? वो देना नहीं चाहिए था, गलत किया। ये बजट इस टिंकरिंग, एक गवर्नमेंट 2 साल पहले एक तो अटल टिंकरिंग लैब शुरू किया, उसमें थोड़ा सा इधर उधर करता है। ये भी बजट इकोनॉमी को लेकर टिंकरिंग किया। और देखिए, डिफेंस इज ओनली 8%, सब्सिडीज कम करके 7% कर दिया, स्टेट शेयर 18%। एक ही अच्छा काम हुआ, 50 साल के लिए स्टेट्स को 1 लाख करोड़ रुपया लोन दिया बिना इंटरेस्ट में। अच्छा है। स्टेट को 3.5% फिस्कल डेफिसिट अलाउ किया, ठीक है। लेकिन ये है समय जब इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है। यही समय था टू मेक ए फ्रंटल अटैक ऑन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी अगर स्टेबल है तो आप गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाओ, अपना दल भी स्ट्रांग होगा। आप भी करो अनुप्रिया जी, ये उसका ये मत रहो। पैसा सर, ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, ये देश को लूटेगा, ये कुछ नहीं करेगा सर। आप और हमको गरीब के साथ रह के लड़ाई लड़ना है। और इसलिए मैं ये बजट प्रस्ताव को समर्थन नहीं पा रहा हूं। मैं फिर मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल का एनआरईजीए का रुपया अभी देना चाहिए, और पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना के रुपया अभी देना चाहिए। और रेलवे मिनिस्टर कलकत्ता जाए और हमारा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को इनागुरेट करे। मैं बहुत आभारी हूं कि आप धीरज के साथ मेरे भाषण सुने। मैं आपको नमस्कार। श्री रंगप्पा बड़ने, किसको बुलाना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी पार्टी की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उस पर मेरी बात रख रहा हूं। यह बजट भारत की आजादी के 75 साल होने पर अमृत काल का पहला बजट है। यह बजट महत्वाकांक्षी और समावेशिता पर केंद्रित है, जहां विकास का लाभ किसानों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती यदि सभी नागरिकों को तक पहुंचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लक्षित लाभों के सार्वभौमिकरण के साथ ही कई योजना और प्रभावी ढंग से लागू की योजना का परिणाम स्वरूप समावेश यह बजट है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू टॉयलेट का निर्माण किया गया है। आज दुनिया में भारत को एक उज्जवल सितारे के रूप में मान्यता दी है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी
अंत्योदय को प्राथमिकता दी है और परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है, जिसका 2 लाख करोड़ पूरा खर्च केंद्र सरकार करेगी। यह गरीबों के हित के लिए उठाया एक क्रांतिकारी कदम है। अध्यक्ष जी, इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66% बढ़ा दिया है। सरकार का ये कदम स्वागत है। अध्यक्ष जी, इस बजट में एमएसएमई पर खास ध्यान दिया गया है, जैसे कि उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और 80 पोर्टल को वापस में जोड़ा गया है। 130 लाख एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी की योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय करीब दुगनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में बन गई। देश करीब 2 साल तक कोरोना से लड़ा। देश करीब 2 साल कोरोना से लड़ा था, लेकिन मोदी सरकार ने देश के आम आदमी के हित में को ध्यान देते हुए जनहित के फैसले लिए और इनका लाभ देश के सभी जनता को हुआ है। आज देश दिन तक 102 करोड़ लोगों को लक्षित किए हुए कोविड विरोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार हुआ है। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के जुड़े लोगों को बधाई देना चाहिए। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए नगद हस्तांतरण किया है। देश का किसान सभी और खुशहाल हुए। माननीय मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जल जीवन मिशन के तहत करीबन 70,000 करोड़ सभी राज्यों को दिया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाके में पानी की योजना होते हुए कई सारे ग्रामीण इलाकों को इसका लाभ पहुंचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पीएम गति शक्ति को बढ़ाने देने वाली 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक, ये इस पर ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष जी, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्माण, बहुपक्षीय कन्वेंटिंग और लॉजिस्टिक के दायरे में आए। राष्ट्रीय अवचरण पाइप लाइन में 7 कारकों के जुड़े इस परियोजना का लाभ सब देशवासियों को हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेटवर्क में 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय राज्यमार्ग नेटवर्किंग में विस्तार करीबन करने के लिए 20,000 रुपए जुटाए जाएंगे। इसमें देश का चौमुखी विकास होगा। अध्यक्ष जी, एक समय इस देश में आधारभूत सुविधाएं में कमी होती थी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कमी होती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए सरकार में ये यशस्वी कदम उठा। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निर्माण में गति दी और माननीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में आज देश में सीमाओं तक वर्ल्ड क्लास सड़कों का निर्माण हुआ है। एक समय था कि देश में सीमाओं पर सड़क का निर्माण नहीं था
आज यह सरकार द्वारा ये मानांकन बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 वर्षों में राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई में करीब 50% वृद्धि हुई है। अप्रैल 2014 में राज्यमार्ग की लंबाई 91.287 किलोमीटर बढ़कर 2021-22 में 1,40,995 किलोमीटर हो गई। कुल बजटीय करीबन 5.5 गुना वृद्धि हुई है। आज भारतीय राजमार्गों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ये सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ये माननीय नितिन जी गडकरी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश में आज मेट्रो रेल का जाल बिछा रहा है। यह बजट में पिछले बजट की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक साथ जब रेल कोच का आयात करते थे, लेकिन आज हम वर्ल्ड क्लास कोचिंग का निर्माण देश में करते हैं। अध्यक्ष जी, मोदी के नेतृत्व में देश अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण देश में करेगी। साथ ही अगले 3 साल के दौरान नई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावाला तक लोकल सेवा चालू करने के बारे में लगातार यह बात रखता हूं। केंद्र सरकार द्वारा इसमें जल्दी से जल्दी अगर सहायता देगी तो निश्चित रूप से यह मार्ग भी बनेगा। दूसरा, कर्जत से पनवेल और पनवेल से उरण तक का मार्ग धीमे गति से चल रहा है, तो ये मार्ग पर रेल विभाग द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान कुछ जरूरी मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में रिटायर कर्मचारियों की संख्या करोड़ों में, सरकार की और उन को दी गई राहत प्रदान नहीं की जाती है। सरकार पेंशन राशि पर इनकम टैक्स वसूल करती है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 के बजट में घोषणा में वरिष्ठ नागरिकों की बचत लिमिट को 1 लाख से 5 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख किया है, जिसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। परंतु इस बचत पर कमाए ब्याज पर जो टैक्स देना होता है उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। पिछले बजट में 75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को ITR दाखिल करने पर एग्जेंस किया है, पर उनकी ब्याज में कई कमाई पर TDS कट नहीं लेगी। जब ITR भरने पर TDS कैसे वापसी मिलेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 साल के आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक मेडिकल बीमा के लिए पात्र नहीं है। इसमें सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट 9 साल का कार्यकाल का माननीय मोदी जी के बजट का एक सर्वोत्तम बजट है। इसमें सभी लोगों पर ध्यान दिया है, जैसे कि गरीब हो, किसान हो, कर्मचारी हो, इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। एक अच्छा और सराहना बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं। एक अच्छा बजट यहाँ पेश हुआ, उसका स्वागत भी करता हूं। श्री महाबली सिंह जी। सभापति महोदय, केंद्रीय बजट 2023-24
जो सदन में चर्चा के लिए, सामान्य चर्चा के लिए लाया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, जब भी सदन में बजट पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं बजट की सराहना करते हैं। हमेशा आजादी के 75 साल हो रहे हैं, इन 75 सालों में जो भी सरकार बजट बनाई, सभी सरकारें दलित, पिछड़े, अकलियत, किसान, मजदूर के हित में कह करके लोगों ने बजट बनाई। लेकिन सरकारें बदलती रही, बजट बनते रहे और बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तस्वीर आज तक नहीं बदली, आज तक नहीं बदली। आज भी करोड़ों लोग, आज भी करोड़ों लोग गंदे नाले और पेड़ों के नीचे जन्म लेते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, वहीं पर आज भी मर जाते हैं। इसलिए महोदय, हमें इसके तरफ नहीं जाना है, लेकिन हमें सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि बड़ी अरमानों से बिहार की 13 करोड़ जनता ने आपको 2019 में 40 सीट में से 39 सीट एनडीए के खाते में डालने का काम किया था। लेकिन 40 सीट में से 39 सीटें 40 बहुत आशा, उम्मीद और अरमान के साथ इस बजट पर निगाहें रखी थी बिहार की जनता। उसको विश्वास था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बजट में जरूर प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि यह मांग जब बिहार में गठबंधन हम लोगों के एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी, उस समय विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक सब लोगों ने पारित करके भेजा था केंद्र को कि हमको बिहार की विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करेंगे। न तो बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। झूठ नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपने बिहार को कौन सा पैकेज इस बजट में दिया है? कहाँ है? जरा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ आपने विशेष पैकेज दिया है। न बिहार को विशेष पैकेज ही हुजूर दिए। सर यहाँ तक कि देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर है। प्लीज, इस मंदिर में हम बता देना चाहते हैं कि यहां से जो भी घोषणाएं होती है जमीन पर उतरना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए। 2000 बिहार के अंदर 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री ने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। उस समय 3,500 की, आज 3,500 करोड़ की वो योजना हो गई। लेकिन शिलान्यास होने के बाद आज 14 साल बीत गए, आज तक वह बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम जमीन पर नहीं उतरा। अब बताइए महोदय कि हम लोग यहाँ सदन में चर्चा करते हैं, बिहार की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रही, और वह 4 पार्लियामेंट का क्षेत्र था। सभी माननीय सदस्य जो आज बोल रहे हैं, हमारे राम कृपाल जी, इन्होंने भी कई बार रेलवे मंत्री से मिला, हम लोगों ने मिला,
अब 13 साल से बताइए महाराज कि 4 पार्लियामेंट का वो क्षेत्र है, एक छोटा सा, आज रेलवे लाइन नहीं बन सका। डालमिया नगर 7 में, रोहतास के डालमिया नगर, टिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को 7 में उसका शिलान्यास हुआ था, तत्कालीन रेल मंत्री ने किया था, रेलवे वैगन बनाने के फैक्ट्री के लिए। अब बताइए 13-14 साल हो गया महाराज, 14 साल से विगत जो तत्कालीन आपके रेलवे मंत्री अभी थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने सदन में वहीं से कहा था कि 2022 तक हम लोग हर हालत में टिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को, जनता के हाथों में रेलवे फैक्ट्री को हम लोग चालू करके देंगे। बताइए आज तक कुछ जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन आज तक वो 7 में शिलान्यास हुआ, आज तक वो भी काम नहीं हुआ। आप खाली देखिए आश्वासन और झूठ के सहारा लेते हैं, झूठ से काम नहीं चलेगा। बिहार को बिना विकसित किए हुए आप देश को विकसित नहीं कर सकते। बिहार महात्मा बुद्ध की धरती, जहां से विश्व को संदेश देने का काम किया, वो महावीर की धरती है, और वैसे धरती को आप उपेक्षा करके, उसको अनदेखी करके, उसको अरमानों पर पानी फेर करके आप देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है महोदय? एक बात हम कहना चाहेंगे महोदय कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति महोदया ने जो भाषण दिया है, और उसने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास, और आपने कहा सबका प्रयास। हम मानते हैं आप कैसे सबका साथ ले सकते हैं, आप सबका प्रयास कैसे ले सकते हैं। आज आप 75 सालों में अमृतसर महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत का महोत्सव मना रहे हैं, और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है वो आज भी अपमानों का जहर पी करके इस देश में जिंदा है। आप कुछ लोग अमृत को वोट से लगा लिए, आप अमर हो गए, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा जो समाज है, आज 75 वर्षों में आजादी के, आज भी अपमान का जहर का घूंट पी करके जी रहा है। आप सबका प्रयास की बात करते हैं, सबको विश्वास लेने की बात करते हैं। ये कैसे विश्वास आपको मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? सबका प्रयास कैसे आपके साथ हो सकता है? इसके लिए सभापति महोदय, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, देश के आजादी में इस देश के सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस देश का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है, और सब लोगों का ये अधिकार है इस देश के मिट्टी में, इस देश के हवा में, इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सब लोगों का अधिकार है। सब लोगों को जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तो कहिएगा कि सबका हमको प्रयास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। एक तरफ देश के अंदर कोई हेलीकॉप्टर से जाकर के शादी विवाह अपनी बहू बेटियों का करता है, और इस देश के अंदर दलित, आज भी दलित जो है घोड़ा पर चढ़कर अगर शादी करने जाता है तो उसको आप उतार देते हैं और कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उपाय है सभापति महोदय,
अगर हमारी केंद्र सरकार अगर चाहती है कि सबका प्लीज बैठ जाइए अगर आपका जब अवसर है तब बोलिएगा। तो एक ही उपाय है महोदय कि जो इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है यह गैर बराबरी व्यवस्था है और यह व्यवस्था जैसे आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा इस देश में जाति कोई भगवान ने नहीं बनाई है, आदमी ने बनाया है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, इस देश को विश्व में सबसे महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक काम तो देखिए करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि या तो जो लोग गैर बराबरी व्यवस्था के तहत जो लोग नीचे गिराए गए हैं जात पात के नाम पर, उन लोगों को आपको ऊपर उठाना होगा और उनको ऊपर उठाने के लिए उनको ऊपर उठाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के सीमा में जितने रेजिमेंट हैं उसमें सब लोगों को भागीदारी देना होगा। सब लोगों को भागीदारी देना होगा। अगर आप भागीदारी देना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम और करना होगा। अब समाप्त कीजिए जी। अरे महोदय हमारा 20 मिनट का टाइम है। और भी वक्ता है आपके दल के, प्लीज का समय है महोदय। आपके दल के और भी मान्य सदस्य हैं, इसलिए महोदय आपको सबको जब हिस्सेदारी देना होगा तब इस समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी और सब लोगों के अंदर देश के प्रति ममता होगा। तो इसलिए उसके लिए एक काम करना है कि देश के अंदर आप जातीय जनगणना कराइए। देश के अंदर जातीय जनगणना कराइए। जब इस देश का जब जानवर की गिनती हो सकती है, इस देश में शेर, भालू, चीता, भेड़िया की गिनती हो सकती है, उसकी जनगणना हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, तो तब मानव की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? और जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा सभापति महोदय कि कौन जाति की इस देश में कितनी संख्या है। और जब तक संख्या उनकी गिनती नहीं होगी तो उनको हिस्सेदारी और भागीदारी ये सरकार कैसे दे सकती है? कैसे दे सकती है? तो इसलिए जातीय जनगणना कराना जरूरी है, ताकि जब बात उठती है हक की, हिस्सेदारी की, इस देश में आरक्षण की बात उठती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई है कि कौन सी जाति की कितना आबादी है, तो हम उनको आरक्षण कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहती है कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। जब इस देश के अंदर जब अगर विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, तो जातीय जनगणना कराइए और जो जितनी जातियां जिनकी आबादी है उस हिसाब से उनको भागीदारी दीजिए। आदरणीय मेहता जी, विकसित राष्ट्र बन सकता है महोदय। इसलिए महोदय हम इस समान चर्चा पर एक बार सदन के माध्यम से सरकार से। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। जी बैठिए, हो गया आपका विषय हो गया, प्लीज जी मेहताब साहब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। द बजट कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, प्लीज बैठ जाइए। रिपोर्ट जी आदरणीय मेहताब साहब। It is basically reflects the plan and program of the country and of the nation. So when something is said that it is only an accountant's job
I don't believe in that type of comment. There have been umpteen reasons to be apprehensive in 2023, more so while waiting for the budget. US Federal Reserve's unbridled aggression, rising cost in Ukraine and Russia, and China's COVID crisis, to name a few. Yet in the backdrop of like this government has decided to go bold and big on capex and chosen consistency in a world characterized by randomness and volatility. The Prime Minister has outlined the period from 2022 to 2047 as the period of Amrit Kal. It is a vision to make India a developed country during this golden phase. To realize this, India needs to rapidly invest in social infrastructure. This investment would need to come from taxpayers' money and not borrowings. India's tax to GDP ratio is still below the critical mark of 15%. India's gross tax to GDP, which was 11% in financial year 2019, fell to 9.9% in financial year 20 and marginally improved to 10.2% in financial year 21-22. This is much lower when we compare ourselves with the emerging market economy, which is average of 21, and OECD, the average is 34%. Today, the country boasts more than 4.3 million crorepati's households, equivalent to 23 million consumers. They are spread all over the country. By 2047, if political and economic reforms have their desired effect, India has the potential to become the fastest growing economy in the world. This growth will not only make the Indian middle class the biggest income group in the country, but it will set to be major driver of economic, political, and social growth. Finance Minister's full-fledged budget before next year's general election can be commended on many counts. I mention only three. For staying the course on fiscal consolidation, changing the composition of government expenditure in favor of capital as against revenue spending, and third, welcome move relating to personal income taxation. In turbulent time like this, a good budget can only be said is just a good beginning. The turmoil in the global economy is likely to continue as the impact of higher interest rates shows up in weaker demand for consumption and investment. Geopolitical tensions continue to disrupt every supplies and trade as the resilience of the domestic economy gets tested by global headwinds. Deft fiscal maneuvers is necessary, like they were this year. Now, coming to the basics, sir, there is need for some answers. PM Kisan allocation is 13.33% lower as compared to budgetary estimate of rupees 68,000 crores made in 22-23. The revised estimate of 22-23 was reduced to 60,000 crores, no doubt, but in 21-22, an actual expenditure was rupees 68,825 crore, which was incurred on the PM Kisan. The figure is there for all of us to see. Should we believe that people have moved from farming to some other avenues for better? Or should we believe that they have been pauperized and have become daily wage earners? On MGNREGA, this generated an all-time high, 389 crore person days of employment in 21-22.
363 crores in 21-22. Even this fiscal's project is 290 to 300% days will exceed the 265 crore plus generated in 29-20 and 2018 and 19. It is a demand-driven scheme. Whenever we make this point, always it is said it's a demand-driven. But here the figure shows how it has met. The budgeted amount this year is 60,000 crores. The question is, how realistic is the assessment? If the next southwest monsoon is normal and the non-farm economy timely recovers, MGNREGA may not require any additional funding. Till then, do we have to keep our fingers crossed? Coming to free food distribution scheme, and this is a scheme which we have all experienced, moderated income inequality in many states. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana played a key role in keeping extreme poverty in the country at the lowest level. We didn't hear a single death because of hunger, because of this program. IMF report says extreme poverty was at the lowest level of 0.8% during the pandemic hit 2020. SBI study, State Bank of India study, has analyzed that several government transfer payments for the poor are adding rupees 75,000 to a household per annum. But I would like to draw the attention of the government to the design flaw, as ration records have not been updated since 2011 onwards. More than 40% of India's population is currently excluded from National Food Security Act. 40%. In many villages and slums, the most marginalized castes and communities are often without NFSA ration cards. However, states like Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, West Bengal and Chhattisgarh have either universalized or substantially expanded coverage with state cards. Sir, here I would like to remind the government about the Supreme Court judgment of last August, that is 2022, which has directed the Union government to expand National Food Security Act coverage. Nothing has happened till now. Nothing has happened. And the answer that comes from the government is, let the census be over. Despite Supreme Court's direction, based on population projection, at least 100 million beneficiaries, especially children born in the last decade, are missing from the ration list. Where are they going to be? When are they going to be covered under NFSA? I come to another very important issue, where Odisha has been affected to a very great extent. I'll first put the figure of the budget, where food subsidy in Food Corporation of India under National Food Security Act, the revised estimate of 22-23 was 2,14,596 crores. This budget is 1,37,207 crores. There is a drastic cut. On food subsidy for decentralized procurement of food grains, 72,283 crores, which has come down to 59,793 crores. The government may say, because we have withdrawn Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, there is no need to procure more. And here actually the catch lies. The catch is, Odisha produces more than 72 million tons of
paddy. And we purchase, FCI plus state government purchases the whole amount from the farmers because to help the farmers at the MSP rate. Very few people keep rice for their own consumption. Other than that, the rest is purchased. What will happen there? Now already Odisha government is purchasing, but union government is not purchasing any paddy at all. No rice. Earlier, rice was being moved through Kerala to Tamil Nadu and also to the northeast. Now that is also not being done. Why this type motherly attitude to Odisha? That is the question which I would like to put. With this curtailment of or minimizing the purchase, who are the states which are getting affected? Odisha is the major state which is getting affected. And I would like to say, FCI is not taking parboiled rice. Corporation is not making payments to Odisha, though that is due in there. Sir, this budget is of 45,397 crores, and which is an increase of 7.5%. That is laudable, as I had said earlier. But what is the position? The position is, as I would say, there is a structural problem with our budget. More than 40% goes for the interest, to cover the interest. 30% goes on salary. So are we correcting it to a certain extent? No. Not much. We don't see any light from this budget. And I'm also reminded of another point, sir. You are aware, most of us are also aware. Are we at any point of time talking about Sahara India? 13 crore people had invested in that. What has happened? Doesn't government have any responsibility? We will say it is sub judice, Supreme Court is taking over, SBI is looking after it. But who is caring for these people, 13 crore people who had invested? No, not a single reply is coming from the government. Sir, coming to health issue, I would just deal with investors are 13, large number of people are affected. Sir, in a speech, Finance Minister has announced budget for health, not including research, will be roughly 86,175 crores, and that is 615 rupees for every person if I calculate it as per our population. This is a 2.7% increase from the previous year and lower than the rate of inflation. In real terms, the health spending has declined. Vaccinating to a single child against all childhood illness in our country costs rupees 1,600. A day of hospitalization in the public hospital is estimated 2,800 rupees. At a private hospital, it is more than 6,800 rupees. Rupee spending on health by the government gives more return than out-of-pocket or private spending by citizens. National Health Mission allocates less than 3%, that is 717 crores of rupees to non-communicable disease. For communicable disease, it is 3 times more, that is 2,178 crores. For reproductive and child health service, it is 9 times more, that is 6,273 crores. There is a need to rebalance, to pay attention to non-communicable diseases. On education, sir, share of education has fallen over the past 7 years, from 10.4% to 9.5%. This is stated in the state's in the economic survey. While expenditure on social service increased from 9,15,000 crores to 21,32,000 crores, the share of education has shrunk from 42.8% to 35.5%.
between 2015 and 2022. As a share of the GDP, the budgetary allocation for education saw a minimal gain, that is 0.1 percentage points, from 2.8% to 2.9% during this 7-year period. On taxation, sir, Finance Minister has made 5 announcements to reduce the tax burden. 4 pertain to the new regime. The last one is for exemption on leave encashment. But my question is the new tax regime attractive? Despite government's effort to simplify the tax system, the uptake of this regime is low due to the unavailability of common tax deductions and exemptions. Why should we have to run to the chartered accountant or a lawyer to understand how much tax I have to pay? Can't we make it simple? Even today, with this new tax regime, it is so cumbersome, it is difficult to understand. Very difficult to understand. Coming to the devolution of states, sir, the state share has never been close to 41%, though it has been announced by the Finance Commission, 15 Finance Commission. The state share has never been close to 41% due to cess and surcharge imposed by the Union government. Odisha government, our Chief Minister has been Navin Patnaik has been repeatedly writing to the Prime Minister that you share some of this, but that is falling on deaf ears. It keeps major chunk of taxes, and what we have been asking, Odisha is facing natural disaster year after. Our only demand is that you allow, and this we have discussed, the state government also has discussed with the NITI Aayog, with the Prime Minister, that you make Odisha a special focus state. Time is exhausting. For at least 3 years, if a natural disaster hits Odisha, allow or declare it as a special focus state where 90:10, that is the center and state share, for 3 years only, so that we tide over the situation and come up forward. Sir, on railways, I will be failing on my duty if I don't mention 2-3 words, because the rail minister is a member of this house representing our state. We find a significant feature. It has set aside nearly a quarter of its total capex outlay of rupees 10 lakh crores. The budgetary support amounts to 2.4 lakh crores. The goal is to raise the share of rail freight traffic from 27%, road transport is 64%, to 45% by 2030. Freight earnings are 2.5 times the passenger earnings. It is possible to improve on both counts. It's not unachievable. It is possible. The railways must adapt to become a transporter of FMCG, automobiles, and other high-value products for which last-mile connect is important. On the passenger side, upper-class travel should remain competitive vis-à-vis air and road travel. There is scope to raise both traffic and freight revenues. Despite pensions, can we imagine? Pensions of railway is over 25% of the total operating expenses of the railways. The budget numbers indicate 30,000 crores of rupees has been set aside for doubling of tracks. This was only 9,000 crores in 21-22. 32,000 crores to be spent on new tracks, that is 50% increase in 2 years. 40,000 crores on the rolling stock, which was only 8,000 crore last year. 8,000 crores for electrification. These are big numbers, very big numbers. The obvious question is, from my state point of view, how much is actually percolating to the state of Odisha, which has been denied railway development for last so many years. The obvious question, of course, is whether railway have the capacity for absorption and implementation for this expanded capital. Capital investment in the railway is overdue, no doubt. But it needs financial reforms, administrative reforms, and greater independence. Before concluding, sir, I have a small
demand, as my friend from Kendrapada has just now mentioned. The station is there. Tickets are being sold. Rail line is there, but it is not functioning. Passenger train should ply on that route. That is necessary. With these words, I conclude. Thank you. श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे बजट 23-24 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपका और आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बजट 23-24 के लिए हमारी पार्टी की मुखिया ने कहा है कि देश में पहले भी इस तरह के बजट आते जाते रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही है, किंतु वे सब बेईमानी हो गए। जब भारत का मध्यम वर्ग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और कोविड के चलते लोअर मिडिल क्लास बन गया। यह बजट भी पिछले वित्तीय वर्षों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। सरकारें अपने पिछले साल की कमियों को नहीं बताती हैं, उन कमियों के स्थान पर नए वादों की झड़ी लगा देती हैं। सच्चाई यह है कि 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन हमेशा ही दांव पर लगा रहता है, जैसे कि इसके पूर्व के बजट के अभिभाषणों में था। यह बजट भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बजट की तरह ही है। महोदय, बजट में हर वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है। जहां 5 लाख का इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, इसमें हर मध्यम परिवार को बहुत मदद मिलेगी। वहीं नई टैक्स रेजिम और पुरानी टैक्स रेजिम में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है कि किस टैक्स रेजिम में जनता को अधिक से अधिक फायदा होगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस अपने अभिभाषण में इस टैक्स रेजिम को अवश्य स्पष्ट करें। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना के बजट में 13,000 करोड़ की कटौती की गई है। हम सभी को ज्ञात है कि ग्रामीण अंचलों में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं और इस योजना से संचालन से ग्रामीण में पलायन भी रुका है, साथ ही साथ रोजगार के सृजन भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधान संघ के सभी लोग आंदोलित हैं कि उनका समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है और जो भी कर्मचारी ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनका वेतन भी वो अपने जेब से दे रहे हैं। महोदय, वित्तीय वर्ष 23-24 में सरकार द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विकास के लिए 3,943 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावासों की जरूरत है। खास तौर पे मेरे जनपद आजमगढ़ में, जहां कई एकड़ की सरकारी जमीन अब भी खाली पड़ी है, मेरी सरकार से मांग है कि आजमगढ़ जनपद एक मंडल है जहां अभी महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय संचालन में आया है, जिसके चलते कई जिलों के छात्र यहाँ पठन पाठन करने आते हैं। इन छात्रों के लिए भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावास बनाए जाएं। महोदय, बजट में आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम की सफलता को सरकार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन तथा अन्य हेतु 500 ब्लॉकों का चयन करने के कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। मैं चाहती हूं कि हमारे जनपद आजमगढ़ के समस्त ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया जाए। महोदय, आजमगढ़ में महाविकास की योजना की रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं है, जिसके कारण से भूमि आवंटन नहीं हो पाया है। कौन सा ग्रीन लैंड है, कौन सी औद्योगिक भूमि है, कहाँ पार्क है, कहाँ क्रीड़ा स्थल है, कहाँ सरकारी जमीन है, कहाँ वनीकरण है, कहाँ सीवेज का प्लान है, इसका कोई मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं है। एडीए ने वर्ष 2031 के लिए महायोजना का मास्टर प्लान बनाकर 2021 में शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अमीर गरीब अपने आशियाने का सपना संजोए उस प्लान को लागू करने का इंतजार कर रहे हैं। औद्योगिक भूमि अलग नहीं होने के कारण कारपोरेट समूह और बड़े ब्रांड की कंपनियां जनपद में अपना रुख नहीं कर रही हैं, इसलिए यहाँ विकास और रोजगार पूरी तरह से ठप है। आजमगढ़ चारों तरफ से तमसा और घाघरा नदियों से घिरा हुआ है। हर साल बाढ़ से सैकड़ों गांवों में जान माल का नुकसान होता रहता है। मेरी सरकार से मांग है कि रिवर फ्रंट बनाकर नदियों पर बाढ़ का नियंत्रण कर सके। और अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी पर कमर्शियल क्रूज का उद्घाटन किया है। मैं चाहती हूं कि उसे मेरे जिले की नदियों से भी जोड़ा जाए, ताकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना जो नदियों को नदियों से जोड़ने का था,
उसे पूरा किया जा सके। आजमगढ़ को चारों तरफ से रिंग रोड के मास्टर प्लान बनाकर जोड़ा जाए और उसे मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज, फूलपुर, निजामबाद और बूढ़नपुर के तहसीलों से भी जोड़ा जाए। सर, हाईवे की बात करूं तो NH 233 पिछले 6 सालों से बनने को है, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। PMJSY की सड़कों की बात करूं तो सत्र खत्म होने को है, लेकिन सिर्फ 50% काम ही इस पर हो पाया है। सर, इन सरकारी योजनाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए। हर घर नल योजना जो सरकार ने अभी बात कही है, सिर्फ 30% अभी तक सर्वे हुआ है, बनने तो दूर की बात है। आजमगढ़ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, घरेलू औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जाए। इन्वेस्टर्स समिट 2023 जो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी में आजमगढ़ को भी शामिल किया जाए ताकि आजमगढ़ में भी नए उद्योगों की स्थापना हो सके और जो जिले से पलायन होकर बड़े शहरों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसे रोका जा सके। आजमगढ़ का मंदूरी एयरपोर्ट पूरी तरह से बन के तैयार है, उसे जल्द से जल्द संचालन में लाया जाए और एयरपोर्ट से तहबरपुर बाजार होते हुए निजामाबाद, फरिया बाजारों से मोहम्मदपुर, वाराणसी 4 लेन तक जोड़ा जाए। आजमगढ़ के इटौरा में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और चक्रपानपुर में मेडिकल कॉलेज होते हुए महनाजपुर वाया सिधौना तक पूरी सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाए, जिससे वाराणसी आजमगढ़ के लिए एक अन्य सीधा मार्ग बन जाए और ट्रैफिक बढ़ जाए, जिससे मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वालों की राह आसान हो जाएगी। वाराणसी, लालगंज, आजमगढ़, गोरखपुर की नई रेल लाइन का बजट 2022-23 में स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसका काम काफी धीमी गति से चल रहा है। इसमें तेजी लाई जाए और लालगंज में एक स्टेशन बनाया जाए, जिससे वहां के लोकल प्रोडक्ट, अनाज, फल, सब्जियों को आयात निर्यात में आसानी हो सके और एक वंदे भारत ट्रेन को मेरे जिले में भी चलाई जाए। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी, काले मिट्टी का बर्तन का उद्योग और रेशम उद्योग, जिसमें मुबारकपुरी साड़ियां भी शामिल है, ऐसे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इनके बिजली के बिल को माफ किया जाए, इनको आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाए और इनको GST से मुक्त किया जाए और छोटे व्यापारियों को व्यापारी क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाए। आजमगढ़ में लाल सोना कहे जाने वाली लाल मिर्च की खेती होती है, लेकिन इसके भंडारण और निर्यात का प्रबंध नहीं होने के कारण किसानों को इसका मूल्य नहीं मिल पाता है। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाए। सनई की खेती पहले हमारे यहाँ होती थी, लेकिन अब यह मृतप्राय हो चुकी है। अगर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तो जूट उद्योग यहाँ स्थापित हो सकता है और यह मृतप्राय खेती भी पुनः जीवित हो सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में श्री अन्न की बात कही है। आजमगढ़ की भूमि इस तरह के श्री अन्न, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, जौ जैसे अनाज शामिल हैं, इसके लिए प्रतिकूल है। मेरी सरकार से मांग है कि ऑर्गेनिक खाद, सरकारी समितियों में ऑर्गेनिक खाद और श्री अन्न के बीज उपलब्ध कराया जाए, जिससे आजमगढ़ में भी इस तरह के श्री अन्न की भारी मात्रा में खेती हो सके। आजमगढ़ में मत्स्य संपदा योजना के तहत, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि नदी तालाब का जाल बिछा है, इसको भी प्रोत्साहन करने के लिए वहां के उद्यमियों को इसका प्रोत्साहन किया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आजमगढ़ चारों तरफ से नदियों से घिरा है, गांवों को जोड़ने के लिए नदियों पर पुल बनाकर एक्सप्रेसवे और 4 लेन से जोड़ा जाए। सब 2 मिनट महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र से मात्र 40 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। आजमगढ़ बीच में होने के कारण पूर्वांचल का दिल कह सकते हैं। यह दोनों क्षेत्र से बड़ा जिला है, जिसका विकास पूरी तरीके से अधूरा है। अमृतकाल का यह समय और यह बजट लोगों के उत्सव मनाने वाला है, लेकिन अगर आजमगढ़ को इसमें स्पेशल पैकेज दे दिया जाएगा तो आजमगढ़ के लोग भी इस अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। और अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। सर, देश के साथ साथ आजमगढ़ की जनता भी बहुत उम्मीद से माननीय वित्त मंत्री की तरफ और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद लगा के बैठी है कि अमृतकाल के बजट में आजमगढ़ को एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जिससे हम सभी लोग अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। सर, मैं आपका मनपूर्वक आभारी हूं। मैं इतना भाग्यवान हूं कि तीसरी बार इस क्षेत्र में, इस बड़े हाउस में बात करने का मौका मुझे मिला है। मेरी भगिनी
जो मेरे साथ झारखंड में गवर्नर थी, अभी राष्ट्रपति बन गई, मेरी पहली एक भगिनी प्रतिभा जी, वो भी मेरे साथ पड़ी हुई है, और रामनाथ जी भी गवर्नर थे, इसलिए मैं भाग्यवान समझता हूं। और मेरी भाषा जो आगे मैं मराठी में बोलूंगा तो भी चलेगा, हिंदी में भी बात करूंगा। सतारा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें मैं आता हूं। स्वातंत्र्य के पूर्व काल में जो 3 जिले सब भारत में प्रसिद्ध थे लड़ने के लिए, उसमें क्रांतिकारी नाना सिंह पाटिल जी थे। और मेरी एक कामना है, मनु तांबे जो झांसी की रानी कहती है, उसका मायका भी मेरे क्षेत्र में है, तो मैं चाहता हूं, मेरी मांग भी है कि मिलिट्री भर्ती के लिए कुछ एक विद्यापीठ बनाए, जो मिलिट्री एकेडमी जैसे एनडीए खड़गवासला में है और आईएमए जैसे देहरादून में है, वैसे अगर कोई मिलिट्री एकेडमी बने सेंटर की, और महिलाओं के ट्रेनिंग के कुछ जबाबदारी लेंगे तो अच्छा रहेगा। आता मी मराठीत बोलतो। महाबळेश्वर पाचगणीच्या ज्या शाळा आहेत इंग्रजी माध्यमाच्या, त्यांना संपूर्ण भारतातून तिथे आपले पालक आपल्या मुलांना पाठवतात। महाबळेश्वर एक थंड हवेचं उत्तम ठिकाण आहे। हे दोन्ही जंगलाच्या प्रदेश असल्याकारणानं एनजीटी नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलची बरीचशी बंधनं आहेत, आणि त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळामध्ये 150-200 वर्षापूर्वी जे क्षेत्र निर्माण झाले आहे, त्या क्षेत्राचा जर विकास झाला नाही तर रोजगार जोपर्यंत मिळत नाही, घोडेवाले, खेळणीवाले, काही फळं विकणारे, लोकांना धान्य पुरवणारे, लोकांना रिक्षातून नेणारे, सायकल रिक्षा नेणाऱ्या लोकांना पोटापाण्याला उद्योग मिळत नाही, तोपर्यंत रोजगार मिळावा, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हे बजेटची एक आपल्या खासियत आहे। आणि त्यामुळे माझी आपणास विनंती आहे की एनजीटीच्या माध्यमातून भारतीय आणि महाराष्ट्र सरकारनं एकत्र बसून महाबळेश्वर सारख्या एका थंड हवेच्या ठिकाणाची जर विस्तार केला नाही तर भविष्यात ते तसंच राहील, आणि म्हणून पोटापाण्याचा उद्योग होणार नाही। मेरे आणखी माझं म्हणणं आहे की कोकण आणि महाराष्ट्राचा पश्चिम विभाग जोडण्याकरता पोलादपूर ते सुरूर एक रस्ता आहे। साधारण शनिवार रविवार जेव्हा सुट्टी असते किंवा उन्हाळ्यात सुट्ट्या जेव्हा असतात त्यावेळा अलीकडून पलीकडे जायला एकाच गावातून कमीत कमी 3 ते 4 तास लागतात, जोपर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण होत नाही। आपने संभवतः सूचना नहीं दी होगी, अभी दिया तो इंटरप्रेटर ने हिंदी में बोलिए या अंग्रेजी में बोलिए, सुनाई नहीं प्लीज। मराठी का इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है तो सूचना न होने के कारण। हिंदी में बोलूं मैं? हिंदी अंग्रेजी में बोलिए जी प्लीज। मैंने कल भी इच्छा प्रकट करी थी, लेकिन हुई नहीं, इसलिए मैं हिंदी में बात करूं। शुरू करूं कि जी करें। जो झांसी की रानी मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये जिसने आवाज उठाई थी, उस झांसी की रानी मेरे कार्यक्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, उस गांव से आती है। तो मैं चाहता हूं कि भारत में एक ऐसी मिलिट्री एकेडमी बने जिस मिलिट्री एकेडमी का नाम मेरी झांसी नहीं दूंगी के नाम झांसी की रानी मिलिट्री एकेडमी हो, क्योंकि एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी वो पूना में है और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। वैसे अगर एक एकेडमी बन जाए और महाराष्ट्र में जिधर सातारा में अजिंक्य तारा के पार्श्वभूमि पर अगर बने तो बड़ा अच्छा होगा। महात्मा फुले की पत्नी जो सावित्रीबाई थी, जिन्होंने पहले महिलाओं को शिक्षण देने का कार्य किया पूना में भिडेवाड़े में, उनके नाम से महिलाओं को शिक्षण देने की सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी, क्योंकि एक विद्यापीठ पूना है उसका नाम सावित्री रखा है। लेकिन अगर महात्मा फुले एक डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, शाहूनगर डिस्ट्रिक्ट बन सकता है और अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, तो महात्मा फुले की पत्नी सावित्रीबाई इनके नाम से महिलाओं की एक शिक्षा की एक विद्यापीठ बने तो बड़ा अच्छा होगा। सातारा में स्वर्गीय यशवंतराव चौहान जो डिफेंस मिनिस्टर थे, बाद में अर्थमंत्री भी थे, उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता हूं और बजट की स्पीच में बोलने की मुझे मौका मिला है, इसीलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं। एक बात करनी चाहिए, जो सातारा सैनिक स्कूल है वो 2 जून 1963 में आदरणीय चौहान साहब ने निकाला है, लेकिन आज उनमें महिलाओं की संख्या 10 खाली है, बाकी बच्चे जो पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो किसान के, कामगारों के और शिक्षा देने वाले शिक्षण के हो रही है, तो उनको फी जो है वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए फी अभी बन रही है। तो अगर फी के
अगर कुछ सहूलतें दी जाए तो बहुजन समाज के विद्यार्थी मिलिट्री एकेडमी जाकर कुछ अपना नाम कमाएंगे और आगे चल के जो आजकल मिलिट्री में जो जगह खाली पड़ी हुई है वो भरने का कुछ मौका उनको मिले। आज देखा मैंने पंतप्रधान आवास योजना का कम से कम 30-35 हजार घर बनाने का अर्जी मेरे डिस्ट्रिक्ट में आई थी, लेकिन जब तक कितनी जगह है, कैसे घर बना सकते हैं, काली मिट्टी में घर बनाना है, मुरुम में घर बनाना है और जहां खदानें हैं वहां मुरुम बनाना है, तो उसका अगर एस्टिमेट जब तक बनाते नहीं है तब तक बनाना मुश्किल है। एक साथ 1.5 लाख 2 लाख ऐसा करके कभी घर बनेंगे नहीं। तो जगह कितने अवेलेबल है, कितने अर्जा है, कितने लोगों को जगह दे सकती है, उसका एस्टिमेट क्या हो सकता है, ये नहीं होता तो सालाना कम से कम 1000-1500 घर बनाकर ये प्रावधान जो है कभी बन नहीं सकता। अगर अभी मैं कल जब स्पीच सुन रहा था तो 15 साल के बाद जो व्हीकल हो गए उनको निकालना चाहते हैं, संख्या क्या होगी, कहां वो लेंगे रखेंगे, डंपिंग ग्राउंड कहां होगा, उनको तोड़ने की क्या व्यवस्था होगी, उसका मेल्टिंग कैसा होगा, होने के बाद जो बनेगा लोहा उसका उपयोग क्या करने वाला है, उसका जब तक आप प्लानिंग करेंगे नहीं तब तक ये गाड़ियां रास्ते पे आएंगी और जो छोटे रास्ते हैं वो फिर से छोटे बन जाएंगे। इसीलिए जब तक आप ये स्क्रैप किया हुआ मटेरियल डंपिंग की कुछ व्यवस्था करते नहीं तब तक ये होगा नहीं। इसीलिए पूना जैसा शहर है, कोल्हापुर शहर है, नासिक शहर है, महाराष्ट्र में जितने बड़े बड़े शहर है उसमें और एक प्रावधान है कि जिनके पास कभी गाड़ी के बैठने का शौक ना था उन लोगों के पास अब गाड़ियां हैं तो उनके अगर कुछ सहूलियत मिले थोड़ा सा उनको इन्फॉर्म करके कि 1 साल में आपको सहूलियत दी जाती है और नई गाड़ी लेने के लिए अगर नई गाड़ी लेते हुए कुछ उसको फाइनेंस असिस्टेंस मिले और 1-2 साल का जो रजिस्टर का खर्चा होता है वो भी मिले तो लोगों को कोई सहूलियत मिलेगी और अपनी पुरानी गाड़ी जो देश को अभी हवा में तकलीफ होती है इसलिए देने के लिए लोग राजी होंगे। सहूलत अगर मिलेगी तो अच्छा होगा। व्यक्तिगत कर भरने के लिए आपने जो सहूलत दी है इसका मैं जरूर आभारी हूं, लेकिन रिटर्न भरना और रिटर्न भरने के लिए सीए के पास जाना, वकीलों के पास जाना, उनकी फी देना, ये लोगों को परवड़ता नहीं और जितना भरा है उसका वापस आने के लिए मुझे पैसे दो मैं करके दूंगा, मुझे पैसे करके दूंगा, पैसे देते हैं हम ज्यादा और आय जो कम रिटर्न है वो आता नहीं, इसलिए उसकी अगर कुछ व्यवस्था कर चले। मेडिकल कॉलेज आपने जो निकाला है बड़ी अच्छी इसकी है, लेकिन इतने मेडिकल कॉलेज निकालने के बाद उसकी गति क्या है, कंस्ट्रक्शन चला है कि नहीं, और मेडिकल कॉलेज होने के बाद उनके लिए जिन लोगों को आपने वहां पढ़ाने के लिए और मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए मनुष्य बल है उसकी क्या व्यवस्था की है, ये जब तक अपने को पता नहीं चलता तब तक ये मेडिकल कॉलेज चलेंगे नहीं। अभी एक स्वच्छता के बारे में मलबा निकालने के लिए जब तक यंत्रणा नहीं होती, क्योंकि खाली मैन होल में अगर लोग छोड़ेंगे तो वायु से वो प्रदूषित होकर कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। जब तक मशीनें नहीं आती है और मशीनों लेने के लिए सहूलियत ही नहीं जाती तब तक म्युनिसिपैलिटियां हो, पंचायत हो या जिला परिषद हो, उनके लिए अगर कुछ व्यवस्था हो तभी ये हो सकता है। अभी बीएसएनएल के टावर के बारे में मैं आभारी हूं। दुर्गम भाग में मेरे क्षेत्र में टावर मिले हैं, लेकिन जब तक उधर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं और खड़े करने की व्यवस्था नहीं है तब तक ये बनने वाला नहीं। कई आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन पूरे करने के लिए अगर 5 साल लगते हैं तो ये चुनाव से वो चुनाव तक खाली आश्वासन ही दिए जाते हैं और लोगों के झोली में कुछ मिलता नहीं। इसीलिए फटी हुई झोली में कुछ डालना ये गलत तरीका है। इसलिए जब तक आप पूरा प्लान करके और एक काम करना चाहिए, गए बजट में जो आश्वासन दिए हैं वो आश्वासन पूरे हुए या नहीं हुए और आगे करके क्या करना है, इसीलिए जब तक करते नहीं तब तक ये आश्वासन देना उचित नहीं है। पूरे देश में मैं सिक्किम में कभी राज्यपाल के पद पे रहा हूं। ऑर्गेनिक की जो बात है, अगर भारत का एक राज्य जनवरी 1916 में पूरे विश्व में अगर ऑर्गेनिक हो सकता है तो एक ही बात की पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया। एक ही अगर किलो केमिकल खाद या उर्वरक
अंदर लाया जाए तो उसको 25,000 का जुर्माना और 3 महीने की सजा, ये ऑर्डिनेंस निकालकर वो बिल में करके जब हुआ तो देश का एक सिक्किम राज्य जो है वो हुआ। ऐसे कुछ तरकीब भी निकाले कि जिसकी वजह से लोगों को प्रोत्साहन मिले और ऑर्गेनिक से जो चीजें बन रही है उसके खपत के लिए भी अगर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो तो हो जाएगा। मुझे अभी एक यशवंतराव चव्हाण जी ने जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो सबके बच्चों के लिए जात जमात इसका चिंतन नहीं करते हुए जिनकी आमदनी कम है उन पालकों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था में सहूलत दी है। 1200 रुपए तब जो इनकम था जिनका, उनके बाल बच्चों को भी सहूलतें दी गई। आजकल 1200 नहीं करे 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, लेकिन जात जमात पे एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा तो भी सहूलतें है। लेकिन हमारे जो छोटे भाई किसान भाई है, कारीगर है और देहात में रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को सहूलत देना चाहिए और बड़े होकर उन्होंने 1 या 2, 3 लोगों को सहूलत देकर पढ़ने की वजह से जो शिक्षा पाई है उसके लिए उनको भी आधार देना चाहिए। मुझे मराठी में बोलने की थी लेकिन मराठी में बात नहीं कर सका, हिंदी में मेरे बात करने के लिए मुझे जो आपने संधि दी इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये बजट में जो अच्छी चीजें की है उसके लिए मैं बजट का प्रोत्साहन भी देता हूँ, सराहना भी करता हूँ। जो बातें कम हुई है और होना चाहिए ऐसी उम्मीद करता हूँ वो आप करेंगे ऐसा लगता है। इस जवान के साथ मैं मेरे वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। श्री M.K. राघवन जी। Sir, to allow me this occasion to participate on the discussion of Union Budget 2023-24. First of all, I strongly object this year's Union Budget 23-24. Being the last budget of this government, I had high hopes. Unfortunately, after presentation of this budget, I lost all hopes. So I wish to bring in few suggestions for your consideration and necessary actions. Sir, what happened Manrega in this budget? Sir, Madam Minister is really neglecting the rural population. This year's budget clearly establishes this. The contribution to the Manrega was monumentally reduced to 60,000 crores. So what is the result? By slashing funds to Manrega, government is bringing in a disaster into lives of our common men. This world's largest social security legislation is the brainchild of our government in 2005, led by UPA. Sir, but unfortunately, we feel sad that Manrega is being totally neglected by the union government. My suggestion is that the minimum wages under Manrega must be increased at least rupees 400 per day, and timing should be reduced, giving more thrust to physical asset creation by channeling these resources to agriculture and related activities. I humbly request Finance Minister to enhance the funds for Manrega at least rupees 1,25,000 crores to ensure 100 days of employment in a year. Sir, Madam Minister, she's totally neglected my constituency Kozhikode as well as entire Kerala. Of the 2,40,000 crores earmarked in the budget for railways, Kerala is expected to get only rupees 2,033 crores. So this is very minute amount for our state. I wish to bring to your urgent attention that the file for redevelopment of Calicut railway station has been pending with RLDA for years now. It is really sad that there is no provision for Faro-Kanganipur railway line and Guruvayur-Tirunavai railway line projects in this budget. We request you to provide Vande Bharat train connecting Calicut-Bangalore, Calicut-Trivandrum, and Calicut-Chennai, along with extension of train 16511, 22 connecting Kannur, Yeshwantapura to Calicut, and to provide us with more trains to Malabar region. Sir, the most important issue I have to raise today before you
is regarding setting up of AIMS at Calicut, Kozhikode. For the past 8 years, I have been requesting Honorable Prime Minister and Health Minister for sanctioning AIMS at Kozhikode. Sir, land acquisition has been already completed for setting up of AIMS at Kinalur, Calicut. I request Finance Minister to provide fund allocation for setting up of AIMS and to expedite the same. Sir, Calicut Airport is one of the highly profitable and the only airport owned by Airports Authority of India in Kerala. Sir, however, Calicut Airport has been totally neglected in this year's budget. We request you to kindly provide sufficient funds for expansion and extension of Calicut International Airport. Sir, regarding Jaipur Port, I have requested this House to upgrade Jaipur to major port and improve connectivity to Lakshadweep Islands many times. Unfortunately, no initiative has been taken in this regard. My humble submission before you, kindly provide us with the funds under Sagarmala to develop Jaipur Port and also for Jaipur-Malappuram road connectivity. Sir, I thank the Government of India for including Jaipur under the Swadesh Darshan scheme and request to allot more funds for tourism-related activities for Calicut. Sir, regarding setting up of a Kendriya Vidyalaya at Ulliyeri, Calicut, I request your other intervention. Sir, I appreciate the Honorable Finance Minister for increasing the duty on compounded rubber. But my only concern is whether existing international agreements entered by us will permit this. I seek a clarification on the same. I request you to enhance the allocation to rubber board and spices board. It is disappointing that there is nothing in the budget for the coconut farmers of Kerala. So I request the Honorable Minister, sir, subsidies to FCI under National Food Security Act has been cut drastically to 1,37,207 crores from 2,14,696 crores of the revised estimates of 2022-23. Sir, this can adversely affect large number of the people of our country and the functioning of PDS system. So my humble request is provide more funds and to take necessary steps to strengthen PDS system of our country. Sir, our country has the rich tradition of protecting the minorities. However, for the past few years, sir, there is total neglect towards minority communities. I request Honorable Minister to increase the amount allocated for minorities to at least 10,000 crores. So I am not mentioning income tax since Madam has clearly made it clear that the intention is to move towards new tax regime. In doing so, our people will lose large amount of accrued benefits. There is a lack of clarity amongst the minds of taxpayers regarding new and old tax regime. So my request is to bring in a unified income tax structure by returning the welfare provisions of the old tax regime. Sir, I request the Finance Minister to grant the pending GST dues to Kerala immediately. Madam, otherwise, people of Kerala will not even be able to breathe fresh air since it may also be taxed by the state government in future. Sir, we are very much worried at the twin problem of rising inflation and unemployment, which this budget totally failed to address. Since time allotted is limited, I am concluding my speech. I have humble submission before this government. The union government is duty bound to respect fiscal federalism. Hence, I request you to consider my suggestions, which I proposed before this House. With these words, I conclude my speech. Thank you, sir. Thank you very much. Shri Sudhir Gupta ji. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस शानदार बजट के समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया है। मैं कहना चाहूँगा, फूल इसलिए अच्छे हैं कि खुशबू का पैगाम देते हैं। फूल इसलिए अच्छे हैं कि खुशबू का पैगाम देते हैं, और बजट इसलिए अच्छा है कि जनता के मन के भाव को जान लेते हैं।
और वित्त मंत्री जी इसलिए अच्छे हैं कि इस जनप्रिय बजट में हम आपके परिश्रम को पहचान लेते हैं। अमृतकाल का यह बजट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कठोर परिश्रम, अनुशासित जीवन शैली, दृढ़ इरादों का, संकल्पों को पूर्णता तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति का, गरीबी से मुक्त हो सके ऐसे प्रयासी भारत का, दुनिया को दिशा दे सके ऐसे प्रभावी भारत का, आर्थिक रूप से सबल भारत का, सामरिक रूप से साहसिक भारत का, सांस्कृतिक रूप से मार्ग प्रशस्त करते ऐसे भारत का, या यूं कहें सब विषयों और सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना, ऐसे प्रतिबद्ध भारत का प्रभावी बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित ही भारत के स्वर्णिम काल का यह अमृत संदेश है। इतिहास में यह काल 2014 से आगे का गोल्डन ईरा होगा, स्वर्णिम काल होगा, अमृत काल होगा। हाँ, वो नरेंद्र ही तो होंगे जो समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत परोसने में लगे हैं और स्वयं के हिस्से में मंथन से निकला विष गले से लगाया है। मंथन से निकली अन्न, फल, फूल आपकी थाली तक व तिरस्कृत वनस्पति स्वयं के सर लगाया है। समाज की असमरसता का नाग गले लगाकर समरसता का भाव फैलाया है। तभी तो अमृत काल आया है, अमृत बजट आया है। अमृत काल की बेला में G20 की अध्यक्षता आई है। घर में खुशियां लाई है, मंगल गीत हैं, हाथों में मेहंदी रची है और द्वार पर रंगोली है। स्वागत के ताशे बज रहे हैं। देश 2047 के सुखद भारत बनाने में आपके बजट के साये में संकल्पित खड़ा है। युवा पढ़कर रोजगार दे सके ऐसा बनने में अड़ा है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुटीर उद्योगों के प्रेरक श्रृंखला लिए खड़ी है। स्वास्थ्य सुधार के बड़े अभियान हैं तो आधुनिक भारत के निर्माण की दृढ़ संकल्पना है। माननीय सभापति जी, निश्चित ही भारत बदल रहा है। तभी तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI कहता है भारत में 415 मिलियन लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट भी कहता है कि भारत अति गरीबी से मुक्ति के द्वार पर है। माननीय, गरीबी से मुक्ति मिले इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ से अधिक आबादी को निःशुल्क राशन मिले ऐसा सुदृढ़ प्रबंधन किया है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने 2,05,764 करोड़ का विशाल प्रबंधन किया है। जनधन खाते, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस चूल्हा, आयुष्मान कार्ड, मुद्रा बैंकिंग, स्वनिधि योजना, स्व सहायता समूह बजटीय ताकत बनी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, PM किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास, स्वामित्व योजना, अनगिनत योजनाएं। माननीय सभापति जी, मैं एक संदेश जो मेरे संसदीय क्षेत्र के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भारत सरकार ने प्रशस्ति पत्र दिया था, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। पुरस्कृत करने का अवसर था 5,000 परिवारों के बीच देश की बजटीय धारणाओं से निकली योजनाओं को घरों तक पहुंचाना। उसमें से एक वाकया है। एक अम्मा है जिनकी उम्र 80 साल है। जन्म आजादी के पहले हुआ। जन्म की खनक बाल मन में कानों में थी कि देश आजाद हुआ है। 5-6 वर्ष की उम्र में यह खनक उनके कानों तक पहुंची कि मैं आजादी में सांस ले पा रही हूं। बड़ी हुई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, दादी बनी। बुढ़ापे का एक ऐसा दौर आया, तब तक घर के ऊपर कोई आश्रय छत नहीं थी। जब भारत सरकार के अधिकारी जिले के अधिकारियों के साथ उस अम्मा के निवास पर गए तो वो खुश थी क्योंकि प्रधानमंत्री आवास उन्हें मिला था। शाम का समय था। अधिकारियों ने पूछा, अम्मा कैसा लग रहा है? अम्मा ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि जीवन के प्रारंभ में आजादी देखी थी, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे को पक्का मकान मिला है। आप चाय पिएंगे क्या? अधिकारियों ने उस अम्मा का चाय पीने का आग्रह स्वीकार किया। बैंक की योजनाओं से उनका बेटा जीवन में पहली बार अपनी बकरी हो सके लेकर आए थे। बकरी का दूध निकाला, घर के अंदर गए, उज्ज्वला गैस के चूल्हे पर
और चाय बनाई। शाम का समय था, अंधेरा ढला, उजाला योजना का बल्ब जलाया, तब उस घर में पहली बार आजादी आई। ये संदेश है माननीय सभापति जी बजट की योजनाओं का। आजादी की चमक प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में बजट की खनक कैसे 80 वर्षीय अम्मा के घर तक आती है, ये शायद बिना मकसद यात्रा करने वाले यात्री के समझ से बाहर है, या यूं कहें बिना मकसद की जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता न लिखा हो, वो कहीं नहीं पहुंच सकता है। ये भटका हुआ यात्री एक बार मेरे संसदीय क्षेत्र में आ गए, मंदसौर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था माननीय सभापति जी, लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान जी के कठोर परिश्रम से, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों के सतत लगन से मध्य प्रदेश में दृश्य बदला है। लेकिन इस भटके हुए यात्री को कुछ पता नहीं था। मकसद विहीन यात्रा जहर, भ्रम, झूठ, निर्लज्जता की हद तक बोले। माननीय सभापति जी, परिणाम क्या हुआ? अनगिनत संस्थाओं में आग लगी, सैकड़ों गरीब किसानों के वाहन जला दिए गए, मजदूरों के बेटों ने बैंकों से कर्ज लेकर ट्रकों और वाहनों को खरीदा था, महोदय आग के हवाले। परिणाम गोली चालन, लोगों की मौत, भयानक बर्बादी। मकसद विहीन यात्रा को जनता ने निरस्त कर दिया, क्षेत्र ने अस्वीकार कर दिया। माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के निकट राजस्थान का चित्तौड़ है। वहां पर हम माता रानी है, एक भंवर माता। अब भंवर यानी मधुमक्खी, हनी बी। वह माता है जो भंवर की पूजा आराधना होती है। ये भटके हुए यात्री जब उधर आए थे, मकसद गलत लेकर आने वाले के ऊपर मनुष्य तो क्या देवता भी कैसा प्रसाद और आशीर्वाद देते हैं, ये रिकॉर्ड पर है। 1 लाख से अधिक भंवर इस भटके हुए यात्री के ऊपर घिरे, पटरी पटरी दौड़े। ये दौड़ते हुए का दृश्य भी है, रिकॉर्ड पर भी है। ये भटकाव, ये छलाव दुनिया को क्या छल सकता है, ईश्वर भी जानता है। पापों का घड़ा भर जाता है। माननीय सभापति जी, अभी मैं सुन रहा था तो 2-3 राज्यों के विषय में, हालांकि मेरा कमेंट्स करने का उद्देश्य नहीं, मगर 2 वरिष्ठ जन बोल रहे थे, एक बंगाल से थे, एक बिहार से थे। अब बंगाल और बिहार की व्यथा, वो कहानी उन्होंने सुनाई, बड़ी दर्द भरी थी। ये परिलक्षित हो रहा था कि वो दोनों सांसद साथी उन सरकारों से बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे कि उन्हें राशि नहीं मिली, उन्हें बजट नहीं मिला। तब मैंने रिकॉर्ड उठाकर देखा तो इस बजटीय संरचना में केंद्रीय कर और शुल्कों से बिहार को 1,02,737 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय कर और शुल्कों के हिस्से की बिहार को जानी है, और 76,843 करोड़ रुपए की विशाल राशि बंगाल को जानी है। मेरे मध्य प्रदेश को 80,183 करोड़ की राशि मिलनी है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस राशि के साथ साथ अपने परिश्रम से उस प्रदेश को सुदृढ़ करने के लिए अभी तो बहनों को लाडली बना रहे हैं, हमने बेटियों को लाडली बनाया है, हमने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, हम शिकायत लेकर नहीं आए। ये बात इस समस्या को इंगित करती है। इन दोनों सांसद भाइयों का बंगाल और बिहार में अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं, जो 80 करोड़ लोगों को राशन, जो गैस का चूल्हा, जो पक्के मकान, और इतनी बड़ी बड़ी राशि 1,02,000 करोड़ की विशाल राशि का उपयोग नहीं कर पाए, इन्होंने सिद्ध कर दिया। इसलिए मैं तो जनता से यही आग्रह करूंगा कि दोनों भाइयों का स्वागत करें कि अपनी अपनी सरकार की पोल खोल कर चले गए। पापों का घड़ा भरता नहीं है। योजनाएं आती है, नीचे कैसे दुरुपयोग होता है, और कैसे भोली भाली जनता को ऐसे तेज तेज भाषण देकर लोग चले जाते हैं। मैं पिछले बार गलती से कह दें या जनता के भ्रम से कह दें, मेरे मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, कमलनाथ उसके प्रमुख हो गए। वादे क्या किए थे? यही यात्री थे। इन यात्री ने क्या वादा किया था? इन्होंने कहा था कि 1, 2, 3, 10 तक गिनना, तब तक सारा कर्जा माफ। भाई साहब वो आज भी खड़े हैं, और क्या बोले, हर खेत के पास में प्रोसेस प्लांट लगा दूंगा। ये रिकॉर्ड पर है, हर खेत के पास प्रोसेस प्लांट लगा देंगे ताकि आपका और खेती का उत्पादन सीधा पैक हो जाए। हर गांव में एक मोबाइल का फैक्ट्री होगा अपने गांव के नाम से, मेड इन इंडिया। ऐसा अपना गांव, हमारा वहां पिपलिया मंडी था,
बोले मेड इन पिपलिया मंडी, मेड इन मंदसौर, मेड इन नीमच बना दूंगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा, अभी ढूंढ रहे हैं, इस चुनाव में ढूंढ लेंगे वो, सामाजिक पेंशन 3 गुनी कर दूंगा, बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए दे दूंगा, दूध पर 5 रुपए का बोनस दूंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन बहनों को बड़ी मुश्किल से गांव में लोग एकत्रित करके और रोजगार के लिए जुटाते हैं, उन बहनों से कहा तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा, 60 वर्ष से बड़े पत्रकार भाइयों को कहा तुम्हें सहायता देंगे, सफाई कर्मचारियों से कहा तुम्हें नियमित करूंगा, नेताओं से कहा एक विधान परिषद बना दूंगा, बेघरों से कहा कि तुम्हें 2.5 लाख रुपए अतिरिक्त दूंगा, और लड़कियों से कहा कि 2 पहिए के वाहन दूंगा। ये पोस्टर लगे हैं, ये घोषणा पत्र है। वो सरकार बन गई थी, वो सरकार रही, वो तो बाद में सिंधिया साहब को समझ में आ गया कि ये भटका हुआ यात्री है, इसलिए सरकार वापिस शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में है। क्या करें माननीय सभापति जी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, आंकड़े ले आते हैं, परसेंटेज बताते हैं। गांव का व्यक्ति परसेंटेज में बात नहीं करता, हो तो उसे पता पड़ना चाहिए कि मुझे मिला क्या है। नेहरू की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। मैंने भी सोचा कि नेहरू जी ने कुछ तो किया होगा। मैं जब कमेटियों में गया तो मुझे समझने का मौका मिला कि कृषि पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना अनाउंस की थी, लेकिन अनाउंस करते ही बड़े बांध लाए। लेकिन माननीय सभापति जी, 30 साल से अधिक ब्रिटिश इंडिया ने बड़े बांधों को बनाने के लिए मैपिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग वर्क, टेक्निकल वर्क अपडेट करके महामहिम के हाथ में दिया था। लेकिन उस दौर में जितनी योजनाएं थी उसमें सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर जी की छाया छत्र भी थी, बाबू जगजीवन राम जैसा विशाल हृदय का व्यक्तित्व भी था, राम मनोहर लोहिया जी का पीछे से कांग्रेस को दी पृष्ठभूमि भी थी। इन सब चीजों को लेकर बातें तो बहुत कर ली। और अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की 51 से 56, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास, आप पहले भी कह रहे थे, आज यात्री फिर भटक कर कह रहे हैं। 56 से 61 तक समाजवादी समाज की रचना, बहुत बढ़िया। 61 से 66 तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। 66-67 में मैक्सिको के नॉर्मन बोरलॉग और भारत के स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति पर काम किया था। 67-68, 68-69 और 69-70 में बोले स्थायित्व के साथ विकास, और 71 में गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ। हम मनोज कुमार भी प्रभावित हो गए माननीय सभापति जी। उन्होंने एक पिक्चर बना लिया, रोटी कपड़ा और मकान। अरे बड़ा सबको लगा कि भाई और क्या चाहिए, रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, छप्पर फाड़ कर वोट दे दिया। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, 80-85 में गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि की बातें आपने इस सदन में कही, दुनिया के सामने कही। 85-90 में उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अवसर, और 91 में आर्थिक सुधार, मानव संसाधन विकास पर 92-97 पर माननीय सभापति जी देश को समझ में आया, ये भूल छलावा और भटकावा समझ में आया, तब नीति आयोग सामने आया। और नीति आयोग में थिंक टैंक है, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की बात है, इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं, और परिणाम सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक डैशबोर्ड सामने आया, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स सामने आया, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक सामने आया, अटल नवाचार मिशन आया, नवाचार के क्षेत्र में स्टार्टअप और विश्वसनीय मदद और विशेषज्ञता प्रदान करने की एक रणनीति सामने आई। देश समझ चुका है। माननीय सभापति जी, कितने बजट और कितने पैसे की बात करें, हम स्वास्थ्य की ही बात कर लेते हैं। हम स्वास्थ्य पर ही बात कर लें तो आज 86,200 करोड़ का विशाल बजट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहन निर्मला जी ने दिया है, धन्यवाद दूंगा। ये 12-13 में 37,000 करोड़ था। आज से ये परसेंटेज में बताते हैं उलझाने के लिए। ये गरीब आदमी का सिस्टम समझते हैं कि इसे परसेंटेज बता दो, वो एनपीए क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट ये हो गया। अरे छोड़ो भाई, बोर्ड जिससे लाते उसे समझा दो कि तुमने क्या किया। मैं तो एक बात जानता हूं कि यथार्थ कैसे होगा। मेरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री गुजरात थे, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था। जिला अध्यक्ष के रूप में हमने आमंत्रित किया था। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात उस समय आए थे और उन्होंने 2 लाख से अधिक जनता को संबोधित करते हुए कहा था, मैं जानता हूं स्वास्थ्य की सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है,
स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है और लोग अहमदाबाद चलकर आते हैं, मेरे पास भी आते हैं और यहां स्वास्थ्य की सुविधा सुधरनी चाहिए। आज मैं खड़े हुए फोरम पर कह रहा हूं, आज 14 और 22, मुझे ना आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं, मेरे वहां की जनता खुश है। हम आश्चर्यचकित है कि कैसा स्नेह होता है सरकारों का। मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय सभापति जी मेडिकल कॉलेज आए, कितना? मेरे यहां 3 जिला मुख्यालय हैं, तीनों जिला मुख्यालय पर 3 मेडिकल कॉलेज, एक बनकर चालू हो गया, एक बनकर चालू हो गया। दोनों इतनी हाइट पर आ गए कि मनसुख भाई यहां बैठे हैं, मांडविया जी, मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दूंगा, नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री जी थे उनको भी दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद बधाई दूंगा। कमाल कर दिया साहब। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, हम सोच नहीं सकते थे, अभिभूत है हम तो। और 3 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बजट में हमें पता पड़ गया कि नर्सिंग कॉलेज भी आएंगे, कुछ तो मेरे भी दरवाजे आएंगे, इसलिए तीनों में आ जाएंगे और इसीलिए जनता खुश है, प्रसन्न है, अभिभूत है। हम कैसे धन्यवाद दें माननीय सभापति जी? हम जानते हैं कि पोषण अभियानों का परिणाम है एनीमिया मुक्त देश बनाने का परिणाम। अभी राज्यपाल हमारे मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल आए थे, वो बड़े संवेदनशील हैं। सिकल सेल पर उन्होंने एक सेमिनार का आयोजन किया। सिकल सेल जैसी घातक बीमारी आजादी के बाद आज तक दूर न हो सकी, लेकिन भारत सरकार की संवेदनाएं देखो, आपकी सहृदयता देखो कि सिकल सेल मुक्त भारत बनाने के लिए 2047 का लक्ष्य आपने रख लिया। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं 4 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मारे जाते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य मंत्रालय को, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। 2025 भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, इस पर कठोर काम ये देश कर रहा है, इसलिए मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति जी, हम सब जानते हैं कि आज मातृ मृत्यु दर में, बच्चों की मृत्यु दर में और जो गिरावट आ रही थी उसको सुधारने का काम हुआ। कालाजार भारत से मुक्त हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। हम सब जानते हैं, हमने देखा, इन्होंने तो उपहास उड़ाए थे जब पहली आपकी सरकार अटल जी की सरकार में और पल्स पोलियो अभियान रोटरी क्लब और अटल जी की सरकार के संयुक्त सहयोग से देश में आया था। 2 बूंद पोलियो, 2 बूंद पोलियो, आज उसका परिणाम क्या है माननीय सभापति जी? 2 बूंद पोलियो पिलाने का परिणाम है भारत में किसी की मां, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी अपनी कोख से अपंग बच्चे को जन्म नहीं देती है। यह हिंदुस्तान बनाने का संकल्प अगर लिया है तो वो बजटीय धारणा में प्रकट होता है। माननीय सभापति जी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर कैसे उपहास थे। एक दिल्ली में माइक से अनाउंस था, एक मुंबई में टिकटों का प्रलोभन था, बसें लगा रहे हैं, अपने घर भेजेंगे, पता नहीं था, लोगों को सड़कों पर चलने को मजबूर कर दिया। माननीय सभापति जी, इनके भटकाने का परिणाम यह आया कि 8 महीने का पेट में बच्चा लिए मां, 1.5 महीने का, 1 महीने का हाथ में बच्चा लिए बहन सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर थी। बसें लगाई इन्होंने, सरकारों ने बॉर्डर पर छोड़ दिया उन लोगों को। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी और देश के तमाम ऐसे तमाम लोगों ने और देश में करोड़ों करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाने का प्रबंध किया है। मैं धन्यवाद दूंगा नड्डा साहब को, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को। रात दिन करके उन्होंने प्रदेश भर के अंदर, देश भर के अंदर कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, सरकारें खड़ी हुई। हम सब जानते हैं 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का महान अभियान उस समय हम सब के लिए कारगर हुआ और कोई भूख से परेशान न हुआ, ये भारत बनाने के लिए। अब हम तो अपने क्षेत्र की जानते हैं, मेरे तो कई कांग्रेसी मित्र भी हैं, मुझे वोट भी करते हैं। मैं तो यहाँ सार्वजनिक रूप से कहता हूं, उसमें से कई आ भी गए पार्टी में हमारे साथ। स्नेह का ये रिश्ता दुश्मनी में नहीं चलता है, लेकिन उनकी पत्नियों के, उनकी बहनों के टेलीफोन आ रहे थे, हमारे नेता ने कहा ये मोदी वैक्सीन नहीं लगाना। अरे बाप रे, अरे आपका पत्रकार फोटो खींचता है, ये मोदी वैक्सीन लगा लेंगे तो पार्टी हमें निकाल देगी। हमारे बड़े नेता कह रहे हैं ये वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन। मैंने कलेक्टर से बात किया, मैंने कहा बड़ा परेशानी का काम हो गया कलेक्टर साहब, ये भाभियां सब मुझे टेलीफोन करती है, इन नेताओं को वैक्सीन लगाने के लिए क्या करें। हमने एक अभियान चलाया, रोटरी क्लब, लायंस क्लब को, हमने ऐसे तमाम क्लबों को कहा कि अपने अपने धर्मशालाओं में
आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम ले लो ताकि हम अपने ऐसे भाइयों को जो फोटोग्राफी से डर रहे हैं वैक्सीन के लिए भेज देंगे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, ऐसे नेताओं की अपील न सुनते हुए तमाम लोगों ने वैक्सीन लगा लिया। मैं ढूंढकर ऐलान करता हूं कि कोई भाई ऐसा बता दे जो वैक्सीन विरोधी वैक्सीन न लगाया हो, तो कृपा करके मेरे सामने आ जाए कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से। मैं धन्यवाद दूंगा मनसुख भाई को, क्या गजब का मैनेजमेंट था। मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी उस समय के, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, वित्त मंत्री जी को। कमाल का कार्यक्रम साहब, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। देश और दुनिया में उसकी क्या ख्याति हुई, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एम्स पर बात करना, मेरा समय है अभी, मैं एम्स पर बात करना चाहता हूं। मैं तो शुरू किया है, मैं एम्स पर बात करता हूं। ये कहते हैं एम्स हम लाए, एम्स हम लाए, एम्स हम लाए। अब मेरा बेटा एक दिन मेरे से बोले, पापा यार एम्स ये कांग्रेस के लोग लाए थे क्या? तो मैंने कहा चलो ढूंढते हैं। तो पता पड़ा एम्स आया था पंजाब की महारानी की बड़ी एक कृपा और योजना से, दिल्ली का एम्स। बात के एम्स क्या हुआ, तो सूची निकाली। अब सूची निकाली तो भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश। गजब हो गया साहब, ये तो अटल जी ने 2003 में घोषित किए थे। अरे बड़े नाम ले लेके देश भर में घूमते हो। ये बच्चे अब पढ़े लिखे हैं, ये भरोसा नहीं करने वाले हैं, इनके परिवार के लोग ही गायब हो गए। वो बोले पापा ही झूठ बोलने वालों के साथ है। भैया ये तो रिकॉर्ड पर है, 2003 करते करते 12 आ गया। हाँ इन्होंने एक किया, एक रायबरेली। गजब, एक रायबरेली इनके नाम है। मगर साहब देव कृपा ऐसी थी कि पूरा करने का मौका ही इनको नहीं मिला। वो भी 18 में पूरा हम ही ने किया। इनके खाते में लिखा पड़ा कुछ नहीं, लिए कागज घूमते रहते हैं और एक नाम ले लेते नेता का। अरे उस जमाने के कांग्रेस के लोग सरदार पटेल से लेकर बाबू जगजीवन राम तक, कोई तुम्हें लाइक नहीं करता, डिसलाइक हो गए, कोई लाइक नहीं करता। उनकी चीजें गिनाया मत करो। और हम तो एक बात जानते हैं, धन्यवाद तो देंगे माननीय सभापति जी। मैं तो हमारे अधीर रंजन जी के साथ श्रीनगर गया था 15 अगस्त 2021 को, झंडा वंदन था 15 क्रॉप के साथ। गलवान घाटी तक गई थी टीम पूरी, वो भी खुश थे, हम भी खुश थे साहब। ये भारत की सेना। अरे अभी परसेंटेज बता रहे थे लोग, अरे परसेंटेज में कुछ नहीं समझते आंकड़े बताओ। 2,03,000 करोड़ का बजट इनका आखिरी बजट है, जो 2,03,000 करोड़ रुपए सेना को देता था। 10,000 करोड़ की पेंशन के लिए इनका नेता सड़क पर धरने पर था साहब। हम भी पूछते थे ये 10,000 करोड़ की बड़ी राशि वन रैंक वन पेंशन के लिए देंगे कैसे? आज बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज लोगों को भटकावे और छलावे में ले जाते हो। आज लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, वह पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि भारत ने अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करके 2,03,000 करोड़ के बजट को 5,95,000 करोड़ के विशाल बजट पर पहुंचाया। धन्यवाद के स्वर नहीं निकलते। मैं तो धन्यवाद दूंगा राजनाथ जी को, मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को, और धन्यवाद तो निर्मला सीतारमण जी का भी बनता है, और धन्यवाद मनोहर पर्रिकर जी का भी बनता है। कैसे चूकेंगे साहब, बदल दिया है देश। मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूं, सेना तो सेना, हमारे यहाँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मुख्यालय है नीमच, सीआरपीएफ वहीं से बना। अब जब सीआरपीएफ प्रारंभ हुआ, उसका बर्थ प्लेस है, तो उस बर्थ प्लेस के अंदर आप कहते पैसा नहीं आता। मेरे क्षेत्र में कभी पैसा आया नहीं साहब, ब्रिटिशर्स ने बनाया था सीआरपीएफ, खंडर होने को आया था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे सभापति जी, 58 करोड़ रुपए की राशि में 360 आवासीय क्वार्टर बनाए हैं, 28 करोड़ रुपए की राशि में 5 बैरक बनाए हैं। इसमें महिलाओं का बैरक पहली बार आया है, 4 करोड़ का ऑडिटोरियम है और 5 करोड़ के स्विमिंग पूल है। हम तो इतना जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल मेरे सीआरपीएफ में आ गया। और अध्यक्ष जी क्या बात करें, देश तो बहुत बदल गया है। आईएनएस विक्रांत या नौसेना का ध्वज, बच्चों में रोमांच है, वो ध्वज बदलना भूल गए थे, आज बच्चों में रोमांच है कि हमारे ध्वज को स्मरण किया है। राफेल का विषय या ब्रह्मोस मिसाइल की बातें तो मैं करूंगा नहीं। किस तरीके से हम दुनिया को अब बेचने वाले देश हो गए, किस तरीके से अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एचएएल ने बनाया है, चिनाकू और अपाचे हमारी सेनाओं में सम्मिलित हैं। मैं उन बातों को नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि निर्यात पर 307 सामग्रियां मैक इन इंडिया, मैक बाय इंडिया, मैक फॉर इंडिया के तर्ज पर भारत में आई है। और माननीय सभापति जी, मैं तो इतना भी जानता हूं
मैं तो इतना भी जानता हूं, गर्व भी करता हूं, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी किए थे। मेरे अपने गांव में भारत सरकार ने एक सैनिक स्कूल दे दिया है और दूसरा सैनिक स्कूल भी मेरे ही संसदीय क्षेत्र में सीआरपीएफ के नीमच में आने के लिए तैयारी पर खड़ा है। सैनिक स्कूल 2, मेडिकल कॉलेज 3, गजब। एक आ गया सैनिक स्कूल, एक आएगा। हम तो मांग पर खड़े हैं, संभावनाओं पर खड़े हैं। नर्सिंग कॉलेज 3, कितना गिनाएंगे? ये कहां थे इतने सालों से? और इसीलिए हम एक बात जानते हैं कि आज देश गर्व करता है, भारत की सेनाएं बदली है, भारत की सेनाएं गर्व से खड़ी है। माननीय सभापति जी, पीयूष गोयल जी को धन्यवाद न देंगे और अश्विन वैष्णव जी का धन्यवाद न करेंगे, मनोज सिन्हा जी का स्मरण न करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब हम सब लगे थे साहब, पटरी पूरा रिकॉर्ड खोजा साहब सभापति जी, सारा अंग्रेजों का लगाया पड़ा पटरी। वो स्टेशन भी वैसे ही बने पड़े, वो स्टेशन भी वैसे, पटरियां भी वही, और लिए डब्बा ये बताते रहे हम लाए। आज मैं गर्व से कहता हूं, माननीय सभापति जी, क्षेत्र का सीना फूला पड़ा है। 400 करोड़ रुपया तो आपने नीमच से रतलाम के दोहरीकरण के लिए मेरे क्षेत्र को दे दिया। 150 करोड़ रुपए आपने नीमच से बड़ी सादड़ी, वो सांसद जी यहां नहीं है, बैठे हैं पीछे, नीमच से बड़ी सादड़ी, अरे साहब 150 करोड़ रुपया, और नीमच से चित्तौड़गढ़ के लिए 50 करोड़, बड़ा गजब है। और पहले पिछले साल दिया वो तो मैं गिना ही नहीं रहा हूं। अभी निर्मला जी का ये 5वां बजट है, अगर वो गिनाऊंगा तो ये सब कहेंगे टाइम हो गया। अरे मुझे एक बात समझाओ, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया माननीय सभापति जी, हमारे यहाँ के वृद्ध, हमारे यहाँ की महिला बहनें रेल के डब्बे में चढ़ नहीं सकती थी, आखिरी डब्बे में। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी प्लेटफॉर्म अब ऐसा नहीं है जो रेल की लंबाई के बराबर नहीं है। हम गर्व कर सकते हैं। आपने क्या ध्यान दिया महिलाओं पर और वृद्धों पर, क्या ध्यान दिया बच्चों पर? हम गर्व से कह सकते हैं, हम गर्व से कह सकते हैं। हमारे यहाँ एक पहले सांसद कांग्रेस से सांसद रही है, वो कांग्रेस की सांसद रही है, एक अंडर ब्रिज एक, और माननीय सभापति जी मेरे पास आपने दिए 65 अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज 65। क्या प्रशंसा नहीं करेंगे साहब। अमृत स्टेशनों की झड़ी है, मंदसौर बना दिया, अमृत रेलवे स्टेशन नीमच बना दिया, गरोट और शामगढ़ घोषित हो गया, जावरा और सुवासरा हम डिमांड पर लगाए हुए हैं। माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश को इस बजट में रेलवे में 13,607 करोड़ की विशाल राशि दी है, जो इनके पूरे कार्यकाल में 5 साल में कुल 631 करोड़ रुपए आए थे। आज 13,607 करोड़ की विशाल राशि आई है। माननीय सभापति जी, बात अगर गडकरी जी की ना करेंगे और सड़क की ना करेंगे और धन्यवाद नहीं देंगे तो कैसे रह पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अरे पूरे मेरे संसदीय क्षेत्र का प्राण बन गया है। 4 मार्ग दिए हैं, ये बैठे हैं उज्जैन के सांसद जी, इनको जोड़ दिया उधर से, और हमारे अभी झालावाड़ के सांसद जी को भी उन्होंने हाँ कर दिया है। 6 मार्गों से 4, 5, 6 मार्गों से जोड़ा है अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र को। 1 लाख करोड़ का विशाल सड़क, 1 लाख करोड़ का विशाल सड़क मेरे संसदीय क्षेत्र को मिला है। धन्यवाद तो देंगे, मगर एक बात कहूंगा, सुदूर ग्राम सड़कें अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र में सुदूर, अरे ये तो भूल जाते हैं ले लेकर, ये सांसद गिनाते नहीं और इनका डब्बा पता नहीं कहां का बजाते रहते हैं। सुदूर ग्राम सड़क 1496 सड़कें मैं लिस्ट के साथ दे सकता हूं, मैं डायरी साथ में रखता हूं। 1496 सड़कें अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र में बनी है। क्या विकास गिनोगे आप, क्या विकास गिनोगे आप? सीआरएफ मद की सड़कें गिनाएं, पीएमजीएसवाई की 312 सड़कें अकेले। हम हमारी मालवी भाषा में कह सकते हैं, हम नुगरे नहीं हो सकते, लेने के बाद भूल नहीं सकते। कोई हो तो हो, अपने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास में भारत सरकार के इस बजट को गिनाकर नहीं गिनाकर ये अपराध करते हैं। ग्रामीण विकास सड़कें, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, अरे अकेले शांति धाम बने, शांति कपिल धारा के कुएं मेरे जिले में 1864, 1817 नीमच जिले में, जावरा में 1059 कपिल धारा के कुएं लेकर भूल जाओ। अमृत तालाब का तो क्या कहना, 75 पूरे बन गए हैं। और इसीलिए मैं तो धन्यवाद दूंगा नरेंद्र सिंह तोमर जी को,
भाई गजेंद्र शेखावत, प्रहलाद पटेल और गडकरी जी को भी। माननीय सभापति जी, कांग्रेस भी मोदी जी को रोकती है और जनता भी। कांग्रेस भी मोदी रोको अभियान में लगी है, जनता भी मोदी रोको अभियान में लगी है। फर्क बस इतना है, कांग्रेस ने सोचा आने नहीं देंगे और जनता ने सोचा जाने नहीं देंगे। माननीय सभापति जी, पर्यटन की बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, और पर्यटन के साथ जानवरों की बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी मैं एक संवाद को 10 बार सुना। मेरी यात्रा में कुत्ता आ गया, मेरी यात्रा में सूअर आ गया। अरे भाई, कुत्ता आ गया, सूअर आ गया, गाड़ी से कभी उतरे नहीं, हवाई जहाज से नीचे पांव नहीं रखा। मेरे गांव में तो कुत्ता, अगर आप गांव में आ जाओ ना, तो वो गांव के अतिथि को विदा करने गांव के बाहर तक भी आता है, और गलत आदमी आता तो पजामा पकड़ने भी आता है। अरे भाई, आप कुत्ते और सूअर की बात बताते हो, आप चीते और शेर की बात नहीं करते हो। एक जमाना था कुत्ते आते थे हवाई जहाज में, जमाना बदल गया, अब तो चीते आते हैं हवाई जहाज में। मेरे प्रदेश में हवाई जहाज में चीता आया है, और अब मेरे क्षेत्र में आ गया ना, आ गया। 12 और आ रहे हैं। कहाँ बैठे हैं सांसद जी? यादव जी, जोरदार। आइए आइए, मैं सबको निमंत्रण करता हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र के बदले बदले रूप में आइए। मेरा संसदीय क्षेत्र 8 साल में बदला है, उसे देखने आइए। स्वदेश दर्शन सर्किट में जोड़ा है, बुद्धिस्ट सर्किट में जोड़ा है। उमा महेश, अरे मैं बस 5 मिनट, उमा महेश की प्रतिमा सुनिए। माननीय सभापति जी, उमा महेश की प्रतिमा फ्रांस और वाशिंगटन गई थी। नंदी की प्रतिमा भारत महोत्सव में फ्रांस वाशिंगटन गई। धमनार की गुफाएं, धर्मराजेश्वर की गुफाएं, रॉक कटिंग के, उस पर भारत सरकार ने अभी पैसा खर्च किया है। आइए चतुर्भुज नाले को देखिए, प्राकृतिक सुंदरता देखते बनेगी। यात्री अब भारत के बाहर मत जाइए, यात्री अब मेरे संसदीय क्षेत्र में आइए, वहां वाटर स्पोर्ट मिलेगा, वहां कुत्ते और सूअर के साथ साथ आपको चीतल मिलेगा, आपको गिद्ध मिलेगा। ये गिद्ध संरक्षण अभियान देश का मेरे ही क्षेत्र में है। माननीय, वहां तेंदुए मिल जाएंगे 70, वहां भेड़िए मिल जाएंगे, सियार मिल जाएगा, लोमड़ी मिल जाएगी, लकड़बट्टा और रीछ मिल जाएंगे, 1,500-4 हजार मगरमच्छ भी मिल जाएंगे। दुर्लभ पक्षी, देश और दुनिया के दुर्लभ पक्षी मिल जाएंगे। आप कहां ढूंढने जाते हो? और 4,000 टन मीठे पानी की मछली हम बंगाल भेजते हैं। आओ मेरे क्षेत्र में, बंगाल का मीठे पानी का पसंद किए जाने वाला मछली भी मेरे यहाँ से। माननीय सभापति जी, पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में, और बड़ा भव्य दिव्य मंदिर है। हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित किया है। एक लॉर्ड चाइना जिस होड़ों से डरते थे, वो पराजय का स्थल मेरा क्षेत्र है। आइए दर्शन करने के लिए। अभी 28 करोड़ रुपए हमारे नमामि गंगे अभियान से मेरे क्षेत्र को मिले हैं। मैं समाप्त कर रहा हूं। तपस्या करो तो फल जरूर मिलता है, तपस्या करो तो फल जरूर मिलता है, मोहब्बत करो तो प्यार जरूर मिलता है, दाढ़ी रखो तो शिवाय टैगोर जैसी जो नमन करने को जरूर मिलता है, दाढ़ी रखोगे मार्क्स या सद्दाम जैसी तो लोगों को नोचने का मौका जरूर मिलता है। माननीय सभापति जी, अगर एजुकेशन की बात नहीं करूंगा, क्या सीएम राइज स्कूल हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किए हैं, सेंट्रल स्कूल मुझे 2 अतिरिक्त गिफ्ट में मिले हैं। सेंट्रल स्कूल, सैनिक स्कूल, अटल टिंकरिंग लैब। लेकिन पीएम श्री स्कूल के आने की खबर इस देश में बड़ी शानदार है साहब। पीएम श्री स्कूल आ रहे हैं, कितने? 14,000, मुझे मिलेंगे 200 से अधिक। इसलिए मौका तो बड़ा जोरदार है, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोगों को। लेकिन एक बात कोट करूंगा माननीय सभापति जी, 1949 में इसी सदन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा दे दी जाएगी। मगर वो पंडित जी सदन में कही बात को भूल गए, और उनके राजीव गांधी ने फिर दोहराया, 21वीं सदी आने के पहले पहले दे देंगे। दुर्भाग्य न दे पाए। सर्व शिक्षा अभियान तो अटल जी लाए, और शिक्षा नीति में परिवर्तन तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। माननीय सभापति जी, सिंचाई की बात तो करने दो, किसान की बात अगर रह गई तो बात रह जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूं इन लोगों को, ये बताना चाहता हूं, चंबल डैम बना था 1956 में, लेकिन मेरे क्षेत्र में भानपुरा में 13,354 हेक्टर, गरौठ में 21,400 हेक्टर, शामगढ़ में 80,000 हेक्टर, कयामपुर में 1,12,000 हेक्टर, रामपुरा में 65,000 हेक्टर और मल्लारगढ़ में 46,500 हेक्टर, 3,38,000 हेक्टर
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का ड्रीम माइक्रो इरिगेशन सैटेलाइट से नियंत्रित होता है, वो इरिगेशन प्रोडक्ट मेरे यहाँ आया है। इसलिए मैं न बधाई दूं, ये संभव नहीं है। और जल जीवन मिशन बड़ा कमाल का है साहब। मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरी बात उद्योग पर बाकी है, माननीय सभापति जी, खेल पर बाकी है। मेरी बात, चलो मैं समाप्त भी कर देता हूं। सहकारिता पर प्लीज कंक्लूड। अच्छा चलो एक बात कर देते हैं। हमारे यहाँ यात्रा का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ यात्रा का बड़ा महत्व है। चलो ये भी छोड़ देते हैं, समाप्त कीजिए। लेकिन मैं समाप्त कर रहा हूं। आपको मैं इस बजट की प्रशंसा कर रहा हूं। सारे मंत्री और बजट की प्रशंसा में भाव क्या आते हैं, और जो भाव आते हैं ना, बजट की प्रशंसा के भाव और बजट के भाव लिए कहां जाते हैं, उस पर एक गीत है। गीत गाना मुझे आता नहीं, इसलिए पढ़कर गीत को सुनाऊंगा। आप गा सके तो गाओ। बजट के भाव सुन लेना। चंदन है, अरे बजट के भाव कहां से लिए? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां माँ प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां कर्म से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, ज्ञान जहां गंगा जल सा निर्मल अविरामी है, इसके सैनिक रणभूमि में गाया करते गीता है, जहां खेत में हल्के नीचे खेला करती बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय सभापति जी, मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद दूंगा निर्मला सीतारमन जी को, और धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद श्री ए राजा, सांसदों को। श्री ए राजा। Mr. Chairman, thank you for the opportunity given to me to comment upon the budget submitted to this House. Sir, I had opportunity to hear Her Excellency President and the Honorable Finance Minister, respectively in the Presidential Address and the Budget. Sir, past 2 days, Parliament has witnessed heat arguments and accusations. Even allegations were serious in nature, made as against the Prime Minister. For the reasons best known to the Treasury benches, the allegations that have been made by the opposition strongly have not been refuted. The status of the allegation in the absence of the refute, I think that it will stand as true. Yes. What the Treasury benches going to give a news to the nation, I do not know. What type of message this will send to the nation? Sir, first time I have come across a irony in the Parliament. 2 friends were brought into the opposite pole by raising slogans. When the Prime Minister starts his speech, my friends from the Treasury benches used to say, Modi, Modi, Modi. When allegations are being leveled as against the Prime Minister, the same time or simultaneously, the opposition benches started to say, Adani, Adani, Adani. Is it not the irony that 2 friends were part apart, opposite side, and slogans were raised? Very good friend. What type of message is going to send to the people where the Prime Minister claims as if he is enjoying confidence, patronage, protection, and trust of the 140 crore people? How he can claim 140? Sir, they are having 310 or 320 pre-poll alliance, remaining almost 200 non-BJP.
almost 200 people are not in consonance with the allegations or in consonance with the celebrations you made in the parliament. At least 200 to 15. Roughly you calculate. Each and every member of parliament. I asked Supriya. She says she is being represented by 20 lakh. 23 lakh. My friend from Kashmir says 30 lakhs. Another friend says, Gaurav Goge, he says 25 lakhs. So averagely we put it 20 lakhs. 20 lakhs. 200 member of parliaments not representing you, not accepting you. But you are claiming trust for 140 people. Is it not a, is it? No. That is official, constitutional. He is not telling I am representing the people. He is telling I am enjoying the confidence. I am enjoying the patronage. I am enjoying the protection. राजा जी अपनी बात रखिए. You address to the chair. The statement और अपनी बात by the Prime Minister as if he is enjoying 140 crore people confidence is nothing but a diabolical contrivance. Sir, coming to the budget, I am an expert in the financial diligence, nor in physical consolidation. Yet, I want to submit that this budget gave some disappointments, not only to me, to the people, those who are living in the lowest ebb of the social and economical order in the country. I'll come to one by one. Most of the media and most of the televisions are showering encomium upon the Prime Minister and the government. The reason is known to everybody, no secret. They have been compelled, they have been confined, otherwise they cannot run the media. That is the situation today. Coming to my disappointment. Why I am disappointed? I want to synchronize. I try to synchronize my disappointment with the facts and figure. Sir, I am disappointed with the budget because the budget fails to live up the expectation of the people at large. My disappointments on 4 counts. 1, education. 2, health. 3, food and agriculture. And 4th, employment, social security. In order to address my time constraint, I shortlisted 4. That does not mean you are having every jubilant achievements in other fields. Yesterday, Prime Minister claims that we made the President of India from the tribal community. Sir, I want to recall the words of Ambedkar. I quote, he says, it is easy to give power to a person, but it is very difficult to give knowledge and wisdom. Simply because His Excellency came from a tribal village, I respect her. I am having reverence on her. But this government is having no right to claim that you are the savior of the tribals. Because the fact is always, what are all the attempts that has been given by this government to give knowledge and wisdom to the tribal people, to the scheduled caste, to the underprivileged community, for the disabled? There is a provision in the budget which will bring knowledge, which will bring education. You have to teach them. You have to create infrastructure. Is it in the budget? What is your initiative on primary and secondary education? You are claiming that our allotment has been risen substantially. I do accept. But come to the primary and secondary education. No doubt, you enhance the allocation of higher education. That does not mean this government is giving due attention for the primary education, which is clubbed with the scheduled caste, scheduled tribe, and gullible masses of this country. Still, budget is very silent on SC, ST, and OBC for primary and higher secondary education. Sir, promise that has been made for the recruitment of 38,000 teachers in Yegalaiva schools. I appreciate. Tribal schools. But not even a single new school for tribals has not been opened. You are promising for 5 years 38,000 teachers to be recruited. But there is no school. Is it not a mockery? The two you are calling it after Yegalaiva. You know the story of Yegalaiva? Yegalaiva was compelled to give his thumb as a Sudra since he got education. You are doing Yegalaiva on one side
Other side, you are taking away the fingers of the Dalits and OBCs and Adivasis. Shame. Is it not a verbal juggler in your budget? Sir, you are entitled to say, yes, legitimately you are entitled to say, 13% of the substantial allocation has been enhanced in the budget. But what is the truth? What is the truth? Certainly, the hike is not sufficient if we keep in mind the need of public educational institutions and augmenting teaching and research on par with global standards. Don't go for merely figures. Even yesterday, the railway minister used to say, for Tamil Nadu allocation, nine times bigger than the allocation that was done in the 2009. You are isolated to the railway. You go for general budget. The amount of bulk of general budget, numerical strength, went 10 times. When the total budget went 10 times, you are saying that 7 times bigger than this. Is it not a verbal jugglery? It's not a joke. It's not a mockery. Don't play with this numerical game, please. Sir, coming to the allocation that has been made for the education is not at all tally with the need of the people for the those who are living in the lowest above the social order. Ultimately, what happened? The private educational institutions is going to loot the money. And consequently, purchasing power of the middle class is drastically going to be eroded. Finally, I can say, sir, which is no doubt, the promise that has been given continuously for 9 years, that this government is going to give 6% GDP for education. This is the 9th year. Your assurance has not been kept alive. You did not achieve your assurance. 6% of GDP was not done. So as far as the education is concerned, my disappointment is true. You cannot refute it. Sir, coming to the second point, health. What happened to health? PM celebrated himself. Vaccination of COVID. Vaccination of COVID. It is because of science. It is because of science, not by you. Does it mean to say you tackled the epidemic when it was in peak? That is your achievement. I can dare challenge. None of the ministers in this government visited any hospital during the epidemic. None of the chief ministers visited any one of the hospital. My leader, M.K. Stalin, present chief minister, when he was in opposition leader, wear the medical dress and went to corona ward, touched the people and gave assurance. Don't worry, I will be there. He's the only leader available in the entire world, I can say. You are not coming out at the time of epidemic. And now you are claiming tallest jubilant momentum that we did vaccination. You see, sir, wait, sir. Sir, I want to recall the evidence. During the epidemic, sir, no. So the question is, sir, interruption. Sir, the question is whether the Prime Minister or the Health Minister, why the former Health Minister was said? You know the answer better. The epidemic situation was not at all handled properly, medically, prudently. That is our charge. No preparatory measures in terms of medicine, in terms of bed, in terms of doctors, in terms of nurses, and not even in terms of oxygen cylinders were not done properly. That is the status. No ventilator at all. Nation has come across thousands of dead body even without civilized burial. That is your performance of the government. What you did at last? Light the handle. Candle. Light the candle. Is it the scientific number to establish? Oh. Sir, I come to after the COVID. Leave it. You got the vaccination now. But 230 million Indians pushed to poverty due to the COVID. How much? 230 million. What is your solace for them? Nothing. What you did? I think that no solace was given to them. Sir, coming to the national... 1 minute, sir. 7. What is the data says? NFHS data says, out of COVID, 35% of students were stunned. 32% were underweight. Yet,
no rise in the budgetary support this year. No attempt has been made to equip yourself right from primary health center up to district hospitals to withstand before another epidemic if comes. Sir, your announcement of 557 nursing colleges, nursing schools, 157 nursing schools were announced in the budget. It is being celebrated exorbitantly. But without any proper care, when the structural problem is there, these 157 nursing schools will not serve any purpose, take it granted. Right. What is hard to digest is National Health Mission allotment. This year declined 500 crores. 500 crores cut in the National Health Mission allotment. What is the answer? National Livelihood Mission, 150 crores reduced. Total disappointment in health. Then coming to my third chapter, agriculture. Good health is associated with agriculture. What is your earlier promise? This government will make double-term income in the agriculture arena. Within 2022. Now we are standing in 2023. Is it doubled? Where is your promise? You are claiming substantial rise in capex. Always they are saying, no, capital expenditure is more substantial. 7.5 lakhs. But see the agriculture. Utter neglect. Out of 7.5 lakh crore of the capex, you are not spending 120 crore for crop and animal husbandry. Millets became the menu of the Prime Minister in the public domain. Millet came to the Central Hall. Today, my lunch was millet. You are celebrating millet. Where is the budgetary provision? 1 crore, 2 crore, 3 crore for millet? No. Allocation for irrigation dwindled down from 350 crore to 310 crore for this current year. Attractive caption in the budget, Finance Minister used, I quote, Agriculture Accelerator Fund. Agricultural Accelerator Fund. I do not know where is the accelerator, where is the clutch. Numerical figure is missing. This Agricultural Accelerated Fund is on the budget paper, but you are going for the budget estimate. There is no allocation. Who is going to be cheated? People or opposition, or you are cheating yourself? I do not know. Food storage and warehouse in the Ministry of Consumer Affairs. Budget estimation reduced 90,000 crore. Ministry of Agriculture deprived 8,000 crore when it is compared with the last year budget estimation. I can go on, but in short, health, nutrition, agriculture sectors are being undermined, and as such, my disappointment became true. Sir, now I come for employment and social security. Sir, 2 minutes. One more head. Yeah, sir, Finance Minister claims in the budget, I quote, investment in infrastructure and productivity capacity have a large multiplier impact on growth and employment, and unquote. This is the line of the budget. She reiterated in the press conference that the job creation and the control of inflation will be taken by the huge investment in infrastructure. I do admit there is a substantial, exponential allotment in the infrastructure. But what is the truth? The increase in capex in the infrastructure are to a larger extent in highways and railways. Am I correct? So far as you are giving the huge money to the railways and highways, which is being used as capital high intensive technology for their building, will have very small wages component. When there is a small wages component, you are saying this much of crores is being pumped. Wages component is not even 0.001%. How can you create job? Why you are making something so naive? I am not able to understand. Sir, much has been spoken about Narega. I do not want to touch more. 20,000 crore has been dwindled down, cut off. Out of Narega, this year, 20,000 crore cut off. Maybe 30,000 or 20,000. Okay. But what is the report? PAEG, People Action for Employment Guarantee. The actual need, according to this association, scientific report, we need 2,71,000 crore for this year to
to satisfy the all people. The need is 2 lakh. Already you reduced to 30 crore. Now it is only 60,000. Who is going to fill up the gap? Sorry, gulf. Who is going to fill up the gulf? I do not know. Please look into the NSAP, National Social Assurance Program. Most important program for aged, orphanage people, widow and disabled. The allegation that has been dwindled down 10% more. Sir, you are supposed to guide it by the Gujarat model. Because, sir, 2 minutes. Sir, 2 minutes I will finish. Sir, Gujarat model. You are entitled to say. Am I not entitled to say, what is the Gujarat model you are applying here? What is the fruitful result? Please go for that. Our Chief Minister explained what is a Dravidian model being run in government in front of the Prime Minister. In terms of new employment opportunity, social security measures, we needed or not at all, the issues are not at all viewed and addressed properly by this government. Sir, yesterday, during the question hour I come across, I give a simple example and go on for the final conclusion. The quick attention of this house, BPL ratio, yesterday question hour, Gujarat, this year, Gujarat 22%, UP 31%. I cannot read all other states. Whereas Tamil Nadu, 14, Kerala, 10. This is Dravidian model. Which model this country is going to prefer? Please decide. Sir, now I am concluding very sensible point, concluding within 1 minute. Sir, I am concluding my speech with wound and pain, with a confidence that the heal and solace will come near future. I have come across today question hour. What has happened? Today question hour, Minister used to give the answer last question, by which the funds allocated last year, 1,810 crore for minorities welfare together as umbrella program. This year, it has been dwindled down, mere 600 crores. What type of message will send to the people for minorities? Sir, it is unfortunate that the voices are being raised, not by common man, by the constitutional occupants, that the basic structure of the constitution going to be amended, has to be amended. It is very dangerous for minorities. Sir, one letter I quote, I will finish. Sir, Kesavananda Bharati case, 1972, by which the basic structure of the constitution has been protected. Who argued? 73, maybe 72, maybe. You take it 73. Sir, 68 days, arguments were advanced before the Constitutional Court, larger bench, 13 judges. Who argued before the court? The famous lawyer, Balkiwala. Balkiwala argued the case. Nani Balkiwala? Palkiwala. He argued the case. He saved the basic structure of the Constitution. When the basic structure of the Constitution was saved, Prime Minister was Indira Gandhi. Sir, one quote I quote and finish. Nani Palkiwala used to write the Prime Minister after the judgment. I can give the date. 9th November 1975. 9th November 1975, I quote. Letter to the Indira Gandhi Prime Minister by Palkiwala. The basic structure of the Constitution is the real safeguard for minorities. They are bound to feel grave apprehension at the prospect of the big health alterable. Today we saved the basic structure. How many of your successors are? Please give attention. The line says, how many of your successors will share your own exemplary non-communal outlook? Unquote. Thank you. Sir, finish it. Non-communal outlook he wanted from the Prime Minister Indira Gandhi for his successors also. Today, minorities, sir, I finished. Minorities fund has been dwindled down. Sir, one thing. Please, I folded hand. I am begging from the treasury benches. Prime Minister is not here. But I am begging. Save the Constitution, which first line says, we the people of India. Thank you. Don't reread. We the people of India. Thank you very much. Thank you. Sri Jaydev Galla ji. Jaydev Galla ji. Let him speak. Jaydev Galla. Speaker, sir. अब क्या करते हैं? Please sit down. बैठिए करते हैं. You can start. Thank you, Speaker, sir.
And sir, since I have a very short amount of time, I'd ask you to start my time from now, please. Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the final full-fledged budget of this government and of this 17th Lok Sabha. Sir, the budget speech started with a self-congratulatory note that India has successfully overcome the troubles that came with COVID. It is true because the economy has nearly recovered what was lost, restarted what has paused, and re-energized what had slowed during the pandemic, the Russia-Ukraine conflict, and the subsequent geopolitical situations, and the ongoing monetary tightening that we're seeing in the United States and other advanced countries. So it's a tightrope walk, and I compliment the Honorable Finance Minister for her balancing act over a gut-wrenching situation. Sir, the budget has both hits and misses, from what I can tell. The hits, if I may say so, include things such as 10% increase in the gross tax collections, 33% increase in capital expenditure of 10 lakh crores, which comes to 3.3% of GDP. And if you add in grant-in aids given to states, it comes to 13.7 lakh crores, or 4.5% of GDP. 2.4 lakh crores noteworthy increase for the railways, an 11% increase in agricultural credit target, a 66% increase in the PMAY for more focus on Tier 2 and Tier 3 cities, income tax relief for the middle class, 74% increase for the Swachh Bharat mission, and 157 nursing colleges to be attached to 157 medical colleges to be set up by the Government of India. But, sir, there are some misses as well. A few I'll just noteworthy misses include reducing, I think many members have mentioned this, reducing the NREGA allocation to 60,000 crores from nearly 90,000 crores in the revised estimates of 2022-23, reducing the allocation for the National Health Mission from 37,000 crores in the budget estimates of 22-23 to 36,787 crores, reducing the allocation for PM food processing enterprises to 639 crores from the 23-24, from 900 crores in 22-23, reduction in allocation for PM Kisan to 60,000 crores against 68,000 crores this fiscal. Sir, before I proceed with my observations on the budget and giving my suggestions on various proposals, I wish to first focus on what this budget is for my state of Andhra Pradesh, sir. Sir, this budget and the Honourable Finance Minister have disappointed the people of AP once again, sir. The issues are many, but I wish to touch upon the most important ones in view of time constraint. Sir, I've been making this speech now for 9 years, and I'm sorry to say that I've had to repeat myself year after year after year, because none of the provisions have been fully fulfilled, and deadline is fast approaching, sir. Sir, I'm deeply perplexed as to where I should start from. Should I start from what the AP government has been doing since 2019, or should I start with what the Government of India has been doing to AP since 2014? I think this is something that, it requires much more time. Unfortunately, I don't have that at my disposal. Sir, AP has been receiving empty promises and scant allocations since the bifurcation of the state in 2014. In this budget, the Finance Minister has given 5,300 crores to the Upper Bhadra National Irrigation Project in Karnataka, but nothing has been given for Polavaram, which is a national project and has been pending for so many years. This is the first disappointment for AP, sir. I would not say much on Polavaram, since the Government of India and the Jal Shakti Ministry knows every single detail of it. I would only request the Finance Minister for approving the second revised cost estimates of 55,657 crores and release the pending dues to Andhra Pradesh, which they've already spent, sir. Even though the Finance Minister allocated 8,406 crores for the railways in AP, taking up 72 stations in AP to be developed as world-class stations, introduction of Vande Bharat to Vizag,
giving 1,040 crores for Guntur-Guntakal and Guntur-Bibi-Nagar doubling projects, etc. There's no mention about the establishment of the new railway zone for AP, sir. This is also a promise that is long pending and has been made several times in this House by several ministers, sir. Sir, the piecemeal announcements or allocations do not work, sir. I agree that 10 crores has been allocated to the new railway zone, but there is no announcement when the new zone would come up and become functional. There is no mention about it either in the President's address or in the budget. Even the Railways Minister has not announced anything on this in his post-budget press briefings. This is the second big disappointment for Andhra Pradesh, sir. Sir, the Finance Minister had given 23,260 crores for 4 metro projects in 21-22. The Government of India spent huge amount for Bangalore, Chennai, Cochin, Nagpur, Nashik metro rail projects. And the Bangalore metro was given 14,700 crores and 19,000 was given for metros, other metros in 2022-23. But there is no mention, sir, about Vijayawada and Visakhapatnam, which is a mandate which, both of these metros have been committed in the AP Reorganization Act, and there's no mention in this budget also, sir. Rather, since 2014, nothing has been done in this regard. So this is the third big disappointment for our state, sir. Sir, on the one hand, Government of India says there are no states with special category status, post the 14th Finance Commission's recommendation. I don't want to go into details, since the 14th Finance Commission never recommended not giving SCS to AP or any other state for that matter. But in the 2022-23 budget, government has given back IGST to the tune of 3,631 crores for SCS states. For SCS states, sir, they still exist, as incentive for industrial development. And in this budget, the Honorable Finance Minister has allocated 1,814 crores for this purpose. If SCS is given to AP, special category status, it will also be benefited. Sir, we're a new state with no capital and no industrial base to speak of. So many institutions have been left behind in the Telangana state. None of the very few institutions are there in our state. None of the provisions of the AP Reorganization Act are being met. And even here, the SCS is being denied to us, sir. The Honorable Finance Minister has reduced allocation to RINL also, Vizag Steel Plant also, sir. In 2022-23, Government of India allocated 910 crores as budget estimate, and this has been reduced to 683 crores in 23-24. This is the fifth big disappointment for Andhra Pradesh, sir. Sir, if one looks at Section 93 of the AP Reorganization Act, it says, and I quote, "The central government shall take all necessary measures as enumerated in the 13th schedule for the progress and sustainable development of the successor states." Sir, I'll conclude. Just give me 2 minutes and I'll conclude, sir. Sir, the central government shall take all necessary measures as enumerated in the 13th schedule for the progress and sustainable development of the successor state within a period of 10 years from the appointed day, sir. And the appointed day is fast approaching. The appointed day will be from 2nd June 2014. That means by 2nd June 2024. This is the final budget before that date is coming, full final budget. The next budget is only going to be vote on account. This is the final chance for this government to allocate funds to fulfill what is in this AP Reorganization Act passed by this House in 2014 with deadline coming up on 2nd June 2024, sir. Sir, I'm just getting to the end, sir. Just give me 1 minute, I'll conclude, sir. We're at the fag end of reaching this 10 years, but not even one of the 17 items mentioned under the 13th schedule has been completely fulfilled, sir. This is the sixth disappointment for the people of Andhra Pradesh, sir. Every single member from AP, cutting across party lines, has been raising their voice since 2014 for conferring special category status to Andhra Pradesh. Elections in AP and for Lok Sabha are not far off, sir. The BJP government still has time to rectify this mistake and implement the decisions of the Union Cabinet taken on the 1st March 2014. I'm only appealing to the Honourable
Prime Minister that he has the final chance of saving the mother, which he has assured during the election campaign in AP in 2014. But there's nothing in this budget which is the biggest disappointment for AP, sir. So I'm coming, my final conclusion, sir. Thank you. Thank you. I'll just conclude, sir. Sir, I once again appeal to the Finance Minister, the Home Minister, and the Prime Minister to respect the commitments made in the AP Reorganization Act 2014, passed by this Parliament, and provide sufficient funds to fulfill all of its provisions in full before the deadline of 2nd June 2024. Thank you, sir. क्या कुछ कहना चाह रहे हैं निशिकांत जी? जी केवल दो छोटे क्लैरिफिकेशन है सर जी कि एकलव्य विद्यालय जो है वो यूपीए ने नाम दिया है, एनडीए ने नाम नहीं दिया है सर। ये जब जब मंत्री थे और दूसरी बात ये है कि कोरोना में जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में सभी लोग हम लोग रोड पर थे सर, इसीलिए कोई इसके लिए चैलेंज नहीं ले सकता है। आपने किया होगा लेकिन हमने श्री अब्दुल समद समाधानी जी। हाँ सर ठीक है ओके। क्या एक और डिबेट करानी है? डू यू वांट टू बी डिबेटेड? जी हाँ चलिए बोलिए। Land and Friends says the Yagalava schools were started in the Congress. It is not the question before the House. Who started the questions? Who started the school? Yagalava school? Huh? चलिए ओके। It is immaterial who gave the name. How it is being treated by you. That is the problem. ओके चलिए समाधान जी प्लीज। सर प्लीज बैठ जाइए। ठीक my time sir. Sir, thank you sir. Sir, thank you for permitting me to take part in this discussion on the budget. Sir, this budget, which is very, very beautiful when we look from outside. When I look at it, I am reminded of a couplet. मुझे ऐसा लगता है कि बजट ही मुझे बता रहे हैं, मैला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा. Sir, we can't observe and analyze the nature of a tree without analyzing the fruit. The fruit will explain what is the tree. So I know, sir, we can all understand what kind of result this budget is going to produce in the country. Sir, it is not a responsible budget because it does not undertake the responsibility to render help to the common man, farmers, laborers, the backward sections, including the minorities of the country. And, sir, it is not a responding budget. It does not respond to the burning problems of the country. There is no concrete plan to check the inflation, no any special measure to save the youth from the peaking unemployment, and to save the people who reel under the price rise. There is no plan, sir. And, sir, the real problem remains untouched. The economic needs of the hour are not addressed by this budget. Sir, how can you say that this is an inclusive budget? Our Honorable Finance Minister, when she was presenting the budget, she used this word, inclusion. You are the people of exclusion. You are excluding so many sections of the society. You are not the people including various sections of the society. You include minorities, you include laborers, you exclude minorities, you exclude farmers, you exclude laborers, you exclude women, you exclude even the youth who are suffering great difficulties due to the unemployment. Sir, then how can you say this is Sarv Hitakari? Sarv Hitakari nahi hai. It is for the purpose of certain sections of the people, to help them. Sir, you stopped the Maulana Azad National Fellowship Scheme of the minority students. And now you have reduced immensely the allocations for the development
and for the welfare of the minorities. Sir, in social democracy and democratic pluralism, the role of the minorities are very, very important. It is undeniable, unquestionable. You cannot change the history of the country by changing the names. You can't do that. Sir, a budget has to address, sir, the social inequality of the country. It has to take into consideration the economic equilibrium. This budget does not take into consideration these very important factors. Sir, my learned friend on the other side was quoting a lot of couplets. I may respond to him just by 2 lines. जाने ये कैसा दौर है, दिन हो अगर तो लिखूं दिन. जाने ये कैसा दौर है, दिन हो अगर तो लिखूं दिन. रात अगर हो तो रात लिखूं. रात अगर हो तो रात लिखूं. इसको भी जरूरत नहीं देते आजकल के ये लोग. And sir, not only they excluded the minorities, reducing the allocation for MGNR EGA scheme. Sir, it clearly proves the attitude of the government to the poverty alleviation programs. Sir, and the justification made by the government is that the number of the beneficiaries under the scheme is reducing. Sir, it is not correct. At least in our state of Kerala, we know it ensures job for 100 days, at least 100 days. This, we call it in Malayalam, Thoilurappu Paribadi. This program, it is very, very important. And sir, when I come to the policy of exclusion, this budget does not take into consideration the fiscal federalism. You did not give anything to our state of Kerala. We asked so many things, and the Bengal chief minister spoke against this budget. Bihar deputy chief minister spoke. Chhattisgarh chief minister spoke. Tamil Nadu chief minister spoke. They did not get anything. Even Punjab chief minister spoke against this budget. So that means this is against the fiscal federalism, which is the very basis of our constitution. And sir, it is not a growth-oriented budget, and it is not a stability-oriented budget. No growth, no stability. Growth is not the growth of the affluent. Growth is not the growth of affluent. Growth is the growth of common man. For the growth of the common man, the maximum investment the country needs in the field of agriculture. Sir, even these IT changes and new IT slabs, it is not going to help the common man. It will be helping only those who are with higher income, highest income. Only those people, highest income brackets, they will be getting the benefit of this thing. Food subsidy is stopped, and you have reduced the education budget. You have reduced even health budget. Reducing health budget actually goes against the national health policy. National health policy, our government's own policy. And sir, these bank loans for farmers, I may pose a question to the Honorable Finance Minister and my honorable and learned friends on the other side. How are you going to help the farmers by giving bank loans? How are the banks are going to give and sanction loans to the poorest farmers without enough documents, without sufficient documents as demanded by the banks? How, sir, they will be able to produce such documents? That is my question. And sir, this government theory, sir, I'm concluding. I'm concluding, sir. Yes, sir. Sir, bank loans, the benefit is not going to be availed by the poorest of our country, the poor farmers. Our country needs more and more investment in the field of agriculture. And sir, the government theory that the government investment will lead to private investment, that has proved wrong. And sir, the country needs nowadays to take into consideration unemployment and inflation. And sir, unemployment is increasing day by day. In the city, it is more. In the cities, it is more than 10%. Our youth are suffering, and this budget has no solution. I request the Honorable Finance Minister of the government to take into consideration
the burning issues of the economy of the country and to come forward to solve them instead of making such and such claims. Thank you, sir. Thank you so much. PC Mohanji. Thank you very much, sir. So please allow me to speak in Kannada, sir, my state language. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 23-24 ಬಜೆಟ್ ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಮೊದಲನೇ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಬಜೆಟ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, SC ST ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಏನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2004ರಿಂದ 2014ವರೆಗೆ UPA ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,23,00,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಏನೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾರು ಸೂರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಸೂರು ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಡಬಗ್ಗರು ಕೂಡ ಇದೇ ತರಹ 2,92 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಕೂಡ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್, ಇವತ್ತು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯುವಕರಿರಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಯುವಕರಾಗ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಾಗ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತರ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 7,80,00,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಏನಿವತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೂ ಬೇಕು, ಬಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದಡಿ ಯಾವುದೇ BPL ಕುಟುಂಬದಾರ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದ ಅಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಗರೀಬ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ, ಇವತ್ತು 80 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೊಂದು ದಿನಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಳೆದ 28 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಡವರು ಯಾರು ಈ ಕೋವಿಡ್ನಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 80 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ 80 ಕೋಟಿ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗ್ಲಿ, ನೇಪಾಳ ಆಗ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ದಿನಸಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 80 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಪರ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಸೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು 11 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದರು ಯಾವತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳಕರಿಯೋಗ್ ಮುಂಚೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ, ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸಂಸದನಾದಾಗ 2009ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ಬಜೆಟ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಸಿಲಿಂಡರ್ 10 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ತಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2014ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಏನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ 9 ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ, ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2014ರಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ರು. ಈ 130 ಕೋಟಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ 48 ಕೋಟಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ 48 ಕೋಟಿ ಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಹೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು PM ಸ್ವನಿಧಿ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ₹1 ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ 15 ಪೈಸಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ₹1 ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ₹1 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅವರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 3 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ₹6,000 ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಏನೊಂದು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೋದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆಯೋ ಇದು ಸುಮಾರು 180 ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 102 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ 220 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂತಹ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳು, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ 2 ಕೋಟಿ 2,40,00,000 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ UPA ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಕೇವಲ 835 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಜಿ ಅವರು 7,561 ಕೋಟಿಯನ್ನು 9 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು UPA ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ತೋ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 56 ಅಮೃತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಯಾರೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತವನಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು. ಇವತ್ತು 56 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ MP ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ MP ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಒಬ್ಬ MP ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೂಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇವತ್ತು ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ, ಇವತ್ತು ಸಬರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು 40 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಕನಸು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ 18,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಈ ಸಬರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹದ್ದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಾಯ್ತು ಸರ್. ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ 1,350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 5,300 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಾಗಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ 157 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಏನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆಯೋ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಜೊತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ 4 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳು 2014 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 2 ಟೈರ್ 3 ಟೈರ್ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 10,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಏನೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಟೈರ್ 3 ಟೈರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರು ವಲಸೆ ಬರೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. थैंक यू. श्रीमती काकोली घोष दस्तीगार जी. Thank you, Honorable Chairman, sir. Please. I also thank All India Trinamool Congress for allowing me to speak today. And I seek your intervention and protection from the heckling that has been going on. Right from yesterday, I've been watching whenever the opposition speaks, there is heckling going on from the treasury benches. So I seek your indulgence for 10 minutes, not more than that. As I oppose this totally opportunistic and anti-people budget. Sir, this budget comes with its Saptarshi value system, including inclusive development reaching the last mile, infrastructure and investment,
unleashing the potential green growth, youth power and financial sector. This seems a lot of lofty claims without any substance in it. Strangely, not one sentence has been given by the Honorable Finance Minister, herself a lady, encouraging proposals for the women of the country. Except the Deen Dayal Atmodaya Yojana National Rural Livelihood Mission, even the self-help groups are actually organized by the state governments, not by the central government. Besides the mundane, one would have expected out-of-the-box schemes for emancipation and economic empowerment of women, including the urban poor student. And this actually regrettably neglects 50% of the population, the Adhi Avadi, leaving them outside the effective workforce in nation building. So this budget cannot be termed inclusive, nor can it be termed Sabka Saath, Sabka Vikas. In contrast, it is prudent to draw the attention to schemes like Kanyashri, Rupashri, Lakshmi Bhandar, conceptualized and implemented by Honorable Chief Minister of West Bengal, Srimati Mamata Banerjee, which is taking the women of West Bengal forward. A woman empowered is 2 generations empowered, not only her generation, even her children. So I appeal to the Honorable Finance Minister for sufficient fund allocation for reproductive health care of women, menstrual health care of women, subsidy for their educational loan, tax benefits, and for help towards entrepreneurship of women. Thousands of posts are lying vacant, sir, but there is not a word about employment for the unemployed youth. The new data governance regime, which is being talked about, if we go by the trajectory of the Digital Personal Data Protection Bill 2022, this could be another attempt to obscure data protection in the country. Considering the fact that this was actually the last budget before we go into the polls in 2024, this looks more like an appeasement towards the middle class. Of course, the tax benefit given is welcome and appreciable. But already when the bank has raised the repo rate by 25 basic points, the onus is coming on to the middle class as far as the home loan or car loan is concerned, and that is going to be higher by 6.5%. Sir, we have 3.7 crore unemployed youth in India, but not a word has been spoken about them. Let us make it clear that the mere rebate of 50,000 for the lower limit of taxable income is no relief for the middle class. It is more like a drop in the ocean. While the tax slab reduction has been announced, nothing has been said on the unemployment, on the cost of petrol and diesel, which is really telling on the purse of the middle class and the lower middle class people, and the debt the country has on it. We saw a huge cut on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in the Union budget this time. 60,000 crore, which is the lowest in many years. It's a 33% cut as compared to the revised estimates of the current fiscal. In this year's budget, food subsidy has been reduced. In the coming days, the poor will be suffering most. Meanwhile, the Bengal government provides ration free of cost at the doorstep of the poor people through the Duare Ration. So, we call our government for the people, by the people, of the people. Let this central government also be for the people, by the people, and of the people as far as the constitutional promises go. The union budget, this union budget, has promised that there is a reduction of price in the cooking gas, the LPG. At the moment, we have to pay 1,170 rupees. There has been a hike for rupees 70 and a reduction in rupees 4. So who are they trying to fool? And about the Ujjwala Yojana,
It is said that so many lakhs of women were given this connection. It is a welcome move. We thought the women are going to be relieved from the smoke, but they don't have money to buy the refill of the cylinders. They could use only the one first cylinder given, but now there is no money in the hand of the poor people. Hand of the poor people should be furnished by direct transfer in their accounts of funds so that the economy can take off again after the pandemics. The economy is actually dying. It should take off, so there should be more fund available to the poor people for the market to thrive. We have time and again stated that there is need to debate dismantling of the cooperative federalism, but as usual, the centre conveniently neglected the issue in this budget as well. The tax exemption is only a smokescreen to cover the government's monumental failures in addressing the increasing unemployment and inflation, along with concerns for the poor. What has the centre done for the self-help groups, the ASHAs, the ICDS workers? They are finding it very difficult for the ends to meet. And the farmers, the minimum support price has not been spoken about. And the promise for the farmers for enhancement of their income has not been made. And as far as the medical research possibilities are concerned, there is a proposal for research with ICMR, which is a very welcome move. But I would like to draw the attention of the Honourable Minister that there is a high burden of diabetes in the country. It can also be called that India is the diabetes capital of the world. Nothing has been said about it, and we would really request that for creating consciousness, awareness of the scare that people are getting of diabetes, we should do away with it and guide them properly so that diabetes does not become another killer disease. It affects the eyes, the kidney, the heart. So we should be allotting more money for the diabetes. The growth forecast in this budget and by the economic survey is 7, in contrast to 8.7 of the last fiscal, which is actually lesser than the last time. Anyway, this seems to be a hastily prepared, mindless document with no plan for employment generation and no relief for farmers, daily earners and women. So I draw her attention, the Honourable Minister, to these facts. Thank you, sir. श्री A.M. आरिफ जी, आपने समय सीमा में समाप्त किया. धन्यवाद. Thank you, Speaker, sir. Sir, I stand here on behalf of CPIM to express our stance on Union Budget 2023 and 24. Sir, all through these years in power, this government has succeeded in nothing but coining catchy words for deceiving the ordinary people of the country. So this government came to power promising the people that Acha din aane wale hain. And now they realize that what the government mean was Ache din, not for them but for crony capitalists. So then came Sabka Saath, Sabka Vikas, which was later modified incorporating Sabka Vishwas and Sabka Prayas. But common people were not knowing that for the Modi government, Sabka means for not all, just for Adani and Ambani, etc. And now it's time for Amritagal. Sir, precisely speaking, an extended Amritagal till 2047. By this extension, the government is again deceiving the ordinary people and simply asking them to wait till 2047 to see the false promises broken away. Sir, coming to the budgetary provision made in this budget, the government is again and again proclaiming its anti-people policies and showing its insensitive to the ordinary people, including farmers and laborers. Sir, let's come to the MGNREG. All the former speakers have spoken about it. I'm not going to prolong it. So the program still remains a game changer in rural India, but is subject to mercy killing. Sir, MGNREG is subject to mercy killing by this government.
Sir, for this first time since its introduction, the allocation is rupees 60,000. Made in the budget has gone down to less than 0.2% of the GDP. Sir, whereas it has been estimated by the economists that it should be at least 1.6% of the GDP. Sir, MGNREG is a demand driver law, and we have seen that especially after the COVID-19, which has affected the life and livelihood of the common people, there has been huge increase in the demand for work in rural areas. Sir, if all the households who have demanded job are to be provided 100 days of work as stipulated by the law, how much should be the actual allocation? Sir, similar in the case of umbrella programs for the minorities, the allocation for which was drastically reduced to just 530 crores from 1,810 crores last year. Sir, and what about Rashtriya Krishi Vikas Yojana? Allocation reduced from last year's 10,433 crores to 7,150 crores. Sir, hence it is a crystal clear that this budget is against the interest of the farmers, against the minorities, against the common people, and above all, against the interest of our country. Sir, the Honorable Minister has earmarked 4,327.85 crores for the Department of the Animal Husbandry and Dairy. So far, so good, sir. But in view of the appeal of the Animal Welfare Board to celebrate the Cow Hug Day on February 14th instead of Valentine's Day, I am sure thousands of RSS volunteers and BJP workers would follow with the diktat to hug the Gomadas without thinking about its consequences. Sir, I request the Minister to allocate at least another 500 crores to department in the supplementary demands to give compensation and meet the treatment expenses. Those who hurt by the attack of the Gomadas on trying to hug them. Sir, I am scaring. There is another plot hidden behind this love for Gomada, which is nothing but to give opportunity to the Swayam Sevak to attack Muslims and Christians, alleging their hug to Gomadas as unholy. Sir, I request Honorable Prime Minister Nirmala Sitharamji either allocate more funds or at least to put pressure on Purushottam Rupala ji to advise the Animal Welfare Board to withdraw its advisory. Sir, all the centrally sponsored programs implemented by the government, starting with the name Pradhan Mantri Yojana, PMGSY, PMAY, Jal Jeevan Mission, all are portrayed by the exclusive scheme of the union government. Through the state bear 50% of the expenses or more in most cases. In the case of PMAY, for example, in Kerala, the state government is providing a total of 4 lakhs rupees for each unit. Out of its central share is just 1.5 lakhs in urban areas and just 72,000 in rural areas. Sir, the states spend more than 60 to 70% of the total outlay, and the credit for providing housing for all is claimed by the government without any shame. Kerala government already constructed 3.25 lakhs houses and delivered the key to the beneficiaries. Sir, I wonder whether Honorable Finance Minister acknowledges that Kerala is one among the state of the country. None of the demands made by the Kerala is considered. Sir, I wish to draw the attention of the Honorable Finance Minister of Kerala demands. GST revenue share may be changed to 60-40 in the ratio. GST compensation to be extended for another 5 years. Treat guarantees given by KIFBI and the KSSPL as contingent liabilities and not as equal to open market borrowing. AIMS in Kerala, Ayurveda research in Kerala, Malabar Cancer Center in Thalassery, special package to return migrants, special assistance to Universal MGNREG, special scheme for cashew, care and handloom, agriculture and traditional sectors, doubling of Ernakulam, Kayangulam railway lane, approval of semi-high-speed railway line, point of call recognition of Kannur International Airport. All demands were rejected in the budget only because you have no hope a single seat from Kerala for the coming election. Sir, by using Kerala government fund, welfare pension comparison, you may please note it.
Farmers, 6,000 rupees in 3 installments in Kisan Samriddhi Nidhi. In Kerala, 100 and 600 every month. That is 19,200. We are working with a single engine, not a double engine. Only with a single engine. Old age pension, up to 80 years, 200. And up to above 80 years, 500. But Kerala giving above 60 years, 1,600 per month. Sir, widow pension, central giving 200. Kerala giving 1,600 per month. Disability person, central giving 200. Kerala giving 106 per month. Sir, this is the situation. Sir, after the BJP government has come to power in 2014, about 10 lakhs and 5 lakh crore worth bad loans of the corporate were written off. Whereas even amidst the hardship of COVID-19, not a single paisa of loan taken by the common people was written off. Sir, 1 minute. Instead, this government has penalized by announcing the moratorium on loans, because of which they were actually charged penal interest for loan amount during the moratorium period. Sir, when the poor people of the country are become the more poorer, business empires built by corporate like Adani's and Ambani's looting the public money. Sir, and this government has no courage to send ED, CBI or SEBI to their doorsteps even when they are trying to destabilize our economy by creating shell companies and manipulation of stocks. Honorable Prime Minister spoke yesterday that ED is joining all opposition parties. At the same time, what is ED doing? ED is doing election duty for the ruling party. Sir, again and again, this government is showing that they are anti-people and anti-development of the countries, only for the Adanis and Ambani's. So I request to Honorable Minister, Finance Minister, and always I am demanding that please allocate sufficient funds to convert project sector KV, Kendriya Vidyalaya, into civil sector, including Kendriya Vidyalaya Kayangulam. You can save hundreds of crores of rupees allocated for the new KV. And by these words, I conclude my speech. Thank you. Thank you. Srimati Gomti Sai. सत्र में 2023-24 के बजट सत्र में बोलने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान किए। संसद के इस बजट सत्र की शुरुआत पर उनके भाषण के लिए, जबकि उन्होंने विधित विषयों पर एनडीए सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यों को छुआ। आज मैं पिछले 9 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बात करना चाहती हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश की महिलाएं गरिमामय के साथ जिए और वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद ले। मैं आदरणीय हमारे मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं और धन्यवाद देती हूं, और निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद देती हूं। अध्यक्ष महोदय जी, जो सरकार अपनी महिलाओं को विफल करती है उसका असफल होना तय है। शुरुआत से ही डबल इंजन एनडीए सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक भारत सरकार की महिलाओं को सशक्त और स्वतंत्र बनाने के लिए ऐसी सोची समझी नीतियों को लागू करने का समर्थन कर रहा है, जो महिलाओं के लिए अधिक स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगी, ताकि उन्हें खुद सरकार के रहमो करम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, एनडीए सरकार ने महिला सशक्ति को सही मायने में सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व को समझा और इसे सुनिश्चित करने में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका को भी मान्यता दी। इसी प्रकार एनडीए सरकार ने 4 लाख से अधिक एसएचजी को 1625 करोड़ की पूंजीकरण सहायता राशि प्रदान जारी की थी। अध्यक्ष सभापति महोदय जी,
महोदय, इसके अलावा हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएम फार्मा इसेंस ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के तहत 75,000 एसपीजी सदस्यों के लिए सीड मनी के रूप में 25 करोड़ रुपए और 75 एफपीओ को फंड के रूप में 4.13 करोड़ रुपया जारी किया है। किसान उत्पादन संगठन को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत बढ़ावा दिया है। इसे स्वयं सहायता समूहों का प्रचार हुआ है, जो भाजपा के 8 साल के कार्यकाल के दौरान 3 गुना बढ़ाए गए हैं और अब 70 लाख मजबूत परिवार बनाए गए हैं। महिलाओं के उद्यमिता को प्रोत्साहित किए हैं। एनडीए सरकार ने महिला उद्यमों एसएचजी एनजीओ का समर्थन करने के लिए एक अद्वितीय प्रेक्ष ऑनलाइन ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म महिला ई हाट लॉन्च। यह महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, उत्पादों के सेवाओं के लिए अवसर प्रदान करने के लिए महिलाओं के लिए अपनी तरह पहला प्रत्यक्ष ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और यहाँ कार्यक्रम बढ़ा है। 32,000 करोड़ से अधिक महिलाएं उद्यमियों ने एसएचजी एनजीओ और 7.34 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित कर रहा है। इस पहल के वित्तीय अवसरों की खोज करते हुए महिलाओं को अपने घरों की बंदिशों को छोड़ करके बाहर उद्योग करने की अनुमति भी दी है। आज महिला पूरे देश में आत्मनिर्भर महिला उभर करके आज पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे यशस्वी मोदी सरकार हमारी सरकार की ये महानता है। महोदय जी, एक कविता पढ़ करके आदिवासियों को लेकर के मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जंगल में घूमते घूमतू मैं हो गया, गांव शहर बस्ती फुटपाथ पर ही सो गया, भूखे पेट अक्सर दिन रात कहीं सो गए, दुनिया का दर्द सारा नाम अपनी हो गया। आदि समाज आदिवासी नाम है, फितरत हमारी सरलता की खान है, तीर कमान रखूं भाला या फरसा, मगर भाईचारे में ऊंचा ही है। मेरे ये आज हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आदिवासियों को लेकर के जो देश के लिए काम किए हैं, आज जल जंगल जमीन में हमारे ट्राइबल आदिवासी भाई और बहन जीवन यापन करते हैं। इस बजट में ये फैसला करेगा कि आदिवासी भाई और बहनें और बच्चे देश में सर उठा करके अपना नाम रोशन करेंगे। सभापति महोदय जी, इस अमृत काल में बजट में विशेष रूप से आदिवासी समुदाय को महत्वपूर्ण जगह दी गई है। इस बजट में कमजोर जनजाति समुदाय के लिए 15,000 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे नई योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे आदिवासी समुदाय का उत्थान होगा। महोदय जी, मैं इस सदन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने जनजाति समुदाय उत्थान के लिए केंद्रीय बजट में एकलव्य आदिवासी विद्यालय का प्रावधान रखा गया है। आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए देश भर में 740 एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जाएंगे। इस हेतु 38,500 शिक्षक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में 24 जिले में 73 एकलव्य आदिवासी विद्यालय संचालित है, जहां पर लंबे समय से 3,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस केंद्रीय बजट से रिक्त पद पर शिक्षकों की भर्ती संभव हो सकेगी, जिसे देश भर में 3.5 लाख आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी। इस अमृत काल में बजट में 2047 तक सिकल सेल अमीनिया को दूर करने का मिशन शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस बीमारी से अत्यधिक लोग ग्रसित हैं, जिसका छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। खास तौर पर सिकल सेल अनीमिया की बीमारी आदिवासी समुदाय में ज्यादातर पाई जाती है, जिसका मेरे राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों को सीधा इसका विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। मैं साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
इस सदन में मैं बताना चाहती हूँ, मैं जिस राज्य में आती हूँ उस राज्य के हर परिवार में भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला गैस, मुफ्त में भरपेट राशन घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चहुमुखी विकास है जो सीधा जनता तक पहुंच रही है। मुझे अफसोस है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के लोग बहुत बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी और महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कांग्रेस की सरकार है। इस सदन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को मैं बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार की गरीबों के लिए चल रही योजना में घोटाले हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों का हक प्रधानमंत्री को कांग्रेस सरकार द्वारा छीना जा रहा है। छत्तीसगढ़ का जनता को शोषण किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में पिछले 4 वर्षों से विकास थम सा गया है। रोड की बात की जाए तो बद से बदतर है, जहां पर चलना खुद के लिए जीवन को संकट में डालने की स्थिति में है। सभापति महोदय जी, थोड़ा मुझे इस बात का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार गरीब आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार उनसे छीन रही है। उसका अधिकार छीनकर भू माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया को दिया जा रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ में माफिया सरकार राज चला रही है। सभापति महोदय जी, मैं एक चीज बता रही हूँ, मैं गांव की रहने वाली हूँ, मैं एक आदिवासी महिला हूँ। मेरा गांव जो इस देश में 60 सालों तक जिन्होंने सत्ता पे राज किया, सत्ता का सुख भोग किया, वह व्यक्ति क्या जाने गरीबों का गरीबी, जो पैदा होते ही चांदी के चम्मच में खाना खाया हो। गरीबी तो हमने देखा है जी, क्योंकि मेरा गांव जंगल के अंदर है और मेरा घर सुबासु मोहल्ला में है और जनजाति समुदाय के बीच में मैं रहती हूँ। इसलिए जनजातियों की तड़पती भूख और देखा है, तरसती आंखों को नए कपड़ों के लिए देखा है, मजबूरियां मकान की देखी है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज रोटी कपड़ा मकान पूरे देश के आदिवासी और जनजाति, दलित, पिछड़ा, शोषित लोगों के समक्ष पहुंच रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि आज देश के हित में युवाओं को लेकर के, वृद्ध को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, सभी वर्ग के लोगों को लेकर के इस बजट को पेश किया है। आज छत्तीसगढ़ की पूरे देश की जनता तक, आज जन जन तक ये योजना पहुंचने वाली योजना है। आज माननीय सभापति महोदय जी, हमारे युग में नव निर्माण का अवसर है। इसके लिए 100% सामर्थ्य के साथ काम करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें अतीत का गौरव, आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें आत्मनिर्भर बनाना है और मैं पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को और उनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि ऐसे ही पूरे देश के लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते रहें। यहाँ 133 करोड़ जनता आपके साथ है। आप मोदी जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर हसनैन मसूदी। शुक्रिया जनाब। प्लीज बी ब्रीफ, 5 minutes. No, how can I be? Make your point. जनाब, एक बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जनाब, बजट महज एक, जैसे बार बार हम कहते हैं कि महज एक गोशवारा नहीं है। जनाब, बजट एक एक्सरसाइज है कि जो चैलेंज है उन चैलेंज का मुकाबला कैसे किया जाए और जो सपने हैं वो कैसे बुने जाएं और लोगों में हौसला कैसे दिया जाए सपने देखने का। जहां तक मौजूदा बजट का ताल्लुक है, ये सही है कि डेफिसिट में कंट्रोल में रखने का एक प्रयास है। 6.4% जीडीपी का डेफिसिट रहेगा, जबकि रिवाइज्ड टोटल एक्सपेंडिचर 41 लाख करोड़ के करीब है और उससे थोड़ा कम जो रिसीव्स है। लेकिन जनाब, जहां कुछ अच्छे प्रोग्राम
की निशानी की गई है बजट में, लेकिन वहीं पर दूसरे मामलों में बजट मायूसकुन है। जैसे पीएम प्रणाम, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, प्रधानमंत्री डीवीजी डेवलपमेंट या महिला समान बजट, ऐसे कुछ कहीं कहीं पर आपको कुछ पैचेस मिलते हैं जहां पर थोड़ा ये एहसास हो जाता है कि शायद एक प्रयास किया जा रहा है ताकि हर तरीके के हर वर्ग को ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ का एक प्रबंध किया जाए। लेकिन कुछ मामलात में बजट काफी मायूसकुन है। जैसे जनाब सबसे बड़ा जो एक तिहाई आबादी है हमारे मुल्क में बच्चों की, 33% हमारी कुल आबादी के बच्चे हैं, और उसी सेक्टर में चाइल्ड वेलफेयर में कोई मिड डे मील्स में 43% की कमी की गई है जो बजटीय प्रपोजल्स हैं। आईसीडीएस में भी हम देख रहे हैं कोई 40% करीब कमी की गई है, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। जब आप जो वीकर सेक्शंस हैं, जब आप वो जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी बात करते हैं तो उस मामले में इतनी बड़ी कटौती तो काबिल कबूल नहीं है। जब एग्रीकल्चर में मिल मिला के 5% की कटौती की गई है, और जनाब जो हमारा फूड प्रोसेसिंग है उसमें तो बिल्कुल ही हैरान कुन तरीके तक कटौती की गई है। एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है। जनाब नरेगा में 18% की कमी की गई है। नरेगा में कहा जाता है बार बार कि नहीं ये डिमांड ड्रिवन है, लेकिन जब आपने एलोकेशन नहीं की तो डिमांड ड्रिवन का क्या मतलब है? वो कौन सा कैसा आर्ग्यूमेंट है? 18% की जो कमी है बजट में नरेगा में, तो उससे अलावा जनाब हमारे जम्मू कश्मीर में जो मटेरियल कंपोनेंट में उसमें 2017 से कुलगाम में और बाकी अजला में वो जो वाजिब और हुकूमत है उनकी अदायगी नहीं की गई। जनाब सरप्राइजिंगली हेल्थ में कमी की गई है जनाब, जबकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोई बड़ी चुनौतियां सारे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर में और सोशल वेलफेयर सेक्टर में कमी की गई है। जनाब हमारी ये उम्मीद थी कि जो हमारे डिसेबल्ड हैं, जो हमारे स्पेशली एबल्ड हैं, जो हमारी जो फैमिली पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि क्या 1000 रुपए से एक गैस सिलेंडर भी नहीं स्पेशली एबल्ड के घर में या जो ओल्ड एज पेंशन पाने वाले उनके घर में आता है, तो उसमें सोशल वेलफेयर में कमी करने से जरूर एक एडवर्स इम्पैक्ट हो जाएगा। और हमारा मुतालबा जो है कि वो जो पेंशन दिया जा रहा है उसमें तकरीबन 2.5 गुना किया जाता है, वो तो बिल्कुल नामुमकिन सब की बात बन गई है। जनाब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जनाब पिछले साल 44,538 करोड़ का जो प्रावधान था उसके मुकाबले में 1/3 उसका काटा गया है, वो 2/3 पर लाया गया है। इस साल फकत 35,581 करोड़ का जो है प्रोविजन है। तो जनाब जम्मू कश्मीर को और बजट में जनाब ऐसे चैलेंजेस जो है उन चैलेंज का कोई जिक्र ही नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज है जनाब अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट में दिखता नहीं है कि सिर्फ सिवाय के 2.4 लाख करोड़ रुपए आप रेलवे में आप उसमें उस के कैपेक्स में बढ़ाते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं, जैसे कोई चैलेंज ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जनाब सबसे ज्यादा मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर बोलूंगा ही नहीं अगर अभी तो शुरुआत ही में नहीं की। तो जनाब हमारी जम्मू कश्मीर अब नई समस्या का सामना है। जनाब सिर्फ ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, आप जो वहां पर बुलडोजर का मामला चला गया, आप जनाब 2-2, 3-3 मरले पर जो दुकानें हजारों सैकड़ों दुकानें वो गिराई जा रही हैं, वो सारे जो जिस पर वो दुकान का चलता था लाइवलीहुड चलता था वो कुंभे, वो सारे कुंभे जनाब अब बेरोजगार होने जा रहे हैं। और जनाब ये कहाँ का, मुझे नहीं लगता इसमें क्या विजडम है कि जो बनाया मकान है वो आप गिरा रहे हैं बगैर किसी, वो एक मामला है जो नया चैलेंज उम्र किया है, वो तोड़ रहे हैं आप, दुकानें तोड़ रहे हैं आप। तो जनाब प्लीज कंक्लूड। कैसे कंक्लूड करेंगे जनाब? टाइम allotted is only 6 minutes. अभी तक किसी को नहीं कहा गया कंक्लूड करने के लिए। जनाब 61,000 they completed themselves within the limit. 61,000 you are exceeding, that is the problem. और जब हमारे कंटिजेंट पेड वर्कर्स, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, हेल्थ केयर वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, सीआईसी वर्कर्स, होम गार्ड्स, नेशनल यूथ कॉर्पस और कॉलेज फंड वर्कर्स, ऐसे हजारों हैं जिनको जो अंडर पेड है, जिनको ह्यूमिलेटरी वेजेस दिए जा रहे हैं। अब नया सिलसिला जनाब जम्मू कश्मीर नया चैलेंज हुआ, वो उत्तराखंड की के तरीके पर जम्मू कश्मीर जा रहा है। डोडा में, चिनाब वाली में ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से अब जमीन सरकती जा रही है।
तो जनाब वो जो जमीन सरकने की वजह से नया एक चैलेंज हुआ है कि आप जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है वो साल में 365 दिन में से निस्फ वो बंद रहती है और उसका सीधे सीधा असर पड़ा है हमारी मेवा इंडस्ट्री पर। जनाब करोड़ों रुपए का मेवा इंडस्ट्री में जनाब नुकसान हो रहा है। जनाब इसके अलावा जितना ही नहीं कि हमें यह उम्मीद थी कि एक बड़ा पैकेज दिया जाएगा ताकि 61,000 जो हमारे डिलीवरीज कैजुअल वर्कर्स नीड बेसिड हैं और जो अंडर पेड है ह्यूमिलेटिंग उनको वेजेस दी जा रहे हैं उनका, ताकि उनको रिकग्नाइज किया जाएगा, लेकिन कोई जिक्र ही नहीं इस बजट में, बल्कि आगे से ही 30% कम किया गया। तो जनाब नई समस्या हो गई। श्रीनगर को माना गया कि सारे मुल्क में सबसे ज्यादा लंग कैंसर की इंसिडेंस श्रीनगर में है, लेकिन कोई एडिकेट प्रोविजन नहीं है वहां डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को मुस्तकम करने के लिए। मैं कई बार मिनिस्टर साहब से भी मिला। तो जनाब प्लीज फ्रेंड। तो जनाब इसके अलावा जनाब एक जो दो तीन इस मौके को मैं जस्ट 2-3 मामलों में No, you have to conclude within a minute. Otherwise, I will be confined to call other man. Please. ACC लोन्स को माफ करने का मेरा मुतालबा था, क्योंकि सड़क बंद होने की वजह से और भाव गिरने की वजह से एप्पल इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ, वो मेरी डिमांड है। और बाकी और सैफरान जनाब 22,000 किलोग्राम से 4,000 किलोग्राम उसकी पैदावार हो गई। मेरा ये मुतालबा था कि नहीं ये कि डायग्नोस्टिक सिस्टम मजबूत करें, बल्कि मुझे दो तीन है। एक थर्ड जो नेशनल हाईवे है वो कापरन देसा कापरन का रोड है जो प्रपोजल दिया हुआ है, डीबीए बना हुआ। लास्ट पॉइंट प्लीज मैट, लास्ट पॉइंट वो बनाइए। तो जनाब उसके अलावा जनाब दो तीन सेकंड लगेंगे जनाब। एक है जनाब हमारा लहन दर्जन से बटनूर की रोड और साहिबाबा से खिरशार की रोड वो बनाए, ताकि थर्ड एक पार्लर पहलगाम को और अमरनाथ यात्रा के लिए वो सुविधा हो जाए। तो एक कमीशन बनाया जाए जो डस्ट पोल्यूशन की वजह से जनाब सैफरान का और बाकी जो फसल है हॉर्टिकल्चर का पापुर इलाके में खिरव इलाके में जो नुकसान हुआ, ताकि वो पोल्यूटर टू पे प्रिंसिपल के तहत वो डिटरमिन करे कितना एक नुकसान हुआ है, ताकि जो मैंने कहा कि 25% रह गया सैफरान का, ये नहीं कि आपको सैफरान मिलता है लेकिन सैफरान की 25% जनाब अपराध रह गई पैदावार, तो जनाब उसके लिए वो डिटरमिन करे कितना नुकसान हुआ। तो इसके अलावा जनाब जो एक प्लीज कंक्लूड नाउ। हाँ, कंक्लूड करने जा रहा हूँ। तो उसके अलावा जनाब मुगल जो हमारे जो अंडर कंसिडरेशन है जनाब हमारे जो टनल्स है, मुगल रोड का टनल है, क्योंकि जनाब जब 225 दिन साल में औसतन हमारी नेशनल हाईवे बंद रहती है, जो हजारों टन लाखों टन जो मेवा है वहीं का वहीं रह जाता है। तो इन सारी जो हमारी मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, 61,000 जो हमारे डिलीवरीज हैं, थैंक यू। और बाकी जो श्री राजकुमार लास्ट आप कंक्लूड करूंगा बस लास्ट। तो बस जनाब जम्मू कश्मीर आप कहते हैं ना बार बार जम्मू कश्मीर ताज मुल्क है, बस। तो जनाब एक बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है जो जनाब आपने ये अभियान शुरू किया, ये नया ये डिमोलिशन का जो आपने किया, ये इट इज बीइंग यूज्ड एज ए वेपन। आपको एक वेंजनेस दिखती है, एक सैडिज्म दिखता है। ये छोटे छोटे जनाब है, 2-2 मरलों पर एक दुकानें हैं, 200 फुट प्लीज वो बंद कर दीजिए, ताकि और आपके लिए समस्या न बन जाए और परेशानियां न बन जाए। यस। और बाकी जो आप श्री राजकुमार जहर। जब एक बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं बजट पर समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब ये जो अमृत काल का बजट देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया, इसकी चहुओर प्रशंसा हो रही है। चारों तरफ आम जनमानस इसकी प्रशंसा में लगा हुआ है। वहीं मैं देख रहा हूं जो नकारात्मकता वाले लोग हैं वो संसद में बैठे बैठे कभी कभी गाल बजाने का भी काम करते हैं, जिन्हें भी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन वो भी यहां गाल बजाने का काम करते हैं, ऐसे विपक्ष के लोग। महोदय, ये जो बजट है ये अमृत काल का बजट है। ये आने वाले समय में देश की दिशा और दशा को बदलने वाला बजट है। ये जो बजट है ये आगामी समय में भारत को विकसित बनाने की एक आधारशिला है। मैं इस अवसर पर माननीय मोदी जी द्वारा कही गई एक कविता को स्मरण करना चाहूंगा। अपने मन में लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नव युग है, नव भारत है,
हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है, एक नया भारत मनाना है। ऐसी एक कल्पना, ऐसी एक योजना लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में बहन सीतारमण जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में समाज का कोई भी वर्ग, युवा हो, महिला हो, किसान हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, एक सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसी मंत्र पर यह बजट तैयार किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं गांव से आता हूं, हेठ गांव का रहने वाला हूं। मुझे याद है एक समय पर हमारे घर परिवारों में गांव की महिलाएं सुबह 3 बजे जगती थीं। 3 बजे से 4 बजे के बीच में वो खेतों में जाकर अपनी दैनिक क्रिया के लिए उन्हें जाना पड़ता था। उनको लगता था कि कहीं पुरुष जागेंगे, वो निकलेंगे, उससे पहले हम दैनिक क्रिया करके आ जाएं। अध्यक्ष जी, मैं हर्ष के साथ और गर्व के साथ आज कह सकता हूं कि वो एक जमाना था जब हमारी महिलाएं 3 बजे जागकर खेतों की तरफ जाती थीं। आज यह जमाना है मोदी जी का कि आज घरों में इज्जत घर देकर माननीय मोदी जी ने हमारे घरों में शौचालय बनाने के जो काम किए हैं, इससे आज हमारे बहनों का, माताओं का, बुआओं का, नानी का, दादी का, हमारी बेटियों का सम्मान और इज्जत बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, गांव में ये इज्जत घर बनाकर माननीय मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान को भी बढ़ाने का काम किया, उनकी इज्जत की रक्षा करने का भी काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था जब खेतों से लकड़ियां बीन बीन कर हमारी महिलाएं लाती थी। हमारी महिलाएं कंडे थाप कर, कंडे लेकर घर में आने का काम करती थी। बहुत से लोग तो कंडे क्या होते हैं समझते भी नहीं होंगे। उन कंडों से, उन लकड़ियों से चूल्हा जलाकर, फूकनी से फूक मार मार कर उनकी आंखों में धुआं आता था। अनेक हमारी बहनों को बीमारी का वास्ता पड़ता था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एलपीजी गैस कनेक्शन देकर 10 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन देने का काम किया, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, हम ग्रामीण भारत के लोग हैं। मुझे याद है अपने बचपन के समय हम कुएं पर जाते थे पानी भरने के लिए। मेरी माताएं बहनें रस्सियों से लेकर बाल्टी डालकर कुएं से पानी खींचने का काम करती थी। उनके हाथों में निशान पड़ जाते थे। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल से स्वच्छ जल देने का काम किया है। यह मेरे मोदी जी ने करके दिखाया है। पानी की बात चल रही है तो पानी पीऊंगा साहब। माननीय अध्यक्ष जी, एक समय पर हमारे गांव में और बस्तियों में झोपड़ी के अंदर, टीन शेड के अंदर, खुली छत के नीचे रहने के लिए करोड़ों लोग मजबूर हुआ करते थे। वो परेशान थे हम कैसे रहें। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने गरीबों को, घरों के लिए गरीब किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, छोटे दुकानदारों को, उनको घर की छत देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों करोड़ों लोगों को छत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। माननीय सभापति जी, आज मैं आपसे, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एक समय हुआ करता था कि गांव में लोग समझते नहीं थे कि हमारा बैंक में खाता है कि नहीं। लोग
चाहते थे कि उनके खाते बैंकों में खुलें, लेकिन उनके बैंकों में खाते नहीं होते थे। गांव का आदमी समझता था, बस्ती का आदमी समझता था कि बैंकों में खाते तो बड़े लोगों के होते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज करोड़ों करोड़ लोगों के खाते जनधन के माध्यम से आज बैंकों के, मेरे गरीबों के, मेरे मजदूरों के, मेरे श्रमिकों के खाते खोलने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। माननीय सभापति जी, आज उन्हीं खातों के माध्यम से आज कितनी सारी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से मेरे गरीब भाइयों के खाते में जाने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं, जो कभी बड़ा गंभीर था। गांव में रहने वाले गरीब, बस्तियों में रहने वाले गरीब, जब वो बीमार पड़ जाते थे तो उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, और वो गांव में साहूकारों के पास जाकर अपने इलाज की व्यवस्था करने की बात करते थे। किसान अपने खेत को गिरवी रखकर इलाज कराने के लिए व्यवस्था करता था, और गांव का श्रमिक अपने घर को गिरवी रखकर इलाज कराने की व्यवस्था की बात करता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्यों नहीं धन्यवाद दूं, मैं ही नहीं, देश के करोड़ों करोड़ों जनता आज माननीय मोदी जी को धन्यवाद दे रही है कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड लाकर हमारे देश के गरीबों के इलाज कराने की व्यवस्था करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको अनेक योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं किसान समाज से आता हूं। मेरा जो समाज है वो किसान समाज है। मैं भी खुद खेती करने वाला छोटा गरीब किसान हूं, सीमांत किसान हूं। मेरे पिताजी भी खेती करते थे। आज किसानों के जीवन में जो बदलाव लाने का काम किया, अनेक नेता इस देश में हुए, अपने आप को किसानों के मसीहा कहलवाते थे अपने समर्थकों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज किसानों के हित में अगर अनेकों योजना लाकर किसान के जीवन में अगर बदलाव लाने का किसी ने काम किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। माननीय सभापति जी, किसान क्रेडिट कार्ड आपको याद होगा, गांव का किसान, गांव का गरीब आदमी अपनी खेती की बिजाई के लिए, उसके बीज के लिए, खाद के लिए, यूरिया के लिए हाथ फैलाता फिरता था कि मेरे हाथ में पैसा आ जाए, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता था। साहूकार उनकी जमीनों को गिरवी रखवाकर उनको पैसा देने का काम करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने किसानों के दर्द को समझा और किसानों को केसीसी कार्ड देने का काम किया। किसान आज अपनी जेब में केसीसी का कार्ड रखता है और जाकर बैंक से पैसा लेने का काम करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि इस केसीसी कार्ड के अंदर पशुपालन के लिए और मछली पालन के लिए धन देने की और व्यवस्था कराने का काम किया, तो ये माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताना चाहता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दी है। ये किसानों को शक्ति देने का काम करेगी। इसके लिए 6,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों के जीवन में एक सुधार आएगा। माननीय सभापति जी, फसल बीमा योजना, एक समय था जब किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी, उनको मुआवजा नहीं मिलता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों की फसल बीमा योजना में 50% से नीचे लाकर 30% पर किसानों को अगर फसल बर्बाद होती है अतिवृष्टि में, ओलावृष्टि में, तो उनको आज मुआवजा मिलने का, बीमा मिलने का काम होता है। इसी प्रकार माननीय सभापति जी, एक समय था कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार में किसान जब यूरिया और डीएपी लेने जाता था तो न उसको यूरिया मिलता था न डीएपी मिलती थी। मिलता क्या था? लंबी लाइनें और ऊपर से लाठीचार्ज। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को। उन्होंने किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया कर हमारे किसानों को यूरिया और डीएपी देने का काम किया। और यही नहीं, और जो भ्रष्टाचार, कालाबाजारी यूपीए के गवर्नमेंट के समय होती थी, उसको समाप्त करने का काम भी किया गया। माननीय सभापति जी,
पीएम कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक क्रांतिकारी कदम किसानों के लिए उठाया गया। जिन गांवों में सिंचाई का अभाव था, जिन गांवों में पानी की कमी थी, उन क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करने का काम किया गया और किसानों को व्यापार के क्षेत्र में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ बनाने की योजना बनाई। आज 6,000 से अधिक एफपीओ बन चुके हैं। आज किसान का नौजवान बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, वो एफपीओ बनाकर खेती को भी व्यापार की तरफ ले जाने का काम करने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, एक समय था जब यूपीए की गवर्नमेंट में कृषि का जो बजट था वो 23,000 करोड़ रुपए मात्र हुआ करता था। आज वही एग्रीकल्चर का बजट 1,25,000 करोड़ रुपए है। इससे किसानों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की राशि 60 करोड़ से बढ़ाकर 450 करोड़ करने का काम किया है, जो कि 7 गुना राशि बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान अन्नदाता की तरह ऊर्जादाता बने, किसान अन्नदाता की तरह ऊर्जादाता बने, इसके लिए सोलर पंप लगाने की व्यवस्था की गई है, उसमें अनुदान देने का काम किया गया है और किसान से सरकार भी खरीद सके, इस तरह की व्यवस्था भी सरकार ने किसानों को देने का काम किया है। माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रणाम योजना के द्वारा एक वैकल्पिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक को संतुलित उपयोग करके पैदावार बढ़ाने के लिए भी भूमि के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रणाम योजना देने का काम इस बजट में किया है। माननीय सभापति जी, गोवर्धन योजना, जिसका नाम ही गोवर्धन है, और हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत के लोग ही नहीं, दक्षिण भारत से लेकर पूरे देश भर के लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं मथुरा में और गिरिराज महाराज का जयकारा लगाते हैं। क्योंकि गिरिराज महाराज का जयकारा ये किसानों के लिए है। गिरिराज जी की कृपा हमेशा किसानों पर रही है। ऐसे गिरिराज जी के नाम से गोवर्धन योजना लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में किया है और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, 500 बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए इस रकम को आवंटन किया गया है। स्पेशल कॉटन कपास, अतिरिक्त लंबे स्पेटल कॉटन के उत्पादन के लिए पीपीपी मॉडल पर क्लस्टर आधारित किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और उसको निर्यात को बढ़ाने के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। माननीय सभापति जी, आज पूरे देश में आप देख रहे हो, दुनिया में देख रहे हैं कि रासायनिक खादों के उपयोग से, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक दवाओं के उपयोग से आज अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। चाहे कैंसर हो, चाहे अन्य बीमारियां हो, हमारे देश के नागरिकों में गंभीर बीमारियों का कारण ये जो कीटनाशक दवाएं और डीएपी, यूरिया के कारण जो अत्यधिक प्रयोग होता है, ये एक बड़ा कारण है। ये वास्तव में देश की बहुत गंभीर समस्या है। अब इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह सुझाया है कि हम लोगों को प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए। और आज मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती के माध्यम से देश के जीवन के, लोगों के जीवन में उनकी रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती का अभियान प्रारंभ किया है। एक समय था जब हमारे किसान प्राकृतिक खेती करने का काम करते थे, लेकिन आज बीच में परिवर्तन आया तो आज प्राकृतिक खेती के लिए 3 करोड़ किसानों तक जाने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर, इस सदन में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी और देश के नागरिक भी मिलकर हम लोग प्राकृतिक खेती के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं ये सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, जब हम छोटे से थे तब भी और आज भी हम बाजरे की रोटी और बाजरे की महेरी और बाजरे की खिचड़ी, ये हम घरों में खाने का काम करते थे, मट्ठा और छाछ के साथ। थोड़ा जमाना बदला,
लोग जंक फूड की तरफ चले गए, पिज्जा और बर्गर की तरफ चले गए। हम पिज्जा और बर्गर खाने की मना तो नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आज मिलेट्स को और मोटे अनाज को जो श्री अन्न नाम देकर निर्मला सीतारमण जी ने सम्मानित करने का काम किया है, वो हमारे लिए, किसान के लिए बड़ी सम्मान की बात है। माननीय सभापति जी, आज श्री अन्न को खाने के लिए संसद के अंदर भी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी ने और कैलाश जी ने हम सबको श्री अन्न के दर्शन भी करवाए और श्री अन्न को खिलाया। हम चाहते हैं कि आज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जिस प्रकार से योगा को पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कराया, इसी प्रकार से आज श्री अन्न को भी पूरी दुनिया में स्वीकार कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रण किया है। माननीय सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम इस बजट के माध्यम से उठाया गया है। ऐतिहासिक कदम तो उसी दिन उठाया गया था जिस दिन भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय को लाया गया और हमारे देश के गृह मंत्री और आज के जमाने के लौह पुरुष अमित शाह जी उसके मंत्री के रूप में बने, तो उसी दिन से यह तय हो गया था कि सहकारिता का क्षेत्र बहुत आगे तक जाएगा। मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं, एक किसान के होने के नाते भी, आज ये कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम गांव-गांव हमारी सरकार जा रही है और हर गांव के अंदर कोऑपरेटिव की सोसाइटी बनेगी। आज गांव में जो किसान की उपज होती है, जो अन्न उपजाने का काम, उत्पादन का काम किसान करता है, उस अन्न को और उत्पादन को भंडारण करने की जगह माननीय सभापति जी मेरे किसानों के पास नहीं होती। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बहन निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव के सेक्टर के लिए हमारी सरकार ने एक बड़े कदम उठाने का काम किया है और आने वाले समय में किसानों की उन्नति का रास्ता कहीं से निकलेगा तो वो रास्ता कोऑपरेटिव में होकर निकलेगा, सहकारिता के क्षेत्र से निकलेगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। माननीय सभापति जी, मैं आपको कुछ किसानों की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं और वो किसानों की समस्याएं समाधान करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार कर रहे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के अंदर वहां पर हमारे जो अभी जिनको लगता है कि भारत टूटा हुआ है, उनको जोड़ने की जरूरत है। वो अलग बात है कि उनके बाप दादों ने क्या किया भारत के साथ, ये पूरा देश और देश जानता है। लेकिन राजस्थान के अंदर चुनाव से पहले, विधानसभा का जब चुनाव था, तो राजस्थान में चुनाव से पहले राहुल जी ने एक भाषण में बयान दिया था और एक गिनती भी गिन के सुनाई थी। हम तो समझते थे पता नहीं उन पे गिनती आती है कि नहीं आती है, उसी दिन पता चला कि उन पे गिनती आती है। उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिस 10 दिन होंगे, 10 दिन के बाद किसानों के कर्जे राजस्थान में माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन न उनकी बात रही, केवल वो गाल बजाते रहे, किसानों के नाम पर राजनीति करते रहे, लेकिन राजस्थान के अंदर किसानों के कर्जे आज तक माफ करने का काम नहीं किया गया है। आज किसानों पर उनके जमीनों के नीलामी के पेपर जा रहे हैं। मैं इस संसद के माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहता हूं कि ऐसे झूठे फरेबी लोगों की बातों को आप पूरी देश की जनता आज जान गई है। माननीय सभापति जी, बस आधे घंटे और बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। माननीय सभापति जी, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की किसान विरोधी नीतियों के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, केजरीवाल जी ने दिल्ली में किसानों का हक नहीं दिया, किसानों को किसान का जो दर्जा होता है वो भी देने का काम नहीं किया। केजरीवाल जी ने यह जरूर किया कि किसानों के ऑनरेबल मेंबर प्लीज किसानों के जो होता है उसे अरे कहने दीजिए साहब, पूरी बात को कर दो। अच्छा मैं बताऊं आप माननीय सभापति, नो 20 more members from your side. कोई दिक्कत नहीं है साहब, रात के 12 बजे तक किसानों का मुद्दा है साहब। केजरीवाल जी ने अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाने का काम किया है। केजरीवाल जी ने ट्रैक्टर को भी उन्होंने किसान का व्हीकल नहीं माना, उसको भी व्यावसायिक व्हीकल मानने का काम किया है। हमारे
दिल्ली के 15 गांव ऐसे हैं जिन गांव में आज भी सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर 4-4 फुट पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है और किसान हमारा परेशान है। दिल्ली में चकबंदी करने का काम नहीं किया गया जो किसानों का हक है। तो इसलिए उनका जो ढोंग है, वो जो जिस प्रकार की बातें करते हैं वो सामने आता है। माननीय सभापति जी, मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। माननीय सभापति जी, पंजाब के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने से पहले उन्होंने कहा था कि जब अप्रैल आएगी तो अप्रैल के बाद कोई भी किसान पंजाब के अंदर आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर हमारे 2 गांव वहां ऐसे हैं, एक गांव है बाजक और दूसरा गांव है गहरी बुटर। उन गांव में 2 किसान नौजवानों ने इसलिए केवल आत्महत्या कर ली कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी और पंजाब की सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिलवाया। और बड़े शर्म की बात तो यह है माननीय सभापति जी, बड़े शर्म की बात तो यह है कि जब मैं उन परिवारों से मिलने गया, पंजाब के अंदर दोनों गांव के अंदर बाजक में गया, गहरी बुटर में गया, उन किसान परिवारों से मिला, तो वहां जाकर पता चला कि सरकार का कोई नुमाइंदा, नायब तहसीलदार एसडीएम से लेकर न कोई एमएलए, न कोई एमपी, न उनका मंत्री, कोई भी उन परिवारों से मिलने तक नहीं गया। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। माननीय सभापति जी, उन परिवारों की स्थिति मैं बयान नहीं कर सकता। एक नौजवान बेटी विवाह के लिए थी, माता पिता बुजुर्गियत में बिल्कुल अपने दिनों के अंतिम दिन जी रहे थे, उनके पास खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। माननीय सभापति जी, हम लोगों ने समाज के साथ मिलकर, हमने भी व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगा कि किसान परिवार की मदद करनी चाहिए, हमने कुछ आर्थिक सहयोग व्यक्तिगत रूप से भी करने का काम किया और वहां पर हमारे समाज के लोगों ने भी, किसान समाज के लोगों ने मिलकर काम करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन परिवारों ने ये बात कहकर मुझे चौंकाया। उन्होंने कहा, राजकुमार जी, हम वही लोग हैं जो इनकी बातों में आ गए, किसानों के नाम पे बहक गए, इन्होंने हमें बहकाने का काम किया और इन्हीं के लिए हम दिल्ली के बाहर सड़कों पर धरने पर बैठे रहे कितने दिन तक, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उनको मिलने के लिए नहीं गया। प्लीज कंक्लूड। माननीय सभापति जी, मैं बहुत अधिक न कहकर बस यही कहना चाहता हूं कि आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, आदिवासी, अनुसूचित सभी वर्गों में मैं बात करके देखता हूं, आज पूरे देश के जनमानस में ये चल रहा है कि आज केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है, हर वर्ग आगे बढ़ रहा है, किसान की उन्नति हो रही है, किसान का विकास हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है। आज एक नए भारत के निर्माण के लिए ये चल चुके हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज पूरी दुनिया में जो सपना हमने देखा था एक दिन विश्व गुरु बनने का, आने वाला समय, ये अमृतकाल का समय भारत को विश्व गुरु बनाकर रहेगा। इतनी कहकर मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती हरसिमरत बादल। क्या खाए? प्लीज सर, शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे साथी राजकुमार जी पंजाब की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इन्होंने मेरे क्षेत्र में, गहरी बुटर मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है, और बोला कि 2 किसान, कोई मंत्री नहीं गया। तो भाई आपने ये भी बताया कि किसान 1.5 साल इधर दिल्ली के सरहदों में बैठे रहे, 800 किसान शहीद हो गए, आपका कौन सा मंत्री गया? आपके मंत्री तो कहते कोई मरा ही नहीं। तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर करिए अपने गिरेबान में भी झांक ले। सर, उस टाइम हम तो छोड़ दिए थे, बिल्कुल नहीं, हम छोड़ दिए थे, किसानों के साथ हम साथ में थे, आप किसान के विरोध में थे, हम छोड़ दिए थे। सर आज और कुछ अपने भी पीढ़ी के नीचे, वो पंजाबी में कहते हैं अपनी पीढ़ी के नीचे सोटा मार लिया करो बोलने से पहले। सर आज जब सरकार ने आप अपना 9वां बजट पेश किया, 10 साल पूरे होने आए ने, 9वां फाइनल फुल बजट सीगा जिहड़े देश सरकार ने पेश किया, ते देश उम्मीद करदा सी कि आज वो सारे शब्द जिहड़े पिछले बजट च सुनन नूं मिलदे सी, अच्छे दिन, आत्मनिर्भर, पिछले 2021 दे बजट च तां 21 बारी
अच्छा आत्मनिर्भर कहा गया, लेकिन इस बजट से आत्मनिर्भर का कोई उल्लेख ही नहीं सी, ना ही नहीं सी। ते देश जानना चाहता सी भई वो किन्ने देशवासी ने जिन्होंने इन्होंने आजादी दे 75वें साल ताई गरीबी रेखा तो चक के आत्मनिर्भर बनाता, किन्ने किसान ने जिन्हों के गले तो फांसी का फंदा ला के उन्होंने आत्मनिर्भर बना दिता हैगा। वो किन्नी छोटी इंडस्ट्री हैगी जिहड़ी आके खड़ी हो गई है, जिदे करके ये देश आत्मनिर्भर बन गया। क्योंकि 2016 तो आप सुनते रहे कि 2016 आजादी के 75वें साल पे हर एक गरीब का मकान होगा, हर मकान पे उनका पीने का पानी होगा, किसान की आमदन दुगनी होगी, हर नौजवान दे कोल रोजगार होगा। ते 75 साल तो पिछले साल पूरे हो गए ते आंकड़े देख लो, किसान अजे भी मरी जा रहे ने, बेरोजगारी वधी जा रही है, महंगाई आसमान ताई पहुंची हुई है। ये हकीकत है। ते बजट च कले नवे जुमले, नवी स्कीमां ते नवे नाम सब मैं समझदी हां कि सब तो वड्डा नुकसान जिहड़ा इस बजट ने ना महंगाई दे उत्ते कोई चर्चा कीती, ना बेरोजगारी दे उत्ते कीती, ते सब तो वड्डा धोखा ते किसानां दे नाल कीता। ये किसान जिहड़े इत्थे 1.5 साल बैठे रहे, 800 शहीद हो गए, उन्होंने क्या अंदोलन चक लो, थोड़ी MSP नूं गारंटी दित्ती जाऊगी, लेकिन 1.5 साल बाद बजट च MSP नूं गारंटी करन दा एक शब्द ही नहीं सीगा। हर पक्षों किसान दे नाल इहो जिहा धोखा कि उन्हां दे इनपुट कॉस्ट जिहड़ा रोज वधी जा रहे ने। आज सरकार ने अपने आप नूं कई बारी थपथपाया पीठ च, 80 करोड़ लोकां नूं असीं अन्न देंदे हां, लाभ भारती इनकी जो लाभ भारती की इनकी जो राजनीति है, 80 करोड़ लोकां नूं जिहड़े अन्न मिलदा हैगा, ਉਹ अन्न किदे करके मिलदा हैगा? ਇਹ अन्न ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ अन्नदाता ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। Nothing will go on record except Mrs. Badal. ਤੇ ਉਸ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਸ अन्नदाता ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਰ। Mr. Rajkumar, you spoke whatever you want. The House was very passionate to hear your speech. Please sit down. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बजट reduced by 12%. PM Kisan reduced by 13%. मनरेगा the lowest ever in 5 years reduced by 18%. कृषि विकास योजना reduced by 31%. कृषि नीति योजना reduced by 2% और प्राइस सपोर्ट और मार्केट इंटरवेंशन का 1500 करोड़ को काट के 1 करोड़ कर दिया और मार्केट इंटरवेंशन PM आशा को 1 करोड़ काट के 1 लाख कर दिया। तो सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने किसान, मजदूर और गरीब के साथ भद्दा मजाक किया है इस बजट में। हाँ, तो ये जरूर मैं जानना चाहूंगी कि अपने आप को इन्होंने फर्टिलाइजर सब्सिडी जो 22% इन्होंने घटा दी है, फूड सब्सिडी इन्होंने 37% घटा दी है, तो क्या डबल इनकम ऐसे होएगी, आत्मनिर्भर ऐसे होंगे? अच्छे दिन ये है कि लोगों को आज ये देखना पड़ रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर और मोबाइल सेक्टर से लोगों का पेट नहीं भरता है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज्यादा मजदूरी एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% लोगों की होती है और उनका तो सब बजट आपने काट दिया। यहाँ तक RBI की रिपोर्ट कहती है 2015 में जो खेती के मजदूरी के लिए 224 रुपए एवरेज मिलते थे, 7 साल बाद वो कल 323 रुपए, 100 रुपए का बढ़ोतरी हुई है 7 सालों में आपकी सरकार के समय में। सब जब खेती की बात करें, मैं अपनी राज्य पंजाब की बात जरूर करना चाहूंगी। पिछले 1960 से जब इस देश में पूरा अन्न नहीं था, तब से लेके आज तक इन सारे सालों में पंजाब ने अपना पानी खत्म किया, अपनी मेहनत और मजदूरी से इस देश का पेट भरने का काम किया। आज साडे पंजाब च वड्डी समस्या साडे किसानां दी, एक पासे अंदोलन करके साडे नाल धोखा, साडी MSP लागू नहीं की गई। हर पक्षों पंजाब दे बारे इस पूरे बजट च एक ना तक नहीं सीगा जेड़ा सूबा सब तो वध अन्न दिंदा है इस देश का ढिड भरन वास्ते, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, पिछले 60 साल को इंश्योर करते आया है। आज उस देश के किसान, उस सूबे के किसानां करके साडा पानी का लेवल इन्ना नीवा चला गया है कि जिहड़ी ग्राउंड वाटर रिपोर्ट कहती है अगले 6 सालों में पानी का पहला लेवल इन्ना घट जाऊगा कि पहले 100 मीटर तक कोई पानी नहीं रहूगा, तो 17 सालों में पंजाब बंजर हो जाऊगा, साडा पानी खत्म हो जाऊगा। इस तो होर जरूरी की चीज है कि जेड़ा सूबा सब तो वध अन्न पैदा करके पेट भरता है, जे ओदा पानी मुक गया तो फसल की उगूगी,
ते फसल नहीं ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 133 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, बल्कि इन्होंने तो आ किया सब वितकरा देखो। देश तरक्की कहां से करेगा जे राज्य तरक्की नहीं करेंगे। और आपका ये डबल इंजन वाला स्लोगन, जहां आपका इंजन डबल नहीं है वहां आप उनको ब्लैकमेल करते हैं, आर्म ट्विस्ट करते हैं, उनके हक होते हैं। एक रूरल डेवलपमेंट एक्ट है सर, जो एक्ट कहता है, आई गॉट 10 मिनट्स प्लीज गिव मी टाइम टू फिनिश। जो एक्ट कहता है दैट अ स्टेट इज अलाउड टू पुट टैक्सेस फॉर द रूरल डेवलपमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द एक्ट, द स्टेट इज अलाउड। सर पंजाब पुट 6% टैक्स, this government has withheld 3,000 crores of our RDF of Punjab because they say reduce the tax or we will not give you the RDF. This is blackmailing. How can you force us? It is our right. So against the federal structure, sir, I will appeal through you that my state is knee deep in debt due to the mismanagement of the last 7 years. Sir, Punjab में 60 सालों में जो डेट होता था 1.82 lakhs, वो 5 साल कांग्रेस की आई, उन्होंने सीधे 2.75 lakhs कर दिया। और ये जो खास पार्टी पंजाब में राज कर रही है, मैं उनको प्रचार पार्टी कहती हूँ। उनका सीएम भगवंत बेईमान, जो बड़े बड़े बातें करके बड़ी बड़ी गारंटियां करके, आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस ने 1 लाख करोड़ का कर्जा 5 साल में चढ़ा दिया और भगवंत बेईमान ने 1 साल में 40,000 करोड़ रुपए चढ़ा दिए। सो सर, थ्रू यू आई वुड अपील, you have reduced minority scholarship. We have the highest number of SCs in our state. Minority scholarship आपने उसको उठा के 38% की कटौती करती है। आज मैं आपसे बेनती ये करती हूँ, इस स्टेट को बचाने के लिए, फूड सिक्योरिटी बचाने के लिए 2 चीजें। एक तो हमारी GST की कॉम्पनसेशन जो अब खत्म हो रही है। Our state is a landlocked state. We have not been able to come up to the measures that we were supposed to. Please continue this GST, and if you cannot, फिर हमारी राजधानी चंडीगढ़ हमें वापस दीजिए। हर एक राज्य की राजधानी है जहां से सबसे ज्यादा फंड आते हैं। चंडीगढ़ was Please conclude. Why is the center taking the taxes? Give our राजधानी back to us. And secondly, sir, हमारे बॉर्डर के एरिया के लिए टैक्स फ्री स्टेटस दीजिए उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री को टैक्स फ्री करिए ताकि इंडस्ट्री बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आए और लोगों को रोजगार मिले। Thirdly, sir, MSP legal guarantee, which is what we have demanded, and sir, to ensure compensation to those states who for unique reasons have not been able to meet up to the GST. So I will request you that please ensure that these demands of mine are fulfilled in this budget. Through you, I appeal to the government. Thank you, sir. Thank you. Shri Guman Singh Damor. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अमृतकाल के अगले 25 वर्षों के राष्ट्र के विकास पथ का रेखांकन करते हुए वर्ष 2047 तक भारत को गरीबी से मुक्त कराने वाले इस बजट को उसकी आधारशिला मानता हूं। मैं हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक समावेशी बजट प्रस्तुत किया है। महोदय, आप जानते हैं कि ये जो हमारा बजट है, ये अमृतकाल का सप्तऋषि वाला बजट है, जिसकी 7 प्राथमिकताएं हैं। ये प्राथमिकताएं क्या है? ये प्राथमिकताएं हैं किसान, ग्रामीण जनसंख्या और जनजाति, महिला, सहकारिता और विश्वकर्मा, मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिक, MSME और व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और युवा। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा के दौरान मैं सुन रहा था, तो हमारे मित्रों ने उस अभिभाषण का खुलकर विरोध किया, हर बात का विरोध किया और शुरुआत क्या की कि हमारी यात्रा के दौरान हमको देखने को क्या मिला। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं मेरे मित्रों को कि आपको तकलीफ किससे है? आपको तकलीफ आदिवासियों से है, आपको तकलीफ विद्यार्थियों से है, आपको तकलीफ युवाओं से है, आपको तकलीफ किसानों से है, आपको तकलीफ विश्वकर्माओं से है, आपको तकलीफ हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से है। किससे आपको तकलीफ है? आपको परेशानी क्या है? तो मैंने मनन किया इस पर। पूरी बातें सुनने के बाद जो मैंने मनन किया वो ये निष्कर्ष निकला कि हमारे
विपक्ष के मित्रों को तकलीफ है। तकलीफ इस बात की है कि इस देश की राष्ट्रपति, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जो कि आदिवासी समाज की है, और आदिवासी समाज की हमारी राष्ट्रपति द्वारा जो बजट अभिभाषण पढ़ा गया उसको लेकर बहुत तकलीफ है। इन्होंने 50-60 साल तक आदिवासियों को नहीं देखा। इन्होंने 50-60 साल तक आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। हर तरफ से आदिवासियों को दबाया, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, हर क्षेत्र में आदिवासियों को दबाया। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जनजाति समाज, हमारा अनुसूचित जाति समाज, हमारा किसान, हमारा युवा सब दो तरफा विकास कर रहे हैं। ये हमारे विपक्ष के मित्रों को पसंद नहीं आया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि इस हमारे विपक्ष के मित्रों ने जो जनजाति समाज के हमारे जनजाति समाज के जो हमारे स्वतंत्रता वीर थे, सेनानी थे, उनको पूरी तरीके से भुला दिया। वो कौन थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, टंटिया भील, उत्तराखंड से नंदराम नेगी, केसरी चंद, बिहार से हमारे भगवान बिरसा मुंडा, नहीं झारखंड से भगवान बिरसा मुंडा, बिहार से तिलका मांझी, वीरांगना सिंह देई, ऐसे तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पर उनको कभी याद नहीं किया और उनके इतिहास के ऊपर और कचरा डाल दिया। ये है हमारे विपक्ष के मित्रों का। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हमारे जनजाति स्वतंत्रता संग्राम के जन नायक थे, आज उनका मान सम्मान किया है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 15 नवंबर 2021 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए और भोपाल में आकर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर गौरव दिवस घोषित करके पूरे देश के जनजाति समाज को गौरवान्वित महसूस किया है। ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये बातें हमारे विपक्ष के मित्रों को कैसे पसंद आएगी, जब हमारी जनजाति समाज आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़े हैं, इसलिए इनका पेट में दर्द हो रहा है कि इनका साथ छोड़ दिया और ये आज अनाथ जैसे हो गए। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके साथ कोई घूमने वाला नहीं है। ये स्थिति कर दी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, इसलिए इनको पेट में दर्द है और इसीलिए हमारी यशस्वी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का विरोध किया। यही कारण है कि आदिवासी समाज को देखना नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, बजट भाषण राष्ट्रपति महोदया द्वारा पढ़ा गया है और यह उनका सम्मान करना चाहिए था, इसलिए नहीं हमारे अभिभाषण की बात कर रहा हूं मैं। अभिभाषण करेक्ट योरसेल्फ। आई थिंक दैट इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आज लगभग 12 करोड़ जनजाति है। जनजाति की आबादी 12 करोड़ है। इस 12 करोड़ जनजाति की आज तक 50-60 साल तक अनदेखी होती रही और आज पहली बार मान सम्मान हो रहा है। तो इस मान सम्मान के कारण आपके पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? आपको क्या परेशानी है? आपको सम्मान करना चाहिए कि पहली बार पिछड़े कुचले वंचित लोगों को उनका अधिकार दिया जा रहा है, उनको समाज में बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, तो ये आपको सम्मान करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि राजस्थान का एक मानगढ़ धाम है जहां पर 1500 आदिवासियों को भून दिया गया था, परंतु इतिहास में उसका जिक्र नहीं हुआ। पहली बार 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री गए और माननीय प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि व्यक्त की उन 1500 जनजाति वीर नायकों की। तो ये मान सम्मान की बात है, ये गौरव जगाने की बात है। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों के लिए
हर प्रकार की योजना को लेकर आए हैं, गरीबों को आर्थिक रूप से सक्षम कर रहे हैं, शैक्षणिक रूप से सक्षम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है। मेरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के लगभग 95% आबादी को इसका लाभ मिला है। मैंने पूछा, मैं झाबुआ में गया, मैं अलीराजपुर में गया, मैं रतलाम में गया, मैंने वृद्ध महिलाओं को पूछा, हमारी बेटियों को पूछा, बहनों को पूछा कि ये आपको कौन दे रहा है। हर कोने से आवाज आए कि बाबा प्रधानमंत्री दे रहा है। बाबा हमारे यहाँ बड़ा मान सम्मानजनक शब्द है, बाबा प्रधानमंत्री दे रहा है। मैंने कहा बाबा कौन? तो मोदी जी दे रहे हैं। आज गांव गांव में, घर घर में मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और क्यों नहीं लेना चाहिए। मेरे क्षेत्र में लगभग सभी आवासहीनों को, भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। जो 2 करोड़ 79 लाख जो आवास घर बनाए गए हैं, उसका अधिक लाभ जनजाति समाज को मिला है, आदिवासी समाज को मिला है। आज आजादी के अमृत काल में पहली बार जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उन 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी मिशन चलाया गया है। और इन 75 समूहों के लिए भारत शासन द्वारा 15 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 75 जो जनजाति समूह है, इनके लिए 75 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और इस कार्य को जो पिछड़े हुए हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस 15,000 करोड़ से वहां सड़कें बनेगी, पीने का पानी की व्यवस्था होगी, वहां मोबाइल के टावर लगेंगे, वहां स्कूल बनेगी, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी। आज ये किसने सोचा? ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने सोचा है। हमारे क्षेत्र में उज्ज्वला गैस के अंतर्गत लगभग सभी परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। मेरा क्षेत्र वनवासी क्षेत्र है, जंगल वाला क्षेत्र है। वहां पर विद्युत एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। चंद्रशेखर आजाद का जो जन्मस्थली है, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली अलीराजपुर जिले में भाभरा नामक की जगह है। उस भाभरा विकास खंड में वन होने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था। पर मुझे ये कहते हुए खुशी है और गर्व भी है कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% घरों में विद्युतीकरण हो गया है। और आज हमारा आदिवासी भाई बल्ब की रोशनी में अपना जीवन यापन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे हर आदिवासी भाइयों को घर में शौचालय बने हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर ध्यान दिया गया है तो शिक्षा को लेकर दिया गया है। मेरे हर एक विकासखंड में, मेरे लोकसभा क्षेत्र के हर विकासखंड में एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल हैं और एक स्कूल में 490 बच्चे पढ़ते हैं। और इन बच्चों के साथ साथ इन बच्चों के लिए प्लीज हमारे 38,800 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती हो रही है। तो हमारे क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जनजातीय समाज के लिए दूसरा कार्यक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, 112 आकांक्षी जिले बनाए हैं और ये सभी आकांक्षी जिले जनजातीय जिले हैं। इन आकांक्षी जिलों में सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी। दूसरा जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, जल जीवन मिशन, घर घर से। मैं आपको अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूं, सभापति महोदय बताना चाहता हूं कि हमारी माताओं बहनों के सिर के बाल घिस गए थे पानी दूर से लाते लाते। आज उन माताओं बहनों के चेहरे पे चमक है, खुशी है, गौरव का भाव है, क्योंकि उनके घर में नल से पानी मिल रहा है। इस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में इस बजट में, जनजातीय क्षेत्र का इस बजट में हर प्रकार से विकास करने का प्रयास किया है। तो मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी को। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे रेल मंत्री जी का। हमारे रेल मंत्री जी ने हमारी इंदौर दाहोद रेलवे लाइन जो मेरे लोकसभा क्षेत्र से गुजरती है उसके लिए 440 करोड़ और दूसरे एक हमारी छोटा उदयपुर से धार वाली रेलवे लाइन के लिए 355 करोड़ का
बजट स्वीकृत किया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय नितिन गडकरी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे क्षेत्र से ग्रीन वे 8 लेन एक्सप्रेस वे का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, 100% कार्य पूर्ण कर दिया गया है। और जब भी चाहे मैं माननीय मंत्री जी को निमंत्रण देता हूं कि वो आकर उसका शुभारंभ करें। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो जनजाति समाज के विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। मध्य प्रदेश में जनजाति विकास के लिए एक और कानून आया है, वो है पैसा एक्ट, जो संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पैसा एक्ट लागू करने की घोषणा हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में की। अब उस पैसा एक्ट लागू होने से हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उसको अगर एक लाइन में कहूं तो वो जल, जमीन और जंगल के मालिक बने हैं। ये देश में पहला राज्य है मध्य प्रदेश जहां पर जनजाति समाज के लिए उनके घर पर राशन पहुंचाया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में जनजाति में जो सबसे बड़ी बीमारी है सिकल सेल, उसका 100% स्क्रीनिंग करके उनके इलाज का काम भी किया जा रहा है। हमारे इस बजट में 2047 में सिकल सेल के समाप्त करने की बात कही है, परंतु मध्य प्रदेश में यह काम शुरू हो गया है। और मैं तो आपसे आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि क्या ऐसे प्रधानमंत्री जो समाज के सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं, सभी वर्गों के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या उनको भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को भारत रत्न देना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात और कहता हूं, एक लास्ट लाइन कहता हूं, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे ही, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे ही, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हुकूमत तो हम ही चलाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। थैंक यू। श्री इम्तियाज जलील। यकीनन हुकूमत आप चलाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको सरकार के कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में शायद आपको भी पता नहीं होगा। सरकार बहुत अच्छे तरीके से जादू का खेल भी खेलती है, और कैसा जादू का खेल खेलती है आंकड़ों समेत बताऊंगा। एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से खींच के कैसा लेना, ये पूरे आंकड़े समेत बताऊंगा। इस वजह से बहुत ज्यादा विरोध करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 8 फरवरी यानी कि कल के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। पिछले 4 मई 2022 को 4.40 हमारा रेपो रेट था। 8 महीने के अंदर 6 मरतबा रेपो रेट बढ़ाया गया है और अब ये रेपो रेट हो गया है 6.50। अब हो सकता है इनमें से कोई खड़े रहेगा और कहेगा कि आरबीआई है, इसका हमारे से क्या लेना देना, बजट से क्या लेना देना। तो सुनिए गौर से, आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाता है तो किसी ने 20 साल के लिए होम लोन लिया है, यानी कि 240 महीने के लिए लोन लिया है, और रेपो रेट 2.25% से बढ़ गया है, तो 120 से 160 महीने का एडिशनल ईएमआई उसको भरना पड़ता है। किसी ने 25 साल के लिए यानी कि 300 महीने के लिए लोन लिया है, और अगर 2.25% से रेपो रेट बढ़ गया है तो उसे 199 महीने एडिशनल ईएमआई देना पड़ता है। आप कहेंगे कि हमारा इससे क्या लेना देना, यही तो जादू का खेल खेल रहे कि आपने इनकम टैक्स के अंदर रिबेट दिए, बहुत सारे लोगों को खुश किया और सैलरीड क्लास को कहा कि हम तुमको इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे, लेकिन अब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तुम्हारा ईएमआई चलता रहेगा, तुम्हारा लोन चलता रहेगा करके ये एक संदेश सरकार ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन के लोन के अंदर सरकार ने जो आंकड़ा दिया है स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए 1,12,899 करोड़, बहुत अच्छा बढ़िया सा फिगर है, जिसमें से 61% स्कूल एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा, और इन्हीं पैसों के अंदर से 14,500 पीएम श्री नाम के स्कूल्स बनाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जो बच्चे आज गांव के अंदर पढ़ रहे हैं, जो जिला परिषद के स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, मेरे अहम सिर्फ अकेले औरंगाबाद जिले के अंदर अभी सर्वे करवाया सरकार के जरिए 1600
राणे साहब, आप महाराष्ट्र से आते हैं, अकेले औरंगाबाद जिले के अंदर 1600 ऐसे स्कूल्स हैं जिनके सर के ऊपर बच्चों के क्लासरूम्स के अंदर पक्की छत नहीं है। टीन के शेड के नीचे ये 1600 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो किसानों के बच्चे हैं, वो गरीबों के बच्चे हैं, वो मजदूरों के बच्चे हैं। आप बनाइए नए स्कूल्स, लेकिन आपके पास 1 साल बचा हुआ है। यह अहद करिएगा, प्रधानमंत्री जी को कहिएगा कि पीएम श्री नहीं, उन पूरे स्कूल को हम पीएम महाश्री नाम देंगे। अगर 1 साल के अंदर ये 1600 औरंगाबाद जिले के स्कूल्स को अगर आप बदलते हैं तो हम भी कहेंगे। अगर 1 साल के बाद अगर ये कर पाते हैं तो इम्तियाज जलील यहां पर खड़े रहकर कहेगा, वाह मोदी जी वाह। दूसरी ये बात है अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटीज के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं। राणे साहब, हम तो फूल थे, तुमने हमें कांटा बना दिया और अब इसी कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे हम लड़ेंगे, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर जितना आपका इख्तियार है उतना इम्तियाज जलील का भी इख्तियार है। अगर आप हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। क्या वजह है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर हमको इस बात का जवाब दे कि कैसा 38%, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर 38% का बजट कम कर दिया गया है। 1913 करोड़ रुपया आप हमारे गायब कर देते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं अध्यक्ष महोदय, आप ये उम्मीद करते हैं कि हम खामोशी से इसको बर्दाश्त कर लेकर के। मैं आपको बताता हूं कि नीति आयोग की पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, द एक्शन एजेंडा एंड द स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट ने क्या कहा है। मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया हैव बीन लैगिंग इन सेवरल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल अटेनमेंट, जेंडर इक्वालिटी एंड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। इसके बावजूद भी आप 38% हमारा बजट कम कर देते हैं। 2022-23 के अंदर आपका टोटल बजट जो था उसके अंदर माइनॉरिटीज के हिस्से में कितना आया, तो 0.12%। इस बार जो बजट आपने दिए हैं वो कितना हुआ है, बी अगर देखा जाए तो 0.07%। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट। तो ये टोटल एलोकेशन अध्यक्ष महोदय, ये कितनी गंभीर बात है कि देश आगे बढ़ेगा, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए जो बजट दिया गया है 2012 और 13 के अंदर जो बजट था वो बजट इस बार दिया गया, यानी कि देश आगे बढ़ेगा और माइनॉरिटीज पीछे रह गए। ये कब तक चलेगा। मेरी दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, आम आदमी को प्लीज फाइंड अप नाउ अध्यक्ष महोदय एक मिनट, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, मॉनेटाइजेशन, आरई, बीई, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस देश के अंदर वो सम्मान के साथ कैसा जी सकता है उसकी फिक्र बस उसे यही रहती है। हम वित्त मंत्री से इस बजट के अंदर ये उम्मीद कर रहे थे कि वो ईपीएस 95 के बुजुर्ग पेंशनर्स के बारे में बोलेंगे, वो किसानों की आय कैसी बढ़ाई जाएगी इसके बारे में जिक्र करेंगे। पूरे देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, अध्यक्ष महोदय एक सेकंड, अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है उनके साथ कैसी नाइंसाफी हो रही। पार्लियामेंट के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लगाए जा रहे हैं, उनका पीएफ नहीं भरा जाता, उनका ईपीएफ नहीं भरा जाता, ईएसआईसी का पैसा नहीं भरा जाता है। मैं अध्यक्ष महोदय ये उम्मीद कर रहा था कि जाने से पहले इस देश को तंबाकू और शराब मुक्त करके जाएंगे। हम सराय होते आपको इसी बात के लिए अध्यक्ष महोदय। और हाँ, मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं नाम लूंगा, मैं अडानी का नाम इसलिए लूंगा कि एलआईसी में मेरा भी पैसा है, एसबीआई का मैं भी कस्टमर हूं। प्रधानमंत्री हर एक के बारे में बात करेंगे, 140 करोड़ जनता मेरे पीछे कैसा है ये बताएंगे, लेकिन अडानी का नाम नहीं लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस एक शख्स के चक्कर में 140 करोड़ जनता तुम्हारी हाथ से निकल जाए और आप लोग बस सड़क के ऊपर तालियां। श्रीमती रिटी पदक सभापति महोदय, ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे स्वतंत्र युग के मेरे स्वाभिमानी देश में संकल्प से सिद्धि का संकल्प लिए एक सक्षम नेतृत्व द्वारा, जिनका आधार वसुधैव कुटुंबकम हो एवं जिनका विश्वास सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर हो, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारी महिला सशक्तिकरण की परिचायक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट वर्ष 2023-24 पर अपने नेतृत्व एवं अपने दल के कारण मुझे
अपनी बात को आज इस सदन में रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय, हम देशवासियों के लिए इसे सुखद क्षण क्या हो सकता है जब 2019 की मोदी सरकार में वर्ष 2023-24 के बजट सत्र के प्रथम दिवस को संबोधित करने के लिए जनजातीय समाज की गौरव, हम बहनों की सशक्त हस्ताक्षर राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया हो। सभापति महोदय, ये खुशी तब और दुगनी हो जाती है जब हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे होते हैं। सभापति महोदय, इस बजट के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री सभापति महोदय, उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक हमारा देश स्वर्णिम काल में प्रवेश करके समृद्ध राष्ट्र के रूप में पुनः विश्व गुरु बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को स्थिर रख सके। 100 वर्षों में आए कोविड के संक्रमण काल के बाद जब विश्व के बड़े देशों की आर्थिक विकास दर घटकर कम हो रही थी, तब हमारे देश का आर्थिक विकास दर 7% हम सबके समक्ष दिखाई देता है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व के 10वें नंबर से हटकर 5वें नंबर पर पहुंचकर हम सबको गौरवान्वित करवाती है। आज कठिन वैश्विक चुनौतियों के बीच में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की G20 की अध्यक्षता विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत को सशक्त बनाने का एक बड़ा मौका है। महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, किसी देश व राज्य के सुव्यवस्थित संचालन व उत्थान के लिए वेदों में कहा गया है कि प्रजा को सुखी रखने की नीति बनाना व लागू करना ही राजा का धर्म है, व प्रजा के सुख में ही राजा का संतोष होना चाहिए। वैश्विक लोकप्रियता के शिखर पर विराजमान, जिन्होंने देश की देवतुल्य जनता का विश्वास जीता, ऐसे हमारे नेता व देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत काल वर्ष 2023-24 में सप्तऋषि बजट की जो परिकल्पना की है, उसका मूल उद्भव मूल धारा से जोड़कर वंचितों का उत्थान करना, युवाओं की क्षमता को देश निर्माण के लिए लगाकर भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाना, पूरे जीवन संघर्ष के बाद सम्मान व खुशहाल जीवन की चाह रखने वाले हमारे बुजुर्गों को निश्चिंतता के साथ जीने का अवसर देना और नारी शक्ति को सशक्त बनाकर देश को नया आयाम देने के यज्ञ में सहभागी बनाना है। सम्मानित सभापति महोदय, हमारे भारत देश की मूल पहचान गांवों और किसानों से है। हमारी सरकार के चरणबद्ध तरीकों से किसानों के पिछले 9 वर्षों में किए गए अभूतपूर्व काम आप सबके समक्ष है। उसी दिशा में सोच को आगे बढ़ाते हुए किसानों के लिए 1 करोड़ 25 लाख का जो बजट तय हुआ है इस बार के वित्तीय वर्ष में, वो पर्याप्त बजट के रूप में हम सबके समक्ष है। और हमारे सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए अपने इरादे हम सबके समक्ष दिखाए हैं। किसान भाइयों की मूल समस्या रबी व खरीफ की फसलों की जुताई बुवाई, खाद एवं सिंचाई की लागत रहती है, जिससे दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान बजट में हमारी सरकार ने कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। इससे पहले किसी अन्य सरकार ने किसानों के लिए इतने बड़े बजट की व्यवस्था कभी भी नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने किसानों के लिए पर्याप्त चिंता की है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई योजनाओं से में अपने सामर्थ्य को जोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है। इसका जीवंत उदाहरण है किसान सम्मान निधि, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी किसान भाइयों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है। उसमें 4,000 रुपए उन्होंने जोड़कर 10,000 रुपए प्रतिवर्ष करके किसानों का सम्मान बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदना के साथ किसानों की छोटी से छोटी आवश्यकताओं और पीड़ाओं को समझा है, वह दर्शाता है कि उनके मन में गांव, गरीब और किसान के लिए कितनी आत्मीयता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जैसे ये जो हमारी जो योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं, जिनके लिए हमारे इस बजट में एक बड़ी राशि आवंटित की गई है,
निश्चित रूप से ये उस बात का परिचायक है। सभापति महोदय, हमारी सरकार के ने इस समावेशी बजट में हर क्षेत्र में साथ साथ हर वर्ग के लोगों की चिंता की है। अगर हम बात करें तो दूरस्थ एवं वनांचल में रहने वाले वंचित आदिवासी जनजाति भाई बहनों की, तो इस बजट में उनके जीवन में उत्थान व सशक्तिकरण के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री आवास से सभी को मकान, जल जीवन मिशन से ऐसे सभी लोगों को शुद्ध पेयजल, एकलव्य विद्यालय से अधिक संसाधन युक्त बनाकर बच्चों को शिक्षा का अधिकार व उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए एनीमिया मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2047 तक लक्ष्य बनाकर सुव्यवस्थित खुशहाल जीवन को देने की कटिबद्धता, ये सब सरकार ने अपने इस बजट में दर्शाया है, जो हमारे देश के लिए बेहद गौरवजनक है। आदरणीय सभापति महोदय, एक लाइन में संस्कृत में लिखी हुई, इसको मैं पढ़ना चाहूंगी यहाँ पर। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। कि महिलाएं हमारे समाज की आदर्श शिल्पकार हैं। सभापति महोदय, नारी के सशक्तिकरण में ही समाज का सशक्तिकरण है। भारतीय संस्कृति में नारियों के सम्मान को ईश्वर की प्रसन्नता से जोड़कर परिभाषित किया गया है। मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस बजट के समर्थन में मैं बोल रही हूं, वो हमारे इस सदन की वरिष्ठ सांसद एवं हम सब की बड़ी बहन, हमारी देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही बनाया गया बजट है। यह अपने आप में नारी की सशक्तिकरण का अनुपम प्रस्तुतिकरण है। इसी के साथ में मैं यहाँ संबद्ध करना चाहती हूँ कि यह बजट और भी अधिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस बजट की सृजक एक भारतीय नारी है। भारतीय नारी तो हमेशा से बजट की निर्माता ही है। सामान्य से सामान्य परिवार में घर चलाने के लिए अर्थतंत्र की बागडोर महिला के ही हाथ में रहती है। वह जिस तरह से परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की खुशियों के साथ भविष्य की योजनाओं, परिवार की सुरक्षा, सीमित संसाधन के बीच में समन्वय बनाती है और परिवार को एक आदर्श परिवार बनाकर समाज में सम्मान दिलाती है, उसी तरह इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र संचालन परिकल्पना को हमारी निर्मला दीदी ने उकेरते हुए इस देश के लिए एक एक व्यक्ति व राष्ट्र के सम्मान को एकीकृत किया है। इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, आदरणीय सभापति महोदय, बजट में अपनी एक पूरी चिंता और सुनिश्चितता हम बहनों के लिए जताई है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा विषय रखना चाहूंगी कि जब मैं महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो निश्चित रूप से ये तुलना का विषय बनता है। जब मैं यूपीए सरकार के बारे में बात करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं साक्षरता दर पर आती हूँ कि जब 2015-16 में यूपीए सरकार में साक्षरता दर 68.4% था, तो आज के समय में जब हम इसका आकलन करते हैं, जो हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष बिंदु है, वो 71.5% पाया जाता है। आज जब बच्चों के जन्म की बात होती है, जब मैं एक गांव से संबंध रखती हूँ और मैं देखती हूँ कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं बनाए जाने के बाद भी उनके जो स्थायी रूप से उनको संचालन करने की जिम्मेदारी है, वो करीब करीब सभी पर निर्भर करती है। तो बच्चों के संस्थागत जन्म की जो जिम्मेदारी थी, यूपीए सरकार में उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना एक विषय और आंकड़े के रूप में प्रस्तुत किया है, वो 78.9% थी और अब हमारी सरकार में 88.6% हो गई है। आदरणीय सदस्य सभापति महोदय, एनडीए सरकार में वित्त मंत्रालय द्वारा वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए जो बजट आवंटन किया गया था, जो कि ये विशेष बिंदु है, मुझे इस बात को रखना अत्यंत आवश्यक है, वो 25,948.75 करोड़ रुपए था और आज हमारी सरकार में इस मंत्रालय के लिए 25,948.75 करोड़ आवंटित किया गया है। लेकिन तब यूपीए की सरकार में इस बजट को सिर्फ और सिर्फ 18,285.65 करोड़ रुपए इसको आवंटित किया गया था। और आप जानते हैं कि किसी भी विषय में इतने कम बजट को अलॉट करना इस बात का परिचायक होता है, इस बात को चिन्हित करता है कि हम उसके लिए कितने संवेदनशील हैं। आज आकांक्षी जिलों की अगर बात कहें
तो निश्चित रूप से मैं भी एक आकांक्षी जिलों से ही आती हूं, जिसमें 40,000 सक्षम आंगनबाड़ियों की पहचान कर ली गई है और 9.84 करोड़ रुपए लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर से जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मिशन शक्ति को 2022 में लॉन्च किया था। इससे बहनों के सशक्तिकरण को नया संबल और सामर्थ्य मिला है और ये योजना भी हमारी सरकार। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए सभापति महोदय। वाइंड अप जी। संबल और सामर्थ्य क्रमशः शामिल किया गया है। महिला ई हार्ट जो लॉन्च किया गया है, इससे हमारे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर जो सुनिश्चित किया गया इस बजट में, इस 2023-24 के बजट में, निश्चित रूप से इसमें हमारी बहनें सशक्त और संबल अपने आप को महसूस करती हैं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मैं थोड़े से अपने विषय को इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगी कि लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें 41 लाख से भी अधिक लाडलियां हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के उसमें योजना में उनकी सोच से ये योजना संचालित हुई है और 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसके लिए ये तीसरे स्थान पर इसको पुरस्कार भी मिला है और प्रधानमंत्री कोविड में हमारे अनाथ बच्चों को यहाँ पर इन योजनाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। गांव की बेटी जैसी योजनाएं और एक महत्वपूर्ण योजना के विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो अभी लॉन्च की गई है और इस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। महिला सशक्तिकरण के विषय में मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए। और लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में पहली बार इस तरह की योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 15 members are there to speak in your party. बस मैं अपनी बात को 5 से 7 मिनट में खत्म करूंगी। No, 2 minutes. Please conclude. सर 5 मिनट। 15 and more members are there in your party to speak in the budget. मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था, मुझे 5 मिनट का समय चाहिए जी। और ये पूरे देश में इस योजना को पहली बार बनाया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हर बहनों के खातों में 1,000 रुपए पर माह आएंगे और 12,000 रुपए साल के योजना से हमारी बहनों के सशक्तिकरण को कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को अपने एक छोटे से वृत्तांत के रूप में मैं कहना चाहूंगी कि हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से जनता के कामों के लिए हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और निश्चित रूप से मेरा कार्य जो मेरी योजना के तहत मेरे पंचायतों में भ्रमण के स्तर पर हमेशा चलता रहता है और हम सभी जनप्रतिनिधियों का चलता है। लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक विषय जो मैं यहाँ पर इस सदन में साझा करना चाहती हूँ वो ये था कि एक बार जब मैं क्षेत्र भ्रमण के लिए निकली और मैंने अपना कार्यक्रम खत्म किया और कार्यक्रम खत्म करने के बाद जब मैं अपने जनता से, कार्यकर्ताओं से, अपने भाइयों बहनों से मिल रही थी तो वहां पर एक महिला आई। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहूंगी कि जो ये बजट है उसका पूरा स्वरूप इस बात पर, इस विषय पर निर्भर करता है और उसने ये कहा कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूं और मैं मिलना चाहती हूँ। कार्यकर्ताओं ने उन्हें लेकर मेरे पास वो आए तो मैंने उनसे पूछा, आप बताइए आपका काम क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे पास काम कुछ नहीं है आपके लिए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको एक उपहार देने के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति इतनी दूर से दी है, क्योंकि ये मेरा गांव है लेकिन इस गांव के दूसरे कोने में मैं रहती हूँ। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उनके आंख में आंसू आ गया। मेरे कार्यकर्ताओं ने उनके बारे में जब मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि ये उस कठिनाई के दौर से गुजरी हुई महिला है जहां पर मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ने, सारी योजनाओं को उनके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया है। क्योंकि उनके परिवार में उनके पति को लग गया था और वो बेहद गंभीर बीमारी से ग्रस्त भी थे, 2 बच्चे थे, कच्चे मकान में रहती थी। लेकिन उसके बाद 15 minutes, please. मैंने 5 मिनट का समय मांगा है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बताया कि हमारे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिला। आयुष्मान कार्ड के तहत उनके पति का इलाज हुआ, 2 बच्चियां जो उनकी थी उनका उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन हुआ और आज वो शहर में रहकर उनको पढ़ा रही हैं। उनकी सासू माँ, उनको विधवा पेंशन से उनके जीवन यापन को एक बनाने का, आगे चलाने का स्तर बढ़ा। तो ये विषय इसलिए मैंने यहाँ पर कहा
कि हर एक व्यक्ति, हर एक जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर सांसद के रूप में बैठे हैं, वो किसी न किसी तरह से अपने केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब वो जाते हैं क्षेत्र में तो सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें उनके वोट बैंक पर प्रभावित करती हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ केंद्र सरकार के इस बजट को, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के इस बजट को, जिन्होंने एक बेहतर जीवन यापन के, और सिर्फ आज की नहीं, ये चुनावी बजट नहीं है, ये 2047 के 100 वर्षों का जो पूर्ण होने वाला जो समय काल है उसका बजट है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना बिना उन्नत यातायात साधन के संभव नहीं हो सकती। इस दिशा में हमारी सरकार ने 2014 से जब अब तक ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त किया है, वह वर्ष दर वर्ष कार्य लक्ष्य बनाकर सड़क, रेलवे, हवाई क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचाया है। इस वर्ष बजट के राजमार्ग के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 38% की वृद्धि करते हुए 2,58,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी तरह रेलवे के बजट में 75% की वृद्धि करते हुए 2023-24 के बजट में 2,40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए 700 करोड़ और दोहरीकरण के लिए 400 करोड़ आवंटित किया गया है मेरे क्षेत्र के विकास हेतु। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को बस अब समाप्त करने ही जा रही हूं, लेकिन मैं इस बात को यहाँ पर रखने से अपने स्वयं को नहीं रोक सकती। मैं गौरवान्वित हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय व माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करती हूं कि भारत देश की सबसे चौड़ी और देश के हृदय स्थल मेरे प्रदेश की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग NH-39 राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेरे संसदीय क्षेत्र की सीधी जिले व पड़ोस के संसदीय क्षेत्र रीवा के बीच बनाई गई है। मोनिया घाटी पर अवस्थित यह टनल 2300 मीटर लंबी है और 6 लेन की टनल है। 1000 करोड़ की लागत से तैयार की गई ये टनल वर्ष 2022 में जनता को समर्पित की गई है। मैं अपने सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ सभापति महोदय, और मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस मैं अपने समापन पर आ गई हूँ, अंतिम पेज है। सभापति महोदय, अब मैं अपने वक्तव्य के अंतिम चरण में पहुंचती हूं। Please conclude. Already you took 18 minutes and more. सारे पेज मैंने 15 निकाल के members are नीचे there रख in दिए your हैं, party सर। to speak. Just I'm Please conclude. concluding Please now. conclude. Otherwise, I will be confined to call other member. समेकित रूप में कहें तो अमृतकाल वर्ष 2023-24 के इस सप्तऋषि बजट में उदार हृदय से सभी वर्गों व सभी क्षेत्रों की सभी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु बजट की झलक भी है। तो मां भारती के रक्षा में तटस्थ वीर की तरह देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली आवश्यक गतिविधियों को पूर्ण करने वाली पराक्रमी बजट की झलक भी है। सभापति महोदय, इस बजट में जनता के लिए मां के वात्सल्य की आहट भी है, तो राष्ट्र निर्माण के पिता के कर्तव्य बोध का अनुशासन भी है। सभापति महोदय, यह बजट युवाओं के भविष्य का बजट है। यह बजट बुजुर्गों की आशाओं का बजट है। यह बजट महिलाओं के अस्तित्व की स्वीकार्यता का बजट है। यह बजट किसानों के चेहरे पर मुस्कान की सुनिश्चितता का बजट है। यह बजट वंचितों के जीवन की महत्ता पहचानने का बजट है। सभापति महोदय, यह बजट भारत के विकसित राष्ट्र को बनाने की दिशा में नींव का पत्थर है, जिसके आधार पर विकसित राष्ट्र की संरचना आकार ले रही है। बहुत बहुत श्री शफीक उर रहमान बर्क। शफीक उर रहमान बर्क। देखिए, मैं इस शेर के साथ अपना बजट शुरू करता हूं कि हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। हाँ, तो ये जनरल बजट जो 2023 और 24 का पेश किया गया है, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि खास तौर से मुसलमानों के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया,
कोई बात नहीं कही गई। मुसलमान भी इसी देश के रहने वाले हैं। मुसलमानों ने भी इस देश को छुड़ाने में अंग्रेजों से किसी से कम कुर्बानी नहीं दी है। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूं कि मरकजी हुकूमत ने अक़लियतों के लिए मजमूई तौर पर 38% से ज्यादा कमी कर दी है, 38% से। दूसरी तरफ मेरिट स्कॉलरशिप में भी 87% तक कमी कर दी गई है, जिससे मुल्क के मुसलमानों पर खास तौर पर गहरा असर पड़ा है। लिहाजा प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास बेअसर साबित हुआ। हाँ, गलत साबित हुआ। जबकि अक़लियती उमूर की मरकजी हुकूमत ने माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप स्कीम के अलावा तालीम के हक का हवाला देते हुए 8वीं क्लास तक स्कॉलरशिप को बंद करने का ऐलान किया था। इस पर मुस्लिम दानिशवरों ने अपनी राय का इजहार किया, अफसोस जाहिर किया इस पर मुस्लिम दानिशवर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन इस बार हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के मुकाबले सन 23-24 के लिए अक़लियती उमूर की वजारत के लिए बजट की रकम को 38% कम कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं और इसको 3097 करोड़ कर दिया गया, जबकि गुज़श्ता माली साल में अक़लियती उमूर की वजारत को 5020 करोड़ रुपया फंड दिया गया था। लेकिन नजर सानी करने के बाद इस साल 2612 करोड़ कर दिया गया, यानी अक़लियतों के लिए बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों के लिए फंड में इजाफा करने की बजाय बेहद कमी कर दी गई है। मुझे अफसोस है, अफसोस के साथ ये जाहिर करना पड़ रहा है कि ये देश हमारा भी है, मुसलमानों का भी है। मुसलमानों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी है और देंगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई वक्त आया तो मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इन हालात में मुसलमानों को इग्नोर करना और उसका कोई जिक्र नहीं करना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इससे नफरत झलकती है। नफरत की पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी झलकती है इस बात से कि मुसलमानों को खास तौर से नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पर हम इस देश में रहने के बाद में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। खुदा हाफिज़। थैंक यू। श्री गुरजीत सिंह अजुला। थैंक यू जी, थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर साहब, आपने बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। जब सीतारमण जी मान जो बजट पेश कर रहे थे तो एक जादुई आंकड़े थे जो देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, जब धरातल पे उतरेंगे तो उनका कोई असर और तरह का रहता है। क्योंकि जब बजट पेश होना है तो सबसे ज्यादा हमारा ध्यान जो नौजवान पीढ़ी है जिसने देश को आगे लेके जाना है उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कल जब प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे थे तो उनका तो बड़ा दिल होना चाहिए। बड़ी बात, बड़ा दिल, इससे ज्यादा तो कोई उपाधि नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर रहते हैं। तो मैं उनके ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। एक शेर है, दिल बदला हवा बदली निजामे जिंदगी बदला। दिल भी बदल गया प्राइम मिनिस्टर साहब। हवा गुजरात से दिल्ली आ गई, दिल्ली से अमेरिका चले गई। निजामे जिंदगी बदला। 12-12 लाख का सूट, 800 करोड़ का जहाज पे सफर कर रहे हैं। सुकून मिलता जहां दिल को न तक न वो मुकाम आया। अब इसके आगे आप क्या चाहिए आपको? आपने कहा कल के हमें विपक्ष जो है वो गाली देता है। प्राइम मिनिस्टर साहब, विपक्ष नहीं, आपको कोई आदमी भी गाली नहीं दे सकता। आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई आदमी हिम्मत नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट बोलने की। आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आलोचना तो सुननी पड़ेगी।
इस हाउस में आप आलोचना भी नहीं सुनेंगे तो उसको गाली का नाम देंगे, ये हमें बहुत बुरा लगा है प्राइम मिनिस्टर साहब। ये हम आपको शादी देते हैं कि कोई आदमी आपकी तरफ गाली नहीं निकाल सकता इस देश में। सो मेरा कहने का है, ये बजट को अमृत बजट का नाम दिया गया और मैं बहुत ज्यादा जो ध्यान है आपका नौजवान पीढ़ी की तरफ ले जाना चाहता हूं। अमृत पीढ़ी का एक नाम दिया गया उनको कि अमृत पीढ़ी, आगे अमृत पीढ़ी शुरू होगी। अमृत पीढ़ी जिसमें बेरोजगारी की दर जो है वो बताई गई है 18-19 और 20-21 का। 18-19 में 5% 8% थी और 20-21 में 4.2% थी। लेकिन जो CMI सेंटर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया है उसके मुताबिक 21-22 की जो बेरोजगारी दर है 7.1% है। और ये मान के चलिए कि ये सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार है। वो बेरोजगार नौजवान को का शोषण हो रहा है। जब पेपर दिए जाते हैं कहीं पेपर लीक हो रहा है, ये 1,000 पोस्ट निकलती है तो 10-10 लाख लोग उसको अप्लाई करते हैं। 50-50 लाख राजस्थान हो, बिहार हो, कहीं भी हो, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं देश की बात कर रहा हूं। लेकिन जॉब तो मिलनी दूर की बात है, कहीं मिल भी जाती है तो उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है। तो कम से कम आप स्टेट की बात मत कीजिए, आप यूनियन गवर्नमेंट हैं, आप कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि ये बात देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ ना हो। अब देश का नौजवान सुबह से लेकर दोपहर तक वर्जिश करता था, एक उसका ध्यान था कि आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, अब वो भी प्राइवेट हो रही है, अग्निवीर बन रहे हैं। अब अग्निवीर को शिक्षित कर आप, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। जब वो हमारे समाज में आएंगे तो बहुत कुरीतियां हमारे समाज में, हम लोग सब नीचे से आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके साथ साथ जो नौजवान वर्ग है उसको सही तरीके का आईना दिखाइए कि ये इस देश की स्थिति है। आप पेंट चाहे जितना मर्जी कर ले, लेकिन जो नींव कमजोर होगी तो वो ऊपर अच्छा मकान नहीं बन सकता, ये हमारा मानना है। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना में आपने कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स और सॉफ्टवेयर की बात की है कि इसमें जो नौजवान है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल सेंटर बनेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2015 में स्किल इंडिया बना था, जिसकी अब तक कितने लोग उसमें कामयाब हुए, कितने। लेकिन पहले सेंटर का हमारे स्वर्गीय जेटली जी ने बजट पेश किया था, 100 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे। लेकिन पहले सेंटर का उद्घाटन कब हुआ है? 16 अप्रैल 2022 को धर्मेंद्र प्रधान जी भुवनेश्वर में करके आए। सर ये जो नौजवान जिसकी आप बात सेशन में यहां बजट सेशन में करते हैं, जब पार्लियामेंट में करते हैं कि हम इतना दिशा दिखा रहे हैं, फ्यूचर ये इंडिया का बनेगा। 2022 से लेकर 2027 की बात करते हैं कि ये 2022 से लेकर 2027 का अमृतकाल चलेगा। लेकिन ये अमृतकाल कैसे चलेगा? पहला स्किल सेंटर आपका 6 साल में एक बनता है। अब उनको बोल दिया गया है कि अब आगे भी स्किल सेंटर जो है वो और बनाएंगे। सर इससे क्या हो रहा है? ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 11 लाख स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है। आपका जो बजट है स्टडी का 2.4 लाख करोड़ आपका बच्चे जो है वो बाहर फीस से पढ़ते हैं, बाहर जा रहे हैं। जिसमें पंजाब में भी करीब 35,000 करोड़ बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। 35,000 करोड़ जो रुपए हैं वो फीस के एवज में बाहर जा रहे हैं। सर वो बाहर ही नहीं जा रहे, वो पीढ़ियां बाहर सेटल हो जाएंगी। जब वो पीढ़ी बाहर सेटल हो जाएगी तो आप बताइए कि जो अच्छा ब्रेन है वो तो बाहर चला गया, तो आप कैसे करें? उनको रोकना होगा हमें। अब पंजाब की मैं बात करता हूं सर। पंजाब जो गुरुओं की धरती के नाम से जाना जाता है, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब ने डाला है। इनकी जरूरत पड़ी तब देश की आजादी से पहले 80% कुर्बानियां जो रस्से गलों में डाले वो पंजाब के लोगों ने फांसी पे हंस के चढ़े। लेकिन पंजाब के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा 3 लाख करोड़ का हो गया सर। अभी हमारे अकाली दल के सांसद बोल के गए हैं। लेकिन सर मैं कहना चाहता हूं पंजाब के ऊपर जो कर्ज है वो हमारे लिए खतरा है। आप पंजाब का कर्ज उतारिए, नहीं तो जो हमारा नौजवान बॉर्डर के ऊपर लड़ता है, प्लीज कंक्लूड। जो बॉर्डर के ऊपर नौजवान लड़ता है वो आप कहां से लेके आएंगे? क्योंकि हमारे नौजवान बाहर को जा रहे हैं। सर उसके आगे मैं कहना चाहता हूं पंजाब में बेरोजगारी की दर
बढ़ रही है, ड्रग्स की बड़ी समस्या है, उसके ऊपर कोई नहीं बोला गया। इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो, सारे देश में इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन पंजाब में कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ रही। आपने SEZ हिमाचल में दे दिया है, SEZ जम्मू में दे दिया, हमारी जो इंडस्ट्री वो भी वहां चले गई है। पंजाब को SEZ की कोई जरूरत नहीं है क्या? बॉर्डर एरिया है, हमारे और बड़े मुश्किलात है सर, वहां ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम सेटल करना है, उसके लिए आप प्लीज कंक्लूड सर, प्लीज। सम मोर मेंबर्स हैव टू स्पीक इन योर सर, पार्टी। बंदी सिंहों का मसला है, जो लोग सजा पूरी कर चुके संविधान के तहत, अब ये तो मानेंगे ना कि उनको तो छोड़ना होगा, लेकिन उनको अब नहीं छोड़ रहे। सर, दविंदर सिंह पुल्लर सर प्लीज, उसकी सेहत खराब है, ऐसे लोगों को तो छोड़िए सर। उसके अलावा काम क्या हो रहा है? बाबा राम रहीम को छोड़ा जा रहा है सर, वो लोग जिसके ऊपर रेप के अंदर बंद। सर प्लीज सर, टाइम दीजिए सर, जरूरी है सर, 5.5 घंटे के बाद पहला स्पीकर है सर, टाइम दीजिए सर। उसको छोड़ा जा रहा है सर, उससे हमारे माहौल खराब हो रहे हैं, इनके लोग जाकर उनको नतमस्तक हो रहे हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े ब्लेम है सर। सर, मैं अमृतसर की बात कर रहा हूं सर, एम्स में सर, उससे क्या उसमें हमारी आर्मी लगती है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, हमारे पैसे यूज होते हैं, वो भी हमारे बजट का ही सिस्टम है सर। बॉर्डर एरिया है, एम चाहिए, दरिया पार एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ना अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, पठानकोट, गुरदासपुर तक सर एम्स हॉस्पिटल चाहिए। स्पोर्ट्स सेंटर, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्समैन अमृतसर से पैदा हुए हैं सर। सर, एयरपोर्ट, कनाडा की फ्लाइट मांगते हुए हमें कितना समय हो गया है, तो टोरंटो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो, लेकिन वो भी नहीं सर, ये बातें तो होनी चाहिए सर। ये स्मार्ट सिटी चाहिए सर। सर प्लीज सर, G20 हो गया, पैसा भी नहीं है सर उसके लिए दिया गया स्मार्ट सिटी के लिए सर। रेलवे का आपने अपने रखा है, रीगो ब्रिज है, रीगो ब्रिज बनने वाला सर, उसकी ट्रैफिक की समस्या सारी, बहुत परेशानी है हमारे अमृतसर को, उसका भी नहीं कुछ हो रहा सर। हमारा कहना, हमारी बेनती इतनी है, अमृतसर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब से ज्यादा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, इसको एक अच्छा SEZ दीजिए, जो कर्ज है वो हमारा माफ कीजिए, चंडीगढ़ पंजाब को दीजिए, पानी के हमारे मसले हल कर दीजिए, पंजाब हमेशा देश के साथ खड़ा है। सुब्रायन, விநாச காலத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள் எவ்வாறு விபரீத புத்திக்கு உள்ளாவார்களோ அதுபோல ஆட்சியாளர்களான பாஜகவினரின் நடவடிக்கைகள் அமைந்திருக்கின்றன. நேற்று கூட ஜனாதிபதி உரைக்கு நன்றி தெரிவித்து பேசுகிற போது பிரதமர் பேசிய பேச்சிலிருந்து உணர முடிந்தது, எதிர்க்கட்சிகளால் எதுவும் செய்ய முடியாத அளவிற்கு மக்கள் என்னை கேடயம் போல் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், காப்பாற்றுகிறார்கள் என்று சொன்னார். மாரிச மானை பார்த்து சீதை ஏமாந்தது போல பாஜகவினுடைய ஜிகுனா வேலைகளில் ஏமாந்து போன மக்கள் விழிப்படைய தொடங்கி இருக்கிறார்கள். எனவே மிக விரைவில் பாஜகவுக்கு தண்டனை தீர்ப்பு வரும் என்பதை நான் தொடக்கத்திலே தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். அதே போல இந்த 8 ஆண்டு கால பாஜக ஆட்சியினுடைய நடவடிக்கைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் 2014ஆம் ஆண்டு முதல் பட்ஜெட்டை அன்றைய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி அவர்கள் சமர்ப்பித்து சொன்ன வார்த்தையை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அன்றைக்கு சமர்ப்பித்துவிட்டு அருண் ஜேட்லி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள், எங்களின் கொள்கை அந்நிய நேரடி முதலீடு இந்தியாவில் வந்து இடையூறு இல்லாமல் இசைவாக இயங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்வதுதான் என்று குறிப்பிட்டார்கள். FDIயும் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளும் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் இந்தியாவில் தொழில் செய்யவும் பிற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடவும் இசைவான சூழலை உருவாக்குவது பிஜேபியின் கொள்கை. அதுதான் இந்த 8 ஆண்டுகளில் நடந்திருக்கின்றன. 44 சட்டங்களில் வழங்கப்பட்டிருந்த சில்லறை சலுகைகளை கூட இந்த 8 ஆண்டு கால ஆட்சி பறித்து 4 சட்ட தொகுப்புகளாக குறிப்பியது. அதே போல இன்றைக்கு கிராமப்புறங்கள் செத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த 8 ஆண்டு கால நடவடிக்கையை நீங்கள் பார்த்தால் கிராமங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் நகரங்களை நோக்கி குடிபெயர்ந்து வருகிறார்கள். இது எதை காட்டுகிறது? நகர வளர்ச்சி என்பது கிராமங்கள் செத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது. அதை இந்த அரசு புரியவில்லை, புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
8 ஆண்டு காலம் இந்தியாவில் கிராமங்கள் சாகடிக்க காரணமே இந்த அரசு கடைபிடிக்கிற மோசமான பொருளாதார கொள்கைகளும் விவசாயிகளுக்கு எதிரான கொள்கைகளும் தான் என்பதை நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன். அதேபோல் எம்எஸ்எம்இஸ் ஜவுளி இண்டஸ்ட்ரி தான் விவசாய தொழிலுக்கு அடுத்து வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிற தொழில். அந்த எம்எஸ்எம்இஸ் இந்தியாவில் 92% வேலை வாய்ப்பை வழங்குகிறது. அந்த எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு ஏன் ஜிஎஸ்டி வரியை விலக்களிக்க கூடாது? 92% வேலை வாய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலுக்கு मान्य सदस्य प्लीज अभी ஒரு தொழிலுக்கு मान्य सदस्यगण 6 बज रहे हैं। यदि सदन की सहमति हो तो 2 घंटे का समय बढ़ा दिया जाए। ठीक है जी प्लीज। 8 बजे अभी 2 घंटे बाद में देखेंगे जी। चलिए चलिए। எம்எஸ்எம்இ என்பது 92% வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறது என்பது நிதியமைச்சருக்கு தெரியாத ஒன்று அல்ல. அத்தகைய வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிற அந்த தொழிலுக்கு ஜிஎஸ்டி வரியை முற்றாக விலக்களிக்க வேண்டும் என்று நான் வற்புறுத்துகிறேன். நான் இருக்கக்கூடிய எங்கள் தொகுதியான திருப்பூரும் சரி, கோவையும் சரி, பம்ப்செட் கம்பெனிகளும் பனியன் கம்பெனிகளும் நிறைந்துள்ள ஒரு பகுதி. லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறது. எனவே இவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதேபோல் சமீப ஓராண்டுகளுக்கு முன்னர் 10% கார்ப்பரேட் டாக்ஸை குறைத்தது அரசு. இந்த அரசு யாருடைய அரசு என்பதை காட்டுவதற்கு தான் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு 10% வரியை குறைத்தது. நான் வலியுறுத்துகிறேன், கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு 70% வரி போட வேண்டும், சூப்பர் டாக்ஸ் போட வேண்டும். நான் சொல்லவில்லை, நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார மேதை முன்வைக்கிறார். 70% வரி போட்டால் இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு வரி போட வேண்டியதில்லை. அதை செய்ய வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறேன். இந்த அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஒன்றை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். எம்பிக்களுக்கு வழங்கப்படுகிற எம்பி லாட் 5 கோடி, அதற்கு 18% ஜிஎஸ்டி. 4 கோடியே 10 லட்சம் தான் எம்பிக்களுக்கு வரும். அதுவும் 2 வருஷம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டது. அந்த நிதியும் வழங்கப்படவில்லை. இது 5 கோடி என்று அறிவித்துவிட்டு அரசு பணத்தை, மக்கள் அரசுக்கு கொடுக்கிற பணத்தை மக்களுக்கு செலவழிப்பதற்காக மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு கொடுக்கிற பணத்துக்கு 18% வரி விதிப்பா? ஏன் இதை ரத்து செய்யக்கூடாது? இதையும் வலியுறுத்துகிறேன். அதேபோல் இந்த ஆட்சியில் கண்ட ஒரே ஒரு பலன், வறுமைக்கு ஆட்பட்டவர்கள் மேலும் வறுமைக்கு ஆட்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். கொழுத்து பணம் சேர்க்கக்கூடிய கார்ப்பரேட் கம்பெனிகள் கொழுத்து கொண்டே இருக்கின்றன. ஆனால் ஏழைகள் மேலும் மேலும் ஏழையாகிறார்கள். இந்த இடைவெளியை நீக்க எந்த நடவடிக்கையும் இந்த பட்ஜெட்டில் வழங்கப்படவில்லை. அதேபோல் within 2 minutes I will conclude. அதேபோல் 33% மனரேகாவுக்கு வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஏழைகளுக்காகத்தான் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிற ஆட்சியாளர்கள் ஏழைகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளித்த மனரேகாவில் 200 நாள் வேலை வாய்ப்பு அளித்து அவர்களுக்கு சம்பளத்தை 400 ஆக்கி இருந்தால் உண்மையிலேயே இவர்களுக்கு ஏழையின் மீது கருணை உண்டு என்று சொல்லலாம். ஆனால் அதில் within a minute I will conclude, sir. Please allow me. நிறைவாக ஒன்றை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். இந்த அரசினுடைய ஒரு முறை என்னவாக இருக்கிறது? பிரதமருடைய நிதி ஆலோசகர் தெரிவித்திருக்கிறார், 10,000 அம்பானிகள் 20,000 அதானிகள் இருந்தால் மட்டுமே இந்தியா வளரும். யார் சொன்னது? பிரதமருடைய பொருளாதார ஆலோசகர். இத்தகைய சிந்தனை கொண்டவர்கள் தான் இந்தியாவை இயக்குகிறார்கள் என்றால், இந்தியாவை ஒருவேளை ஆண்டவன் உண்மையில் இருந்தால் அவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாது. அந்த அளவுக்கு இந்த நிலைமைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. थैंक यू जी।
संध्या राय जी बोलिए, आप प्रारंभ कीजिए। माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री द्वारा 2023-24 बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। संकल्प से सिद्धि तक जनप्रिय बजट सभी वर्गों को, प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, जनप्रिय बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में अंत्योदयों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। देश में स्वतंत्रता के बाद विपक्ष ने हमेशा अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ छलावा करती रही, लेकिन कभी भी अंतिम छोर के व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब माननीय अटल जी की सरकार बनी और अभी 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को जोड़ते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने बजट में सभी वर्गों के कल्याण की दिशा में SC/ST वर्गों, OBC व अन्य वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। हमारी सरकार ने लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने SC/ST वर्गों को स्थायी समाधान मिले और उनके स्थायी सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली सरकार के तौर पर काम किया है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी अनुसूचित वर्ग की, ST वर्ग की महिलाओं, ग्रामीण बहनों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए 81 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का काम किया है। एक एक बहन के नीचे टीम 10-10, 11-11 बहनों की टीम रहती है, तो ऐसी हमारी कई बहनों को रोजगार के अवसर मिले हैं, वो अपने परिवारों का पालन पोषण कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय देने का काम, जिसे हम इज्जत घर भी कहते हैं, आज तक लगातार स्वतंत्रता के बाद विपक्ष रहा, लेकिन कभी भी हमारी SC वर्ग की बहनों की चिंता, अन्य हमारे अंत्योदय जो हमारे अन्य वर्ग हैं, लगातार जब मैं सबसे पहले विधायक बनी थी तो मैंने देखा था, ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आई थी, हमारी माताएं बहनें रोडों पर, खेतों पर लोटा लेकर जाती थी, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात की अगर चिंता की तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने की, और आज हमारी अनुसूचित वर्ग की बहनों के हर घरों में शौचालय है, इज्जत घर है, जिससे हमारी सरकार ने बहनों का आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया, उनका गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे जो अनुसूचित वर्ग के घर हुआ करते थे, कच्ची मट्टी के घर हुआ करते थे, छान डली रहती थी, छत पर सिर पर पक्की छत भी नहीं होती थी, ऐसे हमारे अनुसूचित वर्ग के लोगों को घर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री आवास के तहत हमारे गरीब वर्ग को माननीय मोदी जी के माध्यम से ऐसे 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। नल जल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है, जिससे आज हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो कई ऐसे परिवार, कई ऐसे घर हैं जहां दूर से हमारी मातृशक्ति सिर पर 1-1, 2-2 घड़े रखकर दूर दूर तक अपने घरों के लिए पानी ले जाया करती थी। आज उन सब से उनको निजात मिलेगी और आज प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने किया है। उज्ज्वला योजना के अंदर 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज तक लगातार विपक्ष सरकार में रहा, लेकिन कभी भी हमारी अनुसूचित वर्ग की, SC वर्ग की, हमारे गरीब जो वर्ग है उनकी कभी चिंता नहीं की, लेकिन माननीय मोदी जी के माध्यम से सबसे ज्यादा इसमें लाभ हमारे अनुसूचित वर्ग को हुआ है। आज हमारे अनुसूचित वर्ग के घरों में जो माताएं बहनें कभी धुएं से, लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाया करती थी, आंखें से दिखाई देना कम हो जाता था, आज उन बहनों के बीच में हर्ष है। प्रत्येक घर में आज उज्ज्वला के माध्यम से गैस पर वो खाना बनाने का काम कर रही है। बहनों को धुएं से छुटकारा मिला है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत जब कोविड के समय हमारे अनुसूचित वर्ग के तमाम सारे भाई बहन जो अन्य प्रदेशों में काम करते थे, मजदूर वर्ग, जब कोविड के समय वो वापस घर आए तो उनका रोजगार ठप हो गया था। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महती योजना
स्वनिधि योजना से हमारे SC ST वर्गों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस योजना से, स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारे पूरे देश में अनुसूचित वर्ग के लोगों ने अपना छोटा छोटा व्यापार लगाकर अपना जीवन यापन करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कोविड के समय वैक्सीन देने का काम मुफ्त में हुआ, नहीं तो हमारा जो अनुसूचित वर्ग है वो पैसे देकर शायद वैक्सीन नहीं लगवा पाता। हमारा जो गरीब वर्ग है, अंत्योदय के लिए लगातार हमारी सरकार ने काम किया, उन्हें फ्री वैक्सीन देने का काम किया। जीरो बैलेंस पर हमारी माताओं बहनों का खाता खोलने का काम, जब खाता खोल रहे थे तब विपक्ष ने मजाक उड़ाया था, विपक्ष हंसा था कि ये क्यों खुलवाए जा रहे हैं। लेकिन आज इस योजना से हमारी लाखों बहनों के खाते में सीधा कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 500 के हिसाब से 3 किस्तों के माध्यम से 1500 रुपए हमारी बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया, तो जब हम उन बहनों से मिलते थे तो उनके लिए ये 1500 रुपए बड़े महत्वपूर्ण थे, जिससे कि वो अपना घर का खर्च चला सकती थी। कोविड के समय प्रत्येक 1500 रुपए के हिसाब से उनके खाते में पहुंचाने का काम सीधे बहनों के खाते में किया माननीय मोदी जी की सरकार ने। PM आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत हमारे इस योजना से कई हमारे जो SC ST के वर्ग हैं, OBC के हैं, सामान्य वर्ग में हमारे गरीब परिवार हैं, वो इस योजना से काफी लाभ ले रहे हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। और उसके बाद भी मेरे क्षेत्र में मैंने कम से कम 200 परिवारों को प्रधानमंत्री सहायता राशि के तहत इसका भी लाभ मिला। उसके बाद माननीय मोदी जी के माध्यम से उनको सीधे सीधे किसी को 3.5, किसी को 4, किसी को 2, उनके बीमारी के हिसाब से उनको पैसे देने का काम माननीय मोदी जी ने लगातार किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में हमारे माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, हम जिस प्रदेश से आते हैं, कुछ समय पहले हमारी जो गरीब परिवार हुआ करते थे, कहीं ना कहीं बेटी जब होती थी तो उसको बोझ लगती थी, लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना से आज हमारी बेटियों का जो रेशो बढ़ा है, इस योजना का बड़ा लाभ हमारे गरीब वर्ग को मिल रहा है। सभापति महोदय जी, मैं अपनी बात 2-3 मिनट में पूरी कर लूंगी, मुझे थोड़ा बोलने का अवसर दीजिए। कन्यादान विवाह योजना, जिससे हमारी अनुसूचित वर्ग की बेटियों को इस योजना से 51,000 उनके सीधे चेक मिलता है और दहेज का छोटा मोटा सामान उनको लेकर विदा हमारी प्रदेश की सरकार करती है। जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना को जोड़कर 16,000 हमारी प्रसव के समय जो बहनें रहती हैं उनको 16,000 देने का काम हमारी दोनों सरकारें लगातार कर रही हैं। MSME के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, SC ST के जो हमारे युवा भाई बहन हैं, बड़े क्षेत्र में उद्यमी बनाने का अवसर माननीय हमारे मोदी जी की सरकार ने उन्हें दिया है। SC की 8.92 लाख और ST की 2.85 लाख, टोटल 11.77 लाख लोगों को अपने रोजगार को बढ़ाने का अवसर हमारी सरकार ने दिया। ये बहुत बड़ी संख्या है, जो आगे चलकर बड़े उद्यमी बनकर अपने परिवार को चलाने का काम करेंगे और अभी उनका छोटा उद्योग है, आगे चलकर वो उद्योग बड़ा भी बनेगा। एक राष्ट्रीय केंद्र की योजना है SC ST हब, जो सिर्फ अनुसूचित वर्ग और ST वर्ग के लिए है। इसमें 134 करोड़ की सब्सिडी हमारे SC और ST वर्ग के युवा भाई बहनों को दी जा चुकी है। पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्फूर्ति योजना के तहत हमारे अनुसूचित जनजाति को कवरेज किया है, जिससे कि अनुसूचित जाति के लाभान्वित कारीगर 60.133 और अनुसूचित जाति के लाभान्वित कारीगर 58.320, टोटल 1,18,453 स्फूर्ति योजना से लाभ ले रहे हैं। मोदी सरकार के लिए सामाजिक न्याय महज एक नारा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। सरकार ने विभिन्न पहलों के माध्यम से हमारे सफाई कर्मचारियों और श्रमजीवियों को, सभापति महोदय बस 2 मिनट, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ मैं, श्रमजीवियों को मानवीय गरिमा की रक्षा की है और उसे बनाए रखने के लिए मेला ढोने की जो सदियों पुरानी मानवीय गरिमा के मुद्दे को बजट संबोधित करता है और बजट में इस विषय को रखा है। सभी शहरों और कस्बों में सीवेज तंत्र की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने के लिए मैन हॉल को मशीन हॉल मोड में बनाने के लिए धन आवंटित राशि की है। इस दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। हमारे मऊ में डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म स्थल है।
नागपुर में है, लंदन में है, मुंबई में है, दिल्ली में है। ऐसे 5 पंच तीर्थ हैं जिनको हमारी पार्टी ने, हमारी मोदी जी की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने उन्हें भव्य तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, माननीय सभापति, धन्यवाद दे रही हूं मैं अपनी सरकार को। श्योपुर से मुरैना भिंड अटल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, मैं धन्यवाद देती हूँ। सैनिक स्कूल जो कि प्रदेश में दूसरा सैनिक स्कूल भिंड जिले को मिला है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ अपनी सरकार को, वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। ग्वालियर भिंड इटावा मार्ग को 4 लेन बनाने की दिशा में काम हो रहा है, डीपीआर बन रही है, मैं माननीय गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। अमृत योजना में भिंड और दतिया रेलवे स्टेशन को जोड़ा गया है और आने वाले समय में मैं एक मांग कर रही हूँ जो कि वंदे एक्सप्रेस ट्रेन हमारे भिंड दतिया जिले को मिले, जिससे कि भिंड की जो लोग आने जाने में दिक्कत होती है सीधे वो दिल्ली से जुड़ पाए। ऐसे भिंड जिले को वंदे एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दिया जाए। और 2 पुल हैं, एक भिंड में अटेर मार्ग पर है, वो बहुत बड़ा विषय है, उस ब्रिज को बनाया जाए, चाहे ओवर ब्रिज चाहे अंडर ब्रिज। बाबू जी ठीक है, चलिए। भिंड और दतिया बहुत आजादी के समय से जिले हैं, लेकिन बहुत पिछड़े होने के कारण मैं मांग करती हूं दोनों जिलों को आकांक्षी जिलों में जोड़ा जाए, जिससे कि वो आने वाले योजनाओं से जुड़ सके। Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity to speak on Union budget. I'm speaking on behalf of people of Andhra Pradesh, whose state has been divided very unscientifically. I'm also speaking on behalf of people of Narsawapet, my constituency, which is very rural and very much dependent on agriculture, sir. Sir, when you look at this budget, it is encouraging in some way, worrying in some ways, and disappointing in many ways, sir. Let me start off with a few issues that are encouraging. The first one is the enhancing productivity of the long staple cotton, sir. Coming from Guntur, which is very much dependent, all our farmers are very much dependent on cotton. This is very much encouraging, sir, because the value addition that happens in Guntur when after the cotton crop comes out, ginning, spinning and everything, this is very, very high in Guntur, sir. So this is a good initiative that the central government is taking, sir. Most of this value addition has moved for the last 10 years to 15 years to Vietnam and Bangladesh and all these countries. At least at this time, they're looking at this very seriously and trying to bring that value chain back to India, sir. Second encouraging factor is on the aqua exports, sir, exports as well as decrease in the feed costs of feed imports of aqua products, sir. This is an encouraging factor because 80% of the aqua exports actually happen from Andhra Pradesh, sir. So most of the costs that are actually incurred by the farmer, 80% of it is on the feed, sir. So decrease in the feed cost, import of feed cost from 25 to 15% is very encouraging for our farmers, sir. And third encouraging factor is the GST tweak that has been given for the MSMEs and professionals, sir. The tweak is that deduction for the expenditure incurred on payments made to them only when the payment is actually made, sir. This is a very good initiative, sir, because right now a MSME which produce their goods on the rise of when they rise the invoice, this GST has been deducted, sir, and also these MSMEs has to take the loans and everything to the tune of 12%. So anywhere between 20 to 25% has to be incurred by the MSMEs by the time he raises the invoice, sir. By the time the bill comes one year later, 1.5 years later, it is very dejecting for them, sir. And this is a very welcome move, and they have to really compete with other countries, sir. And the fourth one being which is a very small one, sir, which is regarding to law services, which the central government has provisioned some amount wherein there is some financial support for the poor people who are in prisons and unable to afford penalties, sir. It's a good move, sir. But I will take it with a pinch of salt, because last budget also the finance minister has spoken very eloquently on the cryptocurrency, sir. But in this budget, nothing has been spoken about it, sir. Right, it is completely forgotten, sir. Last budget, they have levied 30% tax on the income of on the crypto, sir, as well as 1% TDS on the crypto, sir. What it has done, they said, this is the words that the finance minister last said, this is a sunrise industry, sir. But what actually has happened was, in the last 6 months, 32,000 crores of this
transactions has shifted from domestic exchanges to the foreign exchanges. So this is what has happened with the sunrise industry, which they have spoken about. So when I say encouraging stuff, I take it with a pinch of salt, sir. And coming to the things that are really worrying, because I come from a very rural constituency where most of them are dependent on the agriculture, sir. The first one is the rural distress and unemployment, sir. Rural inflation is hovering around 7% and above, and it is almost breaching the levels that RBI has put up, that they have put up to 6%, but it's breaching that, sir. Second one is the growth in the rural wages has remained negative, sir. Instead of actually, when the inflation is going up, these wages also has to go up, it didn't go up, sir. CMI data also shows that workforce participation rate has fallen since 2016, sir. People are not actually going for and trying to find work, sir. These are the very worrying factors, sir. So with these in the perspective, it is very disappointing that budget for NREGA has been reduced by almost 30,000 crores, sir. And also National Rural Livelihood Mission funds has also been reduced, sir. And more than that, as if to add a salt to the wound, NREGA funds, which are supposed to be released to the states on time, are not being released, sir. From the state of Andhra Pradesh, we are actually asking for extra days, extra man hours for our people, sir. But instead of increasing it, decreasing it is a very unhelpful thing, sir. It is very disappointing thing, sir. And second most disappointing thing was the agri input inflation, sir. This is very worrying factor, sir, because in the last 20 months, the agriculture input inflation has remained in double digits, sir. It is inflation is going up every month, sir. But the budget outlay for the market intervention scheme and price support scheme, which is supposed to be when the input is very costly, at least you cover the farmer when the produce comes out, so that give him MSP and cover him. So this is the scheme that was conceived to protect them, sir. But it has been slashed from 1,500 crores to almost nil, sir, in this year's budget. And second one was the PM Asha scheme, which has been almost wound up, sir, in the last 3 years, sir. And third one is the PM Kisan, which is with the outlay, it has been reduced by almost 8,000 crores, sir, this year. PM Kisan, the central government is giving 6,000 to each farmer, sir. I request the central government to actually look at what Andhra Pradesh government is doing with the YSR Raitu Bharosa. We are giving the farmers as input subsidy of 13,500, so that this inflation, they can fight this inflation and try to stand on their feet when the cropping season comes, sir. But instead of increasing the budget for this, they are actually cutting down 8,000 crores. So this is very disappointing to see, sir. And third most worrying factor is the employment and jobs, sir. MSMEs are the growth engines of this country, which produces a lot of employment and jobs, sir. But yes, they have launched a PLI scheme, which is a good scheme, and almost 15 to 18 industries are availing that scheme, sir. But after launching PLI scheme also, Make in India also, and everything, still the trade deficit with China remains at 73 billion. Sir, I have 12 minutes, sir. I have 12 minutes. I've started only 4 minutes back, sir. Okay. I'm the second speaker in my party, so I have 12 minutes, sir. So, time is of the house. Please. Okay, sir. So trade deficit is almost $73 billion, sir. So the PLI scheme was launched so that Make in India and everything goes up, sir. But actually, instead of this PLI, whoever takes the PLI scheme, they are the anchor institutes, sir. But the ones that the ancillary institutes that are supposed to be MSMEs, which are supposed to be taken care of, that has not been taken care of, sir. Two schemes that have been announced last year in the budget, sir, they're not. 1 year has passed, till now nothing has been moved, even 1 inch of it has been moved, sir. One scheme is the ramp, raising and accelerating MSME performance, sir. It has not been, the last year in the budget they have announced, sir, nothing has happened, sir. Second was the surety bonds in the public procurement, sir. Even that one was announced last year, sir. Nothing has happened with that, sir. So these are the MSMEs where the jobs are created, sir. So I think the finance ministry will take account of that, sir. And sir, give me another 2 minutes, I'll wind up, sir. And these are the signs that are very much visible on the ground, sir. Say, for example, these are the figures that are coming out. Two-wheeler sales have fallen off by almost 36%. Now it is almost to the level of 2012-13 level, sir. Commercial bank loans against gold jewelry increased by a huge 218%, sir. So people are pawning off gold. In India, gold is valued very well, sir. They don't pawn off that much easy, sir, but they're pawning off almost 2018% have been pawned off just to make sure that they can live well, sir. And also household borrowings and other for housing
vehicles, securities, or education. Other than this, they're just borrowing just to live, sir. So these are the Now very please worrying factors, conclude. sir. Very worrying, sir. The one that is growing, sir, in the last 1 year, sir, the luxury cars manufacturer Mercedes has increased the sales by almost 64%, sir. Anyways, the disappointing things with respect to our state, sir. This is just a disappointing factors with our state, sir. Our Chief Minister has given this letter to the Prime Minister also. Numerous letters has been given to the Prime Minister, sir. The first and most important thing was the special category status, which was given to us, which was promised to us, not given to us, promised to us in AP Reorganization Act, sir, in 2014, sir. 9 years has been passed. Only 1 more year is left, sir. Till now, it has not been fulfilled, sir. This special category status was promised because our state was bifurcated in a very unscientific way. It was given because we didn't have any industry, sir. We didn't have any capital, sir. That's why it was given, sir. But till now, the promise has not been fulfilled, sir. Even Polavaram, sir, which is a lifeline of Andhra Pradesh, which has not been fulfilled, sir. My constituency, there's a Nagarjuna project which was built in the 1950s when the technology was not there. So it was built much faster than this Polavaram, sir. In 2010, 2020, we're not able to build this project. Is a very disappointing thing, sir. And third thing is the power dues that are due from the Telangana to the tune of 6,800 crores, which is supposed to be settled by them, then has not been settled. So last 1 minute, sir. Last 1 minute. And also medical colleges, we have been requesting them, sir, for the central support. And also national institutes, the land has been provided, nothing has been happening. Railway projects, 8,000 crores has been sanctioned this year, sir, but I'm sure capital outlay won't be spent, sir. And adding salt to the wound, sir, they want to privatize Vizag steel plant, sir. We are very much against this privatization of Vizag steel plant, sir. We people of Andhra Pradesh are very much attached to the Vizag steel plant, sir. Shri Jagdambika Pal ji. Thank you very much. Thank you. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। कम है, आप बोलिए तो। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने हमारे भारत के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पे बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत देर से इस बजट की चर्चा पे अपने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के साथियों को सुन रहा था। एक देश का सबसे महत्वपूर्ण, देश की प्राप्तियों का या देश के रिसीव्स का जो भी इनकम है और उसके एक्सपेंडिचर का, ये पूरे साल का एक लेखा जोखा होता है। और प्रायः बजट में हमारे तमाम माननीय सदस्य हैं इस बात के गवाह होंगे कि इस बजट पे जब भी चर्चा होती थी तो इस बजट पे ये चर्चा होती थी कि अगर ये फिस्कल डेफिसिट इतना है तो ये कैसे सरकार कम करेगी, रेवेन्यू डेफिसिट अगर इतने हैं तो इसको कैसे कम करेगी, या प्राथमिक घाटे को कैसे कम करेगी। इसी चर्चा तक हम सीमित रहते थे कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बढ़े या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे कम करें। लेकिन आज का जब ये अमृत काल के बजट को जिसको हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है और अमृत काल में जिस तरीके से उन्होंने 7 पैरामीटर को तय किया है कि हम 7 पैरामीटर्स पे अगले 25 वर्षों के लिए जो हम आधारभूत तैयार करने जा रहे हैं, वो चाहे डेवलपमेंट हो या रीचिंग द लास्ट माइल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट हो या अनलीजिंग द पोटेंशियल्स हो या ग्रीन ग्रोथ हो, यूथ पावर या फाइनेंशियल सेक्टर हो, तो इस पे आपने देखा है कि आज इस बजट का क्या परिणाम हमारे सामने, कि आज हमारे तमाम साथी कह रहे थे कि इस बजट में क्या है और भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। आखिर पिछले 9 वर्षों में अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो हमने इस 9 वर्षों में भारत ने अपनी आर्थिक विकास यात्रा कहां तक की है। आखिर हम इस बात के गवाह हैं कि आज दुनिया में पहली बार भारत में हम अपनी अर्थव्यवस्था को अब देश में चिंता नहीं है, देश की तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज दुनिया से तुलना हो रही है। जिस भारत को 9 वर्षों के पहले ये भारत दुनिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में थी, आज 9 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आ गई है। तो ये निश्चित तौर से 9 वर्षों की यात्रा है भारत की, और ये यात्रा ऐसे नहीं है, ये यात्रा करने में निश्चित तौर से जिस तरीके से कदम उठाया और अगले कुछ वर्षों में हम इसको दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और इसको बनाने के लिए जिस तरह से भारत ने पिछले दिनों, आपको याद होगा जब कोविड की चुनौती आई थी, इसी सदन में पूरे देश को दिक्कत थी कि उस समय पीपी किट हो या इनके 95 हो या जिस तरह से वेंटिलेटर्स हो, ये हम चाइना पे निर्भर रहते थे, बाहर के एक्सपोर्ट पे निर्भर रहते थे। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ऐसी जो आज परिस्थितियां निर्मित हुई है, जो भारत ने देखा भी नहीं था,
तो निश्चित तौर से दुनिया को, हमको भारत को आत्मनिर्भर करना होगा। और उस भारत को आत्मनिर्भर करने की दिशा में जिस तरह से हम बढ़े हैं, आज आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट जो हुआ है वो 3 फोल्ड में राइज किया है और आज यूएस $4.4 बिलियन से बढ़कर के जो 19 पे था, आज 2022 में हम $11.6 बिलियन हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में पहुंच गए। आज जिस तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी में देखिए, इसमें पिछले 7 वर्षों में आज विश्व का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन ये बन गया है और सौर ऊर्जा में अब तक $78.1 बिलियन अब तक यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है। और आज उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि हम केवल आज एक सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो नहीं, बल्कि आज सारे सेक्टर में हम जिस तरह से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने प्रतिपक्षी साथियों कि आज इंडिया डिफेंस के मामले में जहां हम पूरा आश्रित रहते थे, ये गवाह है ये लोकसभा, इसी लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हम डिफेंस में हम ज्यादा से ज्यादा जो अभी तक हम सारी चीजें ले रहे थे, भारत 101 अपने रक्षा के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुद भारत बनाएगा। और आज केवल भारत उस डिफेंस की चीजों को बनाने का काम नहीं कर रहा, दुनिया को हम एक्सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से भारत की उपलब्धियां हैं। और आज वो जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, ये मैं पिछले 9 वर्षों की बात कर रहा हूं। आज 6 टाइम ये आंकड़े हैं कि पिछले 5-6 वर्षों में हम डिफेंस इक्विपमेंट और सर्विसेज में हम 75 कंट्रीज में, दुनिया के 75 देशों में आज हम डिफेंस के सामान, डिफेंस की इक्विपमेंट्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी चीज में नहीं, आज दुनिया में हम सबसे सेकंड लार्जेस्ट हैं टेक्सटाइल और क्लॉथिंग में, कपड़े में भी। जहां पहले लोग कहते थे हमको इंग्लैंड की सूटिंग चाहिए, फॉरेन के कपड़ों के लिए जिस तरह से भारतीय लोग, आप देखते थे किस तरीके से लोगों के मन में इच्छा रहती थी। नाउ इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड विद अ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ $44 बिलियन। तो आज जिस तरीके से हम टेक्सटाइल के मामले में, क्लोथ के मामले में, फार्मा के मामले में, आप देखिए कि हमने जिस तरीके से एफडीआई इनफ्लो हुआ है, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2014-15 में $45.14 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। और आज वो हमारा 2021-22 में इसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि हम अपने देश को एक ऐसी बनाएं, कोविड की वैश्विक चुनौतियों के पहले जहां लोग चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, जहां पे पहले जापान में था, आपने देखा कि जो एक प्रयास हुआ केंद्र सरकार का कि दुनिया का मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन एफडीआई के लिए भारत बना। और उसमें ऐसी स्थिति बनी कि आज 21-22 में $83.57 बिलियन आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ पे हुआ है। इसी तरीके से आज हमने अपने भारत के भी, लोगों ने कहा साहब बजट में आपने क्या किया, बजट में कहाँ किया। आज जो हमारी जो 13 ऐसे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, उसमें हमने हाईएस्ट एलोकेशन किया। 2023-24 में जो हमने हाईएस्ट एलोकेशन के परसेंटेज को इंक्रीज किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 49% किसी देश का बुनियादी ढांचा होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपसे हम कहने जा रहे हैं कि जिस तरीके से हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है इस देश में, आप देखिए कि रेलवे में हमने सबसे बड़ा काम किया है कि आज हमारी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगातार हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने कहा कि साहब महंगाई और रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात आई, अनएम्प्लॉयमेंट की, मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन मैं बुनियादी ढांचे पे बात करना चाहता हूं कि आज बुनियादी ढांचे की बात आप करिए तो जो बुनियादी ढांचे में सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हम आज तुलना हम कांग्रेस यूपीए की सरकार से नहीं कर रहे हैं, हम खुद तुलना अपनी पिछले वर्ष की कर रहे हैं कि अगर वाकई भारत को बुनियादी ढांचा दुनिया से एट पार होना, दुनिया की हमको, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कल 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। अगर आज जीडीपी में हमने 7%, दुनिया का सबसे तेज विकास दर 7% हमने पाया है, इसको हम बढ़ा करके 8%, 9% करना है, तो हमको अपने बुनियादी ढांचे को, चाहे वो रोड हो, हाईवेज हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट्स हो, इन वाटर इनवेज हो, इन सारी चीजों को बढ़ाना होगा। हमने जहां 2022-23 में
हमने 7.5 लाख 7.5 लाख करोड़ 22-23 में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए बजट में प्रावधान किया था। खुद हमने 22-23 से एक साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री के प्रयास से, हमने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे को मजबूत करके केवल आत्मनिर्भर भारत का नारा नहीं है, उस आत्मनिर्भर भारत को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए इस बार 7.5 लाख करोड़ की जगह पे 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करने जा रहे हैं। तो ये 2023-24 में हम खुद अपना 33% हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, बुनियादी ढांचे में पिछले वर्ष की तुलना में हमने अपने पूंजीगत व्यय को वृद्धि किया, अपना एलोकेशंस को बढ़ाया। अगर इसको हम कांग्रेस यूपीए की सरकार से तुलना करें तो उसमें अगर हम तुलना करें तो 2013-14 में जो था पूंजीगत व्यय वो केवल 2,57,641 करोड़। उस 14 के बाद हमने 9 गुना हमने बुनियादी ढांचे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, जो अपने आप अर्थव्यवस्था को एक उल्लेखनीय आने वाले दिनों में मिलेगा। राज्यों को बात देने की बात कह रहे थे, इस बजट में हमने प्रावधान किया कि हम राज्यों के लिए जो देंगे वो ब्याज मुक्त ऋण देंगे, जिससे कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा भी कि हम पूंजीगत व्यय के लिए हम राज्यों को 50 वर्षों की अवधि के लिए ऋण मुक्त, जो हमारा ब्याज मुक्त ऋण होगा, उसकी सुविधा हम राज्यों को प्रदान करेंगे। ये हम फेडरल स्ट्रक्चर में हम करते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि राज्यों के पास कुल मिलाकर के जो सार्वजनिक निवेश का एक बड़ा भाग होता है, उसको ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा निवेश करने से एक निवेश की गतिविधियां बढ़ेगी, राज्यों को अपने खर्च में वृद्धि लाने में प्रोत्साहित होगा। उस तरीके से हमने काम करने के लिए कहा। और इसी तरीके से भारतीय रेलवे का, जो मैंने कहा कि रेलवे के लिए एक रिकॉर्ड बजट आवंटन हुआ है, नहीं तो इस 10-15 साल से आप भी गवाह हैं सदन के, बजटरी सपोर्ट कितना मिलता था रेलवे से। बजटरी सपोर्ट कभी 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 35,000 करोड़। और आज हमने, हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रस्ताव किया है, जो 13-14 से भी 9 गुना ज्यादा है। तो आखिर इस रेलवे में आज सिद्धार्थनगर, हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने बोला आकांक्षा जनपद, आज उत्तर प्रदेश को अब समाप्ति की ओर बढ़िए। नहीं, हमारे प्रदेश को भी मिला है जिस तरीके से। और इसीलिए आज मैं ये कह रहा हूं कि इस सदन ने, मैं भी एक संसदीय जीवन का व्यक्ति हूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि आप निश्चित तौर से आलोचना करें, आलोचना सरकार को स्ट्रेंथ देती है, आरोप की बात नहीं होती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज ये सदन में प्रतिपक्ष अगर अपने को ये है कि आदरणीय मोदी जी की आलोचना ही करेगा, आदरणीय मोदी जी को गाली देगा, तो इससे निश्चित तौर से आज जिस तरह से उनका नेतृत्व है, आज वो नेतृत्व केवल भारत में स्वीकार नहीं है, आज दुनिया में भी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकारा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं। ये रेटिंग आज भारत की नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंसल्टिंग मॉर्निंग कंसल्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज एमर्ज एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। 78% में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। आज जिस अमेरिका को हम देखा करते थे, जो बाइडेन जी, इस रेटिंग में वो 4थे नंबर पे। आज जो महत्वपूर्ण देश हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हो, वो आज नीचे हैं, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हो, ऋषि सुनक हो, आज सब पीछे। तो ये हमारे लिए फख्र की बात नहीं। राजनीति हो सकती है, सत्ता पक्ष में प्रतिपक्ष में आखिर हम लोग मतभेद हो सकते, लेकिन अगर आज ये नेतृत्व दुनिया में हमने मुद्रास्फीति पे कंट्रोल पाया हो, हमने जीडीपी को अपना बढ़ाया हो, तो आप तुलना करिए दुनिया के साथ, आप कहिए दुनिया के साथ। मैं जल्दी कंक्लूड कर दूंगा। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं 2 बातों पे अपनी बात करके अपनी सीमित करूंगा कि आज सबसे ज्यादा बात महंगाई की हुई है या बेरोजगारी के विकास की। मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं। अगर जीडीपी की बात आप करें तो आज जीडीपी की बात अगर दुनिया के किसी भी कंट्रीज की आप देख लीजिए कि दुनिया के हर कंट्रीज के साथ तुलना कर लिए, आईएमएफ जीडीपी फोरकास्ट फॉर इंडिया 2023 ग्रोथ 7% है।
आज IMF ने जो यूएस का ग्रोथ रेट है, यूनाइटेड स्टेट्स का 1.4% है, ये IMF का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। आज IMF है रिवाइज चाइना ग्रोथ जो 9% पे था वो घट करके 4.4% पे अक्टूबर में था, अभी 5.2% पे है। आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि पिछले 9 वर्षों में हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेज विकास दर से बढ़ने वाला भारत की अर्थव्यवस्था है। उस भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज जिस कोविड से कह रहे क्या दिया इस बजट ने, इस आत्मनिर्भर भारत ने क्या दिया? अरे इस भारत ने आत्मनिर्भर भारत में क्या दिया? जहां हम दुनिया में हैजा, प्लेग, सुनामी, किसी जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, इनके लिए हम दुनिया से, बाजारों से मांगते रहते थे कि हमको वैक्सीन मिल जाए। आज वहीं उस कोविड की वैक्सीन से जिसमें पूरी दुनिया उसके चपेट में था, उस भारत ने न केवल अपने दुनिया के 260 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दिया, 150 मुल्क के लोगों की जिंदगी का हिफाजत करने का काम भारत की सरकार ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं एक बात महंगाई की बात कह देना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मिनट में समाप्त कीजिए प्लीज। खत्म कर। 1 मिनट, 10 मिनट, केवल 1 मिनट में 15 मिनट हो चुके हैं। नहीं, 10 मिनट का 1 मिनट में समाप्त कीजिए प्लीज। मैं अन्य अगले वक्ता का नाम बोल दूंगा, तो बोल दीजिए। तो 1 मिनट में पूरा कीजिए। बोल देंगे तो आप बैठ जाएंगे मेरे से केवल। आज इंडिया के इन्फ्लेशन इसी लोकसभा में इन्फ्लेशन की बात होती थी। आप भी गवाह हैं, 10% डबल डिजिट से नीचे इन्फ्लेशन कभी नहीं रहा। मैं तो चुनौती देके कहता हूं, कल गोगोई जी बोल रहे थे। आज आप देखिए कि हमारी दुनिया में सबसे कम हमने महंगाई पे जिस तरह से कंट्रोल किया। आज इंडिया इन्फ्लेशन इन जनवरी 22 की बात कर रहा हूं 5.6% है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं, IMF की रिपोर्ट है। और आज इन्फ्लेशन हमने इतना किया है, यूरोप की देख लीजिए, इन यूरोपियन कंट्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 8.9% इन 19 कंट्रीज। पूरा यूरोपियन जिसको हम आदर्श मानते थे, आज वहां 8.9% है। इटली में 8.4% है, जर्मनी में 8.5% है। फूड इन्फ्लेशन इन यूरोप इज रिकॉर्डेड 9.8%। यूनाइटेड किंगडम में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 9%। USA में इन्फ्लेशन रेट ऑफ इज 8.4%। फूड प्राइसेज इन द कंट्री इन USA हैज इंक्रीज टू 11.9%। इन अमेरिका चंद्रेश्वर प्रसाद जी, अरे आई एम जस्ट गिविंग ओनली फिगर्स, काइंडली गिव मी ओनली फॉर फ्यू मिनट्स, आई एम गिविंग। एंड पाकिस्तान देख लीजिए, जब हम साउथ ईस्ट चंद्रेश्वर प्रसाद जी करंट हमारा पाकिस्तान का देख लीजिए। देखिए माननीय सदस्यगण, इसकी बात कर रहे थे कि हमें माननीय सदस्यगण, कृपया इस पाकिस्तान में पाल साहब जरा प्लीज देखिए, समय तो सदन का है और हमारी उसके अंदर जो अंश है वो आनुपातिक है। आप कृपया इसका ध्यान रखें। 5 मिनट नो, बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, एक निश्चित समय है उसके अंदर हमको प्लान करना चाहिए अपना वक्तव्य। 5 मिनट के अंदर आप पूरे बजट पर विस्तार से बोलेंगे, ये संभव नहीं है। आप कृपया सिलेक्टेड पॉइंट्स लीजिए, निश्चित समय सीमा में अपना विषय पूर्ण कीजिए। आदरणीय चंद्रेश्वर जी। आदरणीय सभापति महोदय, बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां करीब 27 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 2014 में आने के समय देश पर 53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन 9 वर्ष बाद यह कर्ज बढ़कर 150 लाख करोड़ रुपए हो गया है और इस वर्तमान बजट में 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और बढ़ जाएगा। यह बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। हम विगत 9 वर्षों में ऐसे कई वादे सुनते आ रहे हैं, जैसे बुलेट ट्रेन चलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी, 60 लाख रोजगार सृजित करने का वादा था। बजट में रोजगार सृजन या भविष्य की योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कई सालों से लोग महंगाई, रिकॉर्ड और बेरोजगारी और घटती आय से परेशान हैं। इस सरकार के पास महंगाई को रोकने के लिए बजट में कुछ रोजगारी दर 8.3% तक पहुंच गई है और शहरी क्षेत्रों में तो 10% लोग बेरोजगार हैं। यह बजट न सिर्फ इन गंभीर चुनौतियों से निपटने में विफल रहा है, बल्कि इसमें गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं में आवंटन में की कमी करके इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया गया है। बजट के चलते ग्रामीण मजदूरों के लिए अवसर कम होंगे। शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य में भारी कटौती गरीब लोगों को चोट पहुंचाने और हमारी प्रगति को रोकने वाली है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लगातार वित्तीय विवेकशीलता दिखाई है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लेकिन वह संतोषजनक नहीं है। बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कभी चिंता नहीं की है। सभापति महोदय, फलस्वरूप बिहार प्रति व्यक्ति आय, जीवन यापन, मानव विकास जैसे सूचकांक में राष्ट्रीय औसत से नीचे है। बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का हकदार है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सीमित संसाधन के बावजूद नीतीश बाबू की अगुवाई में बिहार सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर है। सभापति महोदय, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, इसका रिकमेंडेशन बिहार विधानसभा और बिहार सरकार ने भी किया है। मेरा केंद्र सरकार से विनती है, आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। एक सेकंड, अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र जहानाबाद के लिए भारत सरकार से कुछ आग्रह करता हूं। जहानाबाद अरवल को आकांक्षी जिला में शामिल किया जाए। जहानाबाद जिले में नमामि गंगे योजना को शामिल करके मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी नदियों की उड़ाही कर तटबंध मरम्मत और स्लूइस गेट निर्माण कराया जाए। मैंने रेल से संबंधित बहुत सारे प्रतिवेदन रेल मंत्री जी को दे रखा है। उन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। जहानाबाद में केंद्र प्रायोजित खेल इंस्टीट्यूट खोला जाए। इतना ही कह करके मैं आपसे 1 मिनट का समय मांगता हूं। 1 मिनट का, 1 मिनट सर, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सभी योजनाओं में 100% फंड केंद्र सरकार का होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अधिकतर प्रदेश आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। योजनाओं का नाम तो भारत सरकार के रहता है, लेकिन राज्यों को पैसा लगाना पड़ता है। इस बारे में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर अपनी बात रखते रहे हैं और केंद्र सरकार को बिहार राज्य के हित में उन मांगों को पूरा करना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि आज की तिथि में श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी प्रपोजल आए हैं। Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity to take part in the budget discussion, general discussion on the budget for 2023-24 financial year. Sir, I rise to oppose this budget proposals for the financial year 23-24 because these proposals of this budget is not addressing the genuine concerns of the people of India, in particular regarding unemployment, poverty and inflation. The proposals envisaged in the budget is not sufficient to address all these main general issues which is concerning the downtrodden, the most of the population of our country. Sir, it may kindly see the speech of the Honorable Finance Minister, Madam, begins with the sentence, I quote, "We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development reach all regions and citizens, especially our youth, women, farmers, other backward communities, scheduled castes and scheduled tribes," unquote. Madam, Finance Ministry speaking about the inclusive growth in our budget. Special paragraphs are also being enunciated in the budget speech. But if you go through micro-level scrutiny of the speech, it is seen that the term minority is deliberately avoided in the inclusive development which is being envisaged in the budget speech of Honorable Finance Minister. This is not only in the Finance Minister's speech, also in the presidential speech also, SC, ST, OBC, weaker sections of the society, northeastern people, Jammu Kashmir people, but it is quite unfortunate to note that normally the term minority is also there in the weaker sections of the society. It is missing in the speech. That itself shows that there is a deliberate act of discrimination against the minorities is reflected in the budget, for which I strongly oppose it. The main allegation I would like to pose is that the budget is not, proposals are not sufficient to meet the purposes envisaged in the preamble or in the preface of the budget. Why it is so? Because I do appreciate the government and the finance minister for maintaining the fiscal deficit at 6.4% and maintaining the growth at 7%.
Yes, the country is having a very good economic growth. Even after the COVID-19 pandemic situation, we are able to have the 7% of the GDP growth, and we are able to honor the commitment given in the 22-23 speech of the Honorable Finance Minister that the fiscal deficit will be contained at 6.4%. I do pay appreciation on my behalf and on behalf of my party. But my specific question to the Honorable Minister is, when there is an economic growth of 7%, and when we are able to contain the fiscal deficit at 6.4% as declared in the previous budget, why we are not able to address the issues of unemployment, poverty and inflation? Sir, Chairman, sir, the unemployment, I am not going to the statistics. I know the paucity of the time. CMI, 8.3% is the rate of unemployment growth. National Statistics Office says that 7.1%. Sir, the post-independent India has never seen such an exponential growth of unemployment in this country. That is the first issue which I would like to make. And what are the labor-intensive sectors? Agriculture, mining, manufacturing, trade, hotel, transport, telecommunications. Sir, except telecommunications sector, there is a growth of 13.7% in the telecommunications sector. All other sectors, there is no change in the growth. Therefore, the industrial production, if you see, the growth rate is 1.6%. It is less than 22-23. Manufacturing sector, the growth is 9.1%. 2021, it was 21-22, it was 11.5%. That means 2% reduction. If this be the ground reality, I would like to ask the Honorable Finance Minister, please tell the House how you are going to address the issue of unemployment, number one. Sir, number two, regarding the poverty, I am not going to the details. Now, India has been pushed into 132 out of 191 countries as far as this the Human Development Index is concerned. This is the UNDP program report, UNDP report. The multi-dimensional poverty index goes to shows that 16.4% of the population is multi-dimensional poverty index. 18.7% of the population are vulnerable to the multi-dimensional poverty index. This is the situation. Around 48 crores of the people under poverty line. Niti Aayog says that more than 50 crores of the people, and if that be the case, you yourself, the government is admitting that 81 crores of people are being provided with the free ration. That means they are also in the poverty. So this is an accepted fact by the government. So in such a situation, I would like to pose the question again. When there is an economic growth of 7% even after COVID-19 pandemic, when we are able to have a good growth, why we are not able to address the issue of the poverty which is increasing? That is the second question which I would like to pose, sir. Regarding the third question is inflation. Regarding the inflation, what is the rate of inflation? 6.7%. Sir, it is above the upper band of 6%. There is a provision in the RBI Amendment Act of 2016 that when the rate of inflation exceeds 6%, the upper band, there is a mandatory provision on the part of the RBI that the matter should be informed to the government through a letter. And it is quite unfortunate to see that RBI should inform the government through a letter the reasons for inflation exceeding 6%, that is upper band. I would like to ask the Honorable Finance Minister when we reply. First question is whether the RBI had written to you regarding the reasons for the inflation. If so, please disclose the reasons for the inflation as given by the RBI. Also, I would like to ask the Honorable Finance Minister why the minutes of the recent Monetary Policy Committee meeting is not made public and not available in the public domain, as there is a mandatory provision that the MPC meeting minutes should be published in the public domain. Why it is not so? That is the third question which I would like to ask. Sir, I am concluding, sir. Sir, Chairman, sir, 1 second. So the basic principles of your liberalized economic policy is wealth creation will give employment and development or leads to employment and development. Unfortunately, that is missing in our country. I'm not going to the current account deficit. I'm passing on it, sir. But one last one is regarding the direct taxes. Sir, I may be given 2 minutes. I will conclude just by elucidating an example. So the tax proposal, the direct tax proposal, the Honorable Prime Minister as well as the entire Treasury benches were thumping the desk.
when an announcement, populistic announcement made by the Honorable Finance Minister, up to 7 lakh there is no income tax. Sir, this is also a jumla. I will explain, sir. If you are having an income of 9.5 lakhs, in the present tax regime, you are entitled to have 4.5 lakhs of deduction and exemption, then you need not pay any pi of tax. If you are having 9.5 lakhs of income, annual income, as per the present tax, all the tax regime, you need not pay anything because you are having an entitlement of 4.5 lakh rupees of exemptions and deductions by ATC, CC and all. I'm not going to all the details. Suppose if you are having an income of 7 lakh 10,000 rupees, sir, I will conclude with that sentence. If you are having an income of 7 lakh 10,000 rupees, you have to pay 26,000 of rupees as tax. If you are having 9.5 lakhs of rupees, as per the new tax regime, you have to pay 45,000 rupees as income tax. Which is better, sir? I'm not going to the comparative study of all these things because of this time. So I would like to say, that means this is also just a jumla to mislead the middle class. So with all these observations, I would like to say that the budget proposals are not favoring the common public at large, even the middle class. Hence, I strongly oppose the budget proposals for the year 23-24. Thank you very much, sir, for providing this much of time. 10 minutes, 10 मिनट जी, अब शुरू तो कीजिए, 10 मिनट भी हो जाएंगे, शुरू कीजिए, अरे कीजिए। माननीय सभापति महोदय, जी जी, मैं सबसे पहले तो आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने की अनुमति प्रदान की है, और सबसे अधिक आभार व्यक्त करता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का और बहन निर्मला जी का, जो उन्हें बहुत जानदार शानदार बजट देश के 140 करोड़ जनता को देने का काम किया। मेरा लंबा काल बीते ऐसा संसद में, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टरों को देखा है, वित्त मंत्रियों को देखा है, और विगत 9 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली जी को, जो नहीं है अब, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको, और बहन निर्मला जी को देखने का काम किया है। निश्चित तौर पर जब एक गरीब का बेटा देश का प्रधान सेवक बनता है तो गरीबों के लिए सोचता है। सर, मोदी जी भूखे रह करके, जिसकी मां बर्तन साफ करती थी, जिसके पिताजी चाय बेचते थे, उसका बेटा जब देश की जनता ने प्रधान सेवक का मौका दिया तो गरीबों के लिए काम किया सर, मजदूरों के लिए काम किया सर, नौजवानों के लिए काम किया सर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए काम किया सर, पिछड़ा अति पिछड़ों के लिए काम किया सर। वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग इसके तरफ आ जा काम किया सर। विकट परिस्थितियों में भी, संकट के घड़ियों में भी मोदी जी का जो विजन रहा सर, सचमुच में जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। हमारे आदरणीय पाल साहब चले गए, बोल रहे थे दुनिया में विदेशी लोगों ने हम और आपने असेसमेंट किया है कि सबसे अधिक लोकप्रिय प्राप्त करने वाला कोई और नहीं, इस देश का गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है, जिसने पूरे अपने 9 साल के कार्यकाल में क्षमता और कुवत के साथ हर चुनौतियों का मुकाबला करके देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और देश की जनता को जीवन सहज करने का काम किया है। अन्य वित्त मंत्री जी, आजादी के अमृत काल का यह पहला बजट प्रस्तुत करने का काम किया है, जिसमें देश के पिछड़ों के लिए, देश के अति पिछड़ों के लिए, देश के शेड्यूल कास्ट के लिए, देश के एससी के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और सभी वर्ग के युवाओं के लिए
अगले 25 साल के विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने का काम किया है। और ये बजट सोशल जस्टिस विथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के सूत्र पर लागू कर रखने का काम किया है। अध्यक्ष जी, सभापति जी महोदय, देश का अभी देश की प्रथम महिला आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति के रूप में जो अभिभाषण किया, बहुत कई तरह की टिप्पणी की। उन्होंने जो अभिभाषण रखा उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, मगर विपक्ष के लोगों ने जो अपनी टिप्पणी की, उस टिप्पणी के बारे में आप सब लोगों ने, सदन ने, दुनिया ने सुनने का काम किया होगा। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका जिक्र करके सरकार को और घेरने का काम करते। केवल एक ही मुद्दा मिला सर, और विपक्ष में बैठे हुए जो बड़े नेता हैं, एक ही मुद्दा मिला, अडानी, जिसमें कोई दम नहीं है सर, कोई दम नहीं है। अगर उनके समझ में बैठ जाइए ना, मैं आप पर आऊंगा तो परेशान हो जाइएगा। आप बैठ जाइए, मैंने बहुत देखा है आप लोगों को। महोदय, जो मूलभूत समस्या इस देश का है, रोजी रोटी, कपड़ा, आवास, पानी, बिजली, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। पूरा का पूरा समय अडानी पर ही निकालने का काम किया। ये बताता है कि देश में रोजी रोटी, मकान, सड़क, बिजली की समस्या अब नहीं रही। ये मोदी जी की क्षमता का ही नतीजा था, जिसने इन समस्याओं को बजट से बाहर कर दिया, राष्ट्रपति अभिभाषण से बाहर कर दिया। एक गौरवशाली इतिहास में नरेंद्र मोदी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाएगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। सर क्या बोलेंगे? पहले मैं इनके साथ भी रहकर काम किया है सर, अब मोदी जी के साथ रहकर भी काम कर रहे हैं सर। बहुत अंतर। मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। महोदय, मैं आता हूं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी सबल होगी, देश उतना ही सुखी और संपन्न होगा। और हमारी सरकार देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई ऐसे उपाय किए हैं सर, जिसका मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। देश की जो अर्थव्यवस्था है सर, खेत और खलिहान में काम करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, किसानों के ऊपर डिपेंड करता है, मजदूरों के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है कि हम किसानों के हित में काम करें, और न जाने कितनी सारी योजना, जिसमें किसान सम्मान निधि है, कई काम है सर, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, समय आपने बांध दिया है। देश की अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो रही है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा ध्यान देने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ रही है सर। हमारी जो अर्थव्यवस्था आज मजबूत हुई है, और दुनिया, पहले हम 10वें नंबर पर थे, इनके रिजीम में आज 5वें नंबर पर हो गए। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान देश के किसानों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है, महिलाओं का है। ये सब लोगों ने मिलजुल कर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत किया है। आज दुनिया में हम 5वें स्थान पर आए। आगे आने वाले दिन में तीसरी व्यवस्था हमारा हो जाए, उसके लिए हम प्रयास करने का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का कुछ दिन तक, लगभग 4.5 साल तक राज्य मंत्री के रूप में काम किया सर। मेरा अपना जो अनुभव है सर, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ सर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से अद्भुत काम हुआ सर। चर्चा में जितना करूंगा वो कम होगा सर। सबसे पहले हिंदुस्तान के आजादी के बाद कई ऐसे लोग थे जिनके सर पर छत नहीं था, खुली आकाश में रहा करते थे सर।
फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करता थे, दर दर की ठोकरें खाते थे, उनका जीवन स्तर बिल्कुल खत्म सा हो गया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ निगाह डालने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि इंदिरा आवास की परिकल्पना 29 साल पहले प्रारंभ हुआ था और हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ये कह सकता हूं कि 2029 के पहले जो हमारी प्राथमिकता थी सर, उस प्राथमिकता को देखते हुए हमने 2014 के पहले 29 साल में लगभग 3,25,00,000 मकान बनाए गए और वहीं 2014 के बाद जब मोदी की सरकार आई और विगत 8 साल में 29 साल में 3,25,00,000 और 8 साल में 3.5 करोड़ मकान हमने बना करके गरीबों के सपनों को पूरा करने का काम किया है, साकार करने का काम किया है। कई ऐसा घर था सर, कई ऐसे परिवार थे जिनके यहां बेटी कुंवारी रह जाती थी। इसलिए कुंवारी रह जाती थी कि उनके घर पर छत नहीं था, शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं था, मगर उनके सपनों को साकार किया खुले आकाश पे सर। मैंने अपने आंखों से देखा है सर, मैं गरीब परिवार का बेटा हूं, मैं गांव से आता हूं, मैंने उनके दर्द और पीड़ा को देखा है सर। कई ऐसे लोग थे खुले आकाश की जीवन जीते थे जिनकी झोपड़ी के मकान होते थे। जब बरसात होता था, पानी टपकता था, तो अपने दूध मुहे बच्चे को साड़ी से झांक करके पानी से बचाने का काम करते थे और रात भर जगने का काम करते थे। उनके सपनों को पूरा किया है। यही इंदिरा आवास, यही प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी राशि बढ़ाने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अब करीब करीब जो 75,000 मिलता था, 1,50,000 रुपए की राशि दी जा रही है सर। और केवल मकान ही नहीं सर, उसके अलावा मकान में बिजली, पानी कनेक्शन, शौचालय, एलईडी बल्ब, बैंक अकाउंट, रुपए एटीएम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ई श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त राशन, हाई स्पीड इंटरनेट, मुद्रा लोन, गांव में पक्की सड़क, गांव के बाहर 2 लेन और 4 लेन और 6 लेन की सड़क, घर की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके उनकी आर्थिक सशक्तिकरण करने का काम किया है। यह है बदलाव जी, यह है बदलाव। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं सर। मैं गया था, अब समाप्त छत्तीसगढ़ जी, 12 मिनट खराब अगर बात बोल रहा हूं तो सब मुझे बैठा जी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं सर। मैं गया था छत्तीसगढ़ में और फील्ड विजिट करने गया सर। एक गांव में गया, वहां एक बूढ़ी जो नया मकान बना था, उसका नाम मुनिया देवी थी, 70-80 साल की होगी सर, अपने पति के साथ बैठी हुई थी। मैंने कहा, चाची आपका मकान पहले कहां था? चाची, बूढ़ी चाची झुक करके मेरे हाथ को पकड़कर ले जाती है वो पुराना झोपड़ी के पास जहां पिछले 50 सालों से रह रही थी। हमने कहा, चाची इसमें कितने साल से? 50 साल से। क्या कभी आपने सपना देखा था क्या आपको पक्का का मकान मिले? ओके सर, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं सर। आप बिहार अभी छूटा हुआ है। समाप्त कीजिए प्लीज सर। सुन तो लीजिए सर, बहुत वेदना के साथ मैं कह रहा हूं सर। मोदी जी को अब हर व्यक्त करता है देश का गरीब का बेटा और देश के आम आवाम जिसने उसके जीवन को सफल किया। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं सर, और मैं कोई कहानी नहीं गढ़ रहा हूं। वहां मैं गया, पूछा, चाची बताइए क्या कभी आपने देखा था कि पक्का का मकान होगा? कहा कि नहीं बेटा। आंख से आंसू बहने लगे। मैंने नहीं देखा था। हमने कौन सपने को पूरा किया? कोई नहीं, नरेंद्र मोदी ने किया है, जो भगवान का रूप है हमारे लिए। और न जाने लाखों करोड़ लोगों के अरमान को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। सड़कों की क्या हालत थी सर, आपने देखा होगा सड़कों की हालत। और ये मैं बता रहा हूं कि उनके
जीवन को सहज करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं पिछले आप 29 सालों में सर? कीजिए 1 मिनट में प्लीज। 1 मिनट में सर, केवल 1 मिनट में समाप्त कीजिए। 1 मिनट कीजिए सर, कीजिए ना, कीजिए। आप प्रयास कीजिए, कर लेंगे आप। सुनिए सर, ठीक। मैं अपने आदरणीय जो पार्टी के सम्मानी नेता हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मुझको 5 मिनट का समय दिलवा दीजिए सर। 5 मिनट 5 मिनट का समय दिलवा दीजिए। 5 मिनट और मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा सर। बहुत मैं आभारी हूं सर। हो गया। मेरी वेदना को रोकिए मत, मेरी पीड़ा को सर। जी। मैं देश के गरीबों की पीड़ा से पीड़ित हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय समाप्त कीजिएगा, आप समय के पीड़ा से पीड़ित हैं। समय मेरा नहीं है, समय सदन का है। समय की सीमा मत बांधिए। समय सदन का है। सरकार समय चाहे इतना ले लीजिए आप। सरकार सर, मैं बोल रहा था कि अब गड़बड़ा जाता है ना सर। मैं कह रहा था मनरेगा अद्भुत काम किया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। मनरेगा इनका दिया हुआ था। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, मोदी जी मनरेगा बंद कर देंगे वगैरह वगैरह। मैं उसमें पीछे नहीं जाना चाहता, झूठ फैलाने का काम करते थे। यूपीए के 8 सालों में मनरेगा लगभग 2,15,000 करोड़ रुपए खर्च किए और हमारी मोदी सरकार ने 9 सालों में 3 गुना यानी 6 लाख करोड़ रुपया राशि खर्च करके गरीब मजदूरों के हाथ में काम देने का काम किया है और देश को मजबूत करने का काम किया। देश को मजबूत करने का काम किया। यही नहीं, जो उसमें बिचौलियों की व्यवस्था थी, बिचौलियां पैसा खा जाया करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था मैं यहां से भेजता हूं, 15 रुपए पहुंचता है, रास्ते में गायब हो जाता है। उस पर भी अंकुश करने का काम किया और बिचौलियों से मुक्त व्यवस्था के तहत मजदूरी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे मजदूरों के बैंक के खातों में देने का काम किया सर। फर्जी जॉब कार्ड हटा दिया, 80% जॉब कार्ड को आधार से लिंक कर दिया। इस साल मार्च तक 100% जॉब कार्ड आधार से लिंक कर दिया जाएगा। इनके समय में 17% एसेट क्रिएशन था जो बढ़ करके लगभग 60% हो गया। महिलाओं की भागीदारी जो 45% था वो बढ़ करके लगभग 56% हो गया। मजदूरों का स्किलिंग कर मजदूरी से बाहर निकालने के लिए उन्नति योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 90 दिन का ट्रेनिंग और 3 महीने का स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है। ट्रेनिंग के बाद बैंकों से लिंक करके उन्हें स्थानीय रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। मनरेगा की नई दिशा है। सड़क, मैं आ रहा हूं सर, समय पर खत्म करूंगा। महोदय सर, एक बात मैं कहना चाहता हूं सर, सड़क में मैं अपने श्रद्धेय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सर। उनकी सोच का ये परिणाम है। पहले गांव में सड़क का निर्माण केंद्र सरकार नहीं करती थी, कोई योगदान नहीं होता था, मगर मोदी जी ने गांव को सड़क से जोड़ने के लिए योजना लाया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो ग्रामीण परिवेश में जीवन जिनका बहुत खास्ते हाल था, उसके सोच के तहत मोदी जी ने अटल जी के कनेक्टिविटी जो कार्यक्रम थे उसको लिया और अपग्रेडेशन का काम किया। पीएमजीएसवाई अटल जी से लेकर के मोदी जी तक यात्रा हुआ है, उसमें 7,25,000 किलोमीटर बारहमासी सड़कों का निर्माण हुआ है सर, जिसमें 3,45,000 किलोमीटर का सड़क का निर्माण मोदी जी के सरकार में हुआ है और साथ साथ उग्रवाद प्रभावित इलाकों में पीएमजीएसवाई ने तो क्रांतिकारी परिवर्तन करने का काम किया है। आज गांव का तकदीर और तस्वीर बदल गया सर। कोई लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ट्रैक्टर जाता है, किसानों का धान आता है, चावल आता है, उसका जीवन ही बदल गया सर। इसलिए आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बहुत जल्दी आ रहा हूं सर। आपकी घंटी बज रही है, मैं देख रहा हूं सर। बिहार मैं आ गया, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम था सर, मैं उसको छोड़ देता हूं। प्लीज सेल्फ हेल्प ग्रुप सहयोग कीजिए, प्लीज सहयोग कीजिए। कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू कंक्लूड सर, डोंट वरी सर। मैं आग्रह कर रहा था सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप की चर्चा
एससीजी की चर्चा सर, बड़े पैमाने पर आज देश दुनिया में महिलाओं को जिस तरह से मजबूती प्रदान किया है सर, मैं उसके बारे में जितना कहूं वो कम होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप निश्चित तौर पर आज बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार देने में बहुत बड़ा काम किया है। मोदी सरकार के आने के पहले 2,35,00,000 एसएचजी ग्रुप से जुड़ा हुआ था, 88,000 करोड़ बैंक लीकेज था, 9.85% एनपीए था। लेकिन मोदी की सरकार आने के बाद सर 9 करोड़ महिलाओं को एसएचजी से जोड़ा गया, जिनको 6 लाख करोड़ का बैंक लीकेज दिया गया। परंतु एनपीए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसएचजी ग्रुप के महिलाओं को, जिसने एनपीए मात्र 2% है सर। तो ये परिवर्तन हुआ है जी। और इस परिवर्तन के बाद मैं बिहार पर आता हूं सर। अंत में सुप्रिया सुले जी, बस 2 मिनट में, आप 2 मिनट से 3 मिनट सब बिहार पर आता हूं सर। बिहार में Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on such a serious रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, अब कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। सुप्रिया जी। Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on such an important topic as the union budget. Sir, the finance ministry seems to have slipped a few points while writing about the budget. The issues of unemployment, recession, poverty, inflation, growth versus inflation challenges, import and export imbalances. Sir, one of the union cabinet ministers was in Pune district about 2 weeks ago, and he in one of his speeches mentioned that India is going to go into recession by June. So I see the disparity and a challenge in this government, because the Honorable Finance Minister talks nothing about employment, recession, poverty, inflation. But there are 3 or 4 places where it's highlighted. Her colleague in the cabinet talks about India going into recession by June. So what is the government stand? The finance minister is not talking about recession, but the union cabinet minister is talking about recession on record. So what is the real picture? Because what we read in the media, what is happening around us is slightly different. Sometimes I feel this entire government is like a fairy tale. They have an alternative reality. I heard one of the honorable speakers talking about cooperative movement. I was so happy. Cooperative movement महाराष्ट्र और गुजरात में, कर्नाटका में बहुत अच्छा चला है। आज इस सरकार को दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन कॉर्पोरेटिव्स को प्यार होने लगा, ये अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। उसके बाद ऑर्गेनिक्स, अच्छी बात है, आई वेलकम इट, आई एब्सोल्युटली वेलकम इट। The organic farming, sir, that is a very concerning and alarm. I'm not taking away from the intent of the government. I welcome the step of organic farming. We welcome it. But I put a small caveat to it. Sri Lanka, which is our neighboring country, proposed and promoted organic farming and had a huge food crisis. I'm saying this purely academic, not as a criticism. It is just a suggestion I'm making to this government that organic is a good step forward, but with the kind of infrastructure, the entire agriculture land is going for roads, infrastructure, which is natural, happens everywhere in the world. But our population is not going down. The number of mouths they are feeding are as many, if not more. So if we are going to depend on organic, will you be able to look at our food for all program, which is a challenge. So I want to flag it for jingoism. It sounds wonderful, but I hope the government is alarmed and is aware. It's okay to give speeches, it sounds wonderful. And it's appalling to me. इतने किसान के बच्चे हैं तो मिलेट्स कोई नई बात है इनके लिए। बोलते हैं कि हम गांव से आते हैं, गरीब है, शोषित है, पता नहीं क्या क्या भाषण करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मिलेट्स, हम तो जब से पैदा हुए मिलेट्स खा रहे हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में तो ये श्री अन्ना, ये शायद बहुत लोगों के लिए नया होगा। मेरी माँ के घर में आज ही बाजरा और ज्वार और यही चलता है, दूसरा कुछ नहीं, ना पास्ता चलता है, ना गेहूं की रोटी भी ज्यादा चलती है, क्योंकि किसान के हर घर में ये कोई नई बात नहीं है। तो ये और एक जिंगोइझम जो शुरू किया महाराष्ट्र में, आप किती मराठी माणसाच्या घरी गेला तर आपल्याकडे भाकरी असते की आपल्याकडे सकाळी चपाती संध्याकाळी भाकरी असते, कौन सी बड़ी बात है इसमें? But I really want to bring it that I appreciate, but they should look into it. Sir, you are talking about poor people. Manikam Tagore, my colleague, talked about a very, very sensitive and important subject of the pension scheme, which is called ESOP. Now, I really want to know
they met. This is the National Agitation Committee. I still remember, unfortunately, with great humility and lot of respect in my hand, I'm quoting Shri Arun Jaitley ji. If you remember, before he became the finance minister, when he was leader of opposition, he had gone to this agitation. Please don't get me wrong, with great respect I'm taking his name, I'm not criticizing him, because I have a lot of regard for Arun ji in my heart. I'm just putting the context, that's all. So there were 60 lakh pensioners who have been on एक दिन की भूख हड़ताल की उन्होंने, पेंशनर्स है सर, और वो 4 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले थे और प्रधानमंत्री जी ने उनको वायदा किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पे हम अमल करेंगे. He committed them. I'll tell you sir, I'd like to tell you what, and coincidence, भगत सिंह कोश्यारी जो हमारे गवर्नर साहब है, उनकी एक कमेटी थी और उसने कोई रिपोर्ट दिया था, उसके बारे में इस सरकार ने 9 साल में कुछ नहीं किया अभी तक. And the commitment the honorable Prime Minister had made in the meeting that he had given, he had met them, to be precise, on 4th of March. He had committed to give all these pensioners who have worked very hard and given money. Sir, these pensioners have contributed 417 rupees, 541 rupees, 1215 rupees every month from their salary, sir. And what is the monthly pension they're getting? It varies from 460, 460 रुपया, sir. आप सोचिए, आप संवेदनशील है, आपको पता है 460 रुपया में क्या किसी का होने वाला है. So I'm just making a suggestion to this government. Why not, like you have a GST council, why don't you take all governments, because this is not only our problem. There's the old pension scheme. Now Chhattisgarh, I think Punjab, and 2-3 other states, Rajasthan, have started the old pension scheme. So why don't we all put like a GST council? Why don't you put something? Because this is a problem in every state. It's not only in my state or your state or your state. Why don't you make a good council for pensioners? They have built this nation. We have inherited nation from them. So I request you that please get all these old pensioners together, do a council, and let's see how we can work together for the states and the state to work together. So that is really. Sir, ye Amrit Kal ki baat karte hai. I want to ask them, I'll make it very short now, only questions. That the cess that this government collects for education, now everybody is saying education mein kam paisa aaya hai, even the Asar report says that. Same situation for health. So if so much cess is connected for health, for education, for agriculture, where does it go? Now the other question, sir, is for this किसान बहुत मैंने सुना, अच्छा लगा मुझे किसान का सुन के. लेकिन 2 pointed questions I want to ask, because I want to know from this government. This PM Kisan payment, 6,000 रुपया आप डालने वाले थे, आपने कहा ये 8,000 डालेंगे. I welcome it. 16 करते तो और डबल ताली हम लोग बजाते आपके साथ. लेकिन because the cost of cultivation has gone up by 20%. So I expected more for this over generous government. But I want to ask, the expenditure in this budget shown is at the same. So same number of farmers, same amount of money, then should this 60,000 crores become more? Now, market intervention scheme, I still remember, sir. It was a wonderful scheme. We also supported it. So if the market intervention scheme had 1,500 crores, how come it's only 1 lakh? I'm not sure. Maybe it's a typing error. You must find out, sir, what it is. They're all boasting about the PLI scheme, sir. What is new in the PLI scheme, sir? Please explain to me. There is nothing for the new sector in this government. MSMEs की इतनी बात करते हैं. Half of them are sick after this. We really need to look into it, sir. And 2-3 very short points I'll make it, sir. In this, the ATC deduction, which Premchandran ji also talk about. Sir, what will happen? I'm not a capitalist, not I'm a socialist. I do understand you have to take the middle path if we are going ahead in this government. For the future, because we are a global economy, we are a global player, we are not insulated anymore like we used to be. My question is now all these tax benefits which you're giving, and it's again jingoism, sir, but I would like to ask this government that if in this tax benefit you are not encouraging them to invest in LIC. So if you're not going to invest in LIC, what is going to happen to our insurance? You want the whole country to be insured. Not even 4-5% people in this country are insured, sir. No, so this, and one last point, sir, about cooperative federalism. Just last, I promise I have lots to speak, but I'm only taking. Sir, in cooperative federalism, this was late Arunji's favorite word. He used to give confidence to every state, even if we have ideological differences. I would like to bring to this notice that if there is cooperative federalism, you want to help the states, why is it not reflecting in this budget? Sir, according to the 14th Finance Commission, you are supposed to give 42% of this tax reverse is supposed to be given to states. We were at
33%. In this budget, it is 30.4. अगर आप मुख्यमंत्री बन के जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी. So everybody has to think, sir, we cannot do this to the states. States are just recovering from the pandemic. So how will states survive? Ram Shiromani Verma ji. So you please consider this and please look at price rise and inflation. It's a serious concern in this country and we are not an insulated economy anymore. So I request the Honorable Finance Minister to address all these issues. Thank you. 5 मिनट में बात पूरी कीजिए. सर जी. माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया. माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं. माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे सांसद महोदया ने कहा कि एमएसएमई आधी से ज्यादा रुग्ण है. मैंने बताना चाहता हूं कि एमएसएमई ही है जिसकी वजह से आज हमारा जो करीब 6.3 करोड़ जो एमएसएमई है उसका योगदान भी 33% के आसपास जीडीपी का आता है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी 48% जाता है. वो 60% नहीं है. एक रिपोर्ट के आधार पर 96% है वो सारी की सारी जितनी भी हमारी एमएसएमई है वो ग्रोथ कर रही है और आगे बढ़ रही है. I was saying was not about MSMEs. The numbers were about state, 14 Finance Commission, not about MSMEs. जो टैक्स जाता है स्टेट्स को उसके बारे में सर बोल रही थी, मैं इसके बारे में नहीं बोल रही थी. वर्मा जी प्लीज. ठीक है. ओके माननीय ओके जी. बात दूसरी थी वो 14th फाइनेंस कमीशन में जो हाँ ठीक है चलिए कोई बात नहीं. ठीक है. हाँ ओके कोई बात नहीं. ठीक है. माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण पर चर्चा में भाग लेने का कंट्राडिक्शन नहीं है. उनकी बात आ गई. उनकी बात इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. महोदय, बजट भाषण के अंदर 174 नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ करने की घोषणा की गई है. ये अच्छी बात है, लेकिन बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की बात की जाए तो अब भी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाओं, नर्सिंग स्टाफ एवं विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर की भारी कमी है. मेरे संसदीय क्षेत्र के जिले बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज चालू अभी नहीं हो सका है. साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पिछड़ा जनपद लोकसभा क्षेत्र मेरा आता है, उसमें मैं चाहूंगा कि एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए. एवं अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में आज भी नॉर्मल बीमारी के अलावा कुछ खास सुविधा उपलब्ध नहीं है. मरीजों की दवाइयों की कमी और समय पर इलाज और जांच जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है. अस्पताल में आने वाले मरीजों को कभी दवा के नाम पर तो कभी जांच के नाम पर बाहर जाना पड़ता है. यहाँ अभी भी सुविधा न होने के कारण मरीजों को तुरंत लखनऊ रिफर कर दिया जाता है और उनमें से अधिकांश गरीब मरीज अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराने के लिए मजबूरन इलाज के नाम पर अपने पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई को गंवा बैठते हैं. अगर इन गंभीर रोगों की जांच व इलाज की सुविधा प्रारंभिक स्तर पर जिले में ही हो जाए तो इनकी जान समय से रहते बचाई जा सकती है. सरकार को इस ओर भी विशेष ध्यान देकर एक मजबूत हेल्थ सिस्टम, लोगों की बढ़ती हेल्थ केयर जरूरतों एवं एडवांस मेडिकल एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर तमाम मेडिकल सुविधाएं जिले पर ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए. मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती बलरामपुर जो आकांक्षी जनपद की श्रेणी में आता है, महोदय, बहुत बड़ी समस्या है कि जिस तरीके से बहुत दूर दूर से चल करके महिलाएं जो टीचर हैं 700-800 किलोमीटर दूर से चल करके आती हैं अपने घर परिवार को छोड़ करके, और वो आज भी 10 साल 15 साल से वहाँ कार्यरत हैं. उनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है. मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनका भी ट्रांसफर अपने गृह जनपद में कराया जाए. साथ साथ महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती पर्यटन के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है. यह एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है. यहाँ देश दुनिया से लाखों बौद्ध अनुयायी और पर्यटन स्थल घूमने आते हैं. यहाँ सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो करीब 452 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो विशाल प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता से भरा है, जिसकी दक्षिणी छोर से होते हुए बौद्ध अनुयायी कपिलवस्तु, लुम्बिनी और कुशीनगर को जाते हैं. श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के करीब 24 वर्ष बिताए थे और यह
उनके जीवन काल के दौरान देश के 6वां सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ प्राचीन पुरातत्व, महाट और कच्ची पक्की कुटी, विभूतिनाथ टेम्पल, सीता द्वार, विपासना मेडिसेंटर, अंगुलीमार और अनेक बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। सरकार को यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष ध्यान देने की जरूरत है। महोदय, बजट भाषण में श्रावस्ती एयरपोर्ट की जिक्र नहीं हुआ है, वो काफी दिनों से बन रहा है। मैं चाहूंगा कि कम से कम मेडिकल कॉलेज को जल्दी से जल्द बना करके वहां से भी उड़ान चालू किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपदों श्रावस्ती और बलरामपुर में हर वर्ष राप्ती नदी में आने वाली भीषण बाढ़ और वर्षा के कारण कई सौ गांव पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं, जिस कारण प्रतिवर्ष जान माल की भारी क्षति होती है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और लोगों के घर नदी में बह जाते हैं। सरकार से मांग है कि राप्ती नदी और उसका सहायक जो छोटी छोटी नदियां हैं की सफाई की जाए और खुदाई की जाए, जिससे राप्ती नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे बंधे बनाए जाएं, जिससे नदियां गहरी हो जाएंगी और बरसात का पानी सुचारू रूप से बह पाएगा। महोदय, मौजूदा बजट में बहुत श्रावस्ती जनपद में आज तक जो रेल लाइन का प्रोग्राम था, वहां कई वर्षों से रेल लाइन बनाने की व्यवस्था चल रही है। अभी आज भी बहराइच, खलीलाबाद, भिनगा, बलरामपुर, उतरौला, डुमरियागंज, मेदावल और बासी रेल लाइन का मंजूरी तो पता लगता हो गया है, लेकिन अभी भी वहां जमीनी स्तर पर कोई योजना चालू नहीं की गई है। आज पेट्रोल और डीजल व रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। घरेलू गैस खुदरा बिक्री कीमत 1 मार्च 2014 में लगभग 410 रुपये प्रति टन और 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर जो है लगभग 1100 में बढ़कर आज 1100 रुपये भी अधिक हो गया है। महोदय, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि रसोई गैस की कीमत कम किया जाए। महोदय, अभी भी 4 दिन पहले हमारे लोकसभा क्षेत्र श्री सुनील सोरेन सर एक मिनट सर जी कंप्लीट कीजिए सर। आज भी पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आज हमारा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती जो है, अभी 4 दिन पहले वहां का मामला था। ये छुट्टा जानवर जो है पूरे एक जमनाह तहसील है, पूरे किसान जितने हैं उधर क्षेत्र के किसान, उनको खदेड़ करके उस जमनाह तहसील में कैद कर दिया गया और काफी संख्या में जो काम था उसको रोक दिया गया। तो इस पर भी ग्राम सभा स्तर पर गौशाला बनाने का विशेष ध्यान दिया जाए। और एक लास्ट पॉइंट मेरा है महोदय, वित्त मंत्री का ध्यान में ईंट भट्ठा व्यवसायी जो बहुत बड़ा व्यवसाय है, वो लगभग पूरे देश में आज जो स्थिति है, मैं भट्ठा व्यवसाय की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसपे जो टैक्स जीएसटी लगाई गई है उसको थोड़ा सरलीकरण किया जाए, जिससे किसानों, गरीब मजदूर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2023-24 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अमृत काल का पहला बजट है जो कई मायनों में दूरदर्शी एवं देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला बजट है। महोदय, यह एक ऐसा बजट है जो आत्मनिर्भर भारत की हमारी संकल्पना को एक दिशा देता है। इस बजट में सभी क्षेत्र के नागरिकों को, विशेषकर युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को एवं अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अनुसूचित जाति और जनजाति का विशेष ध्यान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड महामारी के बाद संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। ऐसे सुस्त पड़ते अर्थव्यवस्था के बीच आशा की किरण केवल भारत ही है। यह मैं नहीं, विश्व की कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था भी कह रही है। जहां एक और हमारी सरकार की कोविड के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को
मुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराकर जीवन की रक्षा की है। वहीं दूसरी ओर हमने अर्थव्यवस्था की सशक्त बनाने के लिए कई कार्य किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के दौरान केवल हमने अपने देशवासियों को दवाएं और वैक्सीन उपलब्ध कराए, बल्कि जरूरतमंद देशों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराए। हमारी सरकार की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की रही है। यानी हमारी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का समर्थन करती है। यह खुशी की विषय है कि इस वर्ष भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। भारत में सदा ही संपूर्ण विश्व को अपना एक परिवार माना है। इसलिए इस वर्ष G20 की थीम भी वन वर्ल्ड, वन फैमिली और वन फ्यूचर है। आज हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टता का ही परिणाम है। उसके नेतृत्व में, हमारा कुशल मार्गदर्शन में भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुआयामी कार्य किए हैं। खेती किसान से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर तक, सड़क से लेकर वायु मार्ग तक बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार ने समुद्र को और जल मार्गों को एक एसेट के रूप में माना है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जनजातीय क्षेत्र में सुदूर उत्तर पूर्व क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है, जिसका परिणाम है कि इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में से लेकर कई क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कुशल रणनीति का ही परिणाम है आज प्रति व्यक्ति करीब 9 वर्षों में 2 गुना आय हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होंगे। जहां तक डिजिटल भुगतान का प्रश्न है, वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान किया गया है। हमारे देश के नागरिकों को सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। जहां एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए हैं, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया है। लगभग 8 करोड़ लोगों को नल से जल प्रदान किया है। महोदय, 45.58 करोड़ लोगों को जन धन खाता से जोड़ा गया है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 44.6 करोड़ लोगों से भी अधिक जोड़ा गया है। वहीं कोविड-19 के दौरान 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण किया गया है। अब तक टीकाकरण का आंकड़ा 2020 करोड़ से पार कर गया है। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा को लेकर कितनी चिंतित है। हमारी सरकार ने अब तक पीएम समान किसान निधि के 11.4 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का नगद हस्तांतरण किया है। ये सराहनीय है। समावेशी विकास एवं अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचाने की जो अवधारणा है, वह हमारे बजट में स्पष्ट दिखती है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधा के बढ़ोतरी के लिए दृष्टिगत रखते हुए मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। महोदय, हमारी सरकार का ध्यान स्पष्ट रूप से जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की योजना है कि अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिनमें 38,000 अध्यापकों और सहयोगी कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा। महोदय, निश्चित ही इस कदम से आदिवासी इलाका में रहने वाले
विद्यार्थियों का सीधा लाभ होगा। महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता हूं और मुझे कहते हुए ये खुशी हो रही है, जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब तब आदिवासियों का जो सम्मान दिया है कोई पार्टी ने देने का काम नहीं किया है। इस बात का मैं सबूत देना चाहता हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूं। उसके कालखंड में आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम किया, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है राष्ट्रपति पद तक को पहुंचाने का काम किया है जनजातीय महिला को। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, झारखंड के हेमंत सोरेन के सरकार को, जो अपने को आदिवासी का हितैषी समझता है, मैं चुनौती देता हूं कि आज तक अपने राज्यसभा में एक भी आदिवासी को भेजने का काम नहीं किया। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, झारखंड में आज ऐसे गठबंधन के सरकार है जिन्होंने झारखंड के साथ नाइंसाफी की है। समाप्त कीजिए। आज निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं महोदय, झारखंड में ऐसे लोग हैं जो झारखंड आंदोलन को दबाने का काम किया, झारखंड को बेचने का काम किया, झारखंड को जो है लाश पर बनाने का बात किया। ऐसे गठबंधन जो है सरकार है, इससे भलाई होने वाला नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, इस हेमंत सोरेन के राज में जिन्होंने उनके पिताजी ने झारखंड के सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा सभापति महोदय कि बजट पर 2 दिन से जो चर्चा हो रही है और पक्ष विपक्ष के 2 दर्जन से ज्यादा साथियों ने। सुनील सोरेन जी प्लीज अब बैठ जाइए। हनुमान जी। सर, सदन के अंदर जो 2 दिन से बजट पे चर्चा हो रही, पक्ष विपक्ष के 2 दर्जन से ज्यादा हमारे साथी सदस्यों ने, पक्ष के लोगों ने बजट को सही बताया, बजट के पक्ष में बखान किए और विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाए। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इसके अंदर ये चाहता हूं कि जब एनडीए 2 बनी, एनडीए की पहली सरकार बनी, देश ने बहुत बड़ी उम्मीद लगाई, नौजवान, किसान, प्रत्येक वर्ग ने, कि अब 50 साल से जो छुटकारा हुआ था अब जाके कुछ ठीक होगा। लेकिन इस बजट में कोई बहुत ज्यादा अभी नजर नहीं आया। मैं कुछ सुझाव भी दूंगा कि वापिस जब वित्त मंत्री जी रिप्लाई दे तो उसमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। मतलब सब्सिडी योजनाओं की धनराशि में कटौती, केंद्र सरकार के 23-24 के आम बजट में सब्सिडी योजनाओं की धनराशि में बड़ी कटौती की गई। इसके साथ ही कई सब्सिडी योजनाओं का बजट खत्म कर दिया। सरकार ने खाद्य सब्सिडी के बजट में 89,844 करोड़ रुपए की कटौती करते हुए 197 में 350 करोड़ रुपए कर दिया। 22-23 के संशोधित बजट अनुमान में खाद्य सब्सिडी 2,70,194 करोड़ रुपए की थी, यानी खाद्य सब्सिडी के बजट में 31% से अधिक कटौती हुई है। उर्वरकों को दी जाने वाली सब्सिडी में भी 50,121 करोड़ रुपए की कटौती हुई, जो 22-23 से 22% कम हुई है। सभापति महोदय, आप यहाँ नहीं सिखाएंगे। सभापति महोदय, कोरोना काल के अंदर देश में अनगिनत मौतें हुई, सरकार ने वास्तविक आंकड़े छुपा लिए। इस पूरे दौर में भी यूरोप में भी जारी अशांति के बीच 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी स्थिर रह गई थी। केवल देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती किसानी की वजह से और आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात पर भी सरकार खरी नहीं उतरी। सरकार अपने भाषणों रिपोर्ट में खेती किसानी के विकास के आंकड़े तो दिखा देती, लेकिन जमीनी हकीकत हो रही है। 22-23 आर्थिक सर्वे में कृषि क्षेत्र की सालाना औसत वृद्धि दर 4.6% बताई गई, लेकिन उन्हीं आंकड़ों को ध्यान में देखकर तो पता चलेगा कि कृषि क्षेत्र की सालाना 4.6% औसत वृद्धि दर स्पष्ट तस्वीर नहीं पेश करती। वर्ष 14-15 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि 0.2%, 15-16 में 0.6%, 18-19 में 2.1 न्यूनतम स्तर पर। इन्हीं सभी वर्षों को सूखे का सामना करना पड़ा था, जबकि 16-17 में 6.8, 17-18 में 6.6, 19-20 में 5.5, 20-21 में 3.3 और 21-22 में 3% की औसत वृद्धि दर मानसून के बल पर ही बेहतर रही। अब आप ये मत कहना कि अच्छा मानसून लाने का आप भी लेकर, ये सर आप लोगों ने मानसून की वजह से हुआ था। सभापति महोदय, आपने कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में चुनाव थे, पैकेज दिया, अच्छी बात है, कर्नाटक वाले भी हमारे भाई है, चुनाव थे मतलब अब आगे चुनाव है, तो राजस्थान के अंदर भी चुनाव है। हमें बड़ी उम्मीद थी
कि राजस्थान को भी चुनावी वर्ष के अंदर कुछ मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, हमारे जो विशेष राज्य के दर्जे की लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, हम पूरे मापदंड भी पूरे करें, लेकिन राजस्थान को इसके अंदर बजट में राजस्थान का नाम भी नहीं लिया गया। राजस्थान से हमारे करीब 6 से ज्यादा मंत्री हैं, राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। कृषि क्षेत्र में सरकार का अपना निवेश घटता जा रहा है। वर्ष 14-15 में सरकार का कृषि क्षेत्र निवेश 5.4%, 2021 में कृषि निवेश घटकर 4.3% हो गया था। सभापति महोदय, ग्रामीण रोजगार जो के मामलों में भी सरकार ने निरस्त किया। 6 जनवरी 23 तक कुल 225.8 करोड़ श्रम दिवस पैदा किया गया, जो कि वर्ष 18-19 में 266.9 करोड़ श्रम दिवस के मुकाबले काफी कम है। इस बात के संकेत बीते 2 वित्त वर्ष से मिल रहे हैं, क्योंकि बीते दो वर्ष में बजट में मनरेगा के लिए फंड का प्रावधान लगातार कम किया जा रहा है और इस साल के बजट में मनरेगा के लिए फंड में सबसे भारी कटौती की गई है, जो चिंता का विषय है। तो सुनो, बाद में बताया ना, बाद में अपन दोनों बात कर लेंगे जरूर जी। इनकम टैक्स सभापति महोदय, जब मैं बजट सुन रहा था तो बहुत ऐसा है, कोई देखो मैं कॉमर्स का कोई फाइनेंस का उसका स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन बजट जब सुना तो ये खुशी हुई कि यहाँ कहा कि 7 लाख तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। फिर ये पता लगा पूरा कि जो अब ये पता चला कि नए टैक्स सिस्टम में ही बदलाव किया, जो नया टैक्स भरेगा उसको ही 7 लाख वाली छूट है। मेरी इसमें मांग है कि पुराने सिस्टम में भी 7 लाख तक की सालाना सैलरी में 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 80C की अधिकतम छूट 1.5 लाख लगाकर 5 लाख की राशि बैठी, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। नई टैक्स प्रणाली देश के मध्यम वर्ग के लिए और घातक है, क्योंकि बीमा 8OC के अंदर हो रही पोस्टल पॉलिसी में हो रही बचत को प्रोत्साहित करती है। एक मध्यम वर्ग के करदाता के भविष्य की स्थिति, सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा का ध्यान भी सरकार को रखना चाहिए। उनके भविष्य के लिए एक सामाजिक सुरक्षा बनाए। जरा सोचिए कि 20-25 साल बाद, आपने कहा 20-25 साल बाद ही होगा, तो कोई जिंदा रहेगा तो होगा, तो बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, क्या पता चलता। कोरोना की तीसरी लहर आ गई फिर क्या होगा। उसके पास आय का स्रोत नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा। इसलिए मेरी सरकार से मांग है सभापति महोदय कि मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए पुरानी टैक्स प्रणाली में 7 लाख की जो है इसको बढ़ा के 10 लाख की जाए और उसको आम आदमी को इसमें राहत मिलेगी, कोई टैक्स नहीं लगे, ऐसा बदलाव इसके अंदर लाया जाए। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, कनेक्शन आपने दिए, लेकिन गैस की महंगी दर गरीब आदमी कैसे वहन करेगा। गरीबों को दी जाने वाली LPG सब्सिडी भी 75% कमी कर दी। 22-23 के संशोधित अनुमान 9,170 करोड़ से घटाकर 2,257 करोड़ रुपए कर दी गई, यानी 6,913 करोड़ रुपए की भारी भरकम कटौती की गई, जो सरकार की मंशा पर सवालिया निशान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 12 अप्रैल 2022 को जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार भारत में ग्रामीण उपभोक्ता खाद्य महंगाई में मार्च 21 से मार्च 22 में 100% का इजाफा हुआ। 21-22 में भारत की वार्षिक थोक मुद्रा 13% जो 10 है। इसमें खाद्य एवं ईंधन के बड़े मूल्य की बड़ी भूमिका रही। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब कच्चे तेल की औसत कीमत $98.97 प्रति बैरल थी, जो 21 में घटकर $70 प्रति बैरल थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ी। आज कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल। मेरी मांग है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और कीमत और अधिक कमी करके देश की जनता को राहत दी जाए। सभापति महोदय, लुधियाना से जो पानी आ रहा राजस्थान के अंदर पीने का, वो हमारे नागौर भी आ रहा, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जो इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है, वो वहाँ कैंसर ट्रेन चलती है बीकानेर, जिस नाम का कैंसर ट्रेन है, उसके अंदर लुधियाना की फैक्ट्रियों को जो रसायन उर्वरक डालते हैं, जो गंदा पानी पड़ता है, उससे लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है। केंद्र सरकार ने वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कुछ पैसा दिया है। मेरी मांग है, इसमें लुधियाना के MP साहब बिट्टू जी भी लगातार प्रयास कर रहे थे। एक मिनट साहब, पूरी बात तो करना था, 1 मिनट। तो मेरी मांग है कि ट्रीटमेंट प्लांट उस क्षमता का बने, केंद्र पूरा पैसा दे, जिससे राजस्थान सहित पंजाब के अंदर पीने का शुद्ध पानी लोगों को मिले, कैंसर से मुक्त। सभापति महोदय, मेरे राजस्थान में 1-2 मिनट में पूरी बात समाप्त करूंगा सर। मेरे राजस्थान में पानी की किल्लत है, जहां नागौर और पश्चिम राज्य पानी की कमी से वर्षों लोग जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 1981 में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों का आदि जल बंटवारे लेकर जो समझौता हुआ, उसके अनुसार आज भी राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। ताजेवाला हेड से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। महोदय, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, 1 मिनट मैं सुझाव देकर समाप्त करूंगा। राष्ट्रीय परियोजना घोषित ERCP, आखिरी वाक्य बोलिए प्लीज। 1 मिनट घोषित करने की बड़ी उम्मीद थी, जिसको आपने पूरा नहीं किया। मेरी मांग है कि ERCP जो राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की बहुत बड़ी परियोजना, उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। भाजपा और कांग्रेस को लेकर राजनीति नहीं करे। सब मेरा कुछ सुझाव है
वो मैं एक मिनट सुझाव दे देता हूँ। मेरे सुझाव है साहब, आप 1-2 मिनट का दे साहब, लास्ट तक बैठते हैं हम लोग। तो 10 मिनट का तो आपने कहा ही था, अभी तो 6 मिनट ही नहीं हुए मेरे। अब रामकृपाल जी का 15 मिनट टाइम बढ़ाया तो 2 मिनट में भाई आप। सभापति महोदय, मेरी कुछ प्रमुख मांगे। बजट में आपने अग्निवीर योजना में बजट देने की बात कही। मेरी मांग है कि अग्निपथ योजना को बंद करे ताकि सेना का मनोबल बना रहे। सेना में ऐसी प्रथा ठीक नहीं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी से तमाम पैरामिलिट्री के जवानों और केंद्रीय कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से प्रारंभ की जाए। समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटी कानून बने। सर बाजरा, 1 मिनट साहब सुनिए, बाजरा केंद्र सरकार 2325 रुपए समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद की रेट तय करके, लेकिन राजस्थान में बाजरा खरीदा नहीं गया। तो केंद्र को कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए। और बाजरा का जो हमारा एक सेंटर है, 1 मिनट साहब, सभापति महोदय 1 मिनट पूरी करने दे बात सर। सभापति महोदय 1 मिनट मेरी बात समाप्त करने साहब, 1 मिनट। सभापति जी, मेरा निवेदन था कि बाड़मेर के अंदर, सभापति जी 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ साहब, 1 मिनट। सभापति जी 1 मिनट बात समाप्त करना साहब। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 23-24 का ये जो यूनियन बजट आज सभी इस पे डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मैं अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना सर कि ये बजट अच्छा नहीं है या बजट में बहुत सारी कमियां हैं या कमतरता है। मुझे आपसे ये गुहार लगानी है सर, क्योंकि हम जिस स्थिति से ये देश गुजरा है 2 साल कोविड के पीरियड में, उसके बाद ये अपेक्षित नहीं था देश को इतना स्टेबल रखना। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली अगर हमने देखा तो आज हम 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आए हैं। अगर बाकी कंट्रियों को हम देखते हैं तो आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि 1 किलो आटा 200 रुपए में मिल रहा है। यूरोप की स्थिति, अमेरिका की स्थिति अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है ये हाउस में जो अच्छी चीजें हैं उसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। जितना भी नेगेटिव बोलना है, सिर्फ नेगेटिव पे नेगेटिव, फार्मर्स को किस तरीके से मदद कर रही है ये सरकार। मुझे लगता है कि देश के फाइनेंशियल हमारे जो मंत्री हैं, कराड़ साहब हैं, निर्मला सीतारामन जी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने देश को डूबने नहीं दिया। इस स्थिति के बाद, कोविड के बाद उसे उतना मेंटेन रखा और उसे उतना बजट दिया कि आगे देश बढ़ने के लिए जो लाइन चाहिए उसके लिए काम किया, ना कि आज ये सर रूडी साहब, ये नहीं स्थिति आई है कि जो दूसरे देशों में कि 200 रुपए किलो आटा मिलने की स्थिति हमारे देश की आज नहीं है। वो उसका पूरा क्रेडिट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। मैंने हमारे बहुत सीनियर अंकल हैं कोलकाता से, वो बोल रहे हैं आवास योजना की बात उन्होंने यहाँ पर रखी कि आवास योजना 22 तक ये कंप्लीट होना चाहिए था। देश के हर महिला को उनका घर मिलना चाहिए था, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। मुझे बताइए कि ये घर में, ये फ्लोर पे या प्रधानमंत्री जी ने आवास का वादा किया था तो वो उसके लिए पूरा करने के लिए भी फंड हर इसमें बजट में वो घोषणा कर रहे हैं कि हर महिलाओं को उनका पक्का मकान मिलना चाहिए। कई त्रुटियां होती हैं कई राज्यों में, राज्यों के प्रॉब्लम के वजह से वो फंड नहीं देते करके वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आवाज है, वो पूरा नहीं हो सका। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया, हमने जितना समझता हमारी उम्र के हिसाब से, हम पहली बार ये पार्लियामेंट में आए, पर हमारी अपेक्षा प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एमएसएमईज को 2 लाख करोड़ देकर उन्हें मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट सर। कोविड के बाद इतनी अपेक्षा नहीं थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, एमएसएमई को इतना मजबूत करने के लिए इतना बड़ा फंड देके उन्हें जो टैक्स में रिलैक्सेशन दिया है। कुछ त्रुटियां, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि आने वाले समय में वो प्रॉब्लम्स हमें एमएसएमई वालों के लिए सॉल्व करना चाहिए। और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सर 25 और 27 तक हमारे महाराष्ट्र में काफी रेलवे स्टेशन लिए कि मॉडर्न रेलवे स्टेशन उसे बनाना है। उसमें बंडेरा स्टेशन है जो 25 तक पूरा होगा, 27 तक हमारा अमरावती स्टेशन है और भुसावल डिवीजन के, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे स्टेशन, उसका भी नया काम होगा। सर कौन कहता है महाराष्ट्र को पैसे फंड नहीं दिए गए? हम महाराष्ट्र से एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 2022 और 23 में 11,000 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र को दिए गए थे, रेलवे बजट में आवंटित किए गए थे। और 23 और 24 में 13,500 करोड़ रुपीस दिया है। तो कौन कहता है बजट में हम नीचे गए? बजट में हमने बढ़ोतरी की है, हमने बढ़ाकर हमारे राज्य को बजट दिया। इरिगेशन में सर महाराष्ट्र को 800 करोड़ दिया गया है, रूरल कनेक्टिविटी को 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं,
और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र में 585 करोड़ रुपीस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्रोजेक्ट के लिए 786 करोड़ सर, स्टेट को हेल्प करने के लिए 1,30,000 करोड़ का एक बैलेंस अमाउंट बनाया। जितनी स्टेट मांगेगी उसके अकॉर्डिंगली राज्य सरकार को केंद्र सरकार देगी। उसके लिए मैं केंद्र सरकार का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं सर। कौन कहता नहीं मदद कर रहे हैं, कौन कहता है कि बजट में नहीं है? सर हमारे बन्नेरा में वैगन कारखाना है जिसका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया है। उसके लिए 23-24 के बजट में 40 करोड़ से भी ज्यादा हमारे वैगन कारखाने को मिला है। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि उसका भी जल्द से जल्द लोकार्पण करके वहां पर रोजगार की एक लाइन शुरुआत की जाए, उसके लिए मैं आपसे विनती करूंगी। और सर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे मिनिस्टर सर यहाँ बैठे थे। जल जीवन मिशन में हमारे रूरल एरियाज में और ट्राइबल एरिया में जब कभी किसी ने नल से जल मिलने की नाम भी कभी नहीं सुना था, हर गांव में, हर ट्राइबल क्षेत्र में, हर घर में नल की योजना, वहां पे पानी की टाकी, जो पाइपलाइन का काम, ये जल मिशन के अंतर्गत हो रहा है। और सुबह ही हमारे मंत्री महोदय ने यहाँ पर हमारे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब की तारीफ की कि जिस तरीके से हमें राज्यों का अपेक्षित है केंद्र को साथ देना, उसी तरीके से उससे कई ज्यादा साथ हमारे देवेंद्र फडणवीस जी दे रहे हैं। और जल जीवन मिशन का जो टारगेट है वो महाराष्ट्र में पूरा करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं। एयरपोर्ट में सर 75 सालों में जो एयरपोर्ट के नंबर्स भी पूरे नहीं कर सके, ये 8 वर्षों में ये सरकार ने उतने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा ये अपने इस बजट में की है। तो मुझे लगता है हमारे जैसे क्षेत्र, रूरल क्षेत्रों से आने वाले लोगों को अमरावती क्षेत्र के लिए 75 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। तो मैं सिर्फ विनती करूंगी जल्द से जल्द उसका काम पूरा हो, जिससे हमारी अमरावती भी आने वाले समय में उड़ान भरे। हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, नर्सिंग कॉलेजेस हो, यही सब होता है जब आप देश के अर्थव्यवस्था है, जब बजट के बारे में चर्चा करते हैं तो सामान्य लोगों को आपसे यही अपेक्षा है। सर 1 मिनिट दीजिए सर। तुम टेक्सटाईल पार्क मी कराड साहेबांना विनंती करन की मागच्या वर्षी जो लास्ट टाइम पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने टेक्सटाइल पार्क घोषणा की थी कि कई राज्यों में, कई डिस्ट्रिक्टों में हम टेक्सटाइल पार्क देंगे। हमारा क्षेत्र कपास उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जिला है, तो टेक्सटाइल पार्क की हमने वहां से भी डिमांड की है। महाराष्ट्र से भी रिकमेंडेशन हमारी आप तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक आई है। तो आपने अगर वो दिया तो हमारे यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध होंगे और किसानों को बहुत बड़ी मदद होगी। सर आदिवासी क्षेत्र के लिए एकलव्य स्कूल देकर 38,000 नई भर्तियां जो टीचर्स की करेंगे, मुझे लगता है आदिवासी क्षेत्रों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आने वाले समय में अगर ये टीचर्स और इतनी भर्ती अगर वहां पे करेंगे रूरल एरिया में, तो हमारे आदिवासी भाई बहन, बच्चे जो उनके हैं, वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। सर बिहार से मेरे भाई ने एक बहुत अच्छा, बहुत सर एक लास्ट मिनट, सुबह से यहीं बैठे हैं सर, अकेले हैं तो एक मिनट करके मांग के आगे जा रहे हैं। तो बिहार से मेरे भाई का, मैं बहुत सीनियर है, उन्होंने बोलते बोलते पूरे हाउस में जो जोरों शोरों से बोला कि क्या किया दलितों के साथ, क्या किया पिछड़ों के साथ। मुझे लगता है घर जिनको आवश्यकता है वो दलित और पिछड़े और गरीब लोगों के लिए घर है। अगर हेल्थ व्यवस्था कोई कर रहा है तो देश के प्राइम मिनिस्टर जी उनके लिए कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं तो इस गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर मनरेगा के अंतर्गत कोई काम करता है तो वो गरीब करता है। सर लास्ट 1 मिनट सर, एक लास्ट मिनट, 1 मिनट सर, सर लास्ट 1 मिनट, आई जस्ट टेक 1 मिनट सर। लास्ट वाक्य, अंतिम वाक्य बोलिए, बस बैठिए फिर। सर किसान भाइयों के लिए हमने पिछली बार प्राइम मिनिस्टर जी के जन्मदिन पर जब सत्र हमारा शुरू था, तब मैंने कहा था 6,000 जो हमारे किसानों को मिलता है वर्षाना, उसको बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया जाए। तो मैं विनती करूंगी कि नेक्स्ट बजट में उनको ये दिया जाए। सर मेरा सपोर्ट तो ले लीजिए सर, ये यूनियन बजट के लिए मैं फुल हार्टेड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी को फुल दिल से सपोर्ट करते हैं। Budget speech, I heard her with rapt attention, and I was almost tempted. अभी 8 बज गए हैं, कुछ माननीय सदस्यों की फ्लाइट्स हैं, वो बोलना चाहते हैं आज ही, तो 8:30 तक समय बढ़ाते हैं, सदन की सहमति हो तो ठीक है।
जी वार्दुली। Sir, on the 1st of February, when Honorable Finance Minister was giving her budget speech, I heard her with rapt attention. And I was almost tempted to nod my head with approval that, she was mentioning about no apparent back-breaking new tax proposals. She was saying about widening of the tax concessions for the salaried and middle-class people. She also mentioned about increased allocation for capital investment and also gave a thrust on green initiatives and energy transition. But on a closer scrutiny, sir, actually we found that there were a lot of contradictions in the budget proposals. As much as that I would like to say in Assamese that pise khun nohoy khunali samokor ek abaron hai. All that glitters is not exactly gold. Actually, the beneath of the veneer of the glitters of a self-trumpeted Amrit Kal, India is menacingly poised to become the most unequal country in the world. Sir, the character of the economic management and the state of economy reflect an aura of Rahu Kal. It's not the Amrit Kal. We all know that Rahu gobbles up everything. And in this current state of economy in India today, the Rahu Kal is gobbling up the poorest of the poor, the small traders, the small businessmen, the salaried people, the middle class people. So this is a lot of contradictions in the budget, and I would like to say, and I would like to speak out, I would like to quote Article 39C of our Constitution, which says, the state shall particularly direct its policy towards securing the operation of the economic system that does not result in concentration of wealth in few hands and means of production to the common detriment. Sir, that was the directive principles of state policy in our Constitution. Sir, the crore-potis of this country today are controlling 55% of country's wealth today. The top 10% of the 140 crore Indians hold 78% of the total national wealth and 75% wealth generated after 2016 went to the richest 1% of the Indian population. And on the other hand, the number of hungry Indians has gone up from 19 crores to 35 crores in last 6 years. And this figure we have got from World Inequality Report. So that is the contradiction of the budget. India's tax system is making the lives of the poor people more difficult. The salaried and the middle class people are being exploited and they are having a tough time. On the other hand, the concessions of the tax cuts to the rich, the foregone revenue by the government in 2019 to 2022 in the form of tax concessions and waivers to the corporates was more than 1.2 lakh crores rupees. And as you can compute that which fund can fund Manrega for 1.6 years. So this is the contradiction. And today, in this India, today, ultimately the rising of poverty and the rising of very affluent elite, such as we all know, the rich are getting richer, the poor are getting poorer. We can have the Bloomberg billionaires indexes indicated. I can give you one example. Take the case of Mr. Gautam Adani. Sir, madam, before 2014, his position was 609th. But probably a booster rocket has been installed at his back that his upward mobility went up like a supersonic speed and he attained position 2 as the most wealthy person in the globe today in 2022. And this is the irony of present state of economy. So, madam, India now among
the most unequal countries in the world today. In this backdrop, like this, the finance minister should have taken measures and very clearly spell out measures to reduce the gap of the poor and the rich, which has not been done. That is why I'm worried today. I'm worried as a rational thinker that on the one hand, there are some glitters in the budget, but on the other hand, there are a lot of lacuna. I'm worried because there is a shrinkage of public spending. Madam, the data from 2019 to 2020-24, the social sector expenditure, as this budget spelled out, share of a total expenditure has been lower than 20%. So this is quite alarming. We all know, we don't have to be a rocket scientist to know that when you put money in the pockets of the downtrodden people, the poorest of the poor people who actually live and stay in the bottom stratas of the pyramid, they are the people, when they get money, that our economy is rejuvenated. The top 1%, no matter how much money they spend, the economy is not rejuvenated. But at a situation like this, when we need the economy to be rejuvenated and economic condition and the economic activities to be generated, the poorest of the poor people are being deprived from the social sector. Thank you. Please conclude. Thank you. Honorable C. Thomas Ji. Madam, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the general discussion on the union budget. I oppose the budget proposals for the following reasons. Madam, all of us in this House and millions across the country had expected the Honorable Finance Minister to give a healing touch to the ailing Indian economy. This could have been done by increasing the public spending so as to provide social security net to the poorest of poor in this time of distress. But to my sheer disappointment, the government focused more on fiscal consolidation. Madam, poverty alleviation programs have been given less importance in this budget. The glaring example for this is from Manrega. The allocation has been cut down to 60,000 crore from the previous year's 73,000 crores. The total allocation for National Social Assistance Scheme, Anganwadis, the National Livelihood Mission and the Nutrition Program has stagnated at less than 60,000 crore rupees. As a ratio to GDP, the allocation for the above anti-poverty programs has declined from 0.79% in 22-23 to 0.53%. The other two major programs are the drinking water and housing programs. With an overall allocation of 1.5 lakh crore and an increase of 13% only from the revised estimate of 22-23, it is still below the budget estimate of 21-22. So, Madam, here I humbly remind the Honorable Prime Minister's calling Manrega the living monument of failure. Only it had served as migrant workers' cushion during COVID pandemic. Moreover, the budget cuts will drive women to periphery of Manrega's interest. Madam, the budget fails to address measures to check inflation and generation of employment. These are the need of the hour. Madam, the allocation for agriculture and allied activities, including PM Kisan, is 1.4 lakh crore, lower than the budget estimate of 22-23. The food subsidy has been cut down by 31% and the fertilizer subsidy has been over 22% cut down. The allocation for food procurement and market intervention has been reduced from 72,000 crores to 60,000 crores. Here I wish to emphasize the discriminatory farm policies of the government. The rubber producers in Kerala do not get adequate price for their produce
vis-a-vis the cost of production. Several times in the past, I had raised the issue in this house, Madam, but the agriculture, as per the Swaminathan Commission report, the farmers should get at least 150% of the cost of production to make farming feasible. The cost of production per kg of rubber is 172 kilo per kilo. However, if that is to be taken, according to Swaminathan Commission report, the rubber producers, the farmers should get at least 258 rupees per kg. I urge upon the government, Madam, one more point only. I urge upon the government to fix a minimum of 250 rupees per kg, and as at present the farmers are getting only 130 rupees per kg. Sir, Madam, in the budget, the Finance Minister has raised the import duty of compounded rubber from 10% to 25%, bringing parity with that of natural rubber. However, when we go deep into the proposal, it can be observed that this is not beneficial to the rubber growers. The tire manufacturers import compounded rubber with the composition of carbon black, silica and natural rubber. During last year, a total of around 1.02 lakh tons compounded rubber was imported. Out of this, almost 60% was imported from ASEAN countries, which have free trade agreement with the India, and duty will be only 0 to 5%. Hence, this hike of duty to 25% will not be applicable to them. Madam, only one more point. See, the only solution to save the rubber growers from the present predicament is for the government to take steps to renegotiate or revisit the free trade agreements, FTAs, by which the bound rate can be raised to 40% instead of the present 25%. One second, only one sentence. This is possible as bound rate of coffee, tea and is fixed at 100%, and the renegotiation of FTA is due as 10 years have elapsed since the original date of agreement. Thank you, Madam. Thank you. மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த அரசு ஏழை எளிய மக்களுக்கு எதிரான அரசு என்பதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை உள்ளது. இது விளிம்புநிலை மக்களுக்கு விரோதமான அரசு, குறிப்பாக தலித் விரோத அரசு, முஸ்லிம் விரோத அரசு, கிறிஸ்தவ விரோத அரசு என்பதை நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதிலிருந்தே அறிய முடிகிறது. எளிய மக்கள், உழைக்கிற மக்கள் அன்றாடம் வேலைவாய்ப்பை பெற வேண்டும், அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் மன்ரேகா திட்டம். அந்த திட்டத்திற்கு இந்த ஆண்டு நிதியாண்டு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற நிதி மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு 80,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு இந்த ஆண்டு 60,000 கோடி என்று குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் வருடத்திற்கு 10 நாட்கள் கூட ஒரு குடும்பத்திற்கு வேலை வாய்ப்பை அளிக்க முடியாது. ஆக எளிய மக்களை மேலும் மேலும் சுரண்டுவதிலே, அவர்களை ஒடுக்குவதிலே இந்த அரசு குறியாக இருக்கிறது என்பதை இந்த மன்ரேகா திட்டத்திற்கு நிதியை குறைத்திருப்பதன் மூலம் உணர முடிகிறது. எனவே இந்த அரசு எளிய மக்களுக்கு விரோதமான அரசு என்று நான் குற்றம் சாட்ட விரும்புகிறேன். அதே போல தலித் மக்களுக்கு கடந்த ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து இந்த ஆண்டு கூடுதலாக நிதியை ஒதுக்கவில்லை, அலட்சியப்படுத்தி இருக்கிறது. தலித்துகளின் நலன்களில் அக்கறை செலுத்தவில்லை, பொருட்படுத்தவில்லை என்பதை இந்த நிதிநிலை அறிக்கை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது. அதே போல சிறுபான்மையினர் நலத்துறைக்கு கடந்த ஆண்டு 5,20 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஆண்டு 3,097 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கியுள்ளனர். இதன் மூலம் ஏறத்தாழ 2,000 கோடி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளிட்ட சிறுபான்மையினரின் நலத்தை எந்த அளவுக்கு இந்த அரசு அலட்சியமாக பார்க்கிறது என்பதை இதன் மூலம் உணர முடிகிறது. முதல் வகுப்பிலிருந்து 10ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ப்ரீ மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் முற்றாக ஏறத்தாழ 1,000 கோடி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
பள்ளி மாணவர்களின் அடிவயிற்றிலே கை வைக்கக்கூடிய ஒரு அரசாக இந்த அரசு இருக்கிறது. முஸ்லிம் விரோத அரசு என்பதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது. சிறுபான்மையினருக்கான கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கென்று கடந்த ஆண்டு 1650 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஆண்டு வெறும் 600 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏறத்தாழ 1000 கோடியை இந்த ஆண்டு குறைத்திருப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை கூட செய்யக்கூடாது என்று சிறுபான்மை மக்களை, குறிப்பாக முஸ்லிம்களை ஓரம் கட்டுகிற முயற்சியில் இந்த அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது. மௌலானா ஆசாத் தேசிய ஃபெலோஷிப் திட்டம் முற்றாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆராய்ச்சி மாணவர்களாக இஸ்லாமிய சமூகத்தில் மாணவர்கள் கல்வி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை முற்றாக ஒழித்திருக்கிறது. அதே போல முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான அரசாக இருப்பதாக மட்டுமின்றி கிறிஸ்தவர்களுக்கு, குறிப்பாக தலித் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராகவும் இந்த அரசு தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. வடகிழக்கு மாகாணங்களில் கிறிஸ்தவர்கள் குறிவைத்து தாக்கப்படுகிறார்கள். எப்படி இஸ்லாமியர்களை கும்பல் கும்பலாக தாக்கி அவர்கள் மதமாற்றம் செய்கிறார்கள் என்று வன்முறை வெறியாட்டம் நடத்துகிறார்களோ அதை போல வடகிழக்கு மாகாணங்களிலும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படுகிறது. இப்போது KG பாலகிருஷ்ணன் அவர்களின் தலைமையிலே ஒரு குழுவை நியமித்திருக்கிறது. இந்த குழு வேண்டுமென்றே காலம் தாழ்த்தும் நோக்கத்தோடு நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிய வருகிறது. குடியரசுத் தலைவர் ஆணை 1950 இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் மற்றும் முஸ்லிம் போன்ற மதம் மாறிய மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தருவதற்கு தடையாக இருக்கிறது. எனவே அந்த பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டர் 1950 அதை நீக்கம் செய்ய வேண்டும். அவர்களை ஷெட்யூல் காஸ்ட் பட்டியலில் இணைத்து அவர்களுக்குரிய இடஒதுக்கீட்டை வழங்குவதற்கு அரசு ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒருபுறம் சனாதனமயமாதல், இன்னொரு புறம் கார்ப்பரேட் மயமாதல் என்பதே இந்த அரசின் கொள்கையாக இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதானியை விசாரிக்க வேண்டும், அதானியின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும், அதானி தன்னுடைய நண்பர் இல்லை என்று பிரதமர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Honorable Simranjit Singh Manji. Thank you, Madam Chairperson. As minorities, we are not consulted in the making of or drafting of the budget. So I can't speak professionally about it because we are never consulted. The other thing is that the Shromani Gurdwara Prabandhak Committee is the mini parliament of the Sikhs. Elections to that have not been held for the last 12 years. And it is the responsibility of the Union Home Minister to hold these elections. Then, Madam Chairperson, is the question of the Sikh prisoners who have been political prisoners who've been languishing in jails for the last 32 years, and they have not been freed, though Bibi Bano's rapists and her relatives' murderers were set free on 15th of August, which is the Independence Day. The other thing is that two Sikh leaders, Deep Singh Sidhu Moosewal, and two Russian dissidents in Odisha, they have all been killed under mysterious circumstances, and we want a top investigation of these murders. Then, cases of sacrilege of the Sikh religion have been committed since 2015, and the culprits have not been arrested. The MSP in agriculture, the Swaminathan report in agriculture, Narega, fertilizer, subsidy, we want these on priority. In the defense sector, the flying crafts, the squadrons of the Air Force have depleted to a very considerable content. And the Jaguar aircraft, the Mirage aircraft, and the MiG series are going to be phased out. So we cannot fight a two-front war. And then 4-year tenure for a soldier is insufficient. This government, which have come into being post-1947,
have no experience in military matters, and we are afraid that the defense is getting very, very weak. Madam, then there are no judges, 6 judges in the Supreme Court or Chief Justices in the High Courts. And in the Union Territories and in the Parliament, we see no Sikh officer or Sikh person, which is very, very sad. Then, in foreign affairs, the Indian government has not criticized the Russian occupations in Ukraine. In 2014, Russia occupied Crimea. Now, if India does not criticize these occupations in Ukraine, then it would mean that it has accepted the Chinese aggression in Ladakh and Nifa. These are some of the points. And 60,000 farmers were divested of their legitimate lands, farmlands, in Gujarat in 2013. We wish the Prime Minister would do something about them and rehabilitate them. And one good word for the Prime Minister, he is doing very well for the poor people. But his party men are putting on too much weight on their tummies. I wonder whether they are working for the poor or fattening themselves on the money the Prime Minister is giving to the poor. बहुत मोटे हो रहे हो. Thank you, Madam. Honorable Amar Singh ji. धन्यवाद मैडम चेयरमैन, मेरे को मौका देने के लिए। ये जो बजट आया, हम लोग मन से चाहते थे कि इसकी सपोर्ट करें, लेकिन जैसे जैसे उसको पढ़ते गए तो कई चीजें सामने आई। एक तो ये सामने आया कि बेरोजगारी, गरीबी, इनइक्वालिटी, प्राइस राइज को सारे बजट में कहीं मेंशन्ड ही नहीं है, वर्ड्स ही गायब है। तो मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो तो महंगाई की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इस तरह की समस्या है, पर वो मेंशन नहीं है। एनीवे, वो तो जो सरकार बनाती है बजट, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उनकी मर्जी होती है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कह रहा हूं कि मेंशन नहीं है। अब जब आते हैं तो एक बहुत बड़ी घोषणा हुई, अच्छी घोषणा हुई, क्योंकि मिडिल क्लासेस को 5 से 7 लाख में इनकम टैक्स रिलीफ मिला। लेकिन उस वक्त समझ नहीं आई, उसके साथ बहुत सारी शर्तें लगी हुई हैं कि अब न्यू टैक्स रिजीम जिसमें एग्जेम्पशंस खत्म हो जाएंगी। अच्छा, उसके बराबर जब बजट पड़ा तो जो रिचेस्ट लोग हैं, जो 5 करोड़ से ऊपर वाली इनकम है, उनका सरचार्ज कम करके उनको टैक्स रिलीफ दे दिया। बाकी कोई टैक्स कम नहीं किया, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं कम किया, कोई जीएसटी कम नहीं किया। पेट्रोल डीजल पे इतना सेस लगता है जिसकी वजह से इतनी महंगाई है, वो कम नहीं किया। तो जब बजट पड़ा तो अफसोस हुआ कि भाई इसमें तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। तो महंगाई को चोट करने के लिए ये सारी चीजें छोड़ दी गई। अच्छा, फिर डिपार्टमेंट्स का जब बजट देखा तो सोशल सेक्टर के सारे डिपार्टमेंट्स का या तो बजट पिछले साल जितना ही, या उससे कम कर दिया। तो कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कैसे गरीबी कम होगी? अब कहने को अपन कुछ भी कह सकते हैं, एग्रीकल्चर और मनरेगा, पीएम किसान का बजट कम है पिछले साल से, पीएम फसल बीमा योजना का कम है, फूड सब्सिडी कम कर दी, फर्टिलाइजर सब्सिडी कम कर दी, हेल्थ का बजट कम कर दिया, एजुकेशन का कम कर दिया, लेबर का। मेरा मतलब कि ये सारे बजट कम कर दिए। एनीवे, ऊपर जब अपन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट देखते, वो कह रहे कि आपका 25% यूथ अनएम्प्लॉयड है। तो फिर हमको करना क्या? हम बेनती करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बनाते वक्त तक कोई चीज रह गई है टैक्स रिलीफ देने की, कोई दूसरी चीज, तो उसको करेक्ट किया जाए। और ये जो इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही है कि अपने जो रिचेस्ट 1% है, 60% नेशन की वेल्थ उनके पास है, बॉटम 50% के पास,
3% है, उसकी करेक्शन की अपन को जरूरत है। वो कौन सी पॉलिसी लेके आनी है मैडम, फाइनेंस मिनिस्टर जब जवाब देना होगा तब दे दें। अब देखिए मैडम, पंजाब की बात मैं करनी चाहता हूं और स्टेट्स की। स्टेट्स 60 to 65% जो सोशल सेक्टर का खर्चा है वो करती हैं स्टेट गवर्नमेंट। हम उनको रिसोर्सेज सेंटर से सिर्फ 30 या 32% देते हैं। फाइनेंस कमीशन ने कहा 42% दे, वो हम दे नहीं रहे, और सेंटर 65% सारे टैक्स लिए जा रहा। तो ये इम्बैलेंस कहीं ना कहीं तो ठीक करना पड़ेगा। ये मेरी बेनती है कि जवाब देते वक्त देख लिया जाए। अब पंजाब जो है मैडम, वो नहीं मैडम, पंजाब की बात करनी है और कंस्टिट्यूंसी की। मैं बहुत कम बोलने वाला आदमी हूं। पंजाब 35 to 40% सेंट्रल पूल जो फूड का उसको कंट्रीब्यूट करता है। हमारी जमीन खराब हो गई, हमारा अंडरग्राउंड वाटर खराब हो गया, हमारे पाकिस्तान से लगे हुए हैं वो ड्रोन भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं, वेपन भेज रहे हैं। हमको तो ज्यादा पैसे चाहिए पंजाब को, और पंजाब का जो रूरल डेवलपमेंट फंड है वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट रोक के बैठी है। हम स्पेशल पैकेज मांगते हैं, वो नहीं देते हैं। तो जो हम कहते हैं पंजाब के लिए, पंजाब को अब कह रहे हैं कि अपना जो कोयला है वो पहले श्रीलंका में ले जाके और फिर उधर से लेके आओ, 3 गुना हमें ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा। तो पंजाब तो पहले से गरीब हो जाएगा। और लास्ट मैडम, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी, हर आदमी को कंस्टिट्यूंसी का तो बोलना ही पड़ता है। मैं शुरू से कहता आया हूं कि मैं श्री फतेहगढ़ साहब, जहां छोटे साहिबजादे हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद किया गया था, उस जगह से आता हूं। हम बार बार कहते हैं कि उसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि सारी दुनिया का सिख वहां आना चाहता है। वहां सारा कुछ वर्ल्ड क्लास दीजिए, उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में लेके आइए। ये मैं बार बार कहता हूं। जो मेरे यहाँ MSME है, मंडी गोविंदगढ़, खन्ना, दोराहा, सानेवाल, उसको मैंने कई बार मिनिस्टरों को भी मिला हूं कि उसको फैसिलिटीज दी जाए। छोटी मोटी रेल के इश्यूज है, वो मैं बार बार कहता हूं। इस गवर्नमेंट से मेरा यही निवेदन है कि अब इस बजट के बाद ये सारे इश्यूज का समाधान कर दें, क्योंकि ये लास्ट बजट है, पूर्ण लास्ट बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Srimati Geeta Vishwanath ji. 2 minutes. Thank you so much, man, for giving me this opportunity. చాలా సంతోషం. మేడం నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. చాలా విషయాలు నా ముందు మాట్లాడిన మా పార్టీ నుంచి 2 సభ్యులు మాట్లాడారు. చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. నేను ఓన్లీ 2-3 పాయింట్స్ చెప్పడానికి మీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ. ముఖ్యంగా మాకు ప్రత్యేక హోదా గురించి తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుతున్నాం. ప్రధానమంత్రి గారిని, అదేవిధంగా నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఆర్థిక మంత్రి గారిని మేము కోరడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు మా ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా సంక్షేమ పథకాల విషయంలో గాని, రాష్ట్ర అభివృద్ధి విషయంలో గాని చాలా పట్టుదలగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. కానీ ప్రభుత్వం యొక్క సపోర్ట్ మాత్రం చాలా అవసరం ఉంది. నేను ప్రధానమంత్రి గారిని, మాన్య ప్రధానమంత్రి నేను కోరుతా ఉన్నాను, తప్పనిసరిగా మీరు ప్రత్యేక హోదా తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలి. ఇది అమృత బడ్జెట్ అని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈ అమృతాన్ని కొంచెం ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఇస్తే మేము పూర్తిగా డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ విధంగా తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ని బలపరిచే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి, ప్రధానమంత్రి గారు ఆలోచించాలని కోరుతూ, మరి బడ్జెట్ కి సంబంధించిన విషయంలో సగటు పన్ను కట్టే భారతీయుల ఆశలు పన్ను విధానంలో, పన్ను మినహాయింపు విధానంలో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టుగా బయట మరి వారు చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా 7 లక్షలకి పెంచారు అనగానే అందరూ సంతోషపడ్డారు. కానీ 7 లక్షలు పెంచిన దాని వివరాలు తీసుకుని వెళ్తే మరి ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఈ కొత్త పన్ను విధానంలో సెక్షన్ 80C, సెక్షన్ 80D, సెక్షన్ 24C కింద మినహాయింపులు లేకపోవడం పూర్తిగా నిరాశపరిచింది. వాళ్ళని మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వీళ్ళందరూ. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మరి గత పన్ను విధానం అంటే మరి ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకోవడానికి గాని, గృహ నిర్మాణానికి లోన్స్ తీసుకోవడానికి గాని, అదేవిధంగా LIC ప్రీమియం తీసుకోవడానికి గాని, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవడానికి గాని చాలా మినహాయింపులు ఉండేవి. దాని ద్వారా గృహ నిర్మాణానికి ఎక్కువ ప్రోత్సాహం వచ్చేది. ఆ ప్రోత్సాహం వల్ల దాని ద్వారా తద్వారా అనేక కార్మికులు గాని, అనేక వృత్తుల వారు గాని దీని మీద ఆధారపడి జీవించే వారందరికీ కూడా చాలా బాగుండేది. మరి ఈ మినహాయింపుల్ని తప్పనిసరిగా
మేడం ఓన్లీ 1 మినిట్ క్లోజ్ చేసిన ఈ మినహాయింపుల్ని తప్పనిసరిగా మరి రేపు మీరు తగ్గించాలని పూర్వపు విధానంలో మరి ఇదే విధంగా మరి వారు పూర్తిగా సేవింగ్ కి అలవాటు పడే విధంగా చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి తప్పనిసరిగా మరి సగటు మనిషికి భారతీయులకి అవకాశం కల్పించాలని కోరుతున్నాను. ఒక్కటే ఒక విషయం మేడం, నాకు ఆర్థిక మంత్రి గారిని సభ ద్వారా నిర్మలా సీతారామన్ గారి హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక మహిళగా కూడా గర్వపడుతున్నాం. 4వ సారి భారతదేశం ఇంత పెద్ద భారతదేశానికి మరి గాంధీ మహాత్మను చెప్పడం జరిగింది, మగవాళ్ళు చదువుకుంటే వాళ్ళు ఒక్కలే చదువుకున్నట్టు, ఆడవాళ్ళు చదువుకుంటే మొత్తం ఇల్లంతా చదువుకున్నట్టు అని. ఈ రోజు భారతదేశం మొత్తానికి ఒక ఆర్థిక మంత్రి మహిళ కావడం మేము గర్వపడుతున్నాం. అదేవిధంగా IIFT ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ మరి ఒకటి ఢిల్లీలో, ఒకటి కలకట్టాలో ఉంది, మూడవది కాకినాడకి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది మేడం గారు. మరి అంతేకాకుండా వారే స్వయంగా వచ్చి మరి దానికి నిధి ప్రారంభం చేసి నిధులు కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది. అయితే 50-50 కేంద్ర ప్రభుత్వం 50, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 50 ఉన్నారు. మాకున్న పరిస్థితుల్లో 100% నిధులు మరి కేంద్రం భరించే విధంగా చేయాలని కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. The House stands adjourned to meet tomorrow, the 10th of February 2023 at 11 a.m. करोड़ दिया गया है, रूरल कनेक्टिविटी को 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र में 585 करोड़ रुपीस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्रोजेक्ट के लिए 786 करोड़ सर, स्टेट को हेल्प करने के लिए 1,30,000 करोड़ का एक बैलेंस अमाउंट बनाया. जितनी स्टेट मांगेगी उसके अकॉर्डिंगली राज्य सरकार को केंद्र सरकार देगी. उसके लिए मैं केंद्र सरकार का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं सर. कौन कहता नहीं मत. क्वेश्चन नंबर 101 श्री कलानिधि वीरास्वामी. माननीय मंत्री जी. Statement is laid on the table of the House. Honorable member. Sir, the country has a problem where there is unemployment and huge amount of income disparities, sir. We talk about below poverty line families where the total income of a family is only around 30,000 rupees annually. And when we are talking about this, we are selling gas cylinders for 1,000 rupees, and even if you consider the 200 rupees subsidy which is being given, it's about 9,600 rupees, sir. For a family which is earning 30,000 rupees, we talk about the below poverty line families, you are claiming that we are giving gas for so many crores of people. I would like to know, like income tax, you have slabs where you say that up to 7 lakhs, we are not going to charge you any income tax. Honorable member, on sir, question. Sir, question is coming, sir. So I am asking, can you consider giving subsidy for LPG at a much better rate for these BPL families, where it can be given at probably 200 rupees per cylinder for the BPL families, and maybe at a higher rate for higher income Okay, groups. Mantri ji. Thank you. Honorable Speaker, sir, I want to, with your permission, draw the attention of the honorable member to the fact that it was precisely because the capacity to pay for families which are termed as BPL or below poverty line that the Ujjwala scheme was introduced. The Ujjwala scheme, sir, when it was introduced, initially it had 8 crore connections, and these 8 crore connections were provided a good 7 or 8 months before the time. We reissued another 1 crore 60 lakh cylinders under the Ujjwala scheme, where the lady member of the household is presented free of cost a cooking top and a cylinder. Now, during the course of the pandemic, sir, when economic activity had come to a grinding halt at one stage, and then it was slow, and the families who are in the below poverty line categorization were the most severely affected, the government gave 3
cylinders free of cost to those BPL families. Sir, insofar as prices are concerned, I should like to submit through you, sir, to the House, that we import 60% or thereabouts, perhaps even more sometimes, of our requirements. We have to import them. The import price, sir, is linked to what is called the Saudi CP or the Saudi contract price. And the interesting thing is that the Saudi contract price during the last 2 years or so, if we have to use this as a reference period, sir, it has gone up from 250 per metric tons per $250 per metric ton to something like $900 per metric ton. Today also I think it is around $751 per metric ton. Now if your import bill is determined by the international price, then it is very interesting to analyze what the government did. Because the government is sensitive to the requirements, sir, of the consuming population, particularly, as the honorable member says, to the most vulnerable, we did not allow the cost of domestic LPG to increase. Saudi contract price, sir, went up 333%, and yet the price increased was very small for the domestic thing. In May 2022, precisely as the honorable member states, we introduced a 200... माननीय मंत्री जी संक्षिप्त में. Sir, I would like to complete this. आपको इजाजत नहीं दी, आप इनका जवाब मत दिया करें. एक बात सुन लें, प्लीज बैठें, प्लीज बैठे मंत्री. कोई भी माननीय मंत्रीगण नीचे बैठे कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो आप उसका जवाब मत दिया करें. ये लाइन आपको कही दे दिया, लेकिन आप उन पर बहस करना चाहते हैं. उनसे तो सर बहस करना, मैं कौन होता हूँ बहस से, इतने विद्वान है, लेकिन आप चर्चा मत करो. हैं, तो मैं कौन होता हूँ? मैं जिनको अलाउ करूं उनका जवाब दो आप. Sir, I want to conclude this, that at the end of the day, sir, at a time when the Honorable Prime Minister was providing 3 free meals, dry rations, to a very large segment of our population, even at that stage, we did not allow the price of domestic LPG to go up. Now, at the end of the day, that 200 rupees subsidy, what is a subsidy? It is taxpayers' money. And as the honorable member says, the ones who are most vulnerable, we are always ready. Left to this House and the honorable Prime Minister, it would be ideal if the international or the Saudi contract price could come down from 750 further down. It would enable domestic LPG to be sold at even more economical rates. So I wish to submit this in response to what the honorable MP has said, and I always stand ready to be able to, I would also be able to provide further details on this. Thank you, sir. Sir, I was only trying to reiterate that 33% of a family's income goes towards gas is probably not acceptable, and how it can be alleviated. My next question is, what is the status of your investment in Mozambique, sir, where there is a huge project which is taken by Total, and there are some unrests over there, and if that happens, probably gas can be made a lot more cheaper in India. So I would like to know what is the status of the project which is happening in Mozambique. Sir, I want to thank the honorable member. It is my understanding that at least the context that I have set out and the international situation. Sir, as part of the many initiatives which have been taken during the last several